And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking pretty tired, Jill. She's stuck, Bill, and that deadline is looming. It looms for us all, Jill. Wait a minute. She just pulled up Grammarly. That is a smart move. Hi, welcome to my channel. This is a continuation video of branch account. Okay, here we are going to see branch account under stock and data system. Okay, I have already uploaded 2 separate videos for data system. In that, we have discussed about okay, here we are going to see branch account under stock and data system. See, in the previous video, you can find out the profit or loss at the branch. Okay, for the same purpose, even you can prepare branch account under this method, that is stock and data system. See, under this method, the head office will keep separate accounts relating to various types of transactions at the branch instead of one branch account. Okay, these are the important ledger need to be prepared in order to find out the at the branch instead of one branch account. Okay, the separate accounts relating to various types of transactions at the branch instead of one branch account. Okay, these are the important ledger need to be prepared in order to find out the branch profit or loss. Okay, let me explain each and every account separately. The first one, branch stock account. So here you have to record all the transactions related to stock. Okay, I'll explain each and every one along with the format. The next one is branch debtors account. So here you need to record all the transactions related to debtors. The next one is branch expenses account. So here you have to record only expenses which is related to particular branch. Okay, to find out the total expense of branch. And the next one is branch adjustment account. So this particular account is required only when the goods are sent to branch at invoice price. Okay, generally the head office will send goods to branch in 2 different ways. One is at cost price or at invoice price. If the head office will send goods to branch at cost price, means in that case you need not prepare branch adjustment account. So branch adjustment account is required only when the head office will send goods to branch at invoice price. In that case only you need to prepare branch adjustment account. I'll explain along with the problem. And the next one is branch profit and loss account. So after preparing all the above accounts, finally you can prepare branch profit and loss account to find out the profit or loss at the branch. The next one is goods sent to branch account. So this account is required to find out the net value of goods which is sent to branch. Okay, the balancing figure will be purchase, total purchase. That will be transferred to profit or loss account or trading account according to the transaction. These are the various accounts which is required under stock and data system. Now let me explain each and everything along with the format. Look at the format. The first one is branch stock account. So branch stock account is required to find out surplus in stock or shortage in stock. In sometimes they will provide opening stock. In that case, the balancing figure will be either closing stock or shortage. Okay, if you find any balancing figure under debit side, it will be treated as surplus in stock. So here in branch stock account, you need to record certain things under debit side and certain transactions under credit side. The first one is you have to start with opening stock if any. Okay, debit side you have to start with the opening stock and any goods sent to branch during the year, that will be entered debit side. The next one is goods returned by debtors. Okay, so after selling goods to customer, that is debtors, if they find any defective in the particular product, they'll return the goods to branch. Okay, it is an inflow of goods. The first one you have to start with opening stock and then enter any goods sent to branch, that is goods received from head office. This one is goods received from debtors, that is goods returned by debtors. Okay, and credit side you have to record outflow of goods. The outflow of goods can be, these are the reason. The first one is cash sales. When you sell goods to outside, it can be cash sales or credit sales, whatever may be goods going out. Okay, so by cash sales and by credit sales, both will be entered credit side of branch stock account. So all these items of inflow of stock, all these items are outflow of stock. The first one is cash sales, next one credit sales, and any loss of goods due to some reason, if there is any loss, that will be entered in the credit side. And next one, goods returned to head office. Okay, this one is goods returned by debtors. It is an inflow for the branch, and this one is outflow because they are sending goods, so returning goods to head office. And finally, closing stock. And after entering all these things, you will be getting balancing figure either debit side or credit side. If you get any balancing figure under debit side, it will be treated as surplus. If you get any balancing figure under credit side, this will be treated as shortage. Okay, so sometimes if they provide all the other items without giving any closing stock, in that case the balancing figure will be treated as closing stock. Okay, this is the format to prepare branch stock account to find out either surplus or shortage. Now let us see the second one. The next one is branch debtors account. See, this account is prepared to record all the transactions which is relating to branch debtors. Okay, in order to find out the closing balance of debtors or credit sales. Okay, so here you have to start with opening debtors, that is to balance brought down. This is the opening balance of debtors. Okay, and during the year if there is any credit sales, that will be recorded debit side. So these are the 2 items need to be recorded under branch debtors account debit side. And now look at the credit side. The first one is any cash received from debtors, that will be recorded under credit side. And then any allowances to debtors, that will be entered under credit side. The next one is any discount allowed to debtors, that will be entered credit side. And if there is any bad debts means any irrecoverable amount from debtors, that will be entered credit side of debtors account. And the next one is returns. Okay, if there is any goods returned by debtors, that will be entered under credit side of debtors account. All these items need to be recorded under credit side of branch debtors account. Finally, the balancing figure will be closing balance, that is by balance carried on. So here you are going to find out either credit sales or closing debtors. So these are the 2 possibilities in order to prepare the branch debtors account. The next one is branch expense account. So this account is required in order to disclose, okay, in order to find out the total expense at the branch. Okay, the total expense will be transferred to branch profit and loss account. The expenses can be classified into 2 categories. The first one is these are the expenses which is relevant to debtors, that is bad debts, allowance, discount, etc. So these are
are the expenses related to debtors. So all these items you can take from the debtors account. So you have to mention branch debtors account. These are the expenses related to debtors at branch. So that you have to enter under branch expense account. That will be the first item. The next one is that is the branch expenses. For example, advertisement, salaries, wages, rent and rates, etc. So these are the general expenses related to branch. So all these items need to be entered under debit side of branch expense account as to bank account. Okay, these are the two major expenses. The first one is branch debtors. Okay, expenses account. These are the general expenses related to branch. So all these items need to be entered under debit side of branch expense account as to bank account. Okay, these are the two major expenses. The first one is branch debtors. Okay, expenses related to debtors, and the next one is to bank. That is all the branch expenses. So these expenses paid by the head office. Okay, these are the major categories of branch expenses. Apart from the above, if there is any petty cash balance in the problem, okay, if you find any difference between opening petty cash balance and closing petty cash balance, the difference is called petty expense. For example, opening petty cash 300, closing petty cash 200. What is the difference? 100 rupees. That 100 rupees is called petty expense. That also will include in the branch expense account as to petty expense. Okay, these are the various categories of expense that comes under branch expense. The total expense will be transferred to branch profit and loss account debit side. The next one is branch adjustment account. See, this particular account is required only when the head office send goods to branch at invoice price. Invoice price means selling price. So selling price consists of cost plus profit. That profit you are added, no, that you have to show separately under branch adjustment account. So this account is required only when the head office send goods to branch at invoice price. Okay, I will explain all the calculation along with the problem in the next video. Okay, the first one is a closing stock reserve, and the next one profit element of stock shortages, and the next one value of loss in weight. These are the various items which is related to stock. And the next one under credit side, opening stock reserve, debit side closing stock reserve, and credit side opening stock reserve. And the next one by loading on goods sent to branch, and the next one profit element of stock surplus, and finally you'll be getting either gross profit or gross loss. Okay, both the items either gross profit or gross loss, this will be transferred to profit and loss account. So this particular account I will explain along with the problem in the next video. Okay, now let us see the next one. The next one is branch profit and loss account. So here you are going to record all the items in order to find out the net profit or net loss. Okay, the first one is under debit side. The first one you have to record branch expense. Okay, this amount you can find out from the branch expense account. The next one, cost of goods lost due to shortage. So this you can find out from the other ledger. Separately we have prepared for stock. No, from that account you can find out this value. Okay, and the next one is the final answer will be either net profit or net loss. Now look at the credit side. You have to write first gross profit. This you can find out from the branch adjustment account. You have to enter any gross profit. Okay, that will be entered under credit side of profit and loss account. The next one, by cost of surplus if any. This you can find out from branch stock account. On a debit side you have to enter shortage, and a credit side you have to enter surplus. All these items you can find out from branch stock account. And the next one, by amount recovered from insurance company for any loss of stock. If you recovered any amount from insurance company due to loss of stock, okay, that can be entered under credit side. Finally, you'll be getting either net profit as a balancing figure or net loss. Whatever may be the result, that will be transferred to general profit and loss account. Okay, so this is called branch profit and loss account. So far we have discussed various accounts which comes under stock and data system. The first one branch stock account, next one branch debtors account, next one branch expense account, the next one branch adjustment account, and the next one branch profit and loss account. Okay, with the help of this account you can find out profit or loss at the branch. And the last one is goods sent to branch account. This account is prepared to find out the net value of goods sent to branch. Okay, so here you'll find out the balancing figure. The balance of this account is either transferred to purchase account or trading account. Depends on whether the firm is trading concern or manufacturing concern. So accordingly you can transfer either purchase account. Okay, so here you'll find out the balancing figure. The balance of this account is either transferred to purchase account or trading account. Depends on whether the firm is trading concern or manufacturing concern. So accordingly you can transfer either purchase account or trading account. Now let us see the problem for better understanding. See, under stock and data system there are two types of problem. The first one is when goods are sent to branch at cost price. Okay, and the second one is when goods are sent to branch at invoice price. Invoice price means selling price. So these are the two cases which comes under stock and data system. So in this video we are going to see the problem for the first one, that is when goods are sent to branch at cost price. In the next video we will see the problem for when goods are sent to branch at invoice price. Now let us see the problem for the first one, that is at cost price. Look at the problem for when goods are sent to branch at cost price. Okay, see, the Chennai commercial company invoiced goods to its Madurai branch at cost. The head office paid all the branch expenses from its bank except petty cash expenses which were paid by the branch. From the following details relating to the branch, prepare branch stock account, branch debtors account, branch expenses account, and branch profit and loss account. Now see the information. The first one is opening stock 25,000, opening debtors 40,000, petty cash opening balance 500, goods sent from head office 80,000, goods returned to head office 4,000, cash sales 55,000, advertisement 3,000, cash received from debtors 85,000, closing stock 20,000, allowances to customers 500, discount to customers 3,000, bad debts 1,500, goods returned by customers to branch 2,000, salaries and wages 20,000, rent and rates 4,000, closing debtors 30,000, closing petty cash balance 300, credit sales 82,000. With this information, they ask you to prepare stock account, debtors account, expense account, and profit and loss account. Now let us see the solution along with the format. First, we are going to prepare branch stock account. For that, look at the format. Look at the branch stock account format. Debit side opening stock, credit side closing stock, debit side goods sent to branch, credit side goods returned to head office, and debit side goods returned by debtors. Okay, and credit side
side if there is any loss of goods, as well as you have to enter both the sales, both cash sales and credit sales. So these are the information you have to enter under branch stock account. That is inflow of stock and outflow of stock. Look at the problem. First you have to prepare branch stock account. For that, just take all the information which is relevant to stock. That is opening stock, closing stock, goods sent to branch and goods returned to head office, cash sales and credit sales. So these are the transactions related to stock. Now just see the information. The first one, opening stock. So this you can enter in the branch stock account. And then goods sent from head office. That is goods sent to branch and goods sent from head office. Both are same meaning. So this you can enter under debit side. First you have to start with opening stock and then enter goods sent from head office and then goods returned to head office. This you can enter credit side of branch stock account. Okay, so credit side. So these are the items under debit side and this will be credit side because goods returned to head office. That is outflow of stock. And then cash sales. This is also credit side. And then closing stock. That is under credit side. And then goods returned by customer to branch. Okay, when the customer returned goods to branch, it's an inflow of stock. So this will be entered under debit side of branch stock account. And then credit sales. This is also outflow of stock. This will also enter under credit side of branch stock account. So these are the information relevant to stock account. Now we can easily prepare branch stock account to find out surplus or shortage. Look at the solution. Now we are going to prepare branch stock account. Debit side start with opening stock. So first item, to balance brought down. How much opening stock? Opening stock how much? 25,000. 25,000. See the problem. The next one, goods sent from head office. That is goods sent to branch. How much? 80,000. This is also under debit side. See, next item, to goods sent to branch. How much? 80,000. See the problem. First we'll try to enter all the debit items. So we have entered opening stock and goods received from head office and then goods returned by customer to branch. This is also inflow of stock. This you have to enter debit side. How much? 2,000. In branch stock account debit side, to goods. How much? To the stock account. Now let us see the item under returned to head office. That is, it is an outflow of goods. How much? 4,000. See, under branch stock account credit side, the first one is buy goods. Look at the problem. The next transaction is cash sales. This is also outflow of stock. How much? Look at the problem. The next one is closing stock. This you can enter. So credit side. So this you are going to record under debtors account. Okay. So even you can write this as a branch debtors account because this you are going to record under debtors account. Okay. So how much? 82,000. See the problem. Last you can write closing stock. How much? 20,000. So under branch stock account, credit side last item will be by closing stock. So to balance carry down. So we have started with opening stock. That is to balance brought down. And you have to enter closing stock under credit side of branch stock account as by balance carry down. 20,000. Now we can close the account to find out either surplus or shortage. If you get any balancing figure under debit side, it will be treated as surplus. If you get any balancing figure under credit side, it will be treated as shortage. Okay, now get the total. Here 4,000 plus 55,000 plus 82,000 plus 20,000. Total 1,61,000. Here 25,000 plus 80,000 plus 2,000. So you're going to get the balancing figure under debit side. Now enter the value. First enter highest value. How much? 1,61,000. Okay, enter the same value here also. 1,61,000. So what is the balancing figure here? 54,000. So this is a surplus in stock. Okay, this is a balancing figure and this will be transferred to branch profit and loss account. So this surplus you have to transfer to branch profit and loss account credit side. Okay, see the problem. First we have prepared branch stock account. So now we are going to prepare branch debtors account. So before we prepare this, let us see the format first. See the branch debtors account format. Debit side start with opening balance of debtors and credit side you have to enter closing balance of debtors if any. Okay, and again you have to enter debit side credit sales that already have entered under stock account. No, so you can refer branch stock account within the bracket you can mention credit sales. First you have to start with opening debtor balance and then add credit sales. Then you have to enter all the items under credit side. That is any cash received from debtors, any allowance to debtors, any discount to debtors, any irrecoverable amount, that is bad debts, any returns from debtors, all these items need to be entered under credit side and finally you'll be getting balancing figure as a closing debtor. Okay, now see the problem. Look at the problem. Now we need to prepare branch debtors account. Now you have to take the transactions related to debtors. Okay, look at this. The first one is opening debtors. This you have to enter debit side of debtors account. Okay, and the next one cash received from debtors. So this will be entered under credit side of debtors account. And the next one allowance to customers. This is also credit item. The next one discount to customers. This is also credit item. Then bad debt, that is irrecoverable amount from debtors. So enter under credit side. The next one goods returned by customers to branch. So this is sales return. Okay, this will be entered under credit side. So already we have entered this item under branch stock account under debit side. The same will be entered even in the debtors account under credit side. Okay, how much? 2,000. The next one closing debtors. This will be entered under credit side. And the last one credit sales. So this we have already entered under branch stock account. Again you have to enter this under debtors account under debit side. Okay, so these are the transactions related to debtors. Now you can easily prepare branch debtors account. See branch debtors account. First you have to enter opening debtor debit side and closing debtor credit side and any credit sales that will be entered under debit side and all other informations like cash received from debtors, bad debts, discount allowed to debtors and allowances to debtors. All these items need to be entered under credit side of branch debtors account. Now start with opening balance. That is opening debtors. To balance there is a problem.
See the problem. Opening data is how much? 40 side. Closing balance, that is closing data balance, how much? 30,000. Branch stock account, because already we have entered in the stock account. So within the bracket you can mention credit sales. So to branch stock account. Okay, so within the bracket credit sales. Look at the problem. How much credit sales? 82,000. 82,000. From debtors, but we have closing data yet to receive how much? 30,000. Now you have to record how much cash you have received from debtors and what are the other expenses. Those items need to be entered under credit side. See the problem. Now how much cash you have received from debtors? See here, cash received from debtors 85,000. See under debtors account, credit side, by cash. Okay, now you have to enter all other expenses at branch related to debtors. Okay, now see the problem. So this is the expense, that is allowances to customers 500, and then discount to customers 3,000, bad debts 1,500. Okay, these are the expenses related to debtors that will be entered under credit side of debtors account as a branch expense. Look at the solution. Branch debtors account credit side by branch expense. So these are the expenses related to debtors. Allowance to customers how much? 5,000. So this you are going to enter again under branch expenses account. But this expense purely related to debtors. That alone you have to enter under credit side of branch debtors account as by branch expense related to debtors. Total 500 by that will be entered under credit customers 3,000. Bad debts 1,500. Okay, these are the expenses related to debtors. And then discount to customers 3,000. Bad debts 1,500. Okay, these are the expenses related to debtors that will be entered under credit side of debtors account as a branch expense. Look at the solution. Branch debtors account credit side by branch expense. So these are the expenses related to debtors. Allowance to customers how much? 500 plus discount to customer 3,000 plus bad debts 1,500. Total how much? 5,000. So this you are going to enter again under branch expenses account. But this expense purely related to debtors. That alone you have to enter under credit side of branch debtors account as by branch expense related to debtors. Look at the problem. We have started with opening debtors and we have added credit sales and we have entered how much cash you have received from debtors and we have entered all the expenses which is relevant to debtors account. Now you have to see if there is any returns from debtors that will be entered credit side of debtors account. Check any returns from debtors. Yes. Goods returned by customers. Customers means debtors. That is goods returned by customers to branch. How much? 2,000. Enter this item under credit side. See the solution. So enter goods returned by customer under credit side of debtors account as by branch stock account. Why? Because this we have already entered under stock account. Within the bracket you can mention returns. So how much? 2,000. Now you can get the total. Okay, but in this problem we have started with opening balance and we have entered closing balance. Okay, here there is no balancing figure. Why? Because both the sides we are getting equal balance. 40 plus 82, 1,22,000. 85 plus 5, 90. 90 plus 2, 92. 92 plus 30,000, 1,22,000. So there is no balancing figure. 1,20,000 debtor or cash received from debtors. They will miss any one particular information. But according to our problem, they have given all the informations. That is opening debtor, closing debtors in this problem. Look at the problem. So far we have prepared branch stock account and branch debtors account. Now we have to prepare branch expense account. See the format for branch expense account. Okay, here you have to enter all the expenses related to branch under debit side of branch expense account. So generally, expenses can be classified into three categories. One is debtor related, another one is the branch expense which is directly paid by the head office, and certain expenses are called as petty expense. Okay, for that you have to see opening petty balance and closing petty cash balance. If there is any difference between opening petty cash and closing petty cash, the difference is called petty expense that you can enter under debit side. Okay, all the expenses need to be entered under debit side of branch expense account. Okay, now let us see the solution. Now we are going to prepare branch expenses account. I told you no, there are three types of expenses. The first expense are any expenses related to debtors that you can find out from branch debtors account, and the next one is any expenses directly paid by the head office. So that will be given in the problem. So those expenses can be entered under debit side of branch expenses account, and the last one will be petty expense. Okay, out of petty cash. For that you can see the difference between opening petty cash balance and closing petty cash balance. If there is any difference, that expense called as petty expense. So all the expenses need to be entered under debit side. Okay, under branch expense account. For the first one, refer branch debtors account. Look at the branch debtors account. Already we have entered the expenses related to debtors as by branch expense. Now we have to enter the same value under debit side of branch expense account as branch debtors. So under debit side of branch expense account, first you have to enter to branch debtors account. So how much expenses related to debtors? 500 plus 3,000 plus 1,500. So all these expenses related to debtors. So total 5,000. Now look at the problem for other branch expenses which is paid by head office. Look at the problem. Just find out any other expenses which is directly paid by the head office. Okay. See, advertisement. This is a expense, branch expense which is paid by the head office. This you have to enter debit side of branch expense account. And the next one, salaries and wages. Then rent and rates. That's all. So these are the branch expenses which is paid by head office. So how much advertisement? 3,000, and then salaries and wages 20,000. So 3,000 plus 20,000, 23,000 plus rent and rates 4,000. So total 27,000 paid. So these are the branch expenses which is paid by head office. So under branch expense debit side to bank. So now you have to enter all the expenses, branch expenses. So how much advertisement? 3,000 plus salaries and wages 20,000 plus rent and rates 4,000. So total 27,000. Look at the problem. Here we have opening petty cash and closing petty cash. Okay, if there is any difference between opening petty cash and closing petty cash, that expense is called petty expense. Okay, that you can enter under debit side of branch expense account. How much opening petty cash balance? 500. Closing petty cash balance 300. What is the difference? 200 difference. That is the petty expense which is directly paid by the branch. Debit side of branch expense account to
petty expense. Okay, opening balance how much? 500, closing 300. So 200 they've spent. So that is a petty expense. Okay, now we have entered all the expenses. The first expense related to debtors expense, and the second one is branch expense, and the next one is petty expense. Now find out the total. 5,000 plus 27 plus 200. Total 32,200. Enter the same value under credit side also. 32,200. This is the total expense. This will be transferred to branch profit and loss account. Okay, so 32,200 by branch profit and loss account. This is the total branch expense need to be transferred to branch profit and loss account. This is the balancing figure. Okay, now we can prepare branch profit and loss account. Look at the problem. So far we have prepared stock account, debtors account, expenses account. Okay, now we have to prepare branch profit and loss account finally. Okay, for that, look at the format. Look at the branch profit and loss account. First you have to enter all the expenses under debit side, expenses as well as loss under debit side, and all surplus gain under credit side in order to find out the net profit or net loss. So on the debit side, you have to enter branch expense. This you can find out from previous account, that is branch expense account. You can take the total expenses, branch expense, and if there is any loss due to shortage, okay, that can be entered under debit side. And credit side, first you have to enter gross profit, that you can take from the branch adjustment account. So this account we didn't prepare because this account is related to when goods sent to branch at selling price, that we will see in the next video. Okay, here we have got surplus in branch stock account, that you can enter as a first item. The first item will be surplus, that you can take from branch stock account, and if there is any amount recovered, any income received from the insurance company, that you can enter credit side, and finally you will be getting either net profit or net loss. Again I tell you, enter all expenses and losses under debit side, and all surplus and gain and any amount recovered from insurance company under credit side in order to find out either profit or loss. Now you can prepare branch profit and loss account. So credit side, first you have to start with the surplus, that you can find out from the branch stock account. Look at the stock account. Look at the branch stock account. We have got surplus, no? So this you have to transfer to branch profit and loss account. How much? 54,000. This will be the first item under credit side of profit and loss account. Under profit and loss account credit side by branch stock account. Okay, that is surplus. How much? 54,000. Okay, in this problem there is no amount recovered from insurance company. That's all. We have only one surplus that we have taken from the branch stock account. Now we have to enter all expenses and losses under debit side of branch profit and loss account. For that, see the previous account, that is branch expense account. So branch expenses account, we have got a total expense. How much? 32,200. This unit transferred to branch profit and loss account. No, so enter this value under debit side of profit and loss account. Under branch profit and loss account, the first expense will be branch expense. Okay, how much? Total expense 32,200. See, here we have entered surplus and we have entered expense. Now, the difference between total surplus minus expense is equal to net profit. So, which one is highest value? 54 is the highest value, no? So, enter 54 under credit side and enter the same value debit side also. So, the final balancing figure will be the net profit. So, 54,000 minus 32,200, 21,800. This is the net profit to net profit. This is the balancing figure. Okay, we have started with the surplus 54,000 and we have subtracted total expense 32,200. The balancing figure 21,800 is the net profit. Okay, this is the way to find out net profit according to stock and data system. In this video, we have seen the problem for when goods are sent to branch at cost price. In the next video, we are going to see the problem for when goods are sent to branch at invoice price. Okay, you can find the. Look at this Excel sheet. So beautiful, so elegant. Just looking like a wow. You will be surprised to know that I made this entire spreadsheet Video of branch accounting. In the previous video, we have seen problem under stock and data system when goods are sent to branch at cost price. Here we are going to see the problem under stock and data system when goods are sent to branch at invoice price. Okay, so before we see the problem, please subscribe this channel and hit the bell icon to get branch at invoice price. You need to prepare these accounts. So these are the necessary ledger accounts you have to prepare in order to find out the profit or loss. Okay, so the first one is branch stock account. Here you have to record all the stock transactions. Okay, and the second one is branch debtors account. So in this particular account, you have to record all the transactions related to debtors. And the next one, branch expense account. So here you have to record all the expenses related to particular branch. Okay, and the next one, very important, branch adjustment account. So this particular account is required only when the goods are sent to branch at invoice price. In the previous video, we have discussed when goods are sent to branch at cost price. In that case, branch adjustment account is not required. Okay, but here we are preparing accounts for invoice price. Okay, in this case, you need to prepare separate account called branch adjustment account. And the next one is branch profit and loss account. So after preparing all these accounts, finally you can prepare branch profit and loss account in order to find out profit or loss of a particular branch. And finally, goods sent to branch account. Okay, so this account is required to find out the net value of goods sent to branch. Okay, see, the balancing figure of this particular account is transferred to either purchase account or trading account, depends on the concern, whether the concern is trading concern or manufacturing concern. Now let us see each and every account separately along with the problem. Look at the problem under stock and data system when goods are sent to branch at invoice price. Okay, look at the problem. Alex Agencies opened a branch in Chennai on 1st January 2018. Goods were invoiced at selling price, which was at cost plus 25%. Here, goods were invoiced at selling price, which was at cost plus 25%. Okay, that is 25 plus 100, 125. Okay, the invoice price is 125. That is cost is always 100 plus 25. Okay, from the following particulars relating to the year 2018, you are required to prepare different accounts under the stock and data system. Here they ask you to prepare different accounts. Different accounts means, as we discussed earlier, these are the different accounts you need to prepare
prepare and a stock and data system when the goods sent to branch at invoice price. Okay, look at the problem. See, these are the informations. The first one is goods sent to branch 50,000, then sales, cash sales 15,000, credit sales 25,000, goods returned by customers 500, cash received from customers 15,000, discount allowed 200, cash remitted to branch for rent and rates 200, salaries 1,000, sundry expenses 200, and defective goods written off 100, goods returned by branch 2,400, stock at the end, that is closing stock 8,000. In this problem, there is no opening stock. Okay, stock at the end 8,000. This is the closing stock. Okay, these are the information given in the problem. Now they ask you to prepare different accounts under stock and data system. Let us see what are the important letters you have to prepare. These are the required accounts. The first one is branch stock account. Okay, then you have to prepare data's account, then expense account, and the next one branch adjustment account, and finally you have to prepare branch profit and loss account to find out profit or loss. Okay, in the previous video, we have seen the detailed format for each and every account separately. So here I am going to solve the problem along with the format side by side. So please watch the previous video for more clarity about the format. Okay, now let us see the first one, that is branch stock account. Look at the stock account format. First you have to start with opening stock and enter the closing stock opposite side, and then goods sent to branch debit side. If there is any return to head office, enter opposite side, and goods returned by debtors. Okay, this one is goods returned to head office, and this one is goods returned by debtors. Okay, and then all the sales, that is cash sales as well as credit sales, will be entered on the credit side. And if there is any loss of goods, okay, in this problem we have one loss of goods that has to be entered here, and finally you'll be getting either surplus or shortage. Now let us see the solution. See the problem. First you have to prepare branch stock account. For that you have to record all the stock related information. First you have to start debit side with opening stock, but in this problem there is no opening stock, but here we have closing stock. So this will be entered credit side as the last item. Okay, the first one is goods sent to branch. Okay, this will be entered debit side of branch stock account. And then sales, that is both cash sales and credit sales. See, sales is an outflow of stock. Okay, it can be two forms. One is cash sales, another one is credit sales. Both has to be entered in branch stock account. Okay, but the cash sales will be entered only in the branch stock account credit side, whereas credit sales will be entered in two accounts. The first one is branch stock account credit side as debtors account. Okay, the another one is this will be entered in branch debtors account debit side as branch stock account. Okay, now we are going to prepare the branch stock account. Both the items will be entered under credit side of branch stock account. Okay, both item will be credit side, and this one is debit side. That is goods sent to branch will be inflow of stock. No, so debit side, and cash sales, credit sales both are outflow, so credit side. And then goods returned by customers. This will be entered in two accounts. The first one is branch stock account as well as branch debtors account. And a branch stock account, this will be entered under debit side. At the same time, this will be entered under credit side of branch debtors account. So stock account as well as debtors account. So this will be entered under stock account as well as debtors account. In stock account, debit side. In debtors account, credit side. Okay. The next one is cash received from customers. So this will be entered under debtors account, debit side. Goods written off 100, goods returned by branch 2,400, stock at the end, that is closing stock 8,000. In this problem there is no opening stock. Okay, stock at the end 8,400. Cost plus 25 on first when goods are sent to branch at invoice price. Okay, look at the problem. Alex Agencies opened a branch in Chennai on 1st January 2018. Goods were invoiced at selling price, which was at cost plus 25%. Here, goods were invoiced at selling price, which was at cost plus 25%. Okay, that is 25 plus 100, 125. Okay, the invoice price is 125. That is cost is always 100 plus 25. Okay, from the following particulars relating to the year 2018, you are required to prepare different accounts under the stock and data system. Here they ask you to prepare different accounts. 25. That is cost is always 100 plus 25. Okay. From the following particulars relating to the year 2018, you are required to prepare different accounts under the stock and data system. Here they ask you to prepare different accounts. Different accounts means, as we discussed earlier, these are the different accounts you need to prepare under stock and data system when the goods sent to branch at invoice price. Okay. Look at the problem. See, these are the informations. The first one is goods sent to branch 50,000, then sales, cash sales 15,000, credit sales 25,000, goods returned by customers 500, cash received from customers 15,000, discount allowed 200, cash remitted to branch for rent and rates 200, salaries 1,000, sundry expenses 200, and defective goods written off 100, goods returned by branch 2,400, stock at the end, that is closing stock 8,000. In this problem there is no opening stock. Okay, stock at the end 8,000. This is the closing stock. Okay, these are the information given in the problem. Now they ask you to prepare different accounts under stock and data system. Let us see what are the important letters you have to prepare. These are the required accounts. The first one is branch stock account. Okay, then you have to prepare debtors account, then expense account, and the next one branch adjustment account, and finally you have to prepare branch profit and loss account to find out profit or loss. Okay, in the previous video we have seen the detailed format for each and every account separately. So here I am going to solve the problem along with the format side by side. So please watch the previous video for more clarity about the format. Okay, now let us see the first one, that is branch stock account. Look at the stock account format. First you have to start with opening stock and enter the closing stock opposite side, and then goods sent to branch debit side. If there is any return to head office, enter opposite side, and goods returned by debtors. Okay, this one is goods returned to head office, and this one is
goods returned by debtors. Okay, and then all the sales, that is cash sales as well as credit sales, will be entered on the credit side. And if there is any loss of goods, okay, in this problem we have one loss of goods that has to be entered here, and finally you will be getting either surplus or shortage. Now let us see the solution. See the problem. First you have to prepare branch stock account. For that you have to record all the stock related information. First you have to start debit side with opening stock, but in this problem there is no opening stock, but here we have closing stock, so this will be entered credit side as a last item. Okay, the first one is goods sent to branch. Okay, this will be entered debit side of branch stock account. And then sales, that is both cash sales and credit sales. See, sales is an outflow of stock. Okay, it can be two forms. One is cash sales, another one is credit sales. Both has to be entered in branch stock account. Okay, but the cash sales will be entered only in the branch stock account credit side, whereas credit sales will be entered in two accounts. The first one is branch stock account credit side as debtors account. Okay, the another one is this will be entered in branch debtors account debit side as branch stock account. Okay, now we are going to prepare the branch stock account. Both the items will be entered under credit side of branch stock account. Okay, both item will be credit side, and this one is debit side. That is goods sent to branch will be inflow of stock. No, so debit side, and cash sales, credit sales both are outflow, so credit side. And then goods returned by customers. This will be entered in two accounts. The first one is branch stock account as well as branch debtors account. And a branch stock account, this will be entered under debit side. At the same time, this will be entered under credit side of branch debtors account. So stock account as well as debtors account. So this will be entered under stock account as well as debtors account. In stock account, debit side. In debtors account, credit side. Okay. The next one is cash received from customers. So this will be entered under debtors account. Then discount allowed. This is also related to debtors account. Then cash remitted to branch account. Okay. This is the expenses. That is rent and rates, salaries, sundry expense. All these will be entered under branch expense account. And the next one, defective goods written off. Okay. This is a loss of goods or loss of stock. This will be entered under stock account under credit side. If there is any loss of stock, that has to be entered under credit side of stock account. But you have to enter in a different form. That is, you have to calculate cost separately and loading separately. This I will explain along with the solution. Okay. The next one is goods returned by branch. This will be entered credit side of stock account. Okay. This is related to stock account. So this has to be entered under credit side of branch stock account. The next one, stock at the end. That is closing stock. This is also related to stock. No, this will be entered under credit side of stock account. Again, I repeat. First, you have to start with opening stock. In this problem, there is no opening stock. So leave it. The next item is goods sent to branch. Enter debit side. And then sales, both cash sales as well as credit sales, both has to be entered under credit side. The next one, goods returned by customers. Enter under debit side. The next one, defective goods written off. This is a loss of stock. So has to be entered under credit side. And then goods returned by branch. Enter under credit side. And finally record stock at the end, that is closing stock, under credit side of branch stock account. Now let us see how to prepare stock account. This is a branch stock account. First you have to start with opening stock. So no opening stock. Straight away you can enter any goods sent to branch. The first item is debit side to goods sent to branch. How much? Goods sent to branch. How much? 50,000. So debit side, goods sent to branch. How much? 50,000. Okay, the next item, sales. That is cash sales 15,000, credit sales 25,000. Both has to be entered under credit side. Under stock account credit side, by, for cash sales you have to write by cash. How much? 15,000. And for credit sales, you have to enter by debtors. Okay, branch debtors account. Within the bracket, you can mention credit sales. This you have to enter under debit side of branch debtors account. Okay, so credit sales, how much? 25,000. The next one, goods returned by customers. How much? 500. This you have to enter under debit side of stock account. Okay, so goods returned by customers, no, that will be entered under debit side as branch debtors account. So within the bracket, you can mention sales return. How much? 500. See the problem. The next one is defective goods written off. Okay, so the written off amount, how much? 100 rupees. This is a loss of stock. Okay, this has to be entered under credit side of branch stock account. But instead of entering 100 rupees, you have to show cost separately and loading separately. Okay, since this problem is head office sending goods to branch at invoice price. Okay, in that loss, cost is there as well as the profit also included. So now you have to calculate cost separately and loading. That is the invoice amount, how much profit is added. That has to be calculated separately and enter both the items under credit side of branch stock account. I'll show the calculation. Look at the information given in the problem. Here, goods were invoiced at selling price, which was at cost plus 25%. Okay, that is 25 plus 100, 125. Okay, the invoice price is 125. That is cost is always 100 plus 25. Okay, now based on that, you have to calculate the loading. How much amount is invoiced in that stock. I'll show the calculation for loss of stock. So loss of stock is 100 rupees. Now, in that, you have to calculate how much cost and how much cost plus. That is 25%. Now, so 100 into 25 by 125 is equal to 20 rupees. Okay, so 100 into, that is 100 rupees is given, no, the loss of stock in that. 25 cost plus, no, so 25 by 125 is equal to, you'll be getting 20. So this is the loading amount, and 100 minus 20. 100 minus 20 is equal to 80. So 80 plus 20, 100 rupees. No. So you have to calculate loading separately and cost separately. First you have to calculate the loading, then subtract the loading from the total price. You will be getting cost. So this one is cost and this one is loading. Okay, this will be entered under adjustment account and this will be transferred to profit and loss account. In the stock account, you have to enter 100 rupees totally, but in a split up, you have to show 80 separately and 20 separately. Again, this will be entered under profit and loss account and this will be transferred to adjustment account. I'll just show the calculation. See, the 100 rupees loss of stock, no, that will be entered in the credit side of branch stock account, but cost separately and loading separately. The cost will be transferred to branch profit and loss account. How much? 80 rupees. Okay, the 20 rupees will be transferred to adjustment account. So by branch profit and loss account. Okay, this is the cost and this 20 rupees will be transferred to branch adjustment account. That is loading
loading in the defective, that is loss of stock. Okay, the total 100 rupees you have entered, but you have to show the split up. How much cost and how much loading included in that price. Okay, look at the problem. We have entered defective goods return of 100 rupees. The next item is goods returned by branch. How much? 2400. This will be entered under credit side of branch stock account. See, in branch stock account, you have to write by goods sent to branch. Within the bracket, you have to mention return. How much? 2400. Look at the problem. The last item is stock at the end, that is closing stock. That has to be entered under credit side of branch stock account. How much? 8000. So under credit side of branch stock account, by balance carry down 8000 rupees. That's all. Now get the total. Usually we used to start with opening stock and we used to get balancing figure as closing stock. But here closing stock is there, so there is no balancing figure. We are getting equal amount both debit side as well as credit side. So how much? 50,000 plus 500, 50,500. Now get the total credit side also. You are getting same value. 15,000 plus 25,000 plus 80 plus 20 plus 2,400 plus 8,000 is equal to 50,500. So there is no balancing figure in the branch stock account because closing stock is given in the problem itself. Now look at the problem for branch debtors account. Look at the format for branch debtors account. So first you have to start with opening balance, opening debtors debit side, and first you have to record credit sales. Okay, this you can find out from the branch stock account. Okay, and after entering these things, then if there is any cash received from debtors, enter credit side, and any allowances to debtors credit side, any discount to debtors credit side, any bad debts or any return, any goods returned by customers, okay, enter credit side, and finally you will be getting closing debtor as a balancing figure. In some case, when the closing balance is given means then the balancing figure will be credit sales. If the credit sales is given means then the balancing figure will be closing debtor. In some cases, all the other information will be given. Okay, if you find any balancing figure credit side, then it will consider as a cash received from debtors. Okay, according to the information, you can find out any one balancing figure. Now see the problem. Look at the problem. According to the format, okay, you have to enter opening debtor. Here opening debtor is not there. Okay, then you have to enter credit sales. This we have already entered in the credit side of branch stock account. Okay, again you have to enter this under debit side of debtors account. Okay, so debtors account debit side, and the next one is goods returned by customers, that is debtors. This we already entered in the debit side of stock account. Again you have to enter credit side of debtors account. So this you have to enter debtors account. This is also entered under debtors account. The next one cash received from debtors. This you have to enter under debtors account credit side. Okay, and the next one discount allowed. Any discount allowed to debtors. See, discount allowed 200 rupees. No, so this will be reflected in two accounts. The first one is branch debtors account credit side, as you have to write as a branch expense. Again this will be entered under branch expense account under debit side as branch debtors account. Okay, so this will be reflected in two accounts. The first one is branch debtors account credit side, and the next one branch expense account debit side. Now we are preparing branch debtors account, right? So this you have to enter under credit side of branch debtors account as by branch expense. This is also entered under credit side of debtors account. The next one, cash remitted to branch account. So all these items related to expense account. Now the next one, defective have entered, goods returned by branch also entered, and stock also entered. Now that's all. With this information you have to prepare branch debtors account according to the format. Now we are going to prepare branch debtors account. In that the first information is credit sales. How much? 25,000. See, branch debtors account, first item is credit sales. That you have to enter as a branch stock account. Why? Because we have already entered this under credit side of branch stock account as branch debtors account. Credit sales. How much? 25,000. Again you have to enter this under debit side of branch debtors account as to branch stock account. Within the bracket, you can mention credit sales for your reference. How much? 25,000. Look at the problem. So first we have entered credit sales. Okay, now the next information is goods returned by customers. This we have already entered under debit side of stock account. Now we have to enter the same value under credit side of debtors account. How much? 500 rupees. In branch debtors account credit side by branch stock account, because this we have entered in the stock account, that is returns. Look at the stock account. This we have entered as branch debtors account, that is sales return. Goods returned by customers. How much? 500. So enter 500 here. Look at the problem. We have entered goods returned by customers. The next one, cash received from customers. How much? 15,000. This you have to enter under credit side of debtors account. So on a debtors account, by cash, you have received cash from debtors. How much? 15,000. Look at the problem. We have entered cash received from customers. The next one, discount allowed. This you have to enter credit side of debtors account. How much? 200 rupees. So this is the expense related to debtors. No. So again, this we are going to enter under branch expense account to find out the total expense. So expense you have to write branch expense. Okay. How much? 200. Look at the problem. We have entered discount allowed. That's all. So we have entered all the information related to branch debtors account. Now find out the closing debtor. Now find out the closing balance. Okay. So how much debit side? 25,000. So enter 25,000. Here 15,700. Okay. So 25,000 is the highest value. No. Enter the same value. Now you'll be getting balancing figure. So 25,000 minus 15,700. Balancing figure 9,300. This is a balancing figure. No. This is a closing debtor. By balance carry down. That is closing debtors. Balancing figure is closing debtor. Now look at the problem. See, according to stock and debtor system, you have to prepare these are the important accounts. So far we have prepared stock account and debtors account. Now we have to prepare branch expense account. Let us see the format first. See, the branch expense account is required to find out the total expense, total branch expense that will be transferred to profit and loss account. The expenses can be classified into different categories. The first one is branch debtors account. So these are the expenses related to debtors. All these items you can find out from the debtors account. And the next one is all the other expenses, that is branch expenses apart from the debtors expenses. Those expenses can be entered as to bank. That
that is advertisement, salaries, wages and rent and rates, all these expenses will be paid by branch. All these amount will be remitted by the head office. With the help of head office, the branch will make the payment for all these expenses. Okay, this will be entered as to bank. Apart from the two expenses, if there is any petty cash, opening balance and closing balance, in that case, you can find out the difference between opening petty cash balance and closing petty cash balance. That difference is called petty expense. That is also entered under debit side of branch expense account. But here there is no petty cash balance, so leave it. So here we have branch debtors expense and other branch expense. Look at the problem. So now you have to prepare branch expense account. Okay, see here, cash remitted to branch account. Here the head office sent cash to branch in order to meet all these expenses. What are the expenses? Rent and rates 200, salaries 1000 and sundry expense 200, totally 1400. This you have to enter under debit side of branch expense account as to bank. In branch expense account, debit side to bank, how much? 1400. So what are the expenses? Rent and rates 200 plus salaries 1000 plus sundry expense 200, totally 1400. Look at the problem. We have entered all these expenses related to branch, and apart from the direct expenses, if there is any expenses related to debtors, yes, we have one expense, that is discount allowed. This is also one of the expense related to debtors account. This you can find out from the debtors. Again, this you have to enter under debit side of branch expense account. The next one is apart from the direct expense, the next one is branch expense, no, that is 200 rupees related to debtors. So that has to be entered as to branch debtors account. How much? 200 rupees, no. So enter 200. This is a discount allowed to debtors. This you can find out from the branch debtors account. This is the expense related to debtors. So totally we have 1600, 1400 direct expense made by the branch, and this is the expense related to debtors. Totally 1600. This 1600 have to be transferred to branch profit and loss account. This is the total expense, no. This will be transferred to branch profit and loss account. This is the total expense balancing figure. Look at the list of accounts that has to be prepared. So far we have prepared stock account, debtors account and expense account. Now we are going to prepare branch adjustment account. So this account is required only when the head office send goods to branch at invoice price. So this problem is invoice price problem. So here you have to prepare branch adjustment account. So before we see the solution, let us see the format first. See, now let us see branch adjustment account. So this account is required only when the head office send goods to branch at invoice price. Invoice price means cost plus profit. How much profit they have added, that will be included in stock. No, those items will be recorded in the branch adjustment account. Okay, first one you have to enter closing stock reserve. Okay, if there is any opening stock and closing stock, in that the loading is added, the invoice price is added. No, for that you have to calculate stock reserve for both opening stock and closing stock. Okay, for opening stock reserve you have to enter credit side. For closing stock reserve you have to enter under debit side. In this problem there is no opening stock. Okay, just leave it, and we have closing stock. Okay, for that you have to write closing stock reserve. And then see the next one is profit element of stock shortage and profit element of stock surplus. See, in the stock account you'll be getting either shortage or surplus. Okay, in that case you need to calculate how much profit is included in the shortage as well as surplus. That has to be calculated and entered in the branch adjustment account. I'll show the calculation for this transaction. Look at the branch stock account. According to our problem, we don't get any balancing figure in the stock account. Okay, if we get any balancing figure on the debit side, it will be treated as surplus. Okay, if we get any balancing figure on the credit side, it will be treated as shortage. Okay, in that case what we need to do, okay, I will give the example calculation for your better understanding. See the example calculation for surplus or shortage. Okay, in branch stock account, if we get any balancing figure on the debit side, it will be treated as surplus. Okay, if we get any balancing figure on the credit side, it will be treated as shortage. Okay, in that case assume if we get any surplus, assume 1000 rupees. In that case you have to calculate cost and profit element in that surplus. Okay, in the same way, in case of shortage, again you have to calculate how much cost is included and how much profit element is included in this shortage. That has to be calculated. Okay, now I'll show the calculation. According to our problem, how much is included? Look at the problem. So according to our problem, how much profit is included? Cost plus 25%. Okay, the profit element is 25 divided by 125. See the calculation. So here you have to calculate the profit element in the surplus. So 1000 into 25 by 125. Okay, so 1000 into 25 by 125 is equal to how much? 200 rupees. So profit element in the surplus is 200. Then the cost will be 800. Okay, total 1000 rupees. So this will be transferred to profit and loss account. So while you prepare the profit and loss account, this has to be transferred to profit and loss account credit side. In the same way, this profit element has to be transferred to branch adjustment account under credit side. So both the items need to be transferred to two different accounts. So the cost will be transferred to profit and loss account. The profit element is transferred to adjustment account. Okay, in the same way, in case of shortage, if you get any shortage in the branch stock account, same thing you have to do. Okay, so how much is profit is included? 25%. No, so first find out the profit element in the shortage. So 1500 into 25 by 125 is equal to 300. But the profit element is 300, then the cost will be 1200. Okay, the cost has to be transferred to profit and loss account. Which side? Debit side. This profit element has to be transferred to adjustment account under debit side. Again I'll tell you, okay, the cost element of surplus has to be transferred to profit and loss account credit side, and the profit element has to be transferred to adjustment account credit side. In the same way, the shortage, okay, in the shortage, the profit element has to be transferred to adjustment account debit side, and the cost will be transferred to profit and loss account debit side.
See the branch adjustment account again. See, so far we have discussed about the profit element of shortage and profit element of surplus. Okay, then you have to enter loss of stock. In case of any loss of stock due to fire or any reason, in that case you have to calculate the value which is included in that loss that has to be entered here. Okay, and the next one is loading. See, you need to calculate loading on goods sent to branch. For that you have to find out the net value of goods sent to branch. Okay, in case of any return goods to head office, that has to be subtracted. Then you'll be getting net goods sent to branch. For that you have to calculate loading. That we will see along with the solution. Okay, and finally you'll be getting the balancing figure either debit side or credit side. If you get any balancing figure on the debit side, it will be treated as gross profit, and if you get any balancing figure in the credit side, it will be treated as gross loss. Okay, both items need to be transferred to profit and loss account. Look at the problem. According to the format, now you have to calculate stock reserve for opening stock and closing stock. So in this problem there is no opening stock, but we have closing stock at the end. Okay, how much? 8,000. See, in this 8,000 the stock reserve is included. No, so how much profit is included? See the above information. Cost plus 25%. So you have to calculate 25 divided by 125 on 8,000. See the branch adjustment account. The first item is stock reserve. Okay, so there is no opening stock. Straight away you can record stock reserve on closing stock. So debit side to stock reserve for closing stock. Okay, how much? 8,000. No, so 8,000 into how much profit is included? 25 divided by 125. So you have to calculate stock reserve on closing stock. So 8,000 into 25 by 125 is equal to 1,600. See the next information. The next one, goods sent to branch. For that you have to calculate loading. Okay, so before you calculate loading, if there is any return to head office, that has to be subtracted from this value in order to find out the net goods sent to branch. Just see, yes, here we have returns. That is goods returned by branch, which means goods sent to head office. How much? 2,400. So this you need to subtract from 50,000 in order to find out the net goods sent to branch. And after that you can calculate loading on goods sent to branch at 25 by 125. See the solution. Branch adjustment account credit side by goods sent to branch. That is, you have to calculate for net value. Okay, you have to calculate loading. How much? 50,000 goods sent to branch minus 2,000. So 4720. Look, a shortage or loss or profit. So here we have defective goods. This is a loss of stock. No. So for that already I have shown the calculation to find out the side of branch and the calculation to find out cost and loading. Okay, this in branch adjustment account. No, this 20 has to be entered under debit side of branch adjustment account as branch stock account. Look at the branch adjustment account debit side to in the stock account itself. Okay, look at the branch adjustment account format. So we have entered loading on. Now in case of shortage or surplus, see the example calculation shortage, you need to enter this profit element and the debit side of adjustment account. See the adjustment account. So we have entered closing stock of the total. So credits get the balancing figure. You need to transfer to branch this side, and the credits are prepared. Find out branch expense. You have to have goods, and then credit side you have to enter only cost. Okay, this you can find be entered or surplus you can find out from the branch stock account. So according to the calculation, see the example calculation of branch stock account. Okay, as we did earlier, portion alone need to be entered under debit side of profit and loss account. Okay, in the branch stock account you can find out either shortage or surplus. Going to record only cost price of a shortage as well as cost price of surplus. Any amount recovered or received from any insurance company that has to be entered under credit side as an income. Okay, finally you'll be getting balancing figure either net profit or net loss. That's all. See, in branch profit and loss account, first you have to spend 900. So credit side 7,000 loss. See the branch expense account to find out the total branch expense. If there is any loss or okay, here we have calculated 80 under debit. Okay, that is the loss of defective item. The gross profit that we have taken from the branch adjustment account. No problem, we don't have surplus. This cost will be entered credit side of P&L account. In case of shortage, the cost portion will be entered debit side of profit and loss account. See, in the profit and loss account, in case of surplus, but here we don't have surplus to cover any amount from loss. Enter the same 680 answer to profit and loss account. Goods any calculate treated as much goods sent to branch 50,000. This you have to enter credit side of goods sent to branch account of goods sent to branch account. In this problem, cost plus 25. No, so for that, how much loading is incorporated in this transaction that you can find out from the branch adjustment account. So that will be entered debit side of goods sent to branch account, and finally the balancing figure will be purchase account, and that will be transferred to trading account. Okay, so here, so back return to head office we have already entered in stock account. Okay, so 2,400. Okay, so we have entered goods sent to branch and goods returned to head office. Now in this calculation we have adjustment. Okay, loading values there, no, that you can find out from the branch adjustment account, and that will be entered debit side. Look at the branch adjustment account. So loading is included in the goods sent to branch account. Okay, how much we have calculated? 9,520. So this will be entered debit side of goods sent to branch account as branch adjustment account, and the debit side of goods sent to branch account to balancing figure. The balancing figure, okay, 8,000, and this will be transferred. Accounts need to be prepared under stock and data system when the head office send goods. मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे अभी जरा। हम इसमें आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, वो कल करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने एक हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? यस माय डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जरा जुड़ जाएंगे आज के सेशन में, मुझे कंफर्म भी कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन मेरे प्यारे बच्चों, इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से मुझे कंफर्म कर देंगे।
यस मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा ज्यादा हमारे पास आती है जब भी आप कोई टॉपिक को करते हैं। तो चलिए मेरे साथ सारे बच्चे जरा जुड़ जाए। यस 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 हाँ अभी है बाद 12 बजे से ज्वाइन के प्लीज मेक क्लास नहीं होगी कम्युनिकेशन, सो दैट बिकम्स वेरी। अपने पास जो है, जब अपने पास जो है, अगर आप अपने पास करते हैं चैनल को ज्वाइन, तो वहां पर एक टैब है जिसके अंदर प्रॉफिट प्रायर जैसे हमारा हो गया था, उसके 4 लेक्चर थे, सारे लिंक्स एक जगह पे है। फिर हायर परचेज की हमारी 6 क्लासेस लगी, डिपार्टमेंटल की लगी, बोनस राइट इशू मैंने आपको कहा था पिछले वाला ही था, तो आपके पास वो हो गया था। और मैं स्पेशल सेक्शन आपके पास आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के अलग बने हुए हैं आपके जो भी सारे, ये आपके पास गूगल ड्राइव की शीट है जिसके अंदर में रख लीजिए। मेक श्योर आप उसको अकाउंटिंग चैनल वो भी तो होंगे, वो भी तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मेरी होनी है उसके लिए मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर। अब आई थिंक सो किसी बच्चे को कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा, हम अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाते हैं। चलिए तो क्या सभी बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए? मुझे फटाफट चाहिए। चलिए यस सर, हम अपने पास जो है, अब अपने पास जो तैयार है, अपने पास तैयार है। यस अब हम अपने पास बेटा कर रहे हैं शुरुआत, हमने करी हुई थी कल इंडिपेंडेंट ब्रांच की। इंडिपेंडेंट ब्रांच का हमने अपने पास टॉपिक शुरू किया हुआ था। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में क्या, ब्रांच और हेड ऑफिस अपनी अपनी किताबें बना रहे। डिपेंडेंट में क्या था, हेड ऑफिस ही ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहा था, ब्रांच अपनी कोई किताबें खुद के अलग से नहीं बना रहा था, वो अपने मेमोरेंडम रिकॉर्ड जरूर बना रहा था। अब यहाँ पे ब्रांच अपनी खुद की, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी किताबें खुद डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बना रही है। ब्रांच अपने पास जो है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपनी किताब बना रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेटा एंट्रीज भी सीखी थी, अगर बच्चों को ध्यान हो तो हमने कुछ एंट्रीज अपने पास कल करनी शुरू कर दी थी, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों के साथ कल के सेशन में यहां तक में एंट्रीज कवर करी थी। जो मैंने आपको बताया था कि जब गुड्स भेजे जाते हैं तो एंट्री एचओ डालता है, ब्रांच डालता है, जब पैसा भेजा जाता है तो एंट्री होती है। कुछ एक बड़ी अच्छी एंट्रीज थी, लाइक परचेजेस अगर ब्रांच ने करी पर पेमेंट एचओ ने करी, तो ये मैंने आपको समझाया था। डेबिट का एक एस्पेक्ट एक जगह, क्रेडिट का एक एस्पेक्ट एक जगह। तो ब्रांच ने अगर गुड्स खरीदे तो परचेज का डेबिट हुई तब ब्रांच में, पर पेमेंट एचओ ने करी तो टू बैंक आएगा एचओ में, और बाकी क्या यूज कर देंगे, आपस का इंटर यूनिट अकाउंट, आपस का अकाउंट, एचओ की में ब्रांच का, ब्रांच की में एचओ का। तो दोनों अपने अपनी किताब बना रहे। सेम तरीके से हमने बोला था खर्चा जैसे कि है, ब्रांच का खर्चा पेमेंट एचओ ने करी, तो खर्चा डेबिट कहां होगा सर, ब्रांच में। पेमेंट किसने करी, एचओ ने, तो टू बैंक कहां होगा, एचओ में, और बाकी आपस का अकाउंट, बाकी आपस का अकाउंट। तो ये हमने अपने पास चीजें करी थी, हमने अपने पास चीजें करी थी। यहां तक में चीजें सबको समझ आ गई थी? क्या यहां तक में चीजें सबको समझ आ गई थी जो हमने कल तक की थी? यस सर, यहां तक में हमारे पास चीजें जो है क्लियर हो गई थी, यहां तक में हमारे पास जो चीजें वो क्लियर हो गई थी, इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं था, इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं था ना। हमारे पास बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली एंट्री पे। अगली एंट्री में बेटा हम अपने पास बढ़ते हैं, जो कि आपके पास क्या आ रही है कि जब एक आपके पास ब्रांच गुड भेज रही है दूसरी ब्रांच को, when one branch is sending goods to another branch, now there are two branches involved, एचओ की तो बात ही नहीं आ रही, एचओ की तो बात ही नहीं आ रही। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि बेटा हमारे पास है ब्रांच नंबर 1 और वो गुड भेज रही है ब्रांच नंबर 2 को। ब्रांच नंबर 1 किसको, ब्रांच नंबर 2 को। नाउ ये हमने बोला कि इसने इसको गुड भेजे, इसने इसको गुड सेंड की है ना। अब यहां पर में बेटा जब इसने इसको गुड सेंड करे है, तो बेटा लॉजिकली आप क्या बोलेंगे, ब्रांच 1 एंट्री क्या दिखाएगा, ब्रांच 1 एंट्री दिखाएगा उसने ब्रांच 2 को गुड भेजे, तो वो ब्रांच 2 को डेटर बना लेगा, तो एंट्री डालेगा ब्रांच 2 टू एक तरीके से गुड सेंड, अपना स्टॉक कम कर लिया, ब्रांच 2 टू गुड सेंड। और ब्रांच 2 क्या दिखाएगी, हमें गुड रिसीव हुए तो उसकी एक तरीके से परचेजेस होगी, तो वो दिखाएगा गुड्स रिसीव टू ब्रांच 1। ठीक है, तो ये एंट्री आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि ये एंट्री एक बार बनती है, बिल्कुल ये एंट्री बनती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम समझना, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड ऑफिस है और साथ में उसकी 50 ब्रांचेस है, 50 ब्रांचेस है, तो बेटा हमारे पास हर ब्रांच की बुक्स में, हर ब्रांच की बुक्स में अगर उसकी सारी ब्रांचेस के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, एचओ के साथ भी हो रही है, तो उसकी किताबों में एचओ का अकाउंट भी होगा, बाकी 49 ब्रांचेस के अकाउंट भी खुल जाएंगे। जैसे अगर आपने ब्रांच 2 खोला, ब्रांच 3 ब्रांच पर गुड्स खरीदे बेचे, जो भी ट्रांजैक्शन हो गया, कैश मिला, कैश, तो आपकी ब्रांच 1 की किताबों में ब्रांच 1 को ऑब्वियसली छोड़ के सारी ब्रांचेस के अकाउंट होंगे। ऐसी ब्रांच 2 की बुक्स में क्या होगा, ब्रांच 2 को छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस के अकाउंट होंगे। अब ईयर एंड में सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा रिकंसाइल करना, क्योंकि हर की बुक्स में एचओ प्लस रिमेनिंग ब्रांचेस के लेजर अकाउंट होंगे, एचओ प्लस रिमेनिंग ब्रांचेस के अकाउंट होंगे, और एचओ की किताबों में तो सारी ब्रांचेस के होंगे। तो सोचो कितना मैसअप हो जाएगा। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या चीज आती है, हमें क्या बताया जाता है, थोड़ा सा सरल तरीका। वो सरल तरीका क्या है, हम कहते हैं कि गुड्स भेजे तो ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को, भेजे तो ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को, बट हम क्या दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं कि ब्रांच 1 ने गुड्स भेजे एचओ को अकाउंटिंग में, और एचओ गुड्स भेज रहा है ब्रांच 2 को। मतलब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये दिखाया जाएगा कि ब्रांच 1 ने गुड्स भेजे एचओ को, एचओ ने भेजे ब्रांच 2 को, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी एंट्री ये नहीं डलेगी। अब आपकी एंट्री क्या डलेगी, अब आपकी एंट्री ब्रांच 1 और ब्रांच 2 क्या दिखाएंगे, ब्रांच 1 ये दिखाएगा मैंने एचओ को गुड्स भेजे, तो ये दिखाएगा एचओ टू गुड्स सेंड, और ब्रांच 2 क्या दिखाएगी, गुड्स रिसीव टू एचओ। अब आप ये देखिए, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को नहीं यूज किया, ब्रांच 1 ने एचओ को यूज किया, ब्रांच 2 ने भी एचओ को यूज किया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या एचओ भी एंट्री डालेगा, यस सर एचओ भी तो एंट्री डालेगा, एचओ की एंट्री डालेगा। सर एचओ ने ब्रांच 1 को, बेसिकली ब्रांच 1 ने एचओ को डेबिट किया, तो एचओ ब्रांच 1 को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और ब्रांच 2 ने एचओ को क्रेडिट किया था, तो एचओ क्या करेगा, ब्रांच 2 को डेबिट करेगा, तो एचओ क्या करेगा, एंट्री डालेगा ब्रांच 2 टू ब्रांच 1। इससे बस आपके पास फर्क क्या पड़ेगा, समझने की कोशिश करना। इससे बेटा अगर किसी ब्रांच की ट्रांजैक्शन किसी और ब्रांच के साथ हो रही है, ब्रांचेस की बुक में सिर्फ और सिर्फ एचओ का ही अकाउंट होगा, ब्रांचेस की बुक में किसी और ब्रांच का अकाउंट नहीं होगा, यहां सिर्फ एचओ का ही अकाउंट है। तो साल के अंत में सिर्फ एचओ की बुक्स में सारी ब्रांचेस के अकाउंट है, पर ब्रांचेस की बुक में एचओ का अकाउंट है। तो होगा क्या, नाउ यू हैव टू रिकंसाइल ओनली विद द हेड ऑफिस, यू नीड नॉट टू रिकंसाइल विद द रिमेनिंग अदर ब्रांचेस। तो मतलब एचओ को सिर्फ अपनी ब्रांचेस के साथ अपना लेजर अकाउंट ठीक करना है, अपने पास रिकंसिलिएशन करनी, ब्रांचेस को आपस में दूसरी ब्रांचेस के साथ नहीं करने की जरूरत, जिससे आपकी रिकंसिलिएशन आसान हो जाएगी, जिससे आपकी रिकंसिलिएशन आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, जब भी किसी दो ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, जब भी किसी दो ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तो बेटा आपने हमेशा रूटिंग थ्रू एचओ करनी है, आपने दूसरी ब्रांच का नाम यूज नहीं करना, आपने हमेशा एचओ का नाम यूज करना। क्या मेरी ये बात सबको समझ आई है,
क्या मेरी ये बात समझ आई? क्योंकि अभी हम आगे जाकर क्वेश्चन भी करेंगे, तो घबराना मत। अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको चीज बताई है। क्या ये बात समझ आई कि ब्रांचेस की बुक में दूसरी ब्रांचेस का अकाउंट होगा, वहां सिर्फ एचओ का अकाउंट होगा, वहां सिर्फ एचओ का ही अकाउंट आपके पास होना, किसी और का नहीं होना, ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पर में बेटा एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर में बेटा एंट्री क्या बनेगी, जब गुड्स भेजे जाएंगे तो ब्रांचेस के केस में बेटा एक है हमारी सेंडिंग ब्रांच, एक है बेटा हमारी सेंडिंग वाली ब्रांच, और एक हमारी है रिसीविंग ब्रांच। तो सेंडिंग ब्रांच एंट्री क्या डालेगी, जो भेज रही है वो ये दिखाएगी हमने कुछ किसको भेजे, एचओ को भेजे, तो वो आपके पास एंट्री डालेगा एचओ टू गुड सेंट। और रिसीविंग ब्रांच क्या दिखाएगी, जैसे मैंने बोला रिसीविंग ब्रांच जिसको गुड्स मिल रहे हैं वो एंट्री दिखाएगा गुड्स रिसीव्ड टू एचओ, गुड्स रिसीव्ड डेबिट टू एचओ अकाउंट। और एचओ क्या दिखाएगा, एचओ दिखाएगा बेटा रिसीविंग ब्रांच ने उसे क्रेडिट किया है तो वो रिसीविंग ब्रांच को डेबिट कर देगा टू। आपको पता है अभी मैंने जब एचओ की बुक्स की बात करी आपसे, एचओ की बुक्स की बात करी आपसे, तो बेटा बात समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये बोला, जब एग्जांपल भी लिया आपके सामने, मैंने बोला ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को गुड्स भेजे, तो ब्रांच 1 क्या दिखाएगी, मैंने एचओ को भेजे तो एचओ टू गुड्स सेंड करा, और ब्रांच 2 क्या दिखाएगी, हमें एचओ से गुड्स मिले तो गुड्स रिसीव टू एचओ होगा, मतलब दूसरी ब्रांच के। और एचओ क्या करेगा, ब्रांच 1 ने उसे डेबिट किया तो वो ब्रांच 1 को क्रेडिट कर रहा है, बेसिकली सेंडिंग ब्रांच को, और जिसको मिले उसको डेबिट कर रहा है, क्योंकि उसने उल्टा किया। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं आप सीधा बताओ एचओ क्या करेगा, सीधा बताओ एचओ क्या करेगा, क्या आप ये बोलोगे? तो पहले ना हम ये सोचेंगे कि जे भेजने वाली ब्रांच ने एचओ को क्या किया था, फिर हम उसका उल्टा देखेंगे एचओ क्या करेगा। बेटा यहाँ पे आसान तरीका है, पता है आसान तरीका क्या है? आप मुझे बताओ, आप अपना जब रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल करते हो बेटा, तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता था, बचपन के दिन याद आ गए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बेटा वही प्रिंसिपल आपका लागू हो गया। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं सीधा एचओ की बुक्स में अगर एंट्री बतानी है तो क्या एंट्री डालोगे? तो सीधा एंट्री डालने का तरीका है, क्योंकि इसको लेके क्वेश्चन भी करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल तरीका हो गया एचओ की किताब में एंट्री डालने का तरीका, सीधा आसान तरीका हो गया। अगर मेरे से कोई बोले एचओ की बुक्स में एंट्री डालो, तो मैं सीधा ही डाल दूंगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उससे आपके पास डायरेक्टली एंट्री बन जाएगी एचओ की बुक्स में। हाँ सर, ये तो सर आपने बड़ा आसान तरीका बता दिया। यस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आगे जाके आएगा तो वहां पे हमारे लिए मदद हो जाएगी बेटा इस प्रिंसिपल से, ठीक है ना? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास अगली चीज आ रही है बेटा, फिक्स एसेट अकाउंट अगर मेंटेन्ड एट ब्रांच है, ब्रांच के फिक्स एसेट अगर है तो ब्रांच ही मेंटेन करेगी। नहीं बेटा, इसमें एक और केस बनता भी सिखाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम अपनी किताबें सीख रहे बेटा एचओ की और ब्रांच की, जो हमारी बुक्स चल रही है। अब मुझे बताएंगे, अगर पहला केस है फिक्स एसेट ब्रांच ने खरीदे, तो बेटा ब्रांच ने फिक्स एसेट खरीदे तो ब्रांच ही रिकॉर्ड करेगा ना? यस सर, एचओ तो करेगा नहीं, तो क्या एंट्री लगेगी? सब फिक्स एसेट्स अबे ब्रांच के फिक्स एसेट अगर है तो अभी क्योंकि हमारा क्वेश्चन आगे जाके आएगा तो वहां पे हमारे लिए मदद हो जाएगी बेटा इस प्रिंसिपल से, ठीक है ना? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास अगली चीज आ रही है बेटा, फिक्स एसेट अकाउंट अगर मेंटेन्ड एट ब्रांच है, ब्रांच के फिक्स एसेट अगर है तो ब्रांच ही मेंटेन करेगी। नहीं बेटा, इसमें एक और केस बनता भी सिखाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम अपनी किताबें सीख रहे बेटा एचओ की और ब्रांच की, जो हमारी बुक्स चल रही है। अब मुझे बताएंगे, अगर पहला केस है फिक्स एसेट ब्रांच ने खरीदे, तो बेटा ब्रांच ने फिक्स एसेट खरीदे तो ब्रांच ही रिकॉर्ड करेगा ना? यस सर, एचओ तो करेगा नहीं, तो क्या एंट्री लगेगी? सब फिक्स एसेट्स टू बैंक, बेसिकली जब खरीदे तो फिक्स एसेट्स टू बैंक, जब फिक्स एसेट खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना? फिक्स एसेट खरीदे ब्रांच ने पर पेमेंट एचओ ने करी, खरीदे ब्रांच ने, पेमेंट एचओ ने करी, ब्रांच के फिक्स एसेट पेमेंट एचओ ने करी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे फिक्स एसेट है तो ब्रांच के, तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, तो फिक्स एसेट यहाँ डेबिट होगा, तो पेमेंट टू बैंक इधर होगा, और बाकी आपस का अकाउंट यूज हो गया। तो ये क्या दिखाएगा? फिक्स एसेट्स टू एचओ, और ये दिखाएगा ब्रांच टू बैंक, ठीक है ना? फिर आपके पास अगली एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन की। नाउ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बचपन से सीखते आ रहे हैं, नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी जैसे होता है, तो वही एंट्री आएगी ना बेटा? यस सर, बिल्कुल, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट अकाउंट ब्रांच के ब्रांच मेंटेन कर, अब थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अगले केस में आ रहा है फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट एचओ। सर ये क्या केस है बेटा? कई बार क्या होता है कि मशीनरी पड़ी ब्रांच के पास है, फर्नीचर ब्रांच के पास पड़ा, इस्तेमाल ब्रांच ही कर रही है, पर उसका जो सिर्फ लेजर अकाउंट है, जो किताबों में उसका सिर्फ खाता जिसे बोलते हैं लेजर अकाउंट बोलते हैं, वो अकाउंट सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में, मतलब वो फिक्स एसेट फिजिकली कहां पड़ा है, इस्तेमाल कहां हो रहा है? ब्रांच में, बट उसका सिर्फ लेजर अकाउंट एचओ की बुक्स में है, लेजर अकाउंट बोल रहा हूं। अब उस केस के अंदर में कैसे होगा? वो हमेशा इस स्पेसिफिक केस, कैसे का मतलब है ये क्वेश्चन बोलेगा तो ही लगेगा बेटा, तो इस स्पेसिफिक थिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास केस बना फिक्स एसेट खरीदा ब्रांच ने, और वो रिकॉर्ड एचओ की बुक्स में होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट यहां दिखेगा एचओ की बुक में, और एचओ ना उसको प्रीफिक्स कर देती है विद द वर्ड ब्रांच। क्यों? क्योंकि बेटा उसको पता होना चाहिए ना किस ब्रांच का है, कोलकाता ब्रांच, मुंबई ब्रांच फिक्स एसेट, अपना तो सिर्फ फिक्स एसेट होगा, ब्रांच का फिक्स एसेट तो ब्रांच फिक्स एसेट लिखना पड़ेगा ना, अकेला वर्ड फिक्स एसेट नहीं, ताकि पता रहे। पर खाता हमारे पास है, पर पेमेंट किसने करी? ब्रांच ने, खरीदा तो ब्रांच ने है। तो यहां पे क्या गया? ब्रांच फिक्स एसेट टू ब्रांच, और ये दिखा देगा एचओ टू बैंक। यहां मेरा केस आ रहा है, अगर लेजर अकाउंट फिक्स एसेट का कहां की किताबों में दिख रहा है? वो दिख रहा है एचओ के बुक्स में, वो दिख रहा है एचओ के बुक्स में, तो आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी? देन
अगला ब्रांच का फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड किया एचओ की बुक्स में, पेमेंट भी एचओ ने करी, दिख भी एचओ में रहा है, पेमेंट भी एचओ ने करी, ब्रांच क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ब्रांच क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ एंट्री क्या है? ब्रांच फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड भी यही हो रहा है और पेमेंट भी इन्होंने करी। ब्रांच की में कुछ नहीं होगा, एचओ की किताबों में फिक्स्ड एसेट दिख रहा है, पेमेंट भी एचओ ने ही करी बेटा, पेमेंट भी एचओ ने ही करी, ठीक है ना। और लास्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो डेप्रिसिएशन टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट डाल देगा ना एचओ। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो पीएनएल में जाएगा, और ये खर्चा किसकी किताब में दिखना चाहिए? सर जिसने फिक्स्ड एसेट का इस्तेमाल करा। तो इस्तेमाल किसने किया? तो इस्तेमाल तो जो किया वो तो जी ब्रांच नहीं किया, पढ़ा तो वही है, वो तो उसका सिर्फ लेजर अकाउंट एचओ की बुक में पड़ा है। बट आपके पास फिक्स्ड एसेट तो ब्रांच के पास ही है, इस्तेमाल भी उन्होंने किया, इसकी डेप्शन का खर्चा तो ब्रांच रिकॉर्ड यूज करेगी ना। हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा यहां पर में हमारे पास में खर्चा तो यही आएगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ये होगा। बट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट कहां होगा? एचओ की बुक्स में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का अकाउंट वहां पर है, एंट्री तो डेप्शन टू फिक्स्ड एसेट होती है, पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट का पड़ा एचओ के पास, तो वही काम होगा। और डेप्रिसिएशन का खर्चा वो डेबिट का होगा ब्रांच की किताब में, क्योंकि खर्चा है वो तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगी। तो एंट्री आपस में क्या जोड़ दी जाएगी? डेप्रिसिएशन टू एचओ, ब्रांच टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। तो आपस का अकाउंट यूज कर लिया। क्या यहां तक मेरे पास बताएंगे? क्या यहां तक आपके पास एंट्री समझ आई है सही बच्चों को? मुझे फटाफट से बताइए, क्या यहां तक हमारे पास एंट्री समझ आई है? कुछ हद तक हमारे पास चीजें समझ आई है? फटाफट से मुझे कंफर्म करेंगे, फटाफट से मुझे कंफर्म करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से। यस। अच्छा जी, नाउ मेरे पास बेटा प्यारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे जरा। देयर इज समथिंग अबाउट वन मोर, आपके पास एक दो चीजें और है समझने वाली। एक होता है बेटा समथिंग नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट। ये वर्ड पहले चाहे आ चुका है, पर हम फिर भी अपने पास समझने वाले हैं। नाउ व्हाट इज गुड्स इन ट्रांजिट? गुड्स इन ट्रांजिट पे बेटा आपके पास जो है बेटा उसमें कोई लेना देना नहीं था। नाउ गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? आज भी बेटा मेरे साथ समझने की कोशिश करो बेटा। बेटा डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो जिसने इस्तेमाल करा उसी के प्रॉफिट से कम होना चाहिए ना। एसेट पड़ा कहां है? फिजिकली एसेट कहां पड़ा है? फिजिकली बेटा एसेट इस केस में पड़ा है ब्रांच के पास, मशीनरी ब्रांच की प्रीमिसेस में है, इस्तेमाल ब्रांच कर रही है, तो उसके इस्तेमाल होने पे जो खर्चा है वो किसके प्रॉफिट को कम करेगा? ब्रांच के। पर उसका सिर्फ लेजर अकाउंट, जो किताबों में लेजर अकाउंट दिख रहा है वो कहां पे दिख रहा है? वो एचओ के पास। तो जो डेप्रिसिएशन का खर्चा वो तो ब्रांच की किताबों में, तो खर्चा डेबिट कर दिया ना हमने, जो प्रॉफिट को कम कर देगा ब्रांच के। पर फिक्स्ड एसेट कम कहां करेंगे? वो तो एचओ के पास है, लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट दिख रहा है वो कम कहां करेंगे? एचओ के पास, ठीक है ना। हाँ जी सर, अभी जरा क्लियर है, चलिए। अच्छा जी, नाउ मेरे साथ आगे बढ़ेंगे जरा। समथिंग अबाउट गुड्स इन ट्रांजिट बेटा, हमारे पास अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले हम कांसेप्ट को समझें। हेड ऑफिस है बेटा और हमारे पास में ब्रांच है। बेटा हेड ऑफिस ने ब्रांच को टोटल में गुड्स जो भेजे, गुड्स सेंड करे, वो करे 5 लाख के, और ब्रांच को जो रिसीव हुए हैं वो 4,60,000 के है। द रीजन फॉर द सेम इज 40,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है 30 मार्च की शाम को गुड्स भेजे गए थे 40,000 के, जो एक्चुअली में ब्रांच को रिसीव हुए हैं 3 अप्रैल को। वो रिसीव ब्रांच को कब हुए? 3 अप्रैल को। तो भाई एचओ तो कह रहा है मैंने भेज दिए, एचओ ने तो कहा मैंने भेज दिए भैया, तो मेरे तो 5 लाख के गुड्स दिख रहे पूरे साल के। ब्रांच के लिए मेरे को मिले 460, क्योंकि 40,000 के गुड्स तो अभी 31 मार्च को रास्ते में है ना। 31 मार्च को कहां है सर? इन ट्रांजिट है। तो दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सर दोनों अपनी जगह ठीक है। अब यहां पर मैं प्रॉब्लम की बात क्या है? एचओ दिखा रहा है कि उसने ब्रांच को बेटा डेबिट किया हुआ होगा 5 लाख से, और ब्रांच ने एचओ को जो सिर्फ क्रेडिट किया हुआ है, जो गुड्स मिले थे वो किया हुआ है 460 से। इनका तो आपस का अकाउंट भी में हेरफेर हो गया ना, टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, क्योंकि ब्रांच ने कहा मेरे को जितने मिले मैंने उतने की एंट्री डाली हुई है, एचओ कहता मैंने जितने भेजे वो उसकी एंट्री डाली। तो हमें क्या करना? कौन रिवर्स करेगा या कौन डालेगा? तो बेटा हम हमेशा, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमेशा बोलता है कि एंट्री हमेशा वो पर्सन डालेगा जिसको भेजा जा रहा था, द रिसिपिएंट। द रिसिपिएंट विल ऑलवेज पास द एंट्री, एंड रिसिपिएंट यहाँ पे कौन है? ब्रांच। तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगी? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ विद 40,000। तो 40,000 से क्या करेगी? वो अपना स्टॉक बढ़ा लेगी, अपना स्टॉक बढ़ा लेगी इफेक्टिवली, और आपके पास जो है 40,000 से उसने एचओ को क्रेडिट कर दिया, जिससे कि एचओ का बैलेंस 460 प्लस 40 करके 5 लाख पूरा हो गया, आपस में टैली हो गया। तो मेरे पास मैंने ये नहीं बोला जो भेज रहा है वो रिवर्स करेगा, नो, जो भेज रहा है वो रिवर्स नहीं करता, जो रिसिपिएंट है वो एंट्री डालेगा। द रिसिपिएंट विल ऑलवेज पास द एंट्री, और आपके पास इन ट्रांजिट थिंग। तो व्हेन द गुड्स आर सेंट फ्रॉम एचओ टू ब्रांच, सो द ब्रांच इज गोइंग टू पास द एंट्री, एचओ इसमें कोई एंट्री नहीं डालेगा, एचओ इसमें कोई एंट्री नहीं डालेगा। इसी का उल्टा बेटा क्या बनता है सर? समथिंग नोन एज कैश इन ट्रांजिट। क्या होता है बेटा? हमारे पास वही हेड ऑफिस है और ब्रांच है। जनरली वैसे भेजता तो एचओ भी है, पर ब्रांच ज्यादातर भेजती है क्योंकि वो सेल करके जो गुड्स आ रही है वो है। तो ब्रांच ने पैसा भेजा हुआ था एचओ को, वो भेजा था बेटा पूरे साल में 8 लाख का, और इनको रिसीव ही जो हुआ है वो 7,80,000 का हुआ है, क्योंकि वो 20,000 का कैश जो एम्प्लॉय के थ्रू भेजा गया था, मान लो 31 मार्च या 30 मार्च को, वो एम्प्लॉय अभी तक पहुंचा ही नहीं हेड ऑफिस। तो अब यहां पर मैं इन ट्रांजिट 8 लाख जो भेजा टू एचओ, लेजर अकाउंट दिख रहा है, वो कहां पे दिख रहा है? वो एचओ के पास। तो जो डेप्रिसिएशन का खर्चा वो कौन है? वो तो ब्रांच की किताबों में, तो खर्चा डेबिट कर दिया ना हमने, जो प्रॉफिट को कम कर देगा ब्रांच के। पर फिक्स्ड एसेट कम कहां करेंगे? वो तो एचओ के पास है, लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट दिख रहा है वो कम कहां करेंगे? एचओ के पास, ठीक है ना। हाँ जी, हमारे पास अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले हम कांसेप्ट को समझे। हेड ऑफिस है बेटा और हमारे पास में ब्रांच है। बेटा हेड ऑफिस ने ब्रांच को टोटल में गुड्स जो भेजे, गुड्स सेंड करे, वो करे 5 लाख के,
और ब्रांच को जो रिसीव हुए हैं वो 4,60,000 के है। द रीजन फॉर द सेम इज 40,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है 30 मार्च की शाम को गुड्स भेजे गए थे 40,000 के, जो एक्चुअली में ब्रांच को रिसीव हुए हैं 3 अप्रैल को। वो रिसीव ब्रांच को कब हुए? 3 अप्रैल को। तो भाई एचओ तो कह रहा है मैंने भेज दिए, एचओ ने तो कहा मैंने भेज दिए भैया, तो मेरे तो 5 लाख के गुड्स दिख रहे पूरे साल के। ब्रांच के लिए मेरे को मिले ही 460, क्योंकि 40,000 के गुड्स तो अभी 31 मार्च को रास्ते में है ना। 31 मार्च को कहां है सर? इन ट्रांजिट है। तो दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल सर दोनों अपनी जगह ठीक है। अब यहां पर मैं प्रॉब्लम की बात क्या है, एचओ दिखा रहा है कि उसने ब्रांच को बेटा डेबिट किया हुआ होगा 5 लाख से, और ब्रांच ने एचओ को जो सिर्फ क्रेडिट किया हुआ है, जो गुड्स मिले थे वो किया हुआ है 460 से। इनका तो आपस का अकाउंट भी में हेरफेर हो गया ना, टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, क्योंकि ब्रांच ने कहा मेरे को जितने मिले मैंने उतने की एंट्री डाली हुई है, एचओ कहता है मैंने जितने भेजे वो उसकी एंट्री डाली। तो हमें क्या करना, कौन रिवर्स करेगा या कौन डालेगा? तो बेटा हम हमेशा, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमेशा बोलता है कि एंट्री हमेशा वो पर्सन डालेगा जिसको भेजा जा रहा था, द रिसिपिएंट। द रिसिपिएंट विल ऑलवेज पास द एंट्री, एंड रिसिपिएंट यहाँ पे कौन है? ब्रांच। तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगी? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ विद 40,000। तो 40,000 से क्या करेगी? वो अपना स्टॉक बढ़ा लेगी, अपना स्टॉक बढ़ा लेगी इफेक्टिवली, और आपके पास जो है 40,000 से उसने एचओ को क्रेडिट कर दिया, जिससे कि एचओ का बैलेंस 460 प्लस 40 करके 5 लाख पूरा हो गया, आपस में टैली हो गया। तो मेरे पास मैंने ये नहीं बोला जो भेज रहा है वो रिवर्स करेगा, नो, जो भेज रहा है वो रिवर्स नहीं करता, जो रिसिपिएंट है वो एंट्री डालेगा। द रिसिपिएंट विल ऑलवेज पास द एंट्री, और आपके पास इन ट्रांजिट थिंग। तो मतलब गुड्स आर सेंट फ्रॉम एचओ टू ब्रांच, सो द ब्रांच इज गोइंग टू पास द एंट्री, एचओ इसमें कोई एंट्री नहीं डालेगा, एचओ इसमें कोई एंट्री नहीं डालेगा। इसी का उल्टा बेटा क्या बनता है सर? समथिंग नोन एज कैश इन ट्रांजिट। क्या होता है बेटा? हमारे पास वही हेड ऑफिस है और ब्रांच है। जनरली वैसे तो भेजता तो एचओ भी है, पर ब्रांच ज्यादातर भेजती है क्योंकि वो सेल करके जो गुड्स आ रही है वो है। तो ब्रांच ने पैसा भेजा हुआ था एचओ को, वो भेजा था बेटा पूरे साल में 8 लाख का, और इनको रिसीव ही जो हुआ है वो 7,80,000 का हुआ है, क्योंकि वो 20,000 का कैश जो एम्प्लॉई के थ्रू भेजा गया था, मान लो 31 मार्च का 30 मार्च को, वो एम्प्लॉई अभी तक पहुंचा ही नहीं हेड ऑफिस। तो अब यहां पर में इन ट्रांजिट है बेटा कितना? इन ट्रांजिट है हमारे पास में 20,000। ट्रांजिट हमारे पास में कितना? 20,000। Now who is going to pass the entry for the sale? Who is going to pass the entry for the sale? So the entry will be passed in this case by the intended recipient who is HO. कौन है बेटा वो? HO। तो HO एंट्री डालेगा, और HO एंट्री क्या डालेगा सर? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। The recipient is going to pass the entry always with value of 20,000 branch. तो द एंट्री विल बी पास ऑलवेज बाय द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जो आपके पास एंट्री डालता है। तो ये हमारे पास चीज आती है, और यहाँ पे ब्रांच कोई एंट्री इसको लेके नहीं डालेगा। ब्रांच ने तो अपनी तरफ से 8 लाख भेजा था, वो तो पहले एंट्री डाल चुका था एचओ टू कैश। एचओ ने नहीं डाली थी ना कैश टू ब्रांच, उसको तो जितना मिला था उतनी डाली थी 780, तो अब वो बाकी 20 की एंट्री डाल देगा, बाकी 20 की एंट्री डाल देगा, विच इज कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। क्या ये बात हमारे पास समझ आई? यस सर, ये तो बहुत ही आसान था आपके पास में, इसमें कुछ था ही नहीं करने वाला। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। अभी चलिए बेटा मेरे साथ में कुछ जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो वी आर गोइंग टू डू विद सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके हैं जनरल एंट्रीज वाले, हम जरा उस पे आते हैं पहले। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमारे स्टडी मैट में वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरल है। गुड्स वर्थ 50,000 भेजे थे हेड ऑफिस ने, बट ब्रांच को अभी तक रिसीव ही कितने हुए टिल क्लोजिंग डेट? सिर्फ 40,000 के। भेजे 50 के, मिले अभी तक 40 के हैं। भेजे 50 के, मिले अब तक 40 के हैं। कह रहे जर्नल एंट्री डाली जाए एचओ की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट की। तो बेटा एंट्री कौन डालेगा और क्या डालेगा? सर एंट्री जो है ना गुड्स इन ट्रांजिट की, विच इज अमाउंटिंग 10,000 हियर, विल बी पास बाय द ब्रांच। तो हमारे पास एंट्री कौन डालेगा सर? एंट्री तो हमारे पास ब्रांच डालेगी। मैं यहाँ शॉर्ट में दिखाता हूं बेटा, ऑब्वियसली इन द एग्जाम नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैं लेजर अकाउंट्स आपके पूरे बनाता हूं, जनरल एंट्रीज में बेटा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना होता है। मैं लेके आया वो फॉर्मेट, आपका पूरे फॉर्मेट में बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, सपोर्टेड विद नरेशन। ठीक है ना? यहाँ करने बैठेंगे तो टाइम खराब करेंगे अपना। मुझे पता होना चाहिए आपको इन द फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पे सीधा अपनी मेन एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री कौन डालेगा सर? एंट्री डालेगी आपके पास ब्रांच, विच इज व्हाट सर? गुड्स इन ट्रांजिट विद 10,000। बेटा 40 की एंट्री तो 10,000 की एंट्री डालेंगे, इसलिए वाज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। बट क्वेश्चन ने मेरे से ये भी बोला है एचओ की एंट्री डाले। पेपर में ऐसे 10-15 क्वेश्चन आ जाए जहां पे नंबर इस चीज के लिखने को मिल जाए, तो हम तो बार-बार लिखने को तैयार है। नो एंट्री, ओ माय गॉड, नो एंट्री लिखने के नंबर है, नो एंट्री लिखने के नंबर है। उसने स्पेसिफिकली बोला था एचओ की एंट्री डालेगा, तो बेटा आपको नो एंट्री लिखना है, नो एंट्री के मार्क्स है। सर ये नंबर तो बोनस है। हाँ बेटा नंबर बोनस है, पर बात ये नंबर तभी मिलेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नो एंट्री लिख के आना है कि एचओ इज नॉट गोइंग टू पास एनी एंट्री, उसके मार्क्स है आपके पास यहाँ। ठीक है ना? तो एचओ की किताब में नो एंट्री, ब्रांच अपने पास एंट्री डालेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास सिमिलर सा ही है, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपके पास। वो सिमिलर था आपके पास क्या बेटा? आपके पास जो है हमें लिख के आना है कि बुक्स ऑफ एचओ नो एंट्री। द रीजन इज ऑब्वियसली बिकॉज़ एंट्री इज पास बाय ब्रांच। आपने ब्रांच की दिखा दी, पर आपने लिखना जरूर है बुक्स ऑफ एचओ नो एंट्री, जैसे मैंने लिखा। ठीक है? आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, एल्फ जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच नागपुर में है। ब्रांच नागपुर इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो अपनी सेपरेट बुक्स बनाती है। ईयर एंड पेज पर पता चला कि गुड्स डिस्पैच करे थे हेड ऑफिस ने 50,000 के, रिसीव्ड हुए ब्रांच को ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 150। जो बैलेंस है वो इन ट्रांजिट है, बैलेंस इन ट्रांजिट 50,000 यानी कि इन ट्रांजिट हो गए। कह रहे व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास बाय ब्रांच? क्या एंट्री डालेगा इसकी? तो ब्रांच ही डालता है। एचओ अगर बोला होता तो एचओ में तो नो एंट्री था, तो ब्रांच ही एंट्री डाल देगा। ब्रांच एंट्री क्या डालेगा सर? अभी तो डाली है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, हमें लिख के आना है कि बुक्स ऑफ एचओ नो एंट्री। द रीजन इज ऑब्वियसली बिकॉज़ एंट्री इज पास बाय ब्रांच। आपने ब्रांच की दिखा दी, पर आपने लिखना जरूर है बुक्स ऑफ एचओ नो एंट्री, जैसे मैंने लिखा। ठीक है? आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, एल्फ जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच नागपुर में है। ब्रांच नागपुर इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो अपनी सेपरेट बुक्स बनाती है। ईयर एंड पेज पर पता चला कि गुड्स डिस्पैच करे थे हेड ऑफिस ने 50,000 के, रिसीव्ड हुए ब्रांच को ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 150।
जो बैलेंस है वो इन ट्रांजिट है, बैलेंस इन ट्रांजिट 50,000 यानी कि इन ट्रांजिट हो गए। कह रहा व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास बाय ब्रांच, क्या एंट्री डालेगा इसकी, तो ब्रांच ही डालता है। एचओ अगर बोला तो एचओ में तो नो एंट्री था, तो ब्रांच ही एंट्री डाल देगा। ब्रांच एंट्री क्या डालेगा सर, अभी तो डाली है, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 50,000, गुड्स इन ट्रांजिट टू आपके पास जो है, हमारे पास जो है 50,000, ठीक है ना, तो नॉट भाई ये हमारे पास हो जाता है। नागपुर में है ब्रांच, नागपुर इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो अपनी सेपरेट बुक्स बनाती है। ईयर एंड पेड पर पता चला कि गुड्स डिस्पैच करे थे हेड ऑफिस ने 50,000 के, रिसीव्ड हुए ब्रांच को ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 150। जो बैलेंस है वो इन ट्रांजिट है, बैलेंस इन ट्रांजिट 50,000 यानी कि इन ट्रांजिट हो गए। कह रहा व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास बाय ब्रांच, क्या एंट्री डालेगा इसकी, तो ब्रांच ही डालता है। एचओ अगर बोला तो एचओ में तो नो एंट्री था, तो ब्रांच ही एंट्री डाल देगा। ब्रांच एंट्री क्या डालेगा सर, अभी तो डाली है, गुड्स इन ट्रांजिट जो के पास जो है क्वेश्चन। आइए जरा जनरल एंट्रीज का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर में जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे साथ साथ में। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, तो ब्रांच ए की बुक्स है, टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलो। ये अपने पास रेक्टिफिकेशन और जो भी आपके पास एडजस्टमेंट करने, जो भी आपने एंट्री नहीं डाली गलत डाल दी तो उसको अपने ठीक करना है। पहला पॉइंट है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 एलोकेटेड टू द ब्रांच। तो एचओ ने खर्चा मैंने कल जैसे आपको ऋतिक रोशन का लेके खर्चा बताया था बेटा बात, कि वो खर्चा हेड ऑफिस एलोकेट कर रहा है 3500 का ब्रांच को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। तो एचओ ने खर्चा ट्रांसफर किया ब्रांच को, ब्रांच ने एंट्री नहीं डाली, तो बेटा सिंपल एंट्री है। हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करूंगा और टू हेड ऑफिस कर दूंगा क्योंकि हेड ऑफिस हमें पास कर रहा है। परचेज एक्सपेंसेस 3500 एलोकेटेड टू द ब्रांच। तो एचओ ने खर्चा मैंने कल जैसे आपको ऋतिक रोशन का लेके खर्चा बताया था बेटा बात, कि वो खर्चा हेड ऑफिस एलोकेट कर रहा है 3500 का ब्रांच को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। तो एचओ ने खर्चा ट्रांसफर किया ब्रांच को, ब्रांच ने एंट्री नहीं डाली, तो बेटा सिंपल एंट्री है। हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करूंगा और टू हेड ऑफिस कर दूंगा क्योंकि हेड ऑफिस हमें पास कर रहा है। तो हमारी एंट्री क्या गई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। आपने कहा सर इसको ना हमारे पास फॉर्मेट में करा दीजिए, लो तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज है, बुक्स किसकी है बेटा, बुक्स ऑफ, सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट आपके पास गिवन नहीं है, 3500। एक्सपेंसेस अकाउंट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि जो आपके पास बीइंग एचओ एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू द ब्रांच नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच, नाउ रिकॉर्डेड। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया एचओ एक्सपेंस, तो बीइंग एचओ एक्सपेंसेस बीइंग एलोकेटेड नाउ रिकॉर्डेड, ये आपके पास नरेशन बन गई, ठीक है ना। देन सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑफ द ब्रांच एसेट्स, जिसका अकाउंट एचओ की बुक्स ने अभी समझाया था, उन ब्रांच एसेट की डेप्रिसिएशन जिसका खाता, जिसका लेजर अकाउंट एचओ की बुक्स में वो प्रोवाइड नहीं करी हमने, कितने की 1500 की। तो क्या एंट्री डालेगी, क्या डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंट्री डालोगे, नहीं सर, क्योंकि वो एसेट अकाउंट एचओ की बुक्स में है, तो एचओ फिक्स्ड एसेट को कम करेगा और डेप्रिसिएशन का खर्चा तो हम ही डालेंगे, तो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन टू एचओ, डेप्रिसिएशन टू एचओ हमारी एंट्री आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन टू एचओ सेकंड की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बेटा मैं एचओ एचओ आपको वर्ड बोल रहा हूं, आप लिखने को एचओ लिख सकते हैं, पर मैं आपको जैसे बोला पूरा प्रॉपर्ली तरीके से करोगे तो पेपर में क्या करके आना है, हेड ऑफिस अपने पास वर्ड यूज करना है, हेड ऑफिस अपने पास वर्ड यूज करना है आपने जरूर, आपने एचओ वर्ड ना लिखना एग्जाम में, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन आना है आपके पास पेपर में, ठीक है ना। तो वहां पे ये ना हो कि आप अपने पास में वहां एचओ एचओ करके लिखा, आप अपने पास बेटर है कि वहां पे क्या ही करेंगे सर, हम वहां पे अपने पास में जो है हम अपने पास डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस ही लिखेंगे पूरा, हेड ऑफिस 1500, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है। अभी आप एचओ लिख लो शॉर्ट में, बट पेपर के अंदर बेटा एक क्वेश्चन आना है, उसमें एटलीस्ट मान के चलो अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो उसमें पूरा नाम ही लिखे हेड ऑफिस, ठीक है। देन अगला आपके पास क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रांच ने पे करी बेटा सैलरी 2000 की एज सैलरी, 2000 रुपीज पे करे सैलरी टू हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। इट इज नॉट अबाउट कि आपने एंट्री नहीं डाली, इट इज अबाउट आपने एंट्री तो डाली पर आपने एंट्री गलत डाल दी। हुआ क्या, ब्रांच ने 2000 की सैलरी दी है, किसको दी है सैलरी, ब्रांच ने 2000 की सैलरी दी हेड ऑफिस के पर्सन को, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, और ये जो अमाउंट पे किया ब्रांच ने ये गलती से डेबिट कर दिया सैलरीज अकाउंट में। लेट अस अंडरस्टैंड हुआ क्या है और होना क्या चाहिए। तो बेटा हमारे पास है एचओ और हमारे पास है ब्रांच, अब खर्चा किसका है, एचओ का है, तो खर्चा सैलरीज का कहां डेबिट होगा, यहां होगा ना। तो पेमेंट किसने करी, ब्रांच ने, तो टू कैश ये आपकी बनती है। सैलरीज की पेमेंट किसकी, एचओ की पेमेंट करी ब्रांच ने, तो एंट्री डलनी चाहिए सैलरीज टू ब्रांच, एचओ डालेगा और ब्रांच डालेगी एचओ टू कैश। हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, ब्रांच की ये थी बेटा सही एंट्री, ब्रांच ने गलत एंट्री क्या डाल दी, ब्रांच ने डेबिट कर दिया बेटा सैलरीज को, ये एंट्री डाली नहीं, ब्रांच ने एंट्री डाली, ब्रांच ने एंट्री डाली और वो गलत एंट्री क्या डाल दी, सैलरीज टू कैश, उसने सैलरीज को डेबिट कर दिया। इट्स अ एरर, इट्स अ एरर बीइंग डन बाय द ब्रांच। क्या एंट्री डालनी थी ब्रांच को, एचओ टू कैश, क्या डाल दी, सैलरीज टू कैश। कैसे ठीक करोगे, कैसे ठीक करोगे, व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री, सर जो सही को डेबिट करना था वो करेंगे और जो गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, एचओ टू सैलरीज, एचओ टू सैलरीज हमारी एंट्री आ जाएगी विद अमाउंट ऑफ 2000। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस टू टू सैलरीज, ठीक है ना। ये हमारे पास एंट्री हो जाती है इस पॉइंट की। देन अगला क्या है, एचओ कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच। तो ब्रांच के किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दी एचओ को, बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय ब्रांच। तो बेटा आपके पास यहां पर में क्या चीज आ रही है,
फोर्थ पॉइंट में अब बेटा भरत बेटा मैं थर्ड को बाद में रिपीट करूंगा, अननेसेसरी वो बीच में फिर से हम पीछे वाले पे जाएंगे, मैं बाद में थर्ड रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपके पास बेटा हमारे पास यहाँ पे पैसे डेटर ने दिए हमें, डेटर ने हमें पैसे दिए हैं और डेटर पैसे जो दे रहा है हमारे वाला वो एचओ को दे रहा है। तो बेटा अगेन यहाँ पर मैं तोड़ के अगर देखोगे तो हुआ क्या, कैश हो रहा है डेबिट, यहाँ डेटर किसके कम हो रहे हैं, ब्रांच की। तो कैश टू डेटर की एंट्री टूट रही है, कैश डेबिट होगा एचओ बुक्स में, डेटर कम होंगे ब्रांच के। तो एंट्री क्या बनी, ये डालेगा कैश टू ब्रांच और ये डालेगा सर एचओ टू डेटर्स, एचओ टू डेटर। तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगी, ब्रांच एंट्री डालेगी एचओ टू डेटर्स, ब्रांच एंट्री क्या डालेगी एचओ टू डेटर्स। ये एंट्री डाली जाएगी ब्रांच के द्वारा। अमाउंट कितना बेटा, अमाउंट हमारे पास 10,000। हमने एंट्री डाली नहीं क्योंकि हमें पता ही अब चला ना, ठीक है ना। सो दिस इज द एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एचओ टू डेटर्स। नाउ नेक्स्ट है अ रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच ने कुछ पैसा भेजा हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को अभी तक नहीं मिला, इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कौन डालेगा, कौन डालेगा, तो ये एंट्री डालेगा एचओ। एचओ दिखाएगा बेटा एंट्री कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच की। पर हम किसकी किताबें बना रहे हैं सर, हम बना रहे हैं ब्रांच की बुक्स। तो क्या कोई ब्रांच की बुक्स में एंट्री आएगी, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। तो नो एंट्री इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आपके पास एंट्री टू बी पास बाय एचओ, हमें एंट्री ब्रांच की बुक्स में नहीं डालनी है क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड करेगा हमारा हेड ऑफिस, एंट्री रिकॉर्ड करेगा बेटा हमारा हेड ऑफिस, इसलिए यहां पर में कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है ना, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, देन अगला है ब्रांच ए ने इनकर करा कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा बेटा 3,000 का ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। हम कौन सी ब्रांच, हम ब्रांच ए है। हमने एडवर्टीजमेंट के खर्चे के पैसे दिए ब्रांच बी के बिहाफ पे, तो ब्रांच बी का खर्चा है ये खर्चा ब्रांच बी का, पेमेंट हमने ब्रांच ए ने करी। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन इन्वॉल्व हो गए सर, यहाँ पे तो और लोग इन्वॉल्व हो गए। अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं, एक है ब्रांच ए, एक है ब्रांच बी और एक है हमारा एचओ। हम डाल रहे वैसे इसकी बुक्स है, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा किसका है, ब्रांच बी का। तो ये यूज करेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। पेमेंट किसने करी, ब्रांच ए ने, तो ये डालेगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब क्या ये अपनी किताबों में एक दूसरे की ब्रांच का नाम यूज करेंगे, नहीं सर, आपने सिखाया था ब्रांचेस अपनी किताब में दूसरी ब्रांच का नाम नहीं यूज करती, वो सीधा एचओ को करती है। तो ये डालेगा एचओ टू कैश बैंक, ये डालेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू एचओ। ठीक है ना, और एचओ क्या करेगा, ब्रांच बी टू ब्रांच ए कर देगा। बेसिकली ब्रांच बी ने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया, और वो ब्रांच बी को बेसिकली वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और वाइस वर्सा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि क्या होगी। हम तो ब्रांच ए की एंट्री डाल रहे हैं, विच विल बी एचओ टू कैश बैंक, विच विल बी एचओ टू कैश बैंक लास्ट एंट्री। कितना अमाउंट है बेटा, अमाउंट देख लेते हैं सर। अमाउंट है 3,000 का। हाँ जी, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। सर एक बार के लिए थर्ड वाला दोबारा बता दो ना। लो बेटा थर्ड वाला दोबारा बताता हूं, जो बच्चे पूछ रहे थे। बेटा थर्ड वाला केस था एरर का। अभी तो बाकी क्या थे कि एंट्री डाली नहीं, एरर ऑफ ओमिशन था एक तरीके का। थर्ड वाला था कि एरर ऑफ कमीशन हो गया, एक तरीके से आपने गलत अकाउंट ही यूज कर लिया। तो वहां पे आपने गलत अकाउंट को अपने पास इस्तेमाल कर लिया, जिसमें बोला था सैलरी पे करी थी एचओ के पर्सन को, बट अमाउंट जो पे किया वो ब्रांच ने डेबिट कर दिया सैलरीज अकाउंट को। तो हम तो राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करते बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे बचपन में सिखाई जाती है रेक्टिफिकेशन, वैसे किया। तो एंट्री डालनी चाहिए थी एचओ को, डालनी चाहिए थी सैलरीज टू ब्रांच, और ब्रांच को डालनी चाहिए थी एचओ टू कैश। ये सही एंट्री थी। पर ब्रांच ने एंट्री का डाल दी सैलरीज टू कैश, उसने गलती से डेबिट सैलरी को कर दिया। उसकी सैलरी थोड़ी ना, एचओ की सैलरी। तो आपको तो एंट्री एचओ टू कैश करनी थी, आपने कर दी सैलरीज टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एचओ टू सेल, एचओ टू सेल। ठीक है ना, ठीक है। हमारे पास जो है, यस सर अभी क्लियर पिक्चर आया नो एंट्री का, थैंक यू सर। सर फोर्थ वाला एंट्री एक बार और बता दीजिए। फोर्थ एंट्री भी बताओ। फोर्थ एंट्री में तो बेटा आई कुछ नहीं, आपके अभी तो बात करी, हमारे कस्टमर ने सीधा पैसे एचओ को दे दिए, तो कल केस किया था हमने। तो बेटा कैश कहां डेबिट हुआ, एचओ की बुक्स में। डेटर किसके कम होंगे, हमारे ब्रांच के। बाकी आपस का अकाउंट हो गया, हम तो पूरी चीज समझिए। तो बेटा एचओ क्या डाल रहा होगा, कैश टू ब्रांच। हम क्या डालेंगे, एचओ टू डेटर। डेटर तो हमारे कम हुए ना, हमने एंट्री नहीं डाली, तो हम एंट्री क्या डालेंगे, एचओ टू डेटर, क्योंकि डेटर ने पैसे कहां दे दिए, सीधा हेड ऑफिस में दे दिए। तो कैश टू आपके पास ब्रांच एचओ डालेगा, हम डालेंगे एचओ टू डेटर। तो इसके साथ में आपके पास ये वाला क्वेश्चन एब्सोल्युटली पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अबाउट, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, ये आपके पास मैंने आपको चीज बोली थी बेटा कि हमारे पास जो हेड ऑफिस है वो आपके पास क्या करता है, वो सारी ब्रांचेस के अकाउंट मेंटेन करता है, वो सारी ब्रांचेस के अकाउंट मेंटेन करता है फॉर द ट्रांजैक्शंस इवन व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन द ब्रांचेस। और वहां पे अगर मैं आपसे सीधा बोलूं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ब्रांच के बीच में, अगर उसकी एंट्री एचओ को डालनी है तो क्या प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल आपने बड़ा क्लियरली सिखाया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर सीधा जानना है कि एचओ क्या करेगा, एचओ क्या एंट्री डालेगा, तो ये क्वेश्चन उसी को लेकर, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा 8 नंबर तक का क्वेश्चन आया हुआ है कभी पुराने टाइम में एग्जाम में। तो आपके पास में इस क्वेश्चन को जरा देखते और करते हैं। कह रहे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री डाली जाए एचओ की बुक्स में महीने के आखिरी में, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस, एज्यूमिंग सिर्फ हेड ऑफिस ही मेंटेन करते हैं सारी ब्रांचेस के अकाउंट, तो एचओ ही मेंटेन करता है। अब हो क्या रहा है, पूरे महीने में बेटा ब्रांचेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, एक ब्रांच बी को दे रही है, बी वाली सी को दे रही है, बी वाली ए से भी ले रही है, तो आपस में बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है। अब एचओ बार बार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर एक एंट्री डाली जाएगा, एचओ की तो किताबें भर जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एंट्री डाल दो पूरे महीने का इफेक्ट देके। तो पूरे महीने में अगर 10 20 30 एंट्री हुई है, सबका नेट निकाल लो कि भाई किस ब्रांच में डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो आप अपनी वर्किंग अब वो सारी ब्रांचेस के अकाउंट मेंटेन करता है, और कोई चीज होंगे हमारे ब्रांच के। बाकी आपसे सर फोर्थ वाला एंट्री एक बार और बता दीजिए। फोर्थ एंट्री भी बताओ।
फोर्थ एंट्री में तो बेटा आई कुछ नहीं, आप किसके कम होंगे, हमारे ब्रांच कम हुए ना, हमने डालेंगे एच टू डेटा। तो इसके साथ में आपके पास ये वाला क्वेश्चन एब्सोल्युटली पूरा इन टू एंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अबाउट, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, ये आपके पास मैंने आपको चीज बोली थी बेटा कि हमारे पास जो हेड ऑफिस है वो आपके पास क्या करता है, वो सारी ब्रांचेस के अकाउंट मेंटेन करता है, वो सारी ब्रांचेस के अकाउंट मेंटेन करता है फॉर द ट्रांजैक्शंस इवन व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन द ब्रांचेस। और वहां पे अगर मैं आपसे सीधा बोलूं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ब्रांच के बीच में, अगर उसकी एंट्री एचओ को डालनी है तो क्या प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल आपने बड़ा क्लियरली सिखाया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर सीधा जानने के एचओ क्या करेगा, एचओ क्या एंट्री डालेगा, तो ये क्वेश्चन उसी को लेकर, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा 8 नंबर तक का क्वेश्चन आया हुआ है कभी पुराने टाइम में एग्जाम में। तो आपके पास में इस क्वेश्चन को जरा देखते और करते हैं, कह रहे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री डाली जाए एचओ की बुक्स में महीने के आखिरी में, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग सिर्फ हेड ऑफिस ही मेंटेन करते हैं सारी ब्रांचेस के अकाउंट, तो एचओ ही मेंटेन करता है। अब हो क्या रहा है, पूरे महीने में बेटा ब्रांचेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, एक ब्रांच बी को दे रही है, बी वाली सी को दे रही है, बी वाली ए से भी ले रही है, तो आपस में बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है। अब एचओ बार बार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की एक एंट्री डाली जाएगा, एचओ की तो किताबें भर जाएगी। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एंट्री डाल दो पूरे महीने का इफेक्ट। अब इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग सिर्फ हेड ऑफिस ही मेंटेन करते हैं सारी ब्रांचेस के अकाउंट, तो एचओ ही मेंटेन करता है। अब हो क्या रहा है, पूरे महीने में बेटा ब्रांचेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, एक ब्रांच बी को दे रही है, बी वाली सी को दे रही है, बी वाली ए से भी ले रही है, तो आपस में बहुत ट्रांजैक्शन हो रही है। अब एचओ बार बार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर की एक एंट्री डाली जाएगा, एचओ की तो किताबें भर जाएगी। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एंट्री डाल दो पूरे महीने का इफेक्ट देके, तो पूरे महीने में अगर 10 20 30 एंट्रियां हुई है तब का नेट निकाल लो कि भाई किस ब्रांच को डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आप अपनी वर्किंग बना लो और हमारी किताब में एक एंट्री डाल दो। पर प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा सर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैं फिर से यहां लिख के छोड़ रहा हूं, यहां पे बेटा एचओ की बुक्स में जो प्रिंसिपल है करने का, वो हमारा जो आपका पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दो चीजों के ऊपर अहम बात है कि प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान है सीधा एचओ की किताब में एंट्री डालने के लिए, और दूसरा हमारा जो वर्किंग हम बनाएंगे, जो वर्किंग अपने पास बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं हमारे क्वेश्चन में दिया ट्रांजैक्शन बिटवीन द ब्रांचेस, जैसे एक दिया दिल्ली ब्रांच के बारे में, उसने क्या गुड्स खरीदे बेचे आपको सारी बता रहा है। फिर ऐसी मुंबई ब्रांच की ट्रांजैक्शन बता रहा है ऊपर वाली के अलावा जो मुंबई की और हुई। फिर ऐसी चेन्नई ब्रांच की ट्रांजैक्शन बता रहा है, ऐसी कोलकाता ब्रांच की ट्रांजैक्शन बता रहा है। तो देयर आर 4 ब्रांचेस इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड हमने इसको करते हैं अपने पास ये टोटल में 11 ट्रांजैक्शन है हमारे क्वेश्चन में। हमने इसको देखते हुए क्वेश्चन को करना है। हम क्या करते हैं बेटा, अपना एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं, और हम क्या करेंगे, अपनी ब्रांचेस के यहाँ पे नाम लिखेंगे। कौन कौन सी ब्रांचेस है, एक कॉलम बनेगा बेटा आपका, एक तरीके से पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, और जो भी आपकी ब्रांचेस है चारों उसका नाम लिखना है, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। तो देयर इज अ दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच एंड कोलकाता ब्रांच, ठीक है ना। हम अपने पास कुछ इस तरीके से अपना टेबल बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे सबसे पहले किस ब्रांच की बात कही है, तो सबसे पहले उसने दिल्ली ब्रांच के बारे में बताया, मतलब ट्रांजैक्शन दिल्ली ब्रांच के नजरिए से बताई गई है कि दिल्ली ब्रांच ने कितनी वैल्यू के गुड्स खरीदे बेचे, पैसा भेजा, पैसा लिया। तो दिल्ली ब्रांच एक इन्वॉल्व हो रही होगी। सबसे पहले क्या बोला उसने, दिल्ली ब्रांच को गुड्स मिले हैं, रिसीव्ड गुड्स है। तो मुंबई से मिले 35,000 के, 15,000 के मिले कोलकाता से, मुंबई से 35 के, कोलकाता से 15 के। तो दिल्ली को मिल रहे हैं, तो जिसको मिल रहे हैं हेड ऑफिस उसे क्या करेगा सर, डेबिट करेगा। जिसको मिल रहे हैं वो दिल्ली को मिल रहे हैं, तो हेड ऑफिस बेसिकली दिल्ली को डेबिट करेगा, और मुंबई और कोलकाता को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। मुंबई और कोलकाता को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ये रिसीव्ड गुड्स आपके पास है, तो 50,000 से दिल्ली क्या कर देगा, वो डेबिट। तो डेबिट हम ब्रैकेट में डेबिट क्रेडिट लिखते जाएंगे। मुंबई को 35,000 से क्रेडिट करेगा, बेटा एंट्रीज डालने की जरूरत नहीं है, हम उसका सीधा इफेक्ट यहाँ पे लिखते जा रहे हैं और बाद में नेटिंग कर देंगे। और कोलकाता को 15,000 से क्रेडिट कर देगा, कोलकाता को 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, दिल्ली डेबिट हुई टू मुंबई टू कोलकाता, आपके पास बन गई एंट्री। वो हमने यहाँ टेबल में दिखा दिया, हम बाद में नेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। सब करने के बाद फिर हमारे पास अगली चीज क्या है, सर गुड्स भेजे जा रहे हैं, चेन्नई को 25,000 और कोलकाता को 20,000। तो भेजे किसने भेजे, दिल्ली ने। अब जिसको मिल रहे हैं वो डेबिट होगा ना एचओ के बुक्स में, जिसको मिल रहे हैं विच इज चेन्नई एंड कोलकाता। तो सेंट गुड्स है, तो चेन्नई और कोलकाता आपके पास डेबिट होंगे, कितने कितने से, 25 एंड 20। तो 25,000 से ये डेबिट हो गया और 20,000 से ये डेबिट हो गया, और दिल्ली क्या हो जाएगी 45,000 से क्रेडिट। ये किताबें बना रहे हैं सर, एचओ की बुक्स बना रहे हैं, आप बार बार भी एंट्री डाल दीजिए, डेबिट क्रेडिट पूरा लिख लिख, एक ब्रांच डेबिट एक ब्रांच क्रेडिट, बट दैट विल टेक टाइम। तो वो क्या करें, टेबल के थ्रू हम निकाल रहे हैं और फिर पूरे महीने की एक एंट्री निकाल देंगे, ठीक है ना, नेट एंट्री बना देंगे। देन थर्ड क्या है, थर्ड आपके पास में बीआर जो मिला 20,000 चेन्नई से, 20,000 चेन्नई से जो बीआर मिल रहा है, तो बीआर रिसीव 20,000 मिला है दिल्ली को, तो दिल्ली डेबिट हुआ, और चेन्नई से मिला तो चेन्नई क्रेडिट हुआ, चेन्नई क्रेडिट हुआ। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बड़ा क्लियर सा प्रिंसिपल है, इजीली क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले दूसरे की ब्रांच सोचोगे, वहां सोचोगे उसने क्या एचओ को किया, बेटा वो तो बहुत समय खा जाएगा ना आपका, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका हो गया। तो दिल्ली आपके पास, तो चेन्नई, और फिर एक्सेप्टेंस इज सेंट, अब ये भेजी है, मतलब बीपी वाला हो गया कि इसने भेजा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। मुंबई 25 कोलकाता 10, तो मुंबई 25 एंड कोलकाता 10 आपके पास है, मुंबई 25 एंड कोलकाता 10, जिनको मिल रहा है वो डेबिट हो गए, और भेजने वाला कौन है, दिल्ली। एक्सेप्टेंसेस जो भेजे जा रहे हैं अब देगा ना आपका, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका हो गया। तो दिल्ली आपके पास, तो चेन्नई, और फिर
एक्सेप्टेंस इज सेंट, अब ये भेजी है, मतलब बीपी वाला हो गया कि इसने भेजा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। मुंबई 25, कोलकाता 10, तो मुंबई 25 एंड कोलकाता 10 आपके पास है। मुंबई 25 एंड कोलकाता 10, जिनको मिल रहा है वो डेबिट हो गए, और भेजने वाला कौन है? दिल्ली। एक्सेप्टेंसेस जो भेजे जा रहे हैं, ठीक है जी, यहां तक बात हमें क्लियर हुई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास गला बेटा अभी दिल्ली ब्रांच का। वैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रांच है मुंबई ब्रांच की ट्रांजेक्शन। अब मुंबई ब्रांच के नजरिए से बात होगी, ठीक है ना। अब मुंबई ब्रांच के नजरिए से बात होगी बेटा। तो मुंबई ब्रांच क्या कर रहा है? मुंबई ब्रांच को बेटा आपके पास में क्या गुड्स मिले हैं? कोलकाता से 15 के, दिल्ली से 20 के, ऊपर वाली के अलावा ही, मतलब ओवर एंड अबव है, 4 हो चुके उसके अलावा अभी मुंबई के नजरिए से। तो मुंबई अब क्या होगा? कोलकाता और दिल्ली बेटा वो भेज रहे हैं, वो क्रेडिट हो जाएंगे और मुंबई डेबिट हो जाएगा। तो कोलकाता और दिल्ली 15 एंड 20, ठीक है ना, भेज कैश तो फिर कोलकाता, तो हम अपने पास दिल्ली, तो डेबिट। सर अगला हमारे पास आ रहा है तो 35,000 के चेन्नई 1000 को पास। लास्ट वन इज आपके पास डेबिट कितना, आपके पास क्रेडिट, नेटिंग करके हमने बताना है ताकि एक बात पता चल जाए कौन सी ब्रांच को नेट में कितने से डेबिट या क्रेडिट करना है। तो हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डालिए, एक एक करके नेट निकाल लेते हैं। तो 50,000 डेबिट है तो प्लस हो गया, 45 क्रेडिट है माइनस कर दिया, 320 डेबिट माइनस 35 माइनस 20,000 प्लस 15,000, तो माइनस 15 मतलब वो क्रेडिट आ गया, 15,000 से क्रेडिट आया दिल्ली का। तो दिस इज 15,000 क्रेडिट, ठीक है ना। चेक करते जाएंगे बेटा एक एक ब्रांच कैसी। देन आपके पास जो अगला है मुंबई ब्रांच, डेबिट वाले आपके पास है 25,000 प्लस 35,000 माइनस 35,000 माइनस 22,000, तो 3,000 डेबिट आपके पास ये आ रहा है, 3,000 डेबिट, ठीक है ना। पहला 15,000 क्रेडिट था, अगला 3,000 डेबिट है। नेक्स्ट चेन्नई ब्रांच, तो 25 माइनस 20,000, ये आपके पास डेबिट क्रेडिट नहीं हो गया, ये आपका प्लस है, प्लस 35 प्लस 15 प्लस 50, तो 70,000 से डेबिट, 70,000 से डेबिट। और लास्ट वन आपके पास जो है डेबिट वाले है 20 प्लस 10 प्लस 7, बाकी माइनस कर दिया मैंने 15 एक, 15 एक आपके पास 30 कैंसिल हो गया, माइनस आपका 35,000 माइनस 30,000, 58,000 बेटा क्रेडिट। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, आपका तभी नेट एंट्री बनेगी। इंडिविजुअली तो फाइनल भी तो प्लस माइनस करेंगे वही आएगा। और ये एंट्री क्या बन गई हमारी? फाइनल एंट्री बेटा जो बन के आई वो ये निकल के आई, मुंबई ब्रांच डेबिट हो रही है विच इज 3,000, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 70,000 टू दिल्ली ब्रांच 15,000 टू कोलकाता ब्रांच। तो ये हमारे पास फाइनल एंट्री आपके पास बन जाती है, ये हमारे पास बेटा फाइनल एंट्री बन जाती है। चेक कर लेंगे बेटा सारे के सारे बच्चे हमारे पास जो है। तो हमारे पास बेटा फटाफट से जरा आएंगे, फटाफट से आएंगे जरा, ये आपके पास क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है क्या? यस सर, ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन में क्लियर हुआ है? फटाफट से मुझे बता देंगे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। आपके साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट एक दो चीजों को लेकर बात करना और एक आपको होमवर्क भी देना है, आप लोगों को होमवर्क भी देना है। बिफोर आई गिव यू द होमवर्क एंड द अदर थिंग्स बेटा, आप लोगों को वन थिंग एवरी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं बेटा, वन इज आपके पास जेडमी पे देयर आर टू आइकॉनिक कैन एक्चुअली योर फर्स्ट एटलीस्ट एट काइंड ऑफ जो पास में अपने पास अल्टीमेटली हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जरा हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। आज के सेशन मुझे कंफर्म कर देंगे इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? यस 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन है कि नहीं है? यस 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 मुझे बताएंगे, मुझे कंफर्म कर देंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे बच्चे जरा जुड़ जाए हमारे आज के सेशन में। एंड हम अपने पास कर रहे हैं बेटा टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स का। यस गुड मॉर्निंग समृद्धि बेटा, कैसे हैं? यस 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 सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है द टॉपिक इज ब्रांच अकाउंटिंग का। आज है बेटा लेक्चर नंबर 6। हम अपने पास डिपेंडेंट ब्रांच कर चुके हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में हमने पिछली बार कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी से रिलेटेड हम अपने पास चीजों में आगे बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम अपने पास चीजों में आगे बढ़ेंगे। यस बेटा नंबर बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एवरीवन जस्ट जॉइन द सेशन एंड उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट आज के सेशन में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एजुकेटिंग फॉर सेंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट। आप बच्चों को मैंने अपनी तरफ से कुछ गृह कार्य भी दिया था वैसे पिछली बार में, और साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या बच्चों को जो मैं चैप्टर कर रहे हैं क्या आपको अच्छे से समझ आ रहा है? बिकॉज अगर आप जब तक अपने पास चीजों को, मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं पढ़ेंगे नहीं रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं तो आप लोगों को यहाँ पे करा ही रहा हूं, हम अपने पास बारीकी से इंटू अपने पास चीजों को कर रहे हैं, हम अपने पास क्वेश्चंस को भी खुद कर रहे हैं प्रॉपर्ली सॉल्व, बट हमें बहुत जरूरी होता है कि हम चीजों को रिवाइज भी करें और फिर उसको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग अपने पास प्रभास बेटा, कृष्णा, आकाश। यस सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो पता नहीं अभी सुबह सुबह कौन याद कर पाए। हाँ जी, तो
मेरे पास बेटा यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर में हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ सेशंस आपके पास हो चुके हैं जो आपको इसी YouTube चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और हम अपने पास अभी इसमें अभी आज के सेशन के अलावा भी दो आपके पास सेशन अभी और लग जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में इंडिपेंडेंट ब्रांच हमने क्वेश्चन करने कुछ बड़े वाले, फिर हमने फॉरेन ब्रांच का भी टॉपिक करना होगा। आप बच्चों को साथ के साथ बेटा मैं बता देता हूँ, आप बच्चों ने बेटा अगर अभी तक भी जो मेरा टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है अगर उसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर है कि उसे अपने पास ज्वाइन करके रख लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ग्रुप का भी और चैनल का भी, ताकि आप बच्चों को सारे सेशंस के अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही बच्चों के साथ वहीं पे एक ट्रैकर शेयर है जिसके अंदर सारे सेशंस के लिंक्स अवेलेबल है, सारे सेशंस के लिंक्स अवेलेबल है। हाँ जी, तो आप बच्चे सभी तैयार है? यस सर, हम सभी बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए का टॉपिक। यस बेटा भरत बेटा, आज हमारे पास रिडम्पशन प्रेफरेंशियल की क्लास भी होगी, वो 4 बजे होती है। उसमें हम कोशिश करेंगे आज वो टॉपिक को खत्म करने की, ठीक है ना? तो वो वाली क्लास स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, वो मैं अंत में इस सेशन के भी बता दूंगा, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच में बेटा मेन फर्क क्या था? डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही ब्रांच की सारी किताबें बनाता है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में सर हमारे पास में ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बना रही है डबल एंट्री पे। तो ब्रांच की अपनी बुक्स बन रही है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स बना रहा है। क्या ये दोनों अपने अपने किताबों में एक दूसरे का लेजर अकाउंट भी खोलते थे? आंसर इज यस, जिसको लेकर हमने सारी एंट्रीज अपने पास समझी थी। जब आपके पास बेटा यहाँ पर में ध्यान से सुनेंगे, जब आपके पास यहाँ पर में दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी किताबों में एंट्रीज डाल रहे हैं, एक दूसरे का लेजर अकाउंट खोल रहे हैं, तो वहां पर में ईयर एंड पे एक वैकेंसी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की सारी किताबें मैं इस सेशन के भी बता दूंगा, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच में बेटा मेन फर्क क्या था? डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही ब्रांच की सारी किताबें बनाता है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में सर हमारे पास में ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बना रही है डबल एंट्री पे। तो ब्रांच की अपनी बुक्स बन रही है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स बना रहा है। क्या ये दोनों अपने अपने किताबों में एक दूसरे का लेजर अकाउंट भी खोलते थे? आंसर इज यस, जिसको लेकर हमने सारी एंट्रीज अपने पास समझी थी। जब आपके पास बेटा यहाँ पर में ध्यान से सुनेंगे, जब आपके पास यहाँ पर में दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी किताबों में एंट्रीज डाल रहे हैं, एक दूसरे का लेजर अकाउंट खोल रहे हैं, तो वहां पर में ईयर एंड पे रिकंसिलिएशन की बात आती है, कुछ एंट्रीज बता दूंगा डूइंग द टॉपिक। हम लोग, आप बच्चे सभी तैयार है? यस सर, हम सभी बच्चे तैयार है पढ़ने के लिए। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा ब्रांच अकाउंटिंग का, इसके अंदर में हम लोगों ने गुड मॉर्निंग आकृति, आज भी बेटा सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम बेटा अपने पास जो कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में वी आर डूइंग द टॉपिक इनलैंड ब्रांच के अंदर अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक, इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक। यस बेटा भरत बेटा, आज हमारे पास रिडम्पशन प्रेफरेंशियल की क्लास भी होगी, वो 4 बजे होती है। उसमें हम कोशिश करेंगे आज वो टॉपिक को खत्म करने की, ठीक है ना? तो वो वाली क्लास स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, वो मैं अंत में इस सेशन के भी बता दूंगा, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच में बेटा मेन फर्क क्या था? डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही ब्रांच की सारी किताबें बनाता है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में सर हमारे पास में ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बना रही है डबल एंट्री पे। तो ब्रांच की अपनी बुक्स बन रही है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स बना रहा है। क्या ये दोनों अपने अपने किताबों में एक दूसरे का लेजर अकाउंट भी खोलते थे? आंसर इज यस, जिसको लेकर हमने सारी एंट्रीज अपने पास समझी थी। जब आपके पास बेटा यहाँ पर में ध्यान से सुनेंगे, जब आपके पास यहाँ पर में दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी किताबों में एंट्रीज डाल रहे हैं, एक दूसरे का लेजर अकाउंट खोल रहे हैं, तो वहां पर में ईयर एंड पे एक रिकंसिलिएशन की बात आती है, कुछ एंट्रीज ऐसा होता है हेड ऑफिस ने ना डाली, ब्रांच ने डाली, लाइक हमने समझा था गुड्स इन ट्रांजिट होता है, कैश इन ट्रांजिट होता है, हमने वो सारी चीजें समझी थी पिछली बार में, और हमने एंट्रीज भी करी थी। फिर जब दो ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, जैसे आपके पास ये वाला हमने किया था 12 और इससे रिलेटेड फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किया था, हमने क्या बोला था? जब दो आपके पास ब्रांचेस के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो ऑलवेज क्या बोलते हैं हम लोग? दैट ट्रांजैक्शन विल बी रूटेड थ्रू हेड ऑफिस, ताकि ब्रांच की किताब में सिर्फ एचओ का ही अकाउंट होता है, ठीक है ना? एंड सिंस आपके पास जो है ब्रांचेस हमारे पास जो है अपने अपने किताबें खुद बना रही है डबल एंट्री से, तो उसका खुद का ट्रायल बैलेंस होगा, वो खुद का ट्रेडिंग पीएनएल बना सकती है, क्योंकि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अपने आप में पूरे का पूरा अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, ठीक है ना? सो ये हमारे पास हमने चीजें थी जो लास्ट टाइम हमने चीजें करी, अपने पास क्वेश्चंस को लेके भी किया, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कराए मैंने आपको, फिर हमने अपने पास में क्या किए थे क्वेश्चंस, आपके पास एक सिंगल जो हेड ऑफिस एंट्री डालेगा उसको लेके बात करी, वो सारी चीजों को लेके बात करी। अब मैं फिर से एक चीज के बारे में बात करूंगा, क्या ब्रांच अपनी खुद की डबल एंट्री के हिसाब से किताबें बना रहा है? तो क्या ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा? क्या ब्रांच का अपने ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा? आंसर इज यस। तो बेटा हमारे पास जो है ब्रांच की अपने एंड पे किताबें बन रही है, तो ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, ठीक है ना? हमारे पास में यहां पर में हमारे पास में ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा। अब ट्रायल बैलेंस जब अवेलेबल होगा तो उस केस में हेड ऑफिस का भी होगा, यस सर, हेड ऑफिस का भी होगा, मतलब हेड ऑफिस का भी अवेलेबल है, ब्रांच का भी अवेलेबल है, दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। और क्या अगर दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है तो क्या दोनों अपने अपने इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस के बेस पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों अपने 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 पास जो है बना सकते हैं बेटा, हेड ऑफिस और ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट अपना अपना बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होता है, दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, तो दोनों का अपना अपना ट्रेडिंग बन सकता है, जिससे अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना? और बैलेंस शीट जो है वो इंडिविजुअली भी बन सकती है अपनी अपनी, या कंबाइन करके बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत? तो हमें ये चीज के बारे में क्लैरिटी है। नाउ हमारे पास बेटा हमें क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपको इस चीज के बारे में समझाएगा। तो कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपके पास है इन द न्यू स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे हम अपने पास आते हैं बेटा, और इलस्ट्रेशन को देखते जरा कि इस इलस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब बनाना, एक फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को जरा देखते पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है यहाँ पर में, केपी मैन्युफैक्चर करता है एक रेंज ऑफ गुड्स, केपी मैन्युफैक्चर कर रहा है बेसिकली एक रेंज ऑफ गुड्स जो आपको अपने पास सेल करता है अपने होलसेल कस्टमर्स को, ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। तो उसने बोला बेसिकली जो केपी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो गुड्स बनाता है जो होलसेल कस्टमर्स को देता है अपने हेड ऑफिस से। इसके अलावा एचओ ट्रांसफर करता है गुड्स अपनी न्यूली ओपन ब्रांच को भी, कॉस्ट प्लस 15%। तो बेसिकली हेड ऑफिस बाहर लोगों को भी बेच रहा है और अपने पास जो है ब्रांच को भी दे रहा है, और जो ब्रांच को दे रहा है वो कॉस्ट प्लस 15% पे दे रहा है। प्राइसेस की सारी बात करेंगे। ब्रांच देन गुड्स बेचती है जनरल पब्लिक को कैश बेसिस पे, ब्रांच आगे अपने कस्टमर्स को अपने पास आगे बेच रही है। जो सेलिंग प्राइस होलसेल कस्टमर्स को डिजाइन है वो इस तरीके से है कि प्रॉफिट आता है विच अमाउंट टू 30% ऑफ द सेल। तो हेड ऑफिस को जो प्रॉफिट आ रहा है आगे लोगों को बेचने को 30% डिजाइन के बारे में समझाएगा। तो ट्रेडिंग और मतलब है। अब मैं फिर से एक चीज के बारे में बात करूंगा, क्या ब्रांच अपनी खुद की डबल एंट्री के हिसाब से किताबें बना रहा है? तो क्या ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा? क्या ब्रांच का अपने ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा? आंसर इज यस। तो बेटा हमारे पास जो है ब्रांच की अपने एंड पे किताबें बन रही है,
तो ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा, ठीक है ना। हमारे पास में यहां पर में हमारे पास में ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा। अब ट्रायल बैलेंस जब अवेलेबल होगा तो उस केस में हेड ऑफिस का भी होगा। यस सर, हेड ऑफिस का भी होगा, मतलब हेड ऑफिस का भी अवेलेबल है, ब्रांच का भी अवेलेबल है, दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। और क्या अगर दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है तो क्या दोनों अपने अपने इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस के बेस पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों अपने 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 पास जो है बना सकते हैं बेटा, हेड ऑफिस और ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट अपना अपना बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, दोनों का अपना अपना ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, तो दोनों का अपना अपना ट्रेडिंग बन सकता है, जिससे अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। और बैलेंस शीट जो है वो इंडिविजुअली भी बन सकती है अपनी अपनी, या कंबाइन करके बना दी तो उसमें क्या दिक्कत। तो हमें ये चीज के बारे में क्लैरिटी है। नाउ हमारे पास बेटा हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपको इस चीज के बारे में समझाएगा। तो कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपके पास है इन द न्यू स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे हम अपने पास आते बेटा, और इलस्ट्रेशन को देखते जरा। इस इलस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेगा हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब बनाना, एक फाइनल अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को जरा देखते पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पर में केपी मैन्युफैक्चर करता है एक रेंज ऑफ गुड्स, केपी मैन्युफैक्चर कर रहा है बेसिकली एक रेंज ऑफ गुड्स जो आपको अपने पास सेल करता है अपने होलसेल कस्टमर्स को, ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। तो उसने बोला बेसिकली जो केपी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो गुड्स बनाता है जो होलसेल कस्टमर्स को देता है अपने हेड ऑफिस से। इसके अलावा एचओ ट्रांसफर करता है गुड्स अपनी न्यूली ओपन ब्रांच को भी, कॉस्ट प्लस 15%। तो बेसिकली हेड ऑफिस बाहर लोगों को भी बेच रहा है और अपने पास जो है ब्रांच को भी दे रहा है, और जो ब्रांच को दे रहा है वो कॉस्ट प्लस 15% दे रहा है। प्राइसेस की सारी बात करेंगे। ब्रांच देन गुड्स बेचती है जनरल पब्लिक को कैश बेसिस पे, ब्रांच आगे अपने कस्टमर्स को अपने पास आगे बेच रही है। जो सेलिंग प्राइस होलसेल कस्टमर्स को डिजाइन है वो इस तरीके से है कि प्रॉफिट आता है विच अमाउंट टू 30% ऑफ द सेल। तो हेड ऑफिस को जो प्रॉफिट आ रहा है आगे लोगों को बेचने वो 30% ऑफ सेल आता है। सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक डिजाइन इस तरीके से हो रहा है कि ग्रॉस मार्जिन आ रहा है बेटा हमारे पास में, सेलिंग प्राइस इज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ, मतलब एचओ से खरीद पड़ती है उसके बाद जो इस तरीके से बेच रही है ब्रांच भी, कि उसको भी 30% ऑफ सेल्स का ही प्रॉफिट आ रहा है, 30% ऑफ सेल्स के प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब कस्टमर्स को ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। तो उसने बोला बेसिकली जो केपी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो गुड्स बनाता है जो होलसेल कस्टमर्स को देता है अपने हेड ऑफिस से। इसके अलावा एचओ ट्रांसफर करता है गुड्स अपनी न्यूली ओपन ब्रांच को भी, कॉस्ट प्लस 15%। तो बेसिकली हेड ऑफिस बाहर लोगों को भी बेच रहा है और अपने पास जो है ब्रांच को भी दे रहा है, और जो ब्रांच को दे रहा है वो कॉस्ट प्लस 15% पे दे रहा है। प्राइसेस की सारी बात करेंगे। ब्रांच देन गुड्स बेचती है जनरल पब्लिक को कैश बेसिस पे, ब्रांच आगे अपने कस्टमर्स को अपने पास आगे बेच रही है। जो सेलिंग प्राइस होलसेल कस्टमर्स को डिजाइन है वो इस तरीके से है कि प्रॉफिट आता है विच अमाउंट टू 30% ऑफ द सेल। तो हेड ऑफिस को जो प्रॉफिट आ रहा है आगे लोगों को बेचने वो 30% ऑफ सेल आता है। सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक डिजाइन इस तरीके से हो रहा है कि ग्रॉस मार्जिन आ रहा है बेटा हमारे पास में, सेलिंग प्राइस इज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ, मतलब एचओ से खरीद पड़ती है उसके बाद जो इस तरीके से बेच रही है ब्रांच भी, कि उसको भी 30% ऑफ सेल्स का ही प्रॉफिट आ रहा है, 30% ऑफ सेल्स का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ, अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो वी हैव अ हेड ऑफिस, वी हैव अ ब्रांच इज सेलिंग टू जनरल पब्लिक, ऑफिस भी अपने कस्टमर्स को देता है। नाउ ये जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी है वो कुछ इस प्रकार से उसने बोली है कि अगर हेड ऑफिस को चीज 100 की पड़ती है तो हेड ऑफिस ब्रांच को जो देता है वो देता है कॉस्ट प्लस 15%, मतलब 115 पे। ब्रांच को किस पे दे रहा है? 115 पे। और फिर अब आपके पास जो है इस तरीके से हेड ऑफिस अपने कस्टमर्स को देता है कि यहां पे जो उसको प्रॉफिट होता है वो 30% ऑफ सेल्स होता है। मेरा सीधा ही प्रॉफिट रेट दे दिया, मुझे प्राइस नहीं बता रहा, मैं निकालने को निकाल सकता हूं, यानी कि उस केस में 100 रुपीज अगर कॉस्ट है तो 100 इज इनफैक्ट 70% होता है, मतलब मैं इस तरीके से दे रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट 30% सेल्स होगा। और ब्रांच भी इस तरीके से बेच रही है लोगों को कि ब्रांच को भी प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो 30% उसकी सेल्स वैल्यू होगा, मतलब ब्रांच भी आगे लोगों को इस तरीके से दे रही है कि ब्रांच को भी प्रॉफिट अपनी जो भी उसकी खरीदा उसके हिसाब से वो उतना प्रॉफिट ऐड कर देती है, उसे भी प्रॉफिट कितना हो रहा है? सीधा 30% ऑफ सेल्स। तो ये उसने मुझे बड़ी बात क्लियर बोली, हेड ऑफिस को भी 30% ऑफ सेल्स हो रहा है, ब्रांच को भी अपना 30% ऑफ सेल्स हो रहा है। ये उसने मुझे प्राइसेस की बात कर दी, ठीक है ना। नाउ हमें इसके बाद क्या बोलते हैं? केपी ऑपरेट करता है रेंटेड प्रीमिसेस और बाकी एसेट्स को लीज पे करता है। रेंट और हायर चार्जेस हमारे ओवरहेड के कॉस्ट में जुड़े हुए ट्रायल बैलेंस है। इंफॉर्मेशन से दे रहा है क्या बनाना है? प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इन कॉलमनर फॉर्म। अब इस साल का कॉलमनर फॉर्म में क्या क्या बना देंगे सर? हम अपने पास बनाना है कॉलमनर फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एचओ का, ब्रांच का, इंटायर बिजनेस का, और बैलेंस शीट भी बनानी है आपके पास इस साल की फॉर द इंटायर बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट इंटायर बनानी है, कंबाइंड बनाना, पर पीएनएल अकाउंट जो बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, वो एचओ, ब्रांच और इंटायर बनाना है कॉलमनर फॉर्म। 3 कॉलम में बना देंगे अपने पास में। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है हेड ऑफिस की और ब्रांच की चीजों की, ठीक है ना जी। ये सारी आइटम देके रॉ मटेरियल डायरेक्ट देके करके चीजें देखेंगे, कुछ खर्चे हैं, कुछ इनकम से आपके पास, कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटी, एक एक करके चीज आएगी सारी। और नीचे आपको क्या कह रहा है? नीचे आपको उसने चीजें बताई है, कह रहा है 28 दिसंबर को हमारे पास में ब्रांच ने रिमिट किए थे 1500 हेड ऑफिस को, और वो अभी तक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ है एचओ की बुक्स में। तो ये क्या चीज होती है सर? ये हमारे पास ब्रांच ने रिमिट करा था, तो दिस इज कैश इन ट्रांसिट। एंड ऑल्सो उसी सेम डेट पे ब्रांच ने भी डिस्पैच करे थे गुड्स ब्रांच को, हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करे थे ब्रांच को 1500 के, और ये भी अभी तक एंटर नहीं हुए ब्रांच में। तो ये क्या चीज होगी सर? ये हो गया गुड्स इन ट्रांसिट के। तो ये क्या चीज होती है सर? ये हमारे पास ब्रांच ने रिमिट करा था, तो दिस इज कैश इन ट्रांसिट। एंड ऑल्सो उसी सेम डेट पे ब्रांच ने भी डिस्पैच करे थे गुड्स ब्रांच को, हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करे थे ब्रांच को 1500 के, और ये भी अभी तक एंटर नहीं हुए ब्रांच में। तो ये क्या चीज होगी सर? ये हो गया गुड्स इन ट्रांसिट। और पॉलिसी है कि आइटम को एडजस्ट कहां करना है? ट्रांजिट रिसिपेंट की बुक्स में, जो कि हमेशा बोलते हैं। तो कैश इन ट्रांजिट एंट्री एचओ डालेगा, गुड्स इन ट्रांजिट एंट्री ब्रांच डालेगी, जो पिछली बार आपको समझाया, ठीक है ना। फिर आपको उसने क्या बोला है? रॉ मटेरियल का स्टॉक जो बचा रहेगा एचओ के पास में, वो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया ईयर एंड का 2300 का क्लोजिंग स्टॉक है हेड ऑफिस के पास। और हमें कह रहा है कोई स्टॉक लॉसेस नहीं हुए, मतलब देयर इज नो स्टॉक लॉस एंड नॉर्मल लॉस वगैरह,
फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है एचओ पे फैक्ट्री कॉस्ट पे जो उसकी कॉस्ट है उसी पे दिखाना है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का नहीं। तो इस पॉइंट में ऐसा कुछ अजीब सी बात नहीं करी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई डब्ल्यूआईपी का स्टॉक नहीं है, यानी कि स्टॉक रॉ फिनिश गुड्स का है। और ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस देना बंद नहीं करी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद रॉ मटेरियल का स्टॉक जो बचा रहेगा एचओ के पास में वो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया ईयर एंड का 2300 का क्लोजिंग स्टॉक है हेड ऑफिस के पास। और हमें कह रहा है कोई स्टॉक लॉसेस नहीं हुए, मतलब देयर इज नो स्टॉक लॉस एंड नॉर्मल लॉस वगैरह। फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है एचओ पे फैक्ट्री कॉस्ट पे जो उसकी कॉस्ट है उसी पे दिखाना है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का नहीं। तो इस पॉइंट में ऐसा कुछ अजीब सी बात नहीं करी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई डब्ल्यूआईपी का स्टॉक नहीं है, यानी कि स्टॉक रॉ फिनिश गुड्स का है। और ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस देना 156 का अंडर एग्रीमेंट जो के साथ हुआ 156 का ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस की बात होगी। तो ये हमारे पास चीजें उसने क्वेश्चन के अंदर बोली है और इसी को देखते हुए हमने अपना क्वेश्चन को करना है, इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने अपने पास क्वेश्चन को करना है। और अगर हम अपने पास देखेंगे यहाँ पर अंडर के, और ये भी अभी हमारे, और नीचे आपको क्या कह रहा है, नीचे आपको उसने चीजें बताई है। कह रहा है 28 दिसंबर को हमारे पास में ब्रांच ने रिमिट किए थे 1500 हेड ऑफिस को, और वो अभी तक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ है एचओ की बुक्स में। तो ये क्या चीज होती है सर, ये हमारे पास ब्रांच ने रिमिट करा था, तो दिस इज कैश इन ट्रांसिट। एंड ऑल्सो उसी सेम डेट पे ब्रांच ने भी डिस्पैच करे थे गुड्स ब्रांच को, हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करे थे ब्रांच को 1500 के, और ये भी अभी तक एंटर नहीं हुए ब्रांच में। तो ये क्या चीज होगी सर, ये हो गया गुड्स इन ट्रांसिट। और पॉलिसी है कि आइटम को एडजस्ट कहां करना है, ट्रांजिट रिसीपेंट की बुक्स में, जो कि हमेशा बोलते हैं। तो कैश इन ट्रांजिट एंट्री एचओ डालेगा, गुड्स इन ट्रांजिट एंट्री ब्रांच डालेगी, जो पिछली बार आपको समझाया, ठीक है ना। फिर आपको उसने क्या बोला है, रॉ मटेरियल का स्टॉक जो बचा रहेगा एचओ के पास में वो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया ईयर एंड का 2300 का क्लोजिंग स्टॉक है हेड ऑफिस के पास। और हमें कह रहा है कोई स्टॉक लॉसेस नहीं हुए, मतलब देयर इज नो स्टॉक लॉस एंड नॉर्मल लॉस वगैरह। फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है एचओ पे फैक्ट्री कॉस्ट पे जो उसकी कॉस्ट है उसी पे दिखाना है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का नहीं। तो इस पॉइंट में ऐसा कुछ अजीब सी बात नहीं करी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई डब्ल्यूआईपी का स्टॉक नहीं है, यानी कि स्टॉक रॉ फिनिश गुड्स का है। और ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस देना 156 का अंडर एग्रीमेंट जो के साथ हुआ 156 का ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस की बात होगी। तो ये हमारे पास चीजें उसने क्वेश्चन के अंदर बोली है और इसी को देखते हुए हमने अपना क्वेश्चन को करना है, इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने अपने पास क्वेश्चन को करना है। और अगर हम अपने पास देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखते बेटा हमारे पास आइटम्स में जब हम डालते चलते हैं, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल परचेज पता है, मैं एक बार के लिए गो थ्रू करा रहा हूं, फिर हम डालते हैं। रॉ मटेरियल का गुड्स आपके पास परचेज जो करा, वेजेस का खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, गो थ्रू बोलिए। और इसी को देखते हुए हमने अपना क्वेश्चन को करना है, इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने अपने पास क्वेश्चन को करना है। और अगर हम अपने पास देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखते बेटा हमारे पास आइटम्स में जब हम डालते चलते हैं, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल परचेज पता है, मैं एक बार के लिए गो थ्रू करा रहा हूं, फिर हम डालते हैं। रॉ मटेरियल का गुड्स आपके पास परचेज जो करा, वेजेस का खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, दिस इज योर ओपनिंग, मैं एक बार देखेंगे के अंदर बोलिए। और इसी को 50 कोई हमारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई डिपॉजिट रहेगा एचओ के पास में वो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया ईयर एंड का 2300 का क्लोजिंग स्टॉक है हेड ऑफिस के पास। और हमें कह रहा है कोई स्टॉक लॉसेस नहीं हुए, मतलब देयर इज नो स्टॉक लॉस एंड नॉर्मल लॉस वगैरह। फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है एचओ पे फैक्ट्री कॉस्ट पे जो उसकी कॉस्ट है उसी पे दिखाना है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का नहीं। तो इस पॉइंट में ऐसा कुछ अजीब सी बात नहीं करी, कोई हमारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई डब्ल्यूआईपी का स्टॉक नहीं है, यानी कि स्टॉक रॉ फिनिश गुड्स का है। और ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस देना 156 का अंडर एग्रीमेंट जो के साथ हुआ 156 का ब्रांच के एम्प्लॉइज को बोनस की बात होगी। तो ये हमारे पास चीजें उसने क्वेश्चन के अंदर बोली है और इसी को देखते हुए हमने अपना क्वेश्चन को करना है, इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने अपने पास क्वेश्चन को करना है। और अगर हम अपने पास देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखते बेटा हमारे पास आइटम्स में जब हम डालते चलते हैं, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल परचेज पता है, मैं एक बार के लिए गो थ्रू करा रहा हूं, फिर हम डालते हैं। रॉ मटेरियल का गुड्स आपके पास परचेज जो करा, वेजेस का खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसने। मैं आइटम से आपको एक बार के लिए गो थ्रू करवा रहा हूं, अभी डालनी शुरू ही नहीं करी। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है, फिर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास फिनिश गुड्स का कितना है वो बता दिया। फिर आपके पास डेटर कैश, ये आपके पास एसेट्स दे दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, अदर एडमिन ओवरहेड्स वगैरह दे दिए। एक आइटम आपके लिए थोड़ी सी न्यू दिख रही है, दैट इज इंटर यूनिट अकाउंट्स। नाउ व्हाट इज इंटर यूनिट अकाउंट बेटा? इंटर यूनिट अकाउंट का मतलब है हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का, और ये आपस में मैच नहीं कर रहा। एक जगह 5000 डेबिट, एक जगह 2000 क्रेडिट, उसका डिफरेंस वो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है जो हम डाल के चेक करेंगे, क्या उसके बाद ये डिफरेंस मैच कर जाएगा, क्या ये रिकंसिलिएशन हो रही है, ठीक है ना। फिर कैपिटल क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे दिया जिसमें हम चर्चा करेंगे अभी, इसका क्या करना है, ठीक है ना। फिर सेल्स दे दी आपके पास दोनों जगह की, और फिर हमें क्या बता दिया, कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे थे 46 के ब्रांच को और कितनी वैल्यू के गुड्स मिले हैं एचओ से 44,500 के। तो वो आपके पास इसने क्लियर कर दिया कि 1500 का इन ट्रांजिट है। भेजे थे आपके पास में कितने के सर, भेजे थे 46 के, मिले 44,500। शिवम बेटा आपके पास जब होगा बता दिया करेंगे। फिर कैपिटल क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे दिया जिसमें हम चर्चा करेंगे अभी, इसका क्या करना है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब है हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का, और ये आपस में मैच नहीं कर रहा। एक जगह 5000 डेबिट, एक जगह 2000 क्रेडिट, उसका डिफरेंस वो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है जो हम डाल के चेक करेंगे, क्या उसके बाद ये डिफरेंस मैच कर जाएगा, क्या ये रिकंसिलिएशन हो रही है, ठीक है ना। फिर कैपिटल क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे दिया जिसमें हम चर्चा करेंगे अभी, इसका क्या करना है, ठीक है ना। फिर सेल्स दे दी आपके पास दोनों जगह की, और फिर हमें क्या बता दिया, कितनी वैल्यू के गुड्स भेजे थे 46 के ब्रांच को और कितनी वैल्यू के गुड्स मिले हैं एचओ से 44,500 के। तो वो आपके पास इसने क्लियर कर दिया कि 1500 का इन ट्रांजिट है। भेजे थे आपके पास में कितने के सर, भेजे थे 46 के, मिले 44,500 के। शिवम बेटा आपके पास जब होगा बता दिया जाएगा कब आपके पास, ये हमारे पास चीजें थी है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बता रहे ना। बट वी डू हम अपने पास एक तो ये देख लेते बेटा, ये इंटर यूनिट अकाउंट्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द थिंग, इंटर यूनिट अकाउंट्स के आपस में रिकंसाइल हो जाएंगे गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री डाल के। लेट अस सी। तो बेटा हमारे पास में अगर हम देखें हेड ऑफिस की बुक्स है और ब्रांच की बुक्स है, जो उसने मुझे दिया हुआ इंटर यूनिट अकाउंट में 5000, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है विच इज 2000।
नो इन ट्रांजिट जो चीजें एक बार के हम अपनी एंट्रीज को डाल के करें, फिर हम अपने ट्रेडिंग पीएल पे चलेंगे। तो यहाँ पे एचओ की एंट्री डाल रहा है सर, एचओ एंट्री डाल रहा है कैश इन ट्रांजिट की। एचओ ने एंट्री डालेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कितने की वैल्यू दी थी सर? 1500 की। तो एंट्री का इफेक्ट आएगा। मुझे बताओ इस एंट्री के बाद ब्रांच का रिवाइज बैलेंस कितना हो जाएगा? सर पहले डेबिट था 5000, जब आपने क्रेडिट किया 1500 से, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? तो ब्रांच का अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा रिवाइज। 5000 पहले डेबिट था, 1500 से क्रेडिट किया, तो 3500 डेबिट हो गया। 3500 डेबिट हो जाएगा इस एंट्री के डालने के बाद जो बैलेंस बनता है, ठीक है ना। फिर ब्रांच की एंट्री डालेगा सर, ब्रांच एंट्री डालेगा हमारे पास में गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, जो कि अगेन 1500 से एंट्री डाली। 1500 की था, यस सर 1500 था। इस एंट्री के डालने के बाद जो रिवाइज बैलेंस है बेटा वो क्या हो जाएगा सर? रिवाइज बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। कितना हो गया? 2000 पहले से क्रेडिट ही था और 1500 से क्रेडिट किया, तो 2000 प्लस 1500 3500 क्रेडिट। अल्टीमेटली क्या, जब रिकंसिलिएशन की एंट्री डाली जाएगी, जो दो एंट्री का हम वेक्टर करेंगे, तो क्या हमारे पास में आपस का बैलेंस रिकंसाइल हो गया? द आंसर इज यस। हमारे पास बेटा बैलेंस जो है वो रिकंसाइल हो जाता है, हमारे पास जो बैलेंस है वो रिकंसाइल हो जाता है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर बेटा? मुझे बताएंगे फटाफट से, फटाफट से मुझे बताएंगे। क्या यहाँ तक बात हमें समझ आई है? यस सर, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या बनाना है? नाउ वी हैव टू मेक द बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब चीजें बनानी शुरू करते हैं। यहाँ तक बात हमें समझ आई है? यस सर, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या बनाना है? नाउ वी हैव टू मेक द बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब चीजें बनानी शुरू करते हैं, व्हिच इज फॉर हेड ऑफिस, ब्रांच और इंटायर। कॉलमर फॉर्म में बेटा बोला गया है एचओ इंटायर, मतलब कि आपके पास इकट्ठे में दिख जाएगा हेड ऑफिस का, ब्रांच का और इंटायर का क्या क्या वैल्यूज आपके पास आनी है जो क्वेश्चन दी है। एक एक करके चीजें डालते जाएंगे, टिक करते जाएंगे अपने पास, ठीक है ना, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना आए क्वेश्चन के अंदर में। ना सबसे पहले हमारे पास में क्या है? ओपनिंग स्टॉक डालते हैं बेटा, यस सर, व्हिच इज रॉ मटेरियल। तो लेट्स से आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा? रॉ मटेरियल का बेटा है 1800, तो टिक कर दिया मैंने अपने पास। 1800 आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, वो सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में नहीं है, तो टोटल में भी 1800 आ गया। टोटल में करना क्या? इंटायर में ऐड करके तो डालना है, ऐड करके तो डालना। फिर आपके पास है बेटा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में अगर हम देखेंगे, फिनिश गुड्स में कितना है सर? 13000 और 9200। 13000 और 9200 मुझे वैल्यूज बताते जाना ऐड करके। सर 13000 और ब्रांच के पास है 9200 का, तो दैट विल बी 22200। फिर आपके पास है बेटा जो रॉ मटेरियल खरीदा, परचेजेस। रॉ मटेरियल जो परचेज करा, अब परचेज कितनी वैल्यू का करा? रॉ मटेरियल खरीदा, टोटल में करना क्या? इंटायर में ऐड करके तो डालना है, ऐड करके तो डालना। फिर आपके पास है बेटा फिनिश गुड्स, तो डालना। ना सबसे पहले हमारे पास में क्या है? ओपनिंग स्टॉक डालते हैं बेटा, यस सर, व्हिच इज रॉ मटेरियल। तो लेट्स से आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा? रॉ मटेरियल का बेटा है 1800, तो टिक कर दिया मैंने अपने पास। 1800 आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, वो सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में नहीं है, तो टोटल में भी 1800 आ गया। टोटल में करना क्या? इंटायर में ऐड करके तो डालना है, ऐड करके तो डालना। फिर आपके पास है बेटा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में अगर हम देखेंगे, फिनिश गुड्स में कितना है सर? 13000 और 9200। 13000 और 9200 मुझे वैल्यूज बताते जाना ऐड करके। सर 13000 और ब्रांच के पास है 9200 का, तो दैट विल बी 22200। फिर आपके पास है बेटा जो रॉ मटेरियल खरीदा, परचेजेस। रॉ मटेरियल जो परचेज करा, अब परचेज कितनी वैल्यू का करा? परचेज करने का काम बेटा किसका? हेड ऑफिस का है सर। रॉ मटेरियल खरीदने का काम किसका है? 35000 का परचेज करा, तो 35000 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद में अगली चीज क्या है सर? इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस 108500। तो डायरेक्ट वेजेस 108500, ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया बेटा, यस सर, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा आ गया हमारे पास में। देन इसके बाद अगली चीज क्या है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना। तभी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक में फैक्ट्री कॉस्ट को जोड़ने की बात हो रही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास आएगा हाउ मच? 39000, तो 39000 के फैक्ट्री ओवरहेड भी डाल दिए, ये भी हमने अपने पास दिखा दिया। देन बेटा इसके बाद देखते हैं कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है सर, एडमिन सेल्समैन वगैरह, सेलिंग ओवरहेड, तो कहां जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे। देन हमारे पास अगली चीज क्या है सर? अगली चीज है हमारे पास में सेल्स। नाउ वी हैव टू पुट द सेल्स। अब सेल्स हमारे पास कितनी है? 2,65,200, तो 2,65,200 सेल्स की वैल्यू आ गई बाय सेल्स, 2,65,200।
which is 265 200, ठीक है ना. देन बाय गुड सेंड टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा वो हेड ऑफिस की क्या है, सेल है. वो हेड ऑफिस की क्या है, सेल है बेटा. जो कुछ हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे 46,000 की, वो हेड ऑफिस की सेल हो गई. और वो ब्रांच की परचेज है, पर वो 1500 कम था, तो उसका भी पॉइंट बता दूंगा अभी. तो यहाँ 46,000 डला, यहाँ 46,000 आपके पास डला है. और इधर गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओबी कितना ही हो जाएगा सर, 46,000. हमने क्या सीखा हमेशा सर, हम पूरा दिखाएंगे और बाकी इन ट्रांसिट क्लोजिंग स्टॉक में दिख जाएगा. तो ये 46,000 आपके पास आ गया. और जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिखना है, उसे गुड्स इन ट्रांजिट वाला दिख गया, ब्रांच के पास 1500 का, ब्रांच के पास 1500 का, ठीक है ना. ये हमारे पास चीज आ गई, ये 1500 का आपके पास क्या दिख गया क्लोजिंग स्टॉक में. सर आपने एक चीज नहीं करी, बोलो बेटा क्या सर, आपने ना गुड्स जो भेजे थे और जो गुड्स मिले हैं ब्रांच को, वो टोटल के कॉलम में नहीं डाले. बेटा डालने बनते भी नहीं. जब मैं इंडिविजुअली एचओ का इंडिविजुअली ब्रांच का बना रहा हूं, तो जो कुछ एक दूसरे को भेजे वो एक ही सेल है, एक ही परचेज है. जब मैं कंबाइन में बना रहा हूं, तो क्या दिखाने चाहिए, नहीं, वो खुद ही नलीफाई हो गया ना बेटा. तो वो नहीं दिखने चाहिए हमारे पास ना आउटर कॉलम में. तो आप समझो, क्योंकि वो इंटायर मतलब कंबाइन में दिखने नहीं बनते. जो एक ने कुछ भेजे वो एक ही सेल है हेड ऑफिस की, और ब्रांच को मिले ब्रांच की परचेज हो गई. पर कंबाइन में वो डलने नहीं चाहिए, तो कंबाइन में इसलिए वो नहीं आ, कंबाइन में वो इसलिए नहीं आ, ठीक है ना. तो ये हमारे पास चीज आ गई. फिर उसने हमें क्या दिया सर, फिर क्वेश्चन हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है. ये हमारे पास गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव डल गया. क्लोजिंग स्टॉक बेटा रॉ मटेरियल का दिया था हमें कितना सर, 2300. इनके दो इफेक्ट आएंगे, यहाँ आ गया बैलेंस शीट में चला जाएगा. तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया 2300, जो हेड ऑफिस के पास है. नाउ बेटा हमारे पास जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी सर, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया. हम अपने पास क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे ना उसने हमें जीपी रेट्स दिए थे. उसने हमें ये बताया था कौन सा किसको कितने बेच रहा है, बाहर लोगों को कैसे बेच रहा है. तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने होलसेल ब्रांच में सिखाया था, हम अपने पास नॉर्मल तरीके से क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लेंगे बाय मेकिंग वर्किंग नोट. हम अपने वर्किंग नोट के जरिए जीपी को निकाल लेंगे और फिर हमारा फिनिश गुड बैलेंसिंग फिगर आएगा. तो चलिए जीपी की तरफ चलते हैं, चलिए जीपी की तरफ चलते हैं, वो निकालने की बात करते हैं. तो जब हम जीपी को निकालेंगे बेटा, तो हमारे पास में किस किस की बात हो रही है सर, हमने प्राइसेस देखे थे. तो ग्रॉस प्रॉफिट हेड ऑफिस, सर हेड ऑफिस की जो सेल्स है ना, वो हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट रेट है वो है 30%, जो बाहर के लोगों को बेचता है. सीधा 30% कौन सेल है, तो बाहर के लोगों को कितनी वैल्यू का बेचे सर, बाहर के लोगों को जो है 2 लाख की सेल करी थी. तो 2 लाख की सेल के ऊपर तो सीधा 30% आ गया. यस सर, 2 लाख की सेल के ऊपर सीधा 30% है. तो प्लस जो ब्रांच को दिया, अब जो ब्रांच को दिया वहां पे कितना प्रॉफिट रेट है सर, ब्रांच को दी जाती है 100 की चीज 115 में. तो अल्टीमेटली 15 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 115, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस 115 कॉस्ट प्लस 15% बोल रहा था ना. तो हमने कितने की भेजी चीजें सर, हमने भेजे 46,000 की. तो 46,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट हम करेंगे सर, 46,000 इंटू 15 बाय 115. बेटा वो 30% सीधा सेल्स का दिया था, इसलिए ऐसा हुआ. ये कॉस्ट प्लस 15% है, तो ऑन सेल तो 15 बाय 115 हो गया ना. तो ये हेड ऑफिस का जीपी हो जाएगा 2 लाख का 30% 60,000 और 46,000 इंटू 15 बाय 115 6,000. तो हेड ऑफिस को प्रॉफिट कितना हुआ 66,000 का. हेड ऑफिस को प्रॉफिट कितना हुआ 66,000 का. एंड नाउ विद द ब्रांच, ब्रांच का सीधा बोला जैसे हेड ऑफिस का था, वो अपनी सेल्स पे 30% कमाती है ब्रांच. ब्रांच अपनी सेल्स पे सीधा 30% कमा रही है डायरेक्टली, 30% ऑन सेल्स. तो ब्रांच की खुद की सेल कितनी है सर, ब्रांच की सेल है 65,200. तो 65,200 का 30% कर देंगे, 65,200 का 30% कर देंगे. 65,200 into 30%, which is 19,560. 19,560. ये अल्टीमेटली किसका हो जाएगा, ब्रांच का हो जाएगा. तो वैल्यूज डाल देते हैं 66,000 और 19,560, और टोटल में डल गया 8,560. तो वी विल गेट द फिनिश गुड का जो आ रहा है एज अ बैलेंसिंग फिगर. हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो देख लेंगे कितना मतलब. तो लेट अस सी 1800 प्लस 13,000 प्लस 35,000 प्लस 108,500 प्लस 39,000 प्लस 66,000 माइनस 246 माइनस 23 15,000. बेटा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 15,000 का, यहाँ पे आ रहा है 9,200 प्लस 46,000 प्लस 19,560 माइनस 65,200 माइनस 1,500 8060. क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट खत्म. तो ये हमने आपके सैलरीज 200 ओवरहेड्स 12,500 और 23 14 प्रॉफिट का 15 का 52 जो कि किसका 15 के पास स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि उसके पास हेड ऑफिस से आ रहा है. तो
actual burden. To help individuals, the government provides tax exemption under Section 10 of the Income Tax Act. Section 10 of the Income Tax Act, ITA, specifies that some incomes are not taxable, reducing individuals' tax burden. So, if you are wondering about the Section 10 exemption, then here in this blog, we will find answers to what income tax Section 10 is and what are Section 10 exemptions. What is Section 10 of the Income Tax Act? Section 10 of ITA is a particular clause designed for salaried individuals where they can reduce their tax liability by claiming exemption. This section of ITA aims at individual taxpayer income that falls under the exempted category. Such income cannot be included in their gross annual income. The government offers the exemptions to promote and encourage exempted list activities and provide some relief to taxpayers. Taxpayers can claim these exemptions while filing income tax returns. What are the exemptions under Section 10? Individuals will get exemptions under various Section 10 subclauses, which we will discuss in this section. Section 10, 1. This is the subclause of SEC 10 of the Income Tax Act, which offers relaxation to individuals earning their living from agriculture. In this section, it is specified the type of agriculture income that is exempted under this category, such as 1. Income or rent generated from agricultural land holding in India. 2. Income generated from the selling of farm-produced goods. 3. Income earned from agriculture activities such as plowing, cultivation, etc. 4. Other income from doing agriculture activities such as irrigation, cutting, etc. Lastly, income by renting out land or building to preserve agricultural farm goods or other agricultural operations. Section 10, 2. This is the other subsection of income tax Section 10, which clarifies the profit or income from investment or business made by a member of the Hindu undivided family will be tax exempted in some cases. These cases are: if the profit or income share has been paid to family members from the family's total income. If there is an impartable estate, the income or profit is generated from the business activities on the estate that belongs to the family. Section 10, 2a. Section 10, 2a, of ITA states that profit earned by a member being the co-owner of a partnership firm is tax exempted. However, members need to fulfill the listed conditions to get the tax exemption, which are: 1. The firm should pay the tax under ITA, 1961 provisions. 2. The shareholder or partners of the firm should receive the profit share as mentioned in the partnership deed. 3. The tax exemption of the partner is based on the income as shareholder and partner. Section 10, 3. Another subsection of Section 10 is Section 10, 3, which states that the grants and monetary awards in sports, literature, arts, science, etc., fields from the state or central government are tax exempted. Section 10, 4. 1. This section of ITA focuses on the income or profit made by NRI citizens. Under Section 10, 4, NRI can claim tax exemption under the following conditions, which are: 2. The profit or interest earned from the government-specified securities and bonds. 3. The NRI can claim tax exemption on premium payment to redeem such securities or bonds. 4. The interest or profit from depositing non-resident, external, savings accounts under the Foreign Exchange Management Act, FEMA, 1999. The interest income earned outside of India by NRI for a deposit made in an NRE account. Section 10, 5. 1. This is the subsection of tax exemption for individual taxpayers that states salaried individuals can claim on leave travel concession, LTA, element of their salary. Foreign and Indian employees can both be part of this tax exemption. 2. The benefit is not limited to employees, their children, siblings, spouses, and parents can also take advantage. To get the tax exemption, the following conditions must be met by employees. 3.
The exemption is only for LTA given by the employer to employees during the financial year. 4. It should include current and former travel details of employees. 5. The exemption limit is decided by the amount the employee or dependents spend on travel during the financial year. 6. If the employee is not traveling with their family, the exemption will not apply. Section 10, 6. 1. This section provides tax exemption to individuals representing India in their working capacity by working outside of India. These individuals can work in the Indian Embassy, Indian High Commission, consulates, and legations. 2. Further, these sections also include foreign representatives visiting India for official business. The eligibility criteria for availing the tax benefit in this category are: 3. The foreign employer paying the income or remuneration should not be a part of business or trade income in India. 4. The tenure of stay for representatives should not be more than 90 days. 5. Employees' income or remuneration from the foreign employer must not be deducted from employer income in India. Section 10, 7. This section states that the Indian government employees working outside India can claim tax exemption on allowances, such as medical allowance, etc. that the government of India offers for furnishing their service. Section 10, 10 cubic centimeters. Under this section, the individual will receive the tax exemption on the non-monetary benefits or prerequisites offered by the employer. Since the employer already pays the tax for non-monetary benefits, it becomes tax-free for employees. Section 10, 10c. 1. This section states that employees who receive funds on voluntary retirement or others are tax-exempt. This section also includes the employees whose service is terminated due to any condition. However, to avail of the tax exemption benefits, the following conditions need to be met. 2. The employee can belong to central or state government services. 3. Employees can belong to public sector companies. 4. An employee of a cooperative society. 5. Employee of any company that the Gazetted Officer of India notifies. 6. An employee of the IIT, Indian Institute of Technology. 7. A gazetted officer should notify an employee from the Institute of Management. 8. An employee from an institution set up by the central, state and provisional government. 9. Employee from an organization that is set up by central, state and provisional government. Section 10, 10d. 1. Section 10, 10d, of the Income Tax Act states that individuals who receive profit and maturity on the life insurance policy are eligible for tax exemption. However, to get tax exemption, the policy holder needs to fulfill the following conditions such as: 2. The life insurance policy issued before the 1st of April 2012 and the premium amount of the policy should not be more than 20% of the sum insured. 3. The life insurance policy is issued after the 1st of April, 2012, and the premium amount does not exceed 10% of the sum insured. 4. The life insurance policy is issued to disabled and ill individuals as specified by Section 80U and 80 DDB. 5. Lastly, tax exemption can apply to profits received on ULIP, Unit-Linked Insurance Plan, and other life insurance schemes. Section 10, 11. Under this section, the employee can claim the tax exemption on interest or maturity amount received from retirement saving plans such as the Employees Provident Fund. Not only this, the payment from the Sukanya Samriddhi scheme is also tax-free. Section 10, 10bc. In this subclause of Income Tax Section 10, the remuneration or amount received by the individual from state, central or local government due to man-made or natural disaster are exempt from tax. Section 10, 13a. 1. This section states that salaried employees receive a house rent allowance, HRA, in their salary, which is tax exempt. However,
the following conditions need to fulfill, such as 2. It should be the actual amount in HRA that employee receives. 3. For employees living in metro cities, the HRA is 50% of the basic salary, and for employees living in non-metro cities, the HRA is 40% of basic salary. 4. Employees' actual rent should be less than 10% of the basic salary. Section 10(14). This subsection 10 of the Income Tax Act states that the employees can claim tax exemption on special allowance offered by the employer. Employers offer various special allowances, and there is no specified limit for special allowances. The allowances are classified into two categories, which are exemptions under Section 10(14)(I). This category includes some special allowances such as conveyance allowance. This is the transportation allowance offered to employees for doing their job. Uniform allowance. This is the unique allowance organizations offer with dress or uniform codes. Research or academic allowance. Employees are offered research and academic allowance to encourage training and academic activities. Travel allowance. This is the travel allowance employees get for official duties. Helper allowance. Employees needing assistance or help to do their job need a helper allowance. Daily allowance. Lastly, employees receive an allowance for carrying out their day-to-day duties when they are not in the actual place of work. Exemptions under Section 10(14)(2). These are the various exempt allowances under Section 10(14)(2) offered to an employee that occur while performing their duties, such as Children's Education Allowance. It is the allowance of 100 Indian rupees to an employee's child per month. It is limited to 2 children per employee. Compensatory Field Area Allowance. The employee can take advantage of a compensatory field area allowance with a maximum of 2,600 Indian rupees per month. Counter-insurgency allowance. This is the allowance for individuals working in the armed forces and living away from families. These members can receive up to 3,900 Indian rupees per month. Island Duty Allowance. Eligible armed forces individuals or members who are placed in Lakshadweep Group Island or Andaman Island can receive this allowance. The maximum limit for this allowance is 3,200 Indian rupees per month. Border Area Allowance. This is for armed forces member allowance where they receive up to 200 Indian rupees to 1,300 Indian rupees depending on the area. Tribal Area Allowance. This is the allowance for employees posted in tribal, agency or scheduled areas. Special Compensatory Allowance. This is for employees working in hilly parts of the country. The employee will receive an allowance from 300 Indian rupees to 7,000 Indian rupees per month based on area and risk factors. Section 10(15). The individual will receive tax exemption on profit or interest earned from investments in this section of ITA. There are various subsections, which are listed below. Section Taxpayer Type. Investment Type. 10(15)(I). All taxpayers exemption on profit, maturity amounts, and sum insured on bonds, securities and certificates. 10(15)(2)(b). HUFs and individual interest or profit earned on capital investment before June 1, 2001. 10(15)(2)(c). HUFs and individual interest and profit earned on relief bonds. 10(15)(2)(d). NRI individuals/Indian individuals who receive as a gift from NRI interest and profit earned on declared foreign exchange bond before June 1, 2001. 10(15)(3). Securities that are issued by Central Bank of Ceylon. Interest on securities. 10(15)(3)(a). Incorporation of a scheduled bank abroad. Interest and profit earned from scheduled bank with the approval from RBI. 10(15)(3). Nordic Investment Bank. Interest paid to Nordic Investment Bank. 10(15)(3). European Investment Bank. Interest payable of loan to European Investment Bank. 10(15)(4)(a). Assets that have lent money from sources that are outside India to government. Interest or profit earned by loaning money to government and local authority before the date June 1,
2001. 10, 15, 4, b. Approved or recognized foreign financial institutions' interest and profit earned for lending money to the Government of India before June 1, 2001 for industrial undertaking. 10, 15, c. All taxpayers, who are committed to pay money or who have incurred debt to finance the said industrial undertaking interest and profit earned on raw materials, machinery, etc., for industrial undertaking outside India before June 1, 2001. 10, 15, d. All assessors who are committed to pay given money. Interest paid by the financial institution of India for borrowed money before June 1, 2001. 10, 15, e. All assessors who lent money as part of given loan agreements interest earned on the decided rate from the nation's financial institutions on the lending of money from outside India as per loan agreement before June 1, 2001. 10, 15, f. All assessors who lent money as per the given loan agreements interest or profit gained from Indian industrial undertaking on invested funds raised in foreign currency before June 1, 2001 from sources outside India as per loan agreements. Maximum exemption under Sector 10 of the Income Tax Act. There are maximum exemption limits under SEC 10 of Income Tax Act, which are: age limit maximum tax exemption special condition. Under 60 years 2.5 Indian rupees lakh per financial year NA. Between 60 and 80 years 3 Indian rupees lakh applicable to Indian residents only. Over 80 years 5 Indian rupees lakh applicable to Indian residents only. Individuals who received allowances exemptions. Some specific individuals received exemption from allowances under Section 10, 14, I, and Section 10, 14, 2. 1. UNO employees. 2. Government employee outside India. 3. High Court judges. 4. Sumptuary allowance to the Supreme Court and High Court judges. Is health insurance exempted from income tax? Under Section 80D of IDA, there are tax deductions on medical insurance plan premiums for up to 25,000 Indian rupees during the financial year. However, for senior citizens, the limit exceeds 50,000 Indian rupees per year. Individuals with health insurance plans can claim their tax deduction when filing income tax returns. This is the particular clause released by the authorities to encourage individuals to purchase health insurance plans for themselves and their families. Further, health insurance plans also release financial burdens during medical crises. Tata AIG offers various health insurance plans to cater to different medical needs. You will find everything from family health insurance to critical insurance plans here. Not just this, you can compare health insurance based on coverage and premium before making a purchase decision. Conclusion. Section 10 of the Income Tax Act is the special section that offers tax exemption benefits to individuals, entities, etc. Various subsections can help taxpayers in reducing their tax liabilities. However, to take advantage of these benefits, you have to file the income tax returns on time every financial year. FAQs. What is Section 10, 10D, exemption? This section of the Income Tax Act focuses on taxation benefits on life insurance policies in India. What is the exemption U/S10 in salary slip? This section focuses on tax exemption on various allowances and benefits employees get, such as rent, travel, etc. Who can claim the benefit of Section 80D of the Income Tax Act? HUF and individual taxpayers can claim Section 80D benefits. Disclaimer/TNC.
आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुबह जब मैंने मैराथन स्टार्ट किया था तो मतलब ऑलरेडी घर में तो प्रॉब्लम्स थे ही मम्मी। आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुबह जब मैंने मैराथन स्टार्ट किया था तो मतलब ऑलरेडी घर में तो प्रॉब्लम्स थे ही, मम्मी की तबीयत सीरियस थी, तो अब ठीक है। मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है, डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, मम्मी को एक्टिव डायरिया का केस है, तो अभी मम्मी हॉस्पिटलाइज ही रहेंगी 2-3 दिन तक, और उसमें टाइम लगता है ठीक होने में। विकास भैया उन्हीं के साथ है, मम्मी के साथ ही अभी, तो अब हॉस्पिटल में एक ज़्यादा पेशेंट को मतलब फैमिली मेंबर को देखभाल हो रही है, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो अब पूरे एकदम तन मन धन से हम लोग अपना ये मैराथन और जो टैक्स मैराथन रिवीजन है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, मैं एक बार फ्रेश आप लोग को पूरा याद दिला देता हूँ। आज का ये जो मैराथन होने जा रहा है अभी ये 4 आवर्स का, इसमें मेरा टारगेट है कि मैं ये 4 ब्लैक कलर में जो चैप्टर्स मार्क करा दूं आप लोगों को। बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स का मैराथन, इंक्लूडिंग सबसे खतरनाक टीडीएस का मैराथन, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चैनल बना सारा डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब एक बात समझो, टैक्स कंप्यूटेशन का कोई भी सम एग्जाम में आ जाए उसमें डिडक्शन चैप्टर 6 से नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो पक्का रहेगा। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है टैक्स कंप्यूटेशन को एकदम अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर लेना। अब वो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। मैं टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर में तो जाऊंगा, इसमें सारे टैक्स रेट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, इसमें सरचार्ज को लेकर भी जो लोचा होता है ना वो मैं पूरा सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। देखना तुमको एकदम नेचुरल कॉमन सेंस से याद रह जाएगा, तुमको ज्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। न्यू टैक्स रेजिम भी बहुत आसान करके करा देंगे। स्टूडेंट लोग क्या होता है ना, न्यू टैक्स रेजिम भूल जाते हैं कि उसमें क्या एडजस्टमेंट करना नहीं करना है, और अभी क्या न्यू टैक्स रेजिम थोड़ा सा ना उफान पे आएगा। रीजन क्या है, अगले असेसमेंट ईयर से तुम लोग के एग्जाम के लिए नहीं पर 2024 से ना न्यू टैक्स रेजिम विल बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अभी जैसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चल रहा है ओल्ड रेजिम, और न्यू रेजिम अगर आपको जाना है तो आप चुनो। अगले साल 24 से क्या हो जाएगा कि न्यू रेजिम विल बिकम द डिफॉल्ट रेजिम और ओल्ड रेजिम ऑप्शनल हो जाएगा, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो इसलिए न्यू रेजिम थोड़ा उफान में और स्टूडेंट को याद नहीं रहता, तो मैं न्यू रेजिम अभी इसमें से कराने जा रहा हूं अच्छी तरह से। ओके, व्हाटएवर आई एम टीचिंग इज एप्लीकेबल फॉर 2023 एग्जाम्स में एंड नवंबर। सो मैं डिडक्शन पहले कराऊंगा फटाफट, फिर मैं टैक्स कंप्यूटेशन में जाऊंगा, फिर अपने एग्जामिशन में एंड सो ऑन अपने नीचे मूव करते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट प्लीज। डिडक्शंस में सुबह मैंने थोड़ा करा दिया था, पर फिर से मैं रिकैप करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के लिए देयर इज अ मास्टर चार्ट। हम लोग सारे डिडक्शंस को ना, आई होप मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तुम लोगों को, हां ठीक है क्लियर है। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A को ना हम लोग पूरे मास्टर चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और दूसरा है इनकम बेस्ड डिडक्शन। डिडक्शन बहुत आसान है, मैं तुमको अभी पूरा क्लास ही में अभी ये इसी मैराथन लेक्चर के दौरान ही पूरा डिडक्शन याद करा दूंगा, आराम से याद रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तड़फड़ नहीं होने वाली, एकदम आराम से मैं बात को सुनना। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आई गिव यू। एक आम आदमी, एक नॉर्मल आम आदमी, हम लोग जैसा जो हमारी इंडिविजुअल फाइल होती है, जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जमा होता है, हम लोग कितने अमाउंट तक का सर डिडक्शन ले पाएंगे 6A में? मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 3,35,000 रुपए, 3,35,000। वो कैसे आया दैट आई कैन टेल यू। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ना आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट्स में ले लोगे। मेडिकल में आप 75,000 तक आराम से ले पाओगे, 25,000 एंड अज्यूमिंग कि पेरेंट्स में कोई एक सीनियर सिटीजन है, आप फाइल होती है जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जमा होता है, हम लोग कितने अमाउंट तक का सर डिडक्शन ले पाएंगे 6A में? मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 3,35,000 रुपए, 3,35,000। वो कैसे आया दैट आई कैन टेल यू। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ना आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक का 3,35,000। वो कैसे दैट आई कैन टेल यू। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ना आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट्स में ले लोगे। दैट आई कैन टेल यू। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ना आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट्स में ले लोगे। मेडिकल में आप 75,000 तक आराम से ले पाओगे, 25,000 एंड अज्यूमिंग कि पेरेंट्स में कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 75,000 तक मिल जाएगा, 50 ही तो 75 मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके पॉलिसी वगैरह में सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो मैं 75,000 लेके चला हूं, 2,75,000। इंटरेस्ट डोनेशन हम जैसे आम आदमी के मिडिल क्लास लाइफ में उतना नहीं आता है। रेंट आएगा, रेंट में आप 60,000 तक का ले सकते हो, तो 2,75,000 प्लस 60,000 3,35,000, तो 3,35,000 का डिडक्शन चैप्टर 6 में आम आदमी ले सकता है, ठीक है। और आप जानते हो कि 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तब रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो सपोज अगर तुम्हारी इनकम 8,35,000 है, सपोज तुम एक इंडिविजुअल, तुम्हारी इनकम है 8,35,000, तो 8,35,000 में से तुम अगर नहीं पड़ेगी कि मिडिल क्लास लाइफ में उतना नहीं तक आराम से ले, आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट्स में 35,000। वो कैसे आया दैट आई कैन टेल यू। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ना आप 1.5 लाख प्लस एक एक्स्ट्रा 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट्स में ले लोगे। मेडिकल में आप 75,000 तक आराम से ले पाओगे, 25,000 एंड अज्यूमिंग कि पेरेंट्स में कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 75 इन्वेस्टमेंट्स में ले लोगे। मेडिकल में आप 75,000 तक आराम से ले पाओगे, 25,000 एंड अज्यूमिंग कि पेरेंट्स में कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 75,000 तक मिल जाएगा, 50 ही तो 75 मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके पॉलिसी वगैरह में सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो मैं 75,000 लेके चला हूं, 2,75,000। इंटरेस्ट डोनेशन हम जैसे आम आदमी के मिडिल क्लास लाइफ में उतना नहीं आता है, पॉलिसी वगैरह में सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो मैं 75,000 लेके चला हूं, 2,75,000। इंटरेस्ट डोनेशन हम जैसे आम आदमी के मिडिल क्लास लाइफ में उतना नहीं आता है। रेंट आएगा, रेंट में आप 60,000 तक का ले सकते हो, तो
2,75,000 चल रहा हूँ, 2,75,000 इंटरेस्ट डोनेशन हम जैसे आम आदमी की मिडिल क्लास लाइफ में उतना नहीं आता है। रेंट आएगा, रेंट में आप 60,000 तक का ले सकते हो, तो 2,75,000 + 60,000 3,35,000, तो 3,35,000 का डिडक्शन चैप्टर 6 में आम आदमी ले सकता है। ठीक है, और आप जानते हो कि 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तब रिबेट मिल जाएगा आपको टैक्स चैप्टर 6 में आम आदमी ले सकता है। ठीक है, और आप जानते हो कि 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तब रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो सपोज अगर तुम्हारी इनकम 8,35,000 है, सपोज तुम एक इंडिविजुअल, तुम्हारी इनकम है 8,35,000, तो 8,35,000 में से तुम अगर ये 3,35,000 का चैप्टर 6 वाला डिडक्शन ले लो तो जीटीआई 8,35,000, 3,35,000 का 6 में डिडक्शन, टीआई कितना का 5 लाख, और टोटल इनकम 5 लाख तक है फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो आप रिबेट ले सकते हो अंडर सेक्शन 87 12,500 और आपका टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगा। करेक्ट, तो ये एक मोटा मोटा सार मैंने तुमको दिया, पर इसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो स्पेशल केसेस में आप अवेल कर सकते हो। हम तो सारी सीखना, एग्जाम सारी आएगा, तो डिडक्शंस को दो भाग में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या अपना पेमेंट बेस्ड डिडक्शन, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन सबसे बड़ा है, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे IIM, you know IIM Ahmedabad, IIM has great research and development department R&D, IIM, I से इन्वेस्टमेंट्स, फिर वापस I से इंटरेस्ट, फिर M से मेडिकल, IIM, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, R से रेंट, घर का रेंट, और D से डोनेशंस। ये हो गया, तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, 6 से रेंट, घर का रेंट, और D से डोनेशंस। ये हो गया, तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। R से रेंट, घर का रेंट, और D से डोनेशंस। ये हो गया, तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, 6 से में अगर सेक्शन नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर चलेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाओगे। इनकम बेस्ड डिडक्शन में दो कैटेगरी है, स्पेशल इनकम्स एंड इंटरेस्ट इनकम। स्पेशल इनकम देखो आम आदमी लोग का नहीं होता, दिक्कत। IIM has great research and development department R&D, IIM, I से इन्वेस्टमेंट्स, फिर वापस I से इंटरेस्ट, फिर M से मेडिकल, IIM, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, R से रेंट, घर का रेंट, और D से डोनेशंस। ये हो गया, तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, 6 से में अगर सेक्शन नंबर याद रह जाए से डोनेशंस। ये हो गया, तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, 6 से में अगर सेक्शन नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर तो चलेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाओगे। इनकम बेस्ड डिडक्शन में दो कैटेगरी है, स्पेशल इनकम्स एंड इंटरेस्ट इनकम। स्पेशल इनकम देखो
आम आदमी लोग का नहीं होता, वो बड़े बड़े कंपनियों में जब नए एम्प्लॉइज को हायर करते हैं या रॉयल्टी इनकम वगैरह जो उन पे होता है। और इंटरेस्ट स्पेशल, फिर वापस आई से इंटरेस्ट, फिर एम से मेडिकल, आई एम, फिर रिसर्च एंड आर एंड डी, आर से रेंट, घर का रेंट, और डी से डोनेशंस। ये हो गया। तो ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की मास्टर चार्ट, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ओके, 6 में अगर सेक्शन नंबर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर चलेगा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे सेक्शन याद नहीं कर पाओगे। इनकम बेस्ड डिडक्शन में 2 कैटेगरी है, स्पेशल इनकम्स एंड इंटरेस्ट इनकम। स्पेशल इनकम देखो आम आदमी लोग का नहीं होता, वो बड़े बड़े कंपनियों में जब नए एम्प्लॉइज को हायर करते हैं या रॉयल्टी इनकम वगैरह जो उन पे होता है। और इंटरेस्ट इनकम तो हम सबका ही होता है ना, हम सबके बैंक में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट है, और अगर सीनियर सिटीजन फैमिली में उनके नाम पे अपने फिक्स डिपॉजिट आरडी सेविंग्स करेगा तो उसमें ब्याज उसमें 80 भी है, तो इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन भी आप ले सकते हो। तो मैं तो बोलूं और 10,000 जोड़ दो। अब मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट सीनियर सिटीजन, आई एम 36, तो मैं 80 में 10,000 रुपए का सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट का और एक डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, तो मेरा कुल हो जाएगा 3,45,000। तो 3,35 में 3,45,000 तक का मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला जो रेंज है उससे स्टार्ट करेंगे। पहले मैं 80C बताने जा रहा हूं। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करता हूं मैं 80C। अब एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग मूव ऑन करेंगे। यहां पर ना ऐसा होता है कि जब तुम एक के बाद एक दनादन सेक्शन याद करते जाते हो तो, और टैक्स में ना दुनिया भर का डेटा और फैक्ट्स भरा हुआ है, तो माथा ना थक जाता है एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद माइंड एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। पर इसी वक्त क्या होता है, एक जादू होता है। जादू ये होता है एग्जाम टाइम में ना या क्राइसिस के टाइम पे ना हमारे अंदर की जो छुपी हुई शक्ति होती है वो एकदम जोर से बाहर निकल के आती है। उस समय हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल केबिलिटी में नहीं करते। तो नॉर्मल में कभी आपका टैक्स पढ़ोगे ना और एक बार में आपको डिडक्शन का पूरा पढ़ना पड़ जाए, आप थक जाओगे, टूट जाओगे। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम डिडक्शन के हम तो पूरा इनकम टैक्स करना, पूरा जीएसटी करके जाना है। तो एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन मूव ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले 80C इन्वेस्टमेंट्स। याद रखना इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए मैक्सिमम जो फाइल होती है वो इंडिविजुअल एचयूएफ की होती है। तुम लोग ऐसे इंडिविजुअली एचयूएफ होता है। तो मैक्सिमम जो हमारे डिडक्शंस है वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो सब सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है किसके लिए। तो मैंने सेक्शन के हेडिंग में लिख के दे दिया था, जैसे यहाँ लिखा ना इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, और मैक्सिमम अमाउंट कितना वो भी लिख के दे दिया। तो ऐसा हर जगह आएगा। जनरली तुम याद रखो कि हमारे सिलेबस में जितने भी 6 वाले डिडक्शंस है मैक्सिमम वो इंडिविजुअल एचयूएफ के ही है। अब 80C की बात करें तो 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया है। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, ये रिश्तेदारों के नाम है जो याद रख लो थोड़ा, SSC, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसे भी, अगर कुछ नहीं बोला तो डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, दोनों ही कवर्ड है। P से पेरेंट्स, 2C मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब 80C के जो डिडक्शंस उसको 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस में आप जब प्रीमियम पे करते हो तो 80C में डिडक्शन मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम पे करते हो तो 80D में मिलता है। तो 80C इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। इनमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस किसका हो रहा है, SS मिलता है। चिल्ड्रन कैसे भी, अगर कुछ नहीं बोला तो डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, दोनों ही कवर्ड है। P से पेरेंट्स, 2C मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अब 80C के जो डिडक्शंस उसको 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस में आप जब प्रीमियम पे करते हो तो 80C में डिडक्शन मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम पे करते हो तो 80D में मिलता है। तो 80C इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। इनमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस किसका हो रहा है, SSC, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। देखो P पेरेंट काटा हुआ है, मतलब पेरेंट का लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो 80C नहीं मिलेगा। 80C तब मिलेगा जब सेल्फ, स्पाउस से चिल्ड्रन का LIC करा रहे हो तो। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हो, अगर आप एक एम्प्लॉई हो तब तो ऐसे ही आपका अच्छा खासा अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, तो आपको वहां से करा रहे हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट आप 80 दे दिया। तो ऐसा हर जगह आएगा। जब तक का डिडक्शन याद रख लो। तो डिडक्शंस उसको 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस में आप जब प्रीमियम पे करते हो तो 80C में डिडक्शन मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम पे करते हो तो 80D में मिलता है। तो 80C इज फॉर लाइफ मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर प्रीमियम पे करते हो तो 80D में मिलता है। तो 80C इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। इनमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस किसका हो रहा है, SSC, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। देखो P पेरेंट काटा हुआ है, मतलब पेरेंट का लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो 80C नहीं मिलेगा। 80C तब मिलेगा जब सेल्फ, स्पाउस से चिल्ड्रन का LIC करा रहे हो तो। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हो, अगर आप एक एम्प्लॉई हो तब तो ऐसे ही आपका अच्छा खासा अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, तो आपको वहां से डिडक्शन मिल जाएगा। पर एक आम आदमी भी प्रोविडेंट फंड PPF में जमा कर सकता है। ट्यूशन फीस, बच्चों की जो स्कूल की फीस होती है ना उसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वो भी आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हैं क्योंकि वहां ट्यूशन वर्ड है। ट्यूशन का मतलब ये कोचिंग सेंटर वाला ट्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के पापा लोग कई जन में जानता भी ऐसा करते हैं कि वो टीचर लोगों की जो फीस का बिल होता है वही दिखा देते हैं, वैसे नहीं होता। ट्यूशन फीस मतलब स्कूल या कॉलेज की फीस होती है। ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और टैक्स वालों की नजरों में कोचिंग सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो डिग्री देने का पावर रखता हो, तो वो कॉलेज, स्कूल वगैरह। ओके, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आपने होम लोन ले रखा है हेलो, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना होम लोन का, वो आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पर मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन है 80E में है, पर वो स्पेसिफिक 80C मतलब नहीं होता। इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। इनमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस किसका हो रहा है, SSC, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। देखो P पेरेंट काटा हुआ है, मतलब पेरेंट का लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो 80C नहीं मिलेगा। 80C तब मिलेगा जब सेल्फ, स्पाउस से चिल्ड्रन का LIC करा रहे हो तो। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हो, अगर आप एक एम्प्लॉई हो तब तो ऐसे ही आपका अच्छा खासा अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, तो आपको वहां से डिडक्शन मिल जाएगा। पर एक आम आदमी भी प्रोविडेंट फंड PPF में जमा कर सकता है। ट्यूशन फीस, बच्चों की जो स्कूल की फीस होती है ना उसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वो भी आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हैं क्योंकि वहां ट्यूशन वर्ड है। ट्यूशन का मतलब ये कोचिंग सेंटर वाला ट्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के पापा लोग कई जन में जानता भी ऐसा करते हैं कि वो टीचर लोगों की जो फीस का बिल होता है वही दिखा देते हैं, वैसे नहीं होता। ट्यूशन फीस मतलब स्कूल या कॉलेज की फीस होती है। ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और टैक्स वालों की नजरों में कोचिंग सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो डिग्री देने का पावर रखता हो, तो वो कॉलेज, स्कूल वगैरह। ओके, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आपने होम लोन ले रखा है हेलो, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना होम लोन का, वो आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पर मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन है 80E में है, पर वो स्पेसिफिक केसेस में होता है, वो हर बार नहीं होता है। और वैसे भी होम लोन वगैरह का जो इंटरेस्ट है वो तो आप HP कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, सेक्शन 24 क्लॉज बी में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख। ये अदर इन्वेस्टमेंट्स है कुछ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन का यूलिप करोगे मिल जाएगा। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो खुद के नाम पे आप करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। और इंश्योरेंस नहीं होता,
मतलब ये कोचिंग सेंटर वाला ट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों के पापा लोग कई जन मैं जानता भी हूं ऐसा करते हैं कि वो टीचर लोगों की जो फीस का बिल होता है वही दिखा देते हैं, वैसे नहीं होता। ट्यूशन फीस मतलब स्कूल या कॉलेज की फीस होती है, ओके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और टैक्स वालों की नजरों में कोचिंग सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब वो होता है जो डिग्री देने का पावर रखता हो, तो वो कॉलेज स्कूल वगैरह, ओके। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आपने होम लोन ले रखा है हेलो, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना होम लोन का, वो आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पर मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन है प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आपने होम लोन ले रखा है हेलो, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना होम लोन का, वो आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पर मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख मिलेगा। इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन है एटीई में है, पर वो स्पेसिफिक केसेस में होता है, वो हर बार नहीं होता है। और वैसे भी होम लोन वगैरह का जो इंटरेस्ट है वो तो आप एचपी कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, सेक्शन 24 क्लॉज बी में। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख। ये अदर इन्वेस्टमेंट्स है कुछ, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन का यूलिप करोगे तो मिल जाएगा। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो खुद के नाम पे आप करोगे तो रिडक्शन मिल जाएगा। आओ देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में याद रखना आपको डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट क्या है? एग्जामिशन मिलेगा आपको और डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है। अगर एनुअली जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो अगर पॉलिसी वैल्यू के 10% के अंदर है, जो कि रहता ही है, तो पॉलिसी के मैच्योर होने पे आपको जो भी पैसा मिलेगा दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर 1010D, ओके। पॉलिसी मैच्योर होने पे जो भी आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010D प्रोवाइडेड द प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू, ओके। डिडक्शन आपको मिलेगा एटीसी में, जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो उसका आप एटीसी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये डबल बेनिफिट है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट एग्जेम्पशन, दिस इज द डिडक्शन एटीसी। इसमें कुछ छोटी छोटी बारीक बातें हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं है। प्लस यहाँ पे 10% वाली लिमिट होती है कि 1/4/2013 या उसके बाद की कोई भी पॉलिसी है, तो इफ द प्रीमियम अमाउंट इज 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू तब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सीवियर डिसेबिलिटी वगैरह के केस में 15% की लिमिट भी होती है, ओके। पॉलिसी कम से कम आपको 2 साल कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मिल जाएगा। प्रीमियम पे करते हो उसका आप एटीसी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये डबल बेनिफिट है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट एग्जेम्पशन, दिस इज द डिडक्शन एटीसी। इसमें 1.5 लाख और डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है। अगर एनुअली जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो अगर पॉलिसी वैल्यू के 10% के अंदर है, जो कि रहता ही है, तो पॉलिसी के मैच्योर होने पे आपको जो भी पैसा मिलेगा दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर 1010D, ओके। पॉलिसी मैच्योर होने पे जो भी आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010D प्रोवाइडेड द प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू, ओके। डिडक्शन आपको मिलेगा एटीसी में, जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो उसका आप एटीसी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये डबल बेनिफिट है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट एग्जेम्पशन, दिस इज द पे करते हो उसका आप एटीसी ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू, ओके। डिडक्शन आपको मिलेगा एटीसी में, जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो उसका आप एटीसी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और पे जो भी आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर 1010D प्रोवाइडेड द प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ द पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू, ओके। डिडक्शन आपको मिलेगा एटीसी में, जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो उसका आप एटीसी में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये डबल बेनिफिट है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट एग्जेम्पशन, दिस इज द डिडक्शन एटीसी। इसमें कुछ छोटी छोटी बारीक बातें हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं है। प्लस यहाँ पे 10% वाली लिमिट होती है कि 1/4/2013 या उसके बाद की कोई भी पॉलिसी है, तो इफ द प्रीमियम अमाउंट इज 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू तब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सीवियर डिसेबिलिटी वगैरह के केस में 15% की लिमिट भी होती है, ओके। पॉलिसी कम से कम आपको 2 साल कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप डिडक्शन ले रहे हो तो 2 साल तक पॉलिसी कंटिन्यू करो, वरना डिडक्शन रिवर्स हो जाएगा। वही पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डालोगे, कैसा भी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ, सुपरएनुएशन फंड, ट्यूशन फीस, ठीक है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की इंडिया में एजुकेशन हो रहा है। होम लोन का रिपेमेंट, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ओके। देन यू हैव गॉट अदर इन्वेस्टमेंट्स। सुकन्या समृद्धि बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है, जैसे मेरे पास 2 गर्ल चाइल्ड है, एल्साना 2 साल की है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर मैं डालता हूं तो एक तो एटीसी का डिडक्शन तो मिलेगा 1.5 लाख वाला, एक ही 1.5 लाख मिलेगा, भले मेरे 2 बच्चों पर मेरे को तो एटीसी एसएससी तो एक ही है, तो एक ही 1.5 लाख मिल सकता है। और दूसरी एक और चीज है कि सुकन्या समृद्धि में जो भी इंटरेस्ट अक्रू होते जाता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको टैक्स नहीं लगता। तो ये बात ना एग्जेम्पशन चैप्टर में भी लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाता है, रीइन्वेस्ट होते जाता है, सीधा मैच्योरिटी मिलता है। तो इसमें खास बात ये है कि आप एनएससी में इस साल जितना पैसा डालो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है, एसपीएफ आपको 2 साल रिवर्स हो जाएगा। वही पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ, तभी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप डिडक्शन ले रहे हो तो 2 साल तक पॉलिसी कंटिन्यू करो, वरना डिडक्शन रिवर्स हो जाएगा। वही पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट, प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डालोगे, कैसा भी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ, सुपरएनुएशन फंड, ट्यूशन फीस, ठीक है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की इंडिया में एजुकेशन हो रहा है। होम लोन का रिपेमेंट, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ओके। देन एजुकेशन हो रहा है। होम लोन का रिपेमेंट, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ओके। देन
एंड यू हैव गॉट अदर इन्वेस्टमेंट्स। सुकन्या समृद्धि बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है, जैसे मेरे पास 2 गर्ल चाइल्ड है, एल्साना 2 साल की है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर मैं डालता हूं तो एक तो 80C का डिडक्शन तो मिलेगा, 1.5 लाख वाला, एक ही 1.5 लाख मिलेगा। भले मेरे 2 बच्चों पर मेरे को तो 80C एसएससी तो एक ही 1.5 लाख का मिल सकता है। और दूसरी एक और चीज है कि सुकन्या समृद्धि में जो भी इंटरेस्ट अक्रू होते जाता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको टैक्स नहीं लगता। तो ये बात ना एग्जामिनेशन चैप्टर में भी लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाता है, रीइन्वेस्ट होते जाता है, सीधा मैच्योरिटी में मिलता है। तो इसमें खास बात ये है कि आप एनएससी में इस साल जितना पैसा डाले हो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट करके आप पूरा 80C में रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर वैसे कुछ स्पेशल खास बात एक और चीज है कि सुकन्या समृद्धि में जो भी इंटरेस्ट अक्रू होते जाता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको टैक्स नहीं लगता। तो ये बात ना एग्जामिनेशन चैप्टर में भी लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाता है, रीइन्वेस्ट होते जाता है, सीधा मैच्योरिटी में मिलता है। तो इसमें खास बात ये है कि आप एनएससी में इस साल जितना पैसा डाले हो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट करके आप पूरा 80C में रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज है कि सुकन्या समृद्धि में जो भी इंटरेस्ट अक्रू होते जाता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको टैक्स नहीं लगता। तो ये बात ना एग्जामिनेशन चैप्टर में भी लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाता है, रीइन्वेस्ट होते जाता है, सीधा मैच्योरिटी में मिलता है। तो इसमें खास बात ये है कि आप एनएससी में इस साल जितना पैसा डाले हो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट करके आप पूरा 80C में रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर वैसे कुछ स्पेशल स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सब नाम तो तुम लोग पैसा डाले हो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट करके आप पूरा 80C में रिडक्शन क्लेम तो सीधा मैच्योरिटी में मिलता है। तो इसमें खास बात ये है कि आप एनएससी में इस साल जितना पैसा डाले हो प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट करके आप पूरा 80C में रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर वैसे कुछ स्पेशल स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सब नाम तो तुम लोग जानते हो। अब इन पे डिटेल में क्या बोलूं, ये एक एक चीज मैंने डिटेल में क्लास में तो पढ़ाई है, यहाँ पे सिर्फ एक नाम गो थ्रू कर लेना तो बेहतर रहेगा। अब आता है 80CCC। 80CCC इज अबाउट दिस पेंशन स्कीम्स। अगर आप पेंशन स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख तक का मिल सकता है ना। हम तो सब जानते हैं कि भाई 80C हो या 80CCC हो, 80CCD का बनो, मिला के 1.5 लाख का लिमिट है। 80CCD दिस इज अबाउट एनपीएस एंड एपीवाई। मेनली तुम एनपीएस दिमाग में रखो, नेशनल पेंशन सिस्टम, एपीवाई अटल पेंशन योजना, पर मेनली एनपीएस दिमाग में रखो। एनपीएस आया था शुरू में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, पर बाद में भी सबके लिए ओपन हो गया। इनफैक्ट मैं तो कहीं नौकरी नहीं करता, मेरा तो अपना ही बिजनेस है, मैं भी एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूं। कोई भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस में ना ये जानने की जरूरत है कि 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। आप पैसा सिर्फ टीयर 1 में डालते हो, फिर वहां से अपने आप ही 25% निकलकर टीयर 2 में चला जाता है। ठीक है, तो आप तो पैसा टीयर 1 में डालते हो। ओके, टीयर 1 अकाउंट में जो पैसा है वो नॉन विड्रॉएबल है, टीयर 2 अकाउंट का पैसा विड्रॉएबल होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ टीयर 1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, पर
पेंशन सिस्टम, एपीवाई अटल पेंशन योजना, पर मेनली एनपीएस दिमाग में रखो। एनपीएस आया था शुरू में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, पर बाद में भी सबके लिए ओपन हो गया। इनफैक्ट मैं तो कहीं नौकरी नहीं करता, मेरा तो अपना ही बिजनेस है, मैं भी एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूं, कोई भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस में ना ये जानने की जरूरत है कि दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। आप पैसा सिर्फ टीयर 1 में डालते हो, फिर वहां से अपने आप ही 25% निकलकर टीयर 2 में चला जाता है, ठीक है। तो आप तो पैसा टीयर 1 में डालते हो, ओके। टीयर 1 अकाउंट में जो पैसा है वो नॉन विड्रॉएबल है, टीयर 2 अकाउंट का पैसा विड्रॉएबल होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ टीयर 1 अकाउंट में 3 बातें याद रखना, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं और एग्जामिनेशन चैप्टर में बोलूंगा। देखो सेक्शन नंबर क्या है, 10 का 12A, 60% आप जब एनपीएस के एंड में, जब आपका पेंशन रिटायरमेंट हो जाएगा और आप एनपीएस से पैसा निकालोगे पेंशन, तो दो तरीके। नाउ टीयर 1 अकाउंट में 3 बातें याद रखना, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं और एग्जामिनेशन चैप्टर में बोलूंगा। देखो सेक्शन नंबर क्या है, 10 का 12A, 60% आप जब एनपीएस के एंड में, जब आपका पेंशन रिटायरमेंट हो जाएगा और आप एनपीएस से पैसा निकालोगे पेंशन, तो दो तरीके से होता है। एक होता है मंथली करके उठा रहे हो और एक होता है एक साथ में लमसम उठा रहे हो। मंथली अगर उठाओगे तो वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। लमसम अगर उठाओगे तो उसमें 60% एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और डेथ पर अगर लीगल हेड्स को मिलेगा तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, ओके। फिर टीयर 2 अकाउंट में 25% डलता है ना, तो टीयर 2 अकाउंट से जो उठाओगे वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 10 का 12, 10 का 12 भी। टीयर 1 से जो हम रेगुलर पेंशन निकालेंगे मंथली, वो टैक्सेबल, मरने पर एग्जम्प्ट है, और लमसम उठाओगे जिंदा हो तो 60% तक एग्जम्प्ट है, और टीयर 2 में तो 25% जाता है, उठाओगे तो वो एग्जम्प्ट है, ओके, क्लियर। अब इसमें बोला हुआ है कि एनपीएस में जो भी आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस में जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं तब आंसर है 10% ऑफ सैलरी। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं और एनपीएस में पैसा डाल रहा हूं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बी प्लस डी1, डी1 तो बताया हुआ सैलरी में, डी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, रिटर्न। तो डिडक्शन एनपीएस में जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं तब आंसर है 10% ऑफ सैलरी। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं और एनपीएस में पैसा डाल रहा हूं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बी प्लस डी1, डी1 तो बताया हुआ सैलरी में, डी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, जो कि मैं हूं, ठीक है, मैं तो नौकरी नहीं करता, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अपना बिजनेस है, तो मेरे केस में अगर मैं एनपीएस में पैसा डालूंगा तो मुझे कितना रिडक्शन मिलेगा, 20% ऑफ जीटीआई, 20% ऑफ जीटीआई। पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरा जीटीआई का 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उतना थोड़ा रिडक्शन नहीं है। यहाँ 80C वाले रेंज में सब कुछ कर के 1.5 लाख निकल के आने वाला है, ओके। ये है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप नौकरी करते हो और आपके बॉस ने एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया तो 10% सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% सैलरी, इतने का प्रोडक्शन मिल जाएगा। ये खास है हम सबके लिए, ये है एडिशनल डिडक्शन, मतलब आपको 80C खास। अगर मैं एक सैलरी डिडक्शन 1 से जो हम रेगुलर पेंशन निकालेंगे मंथली, वो टैक्सेबल, मरने पर एग्जम्प्ट है, और लमसम उठाओगे जिंदा हो तो 60% तक एग्जम्प्ट है, और टीयर 2 में तो 25% जाता है, उठाओगे तो वो एग्जम्प्ट है, ओके, क्लियर। अब इसमें बोला हुआ है कि एनपीएस में जो भी आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस में जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं तब आंसर है 10% ऑफ सैलरी। अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं और एनपीएस में पैसा डाल रहा हूं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बी प्लस डी1, डी1 तो बताया हुआ सैलरी में, डी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, जो कि मैं हूं, ठीक है, मैं तो नौकरी नहीं करता, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अपना बिजनेस है, तो मेरे केस में अगर मैं एनपीएस में पैसा डालूंगा तो मुझे कितना रिडक्शन मिलेगा, 20% ऑफ जीटीआई, 20% ऑफ जीटीआई। पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरा जीटीआई का 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उतना थोड़ा रिडक्शन नहीं है। यहाँ 80C वाले रेंज में सब कुछ कर के 1.5 लाख निकल के आने वाला है, ओके। ये है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप नौकरी करते हो और आपके बॉस ने एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया तो 10% सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% सैलरी, इतने का प्रोडक्शन मिल जाएगा। नौकरी करते हो अपना बिजनेस, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बी प्लस डी1, डी1 तो बताया हुआ डाल रहा हूं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, तो डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बी प्लस डी1, डी1 तो बताया हुआ सैलरी में, डी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, जो कि मैं हूं, ठीक है, मैं तो नौकरी नहीं करता, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, अपना बिजनेस है, तो मेरे केस में अगर मैं एनपीएस में पैसा डालूंगा तो मुझे कितना रिडक्शन मिलेगा, 20% ऑफ जीटीआई, 20% ऑफ जीटीआई। पर ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरा जीटीआई का 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उतना थोड़ा रिडक्शन नहीं है। यहाँ 80C वाले रेंज में सब कुछ कर के 1.5 लाख निकल के आने वाला है, ओके। ये है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप नौकरी करते हो और आपके बॉस ने एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया तो 10% सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% सैलरी, इतने का प्रोडक्शन मिल जाएगा। नौकरी करते हो और आपके बॉस मंथली अगर उठाओगे तो वो टैक्सेबल रहेगा। टीयर 1 तो 60
डाल रहा हूँ अपनी सैलरी में, डीएनएस अलाउंस फॉर्म में कितना रिडक्शन बड़ा अमाउंट होता है, तो ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आप नौकरी करते हो और आपके बॉस ने एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया तो 10% सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% सैलरी, इससे आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ये खास है हम सबके लिए, ये है एडिशनल डिडक्शन। मतलब आपको 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी का 1 में मिला के 1.5 लाख मिलता है, प्लस 80 सीसीडी का 1B, इसमें आपको एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था कि 2 लाख का डिडक्शन सबको ही लेते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था कि 2 लाख का डिडक्शन सबको ही लेते हैं। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, एक समरी बना के याद बता देता हूँ। 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, 80CCD1 होता है ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। ये कुल मिला के आपको 1.5 लाख का मिलेगा, प्लस 80CCD का 1B, यहां पर आप एडिशनल 50,000 का रिडक्शन और ले सकते हो। और अगर आप सपोज किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके बॉस ने उसमें पैसा डाला है, ठीक है, ये होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो एक्स्ट्रा है, वो आपको 10% ऑफ सैलरी तक और मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं अपनी बात करूं और नॉर्मल आदमी लोग के केस में भी, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हो तो आपका बॉस एनपीएस में पैसे नहीं डालता, आपके बॉस जो है वो प्रोविडेंट फंड में पैसे डालेंगे, एनपीएस में नहीं। तो आम आदमी को जो नौकरी करता है या मुझ जैसों को ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हमें यही अवेलेबल रहता है, 2 लाख तक का हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दैट कम नहीं हो पाएगा। बात करूं और नॉर्मल आदमी लोग के केस में भी, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हो तो आपका बॉस एनपीएस में पैसे नहीं डालता, आपके बॉस जो है वो प्रोविडेंट फंड में पैसे डालेंगे, एनपीएस में नहीं। तो आम आदमी को जो नौकरी करता है या मुझ जैसों को ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हमें यही अवेलेबल रहता है, 2 लाख तक का हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल के लिए डिडक्शन। मेडिकल में याद रखना 3 तरह के खर्चे हैं। एक है मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। दूसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मैक्सिमम लोगों के मेडिकल के जो खर्चे होते हैं ना, वो इन 2 कैटेगरी में समा जाते हैं। जैसे घर में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी रहती है। अभी जस्ट आज की मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरी मम्मी बेलव्यू में एडमिट हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, तो हम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मम्मी का लिया, मेरा लिया हुआ है, तो मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो एक ये खर्चा होता है। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब आप जो डॉक्टर्स वगैरह के पास विजिट करते हो, आपकी दवाइयों के जो खर्चे होते हैं, सबको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। पर इसमें एक अलग से 5,000 की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ज़्यादा तो लोग प्रीमियम के लिए दे रहे हैं। और तीसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आपके परिवार में या अससी की वाइफ खुद सीनियर सिटीजन है और जिनका इंश्योरेंस नहीं है, नॉन इंश्योरेंस, अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है जिनका इंश्योरेंस नहीं है और उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, तो वो भी कवर्ड हो जाता है। तो माय मम्मी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, माय मम्मी इज 58 ईयर्स, तो शी इज नॉट, के ऊपर के लिए दे रहे हैं। और तीसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आपके परिवार में या अससी की वाइफ खुद सीनियर सिटीजन है और जिनका इंश्योरेंस नहीं है, नॉन इंश्योरेंस, अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है जिनका इंश्योरेंस नहीं है और उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, तो वो भी कवर्ड हो जाता है। तो माय मम्मी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, माय मम्मी इज 58 ईयर्स, तो शी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो ये 3 प्रकार के खर्चे हैं जो कवर होते हैं इसमें, ओके। अब इनकी लिमिट्स 2 भाग में डिवाइडेड है, आओ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे SSDC, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो क्या क्या आइटम है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये बहुत फेमस है, CGHS। मैं राइट नाउ अभी जस्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तुम अगर बेलव्यू में जैसे मतलब एनी हॉस्पिटल उसमें जाते हो ना, तो वहाँ पे तुम देखोगे वहाँ पे अलग से काउंटर होता है CGS का, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक तरह का इंश्योरेंस होता है। प्रिवेंट पे तुम देखो तो क्या क्या आइटम डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे SSDC, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो क्या क्या आइटम है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम,
कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये बहुत फेमस है, CGHS। मैं राइट नाउ अभी जस्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तुम अगर बेलव्यू में जैसे मतलब एनी हॉस्पिटल उसमें जाते हो ना, तो वहाँ पे तुम देखोगे वहाँ पे अलग से काउंटर होता है CGS का, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक तरह का इंश्योरेंस होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आप डॉक्टर वगैरह में जाते हैं, पर उसमें खुद की एक 5,000 की लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनका इंश्योरेंस नहीं है, आप या आपकी वाइफ या आपके परिवार वाले, उनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करो तो वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप कैसे भी पेमेंट करो, कैश वैश सब चलेगा, पर बाकी जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है या इंश्योरेंस है वो कैश में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैंक। ओके, तो प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे भी चलेगा है या इंश्योरेंस है वो कैश में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैंक। ओके, तो प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे भी चलेगा, बिकॉज डॉक्टरों के हम लोग कैश में देते हैं, पर बाकी सब जगह इट हैज टू बी बैंक अकाउंट। तो ये कुल मिला के जो आपको रिडक्शन मिलेगा ये 25,000 तक का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 25,000। ठीक है, लेकिन अगर खर्च किसी सीनियर सिटीजन पे हो रहा है तो ये लिमिट ज्यादा है, 50,000 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि असेसी जो है वो खुद एक सीनियर मिलेगा, ये 25,000 तक का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 25,000। ठीक है, लेकिन अगर खर्च लाके जो तो प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे भी चलेगा, बिकॉज डॉक्टरों के हम लोग कैश में देते हैं, पर बाकी सब जगह इट हैज टू बी बैंक अकाउंट। तो ये कुल मिला के जो आपको रिडक्शन मिलेगा ये 25,000 तक का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 25,000। ठीक है, लेकिन अगर खर्च किसी सीनियर सिटीजन पे हो रहा है तो ये लिमिट ज्यादा है, 50,000 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि असेसी जो है वो खुद एक सीनियर सिटीजन है, हो ही सकता है ना, तब उस केस में तो 50,000 का लिमिट हो जाएगा। ओके, अब जैसे मेरे पापा की भी तो फाइल है, माई फादर इज अ सीनियर सिटीजन, ही 60+। ओके, तो वो सीनियर सिटीजन है, तो अब उनकी फाइल में जब उनका असेसमेंट होगा तो ये जितने भी खर्चे हैं उसके लिए वो तो 50,000 की लिमिट में जा ही सकते हैं। नेक्स्ट है माता पिता के लिए, पेरेंट्स, वेदर डिपेंडेंट ऑन नॉट, वही सारे खर्चे हैं और लिमिट कितनी है? 25,000। और अगर जिसके ऊपर खर्च हो रहा है माता पिता जो भी वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000। तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन मिलाकर मिनिमम रिडक्शन आप कितना ले सकते हो? 25,000। ज्यादा कितना ले सकते हो? ज्यादातर चांस है 50,000, बिकॉज आप अपने लिए भी करोगे, अपने माँ बाप के लिए भी करोगे, तो दो लिमिट हो गया 25-25। अब इनमें अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50, अगर दोनों ही सीनियर है तो 50 1 लाख हो जाएगा। सो द रिडक्शन पॉसिबल इज आइदर 25 और 50 और 75 और 1 लाख। ठीक है, ज्यादातर लोग इस ब्रैकेट में फॉल करेंगे। जैसे तुम जब नौकरी में जाओगे, कमाने लग जाओगे, ठीक है, तुम 30+ समथिंग रहोगे, तब चांसेस है कि वन ऑफ योर पेरेंट्स इज आइदर सीनियर सिटीजन, तो तुमको अपने लिए तो 25 मिल जाएगा और अपने माता पिता के लिए 50, तो 75,000 तक तुम क्लेम कर लोगे। वही मैंने लिया था शुरू में आज बोलते वक्त ही। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम लिमिट 5,000 की, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप कैसे भी स्पेंड कर सकते हो, कैश भी चलेगा। 80 DD। बस 2 मिनट में बोलूंगा और इसी के साथ आराम से 2 सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, कंटिन्यू करता हूं। इधर अगर असेसी खुद डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में तो रेगुलरली काफी खर्चा होता ही है। तो असेसी अगर खुद डिसेबल्ड है, वो अपनी ही फाइल में अगर रिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो वो 80U में क्लेम कर सकता है। कितना रिडक्शन मिलेगा? फिक्स अमाउंट है 75,000 का, फिक्स अमाउंट है, चाहे आपके ऊपर खर्चा कम लगे या ज्यादा, फिक्स अमाउंट है 75,000। अगर सीवियरली डिसेबल्ड है तब 1.25 लाख रुपए का। तो दो लिमिट है, 75,000 और 1,25,000। इफ द असेसी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज डिसेबल्ड और वो अपनी फाइल में रिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो 80U में लेंगे। और अगर मान लो कि परिवार वाले लेना चाहते हैं, मतलब आपके परिवार में कोई डिसेबल्ड है, उसकी देखरेख पे आप खर्च कर रहे हो और आप रिडक्शन लेना चाहते हो तो 80 DD में लोगे। अब दोनों में से एक ही को रिडक्शन मिलेगा, या तो डिसेबल्ड पर्सन अगर खुद लेना चाहता है तो वो 80U में ले ले, या उसके परिवार वाले लेना चाहते हैं तो 80 DD में ले ले। पर दोनों नहीं होगा कि मतलब डिसेबल्ड पर्सन की फाइल में भी आप ले लिए और परिवार वालों की फाइल में भी ले लिए, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक जगह लेना पड़ेगा। डिडक्शन अमाउंट सेम है, फिक्स 75,000 और सीवियरली डिसेबल्ड में 1,25,000। DDB स्पेसिफाइड डिजीज 1,25,000। पड़ेगा, डिडक्शन अमाउंट सेम है, फिक्स 75,000 और सीवियरली डिसेबल्ड में 1,25,000।
80 DDB। स्पेसिफाइड डिजीज, अगर परिवार में या एसएससी में खुद में कोई को भी स्पेसिफाइड डिजीज है तो उनके इलाज के लिए जो खर्च हो रहा है उसमें आप डिडक्शन ले सकते हो। मैक्सिमम डिडक्शन है 40,000 ऑब्लिक 1 लाख। सीनियर सिटीजन तो 1 लाख, सीनियर सिटीजन तो 1 लाख, वरना 40,000। ओके, अब इसका कैलकुलेशन का स्टाइल क्या होता है देख लो। Actual amount spent for the medical treatment of the severe disease or the limit 40,000 for not senior citizen and senior के लिए 1 लाख, whichever is lower minus insurance claim received। आ गया डिडक्शन अंडर 80 DDB। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कैटेगरी में मूव कर रहे हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे मस्त लगता है, whichever is lower minus insurance claim received। आ गया डिडक्शन अंडर 80 DDB। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कैटेगरी में मूव कर रहे हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे मस्त लगता है मुझे, एजुकेशन लोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद यहाँ पे याद रखना, ये डिडक्शंस आपको जो मिल रहे हैं ये सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन के लिए मिल रहे हैं, प्रिंसिपल पोर्शन के लिए डिडक्शन नहीं मिल रही है। ये सिर्फ किसके लिए मिल रहे हैं, ये सिर्फ अब इसका कैलकुलेशन का स्टाइल क्या होता है देख लो। Actual amount spent for the medical treatment of the severe disease or the limit 40,000 for not senior citizen and senior के लिए 1 लाख, whichever is lower minus insurance claim received। आ गया डिडक्शन अंडर 80 DDB। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कैटेगरी में मूव कर रहे हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे मस्त लगता है मुझे, एजुकेशन लोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद यहाँ पे याद रखना, ये डिडक्शंस आपको जो मिल रहे हैं ये सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन के लिए मिल रहे हैं, प्रिंसिपल पोर्शन के लिए डिडक्शन नहीं मिल रही है। ये सिर्फ किसके लिए मिल रहा है, इंटरेस्ट पोर्शन के लिए। ओके, नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव इन एजुकेशन, माय मदर स्ट्रांगली बिलीव्स इन एजुकेशन, और आज मैं जो भी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे मस्त लगता है मुझे, एजुकेशन लोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद यहाँ पे याद रखना, ये डिडक्शंस आपको जो मिल रहे हैं ये सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन के लिए मिल रहे हैं, प्रिंसिपल पोर्शन के लिए डिडक्शन नहीं मिल रही। ये सिर्फ किसके लिए मिल रहा है, इंटरेस्ट पोर्शन के लिए। ओके, नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव इन एजुकेशन, माय मदर स्ट्रांगली बिलीव्स इन एजुकेशन, और आज मैं जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल, या मैं बोलूँ इकलौता एकमात्र रोल मेरी मम्मी का रहा है। मेरे पापा पढ़ाई में बहुत बाद में इंटरेस्टेड हुए, मेरी मदर डे वन से इंटरेस्टेड थी, और उन्हीं की क्या बोलते हैं ना, चेष्टा कोशिशों की वजह से मेरे अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हो पाया। पढ़ाई पे मेरी मम्मी का फोकस बहुत जबरदस्त था। हमारे घर में ना जो मेरे टाइम से माहौल चालू हुआ वो आज भी कंटिन्यू चलता है। आई वॉज एडिक्टेड, और तुमको पता होगा बच्चे लोग जो होते हैं वो टीवी से एडिक्टेड रहते हैं, जैसे तुम लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो, टीवी मोबाइल एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो वगैरह से एडिक्शन होता है कि दिन में बैठ के टीवी देखते रहे, कार्टून देखते रहे। तो मेरी पढ़ाई के लिए घर में केबल का कनेक्शन काट दिया गया था, और आज भी हमारे घर में केबल का कनेक्शन जो वो कटा हुआ है। इतनी महंगी टीवी रखी हुई बड़ी सी, पर बंद है, कनेक्शन कटा हुआ है, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन द कल्चर कि घर में वैसा वो वीडियो चलता रहे, बिकॉज वो पढ़ाई को हैम्पर करता है। तो बड़ा बलिदान हुआ, बड़ा सैक्रिफाइस हुआ है। और पढ़ाई वो चीज है ना जिससे मिडिल क्लास जो लोअर है वो एकदम सीधा अपर मिडिल क्लास में चला जाता है। पढ़ाई वो चीज है, हम लोग पढ़ लिए, हम लोग खड़े हो गए, तुम पढ़ रहे हो, तुम भी कल खड़े हो जाओगे, अपना करियर बना लोगे, सेट कर लोगे। तो सरकार ने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाल रखा है कि बैंक्स तो क्या करते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं। अब इंडिया में हायर एजुकेशन का कॉस्ट थोड़ा जाता है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ अमेरिका वगैरह के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर हम लोग अमेरिका जैसे जगह पैदा हो गए होते तब तो हमारी ऐसी एजुकेशन हो ही नहीं पाती, मैं बता रहा हूँ। तो सरकार क्या करती है, हायर एजुकेशन के लिए, सरकार और बैंक्स भी हायर एजुकेशन के लिए लोन देते हैं। अब इस लोन पे सपोज मान लो कि तुम्हारे हायर एजुकेशन मतलब 12 के बाद हायर एजुकेशन जो होता है उसके लिए तुम्हारे पापा ने लोन लिया है, तो उनको उस लोन का जो प्रिंसिपल है वो नहीं, पर जो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उसका उनको डिडक्शन यहां मिल जाएगा। और ज्यादातर मैं बोलूंगा ये सब लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उन सब में होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह जो है ना, ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो यहाँ पे जल्दी से आपको लोन नहीं मिलेगा बैंक से, पर अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, लॉ कॉलेज ये सब में दाखिला हो जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। ओके, तो वो जो भी प्रिंसिपल तुम्हारे फादर जो भी ट्यूशन फीस
स्पेंड करते हैं वो 80 में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, और जो लोन का ब्याज है उनको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। 8 साल तक मिलता है डिडक्शन, 8 साल तक डिडक्शन मिलता है। बोलो क्या पूछना है? ठीक है, 8 साल तक डिडक्शन मिलता है। तो एजुकेशन किसका हो रहा है? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। राहुल सी, तुम अभी शायद बीच में आए हो, तुमने पूरा देखा नहीं है। आई एम ऑलरेडी वेरी मतलब मेंटली, मतलब मैं बहुत अपना मनोबल खड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। प्लीज बीच में आके डिस्ट्रैक्टिव कमेंट मत करो। माय मदर इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, मैराथन का टाइम जा चुका था, फिर भी मैं चाहता था कि नहीं, मैंने अगर कमिट किया है तो मैं आके मैराथन कंडक्ट करूँ, ठीक है? तो प्लीज बीच में आके ये डिस्ट्रैक्ट करना कि ऑडिट का क्लास या ये वो जो तुम बोल रहे हो, तो अब कल अगर इंटर का टैक्स का एग्जाम है तो मैं भी टैक्स का कराऊंगा ना। तुम आके बीच में फरमाइश करो कि सर ऑडिट का बता दो, ये बता दो, वो बता दो। लॉ का हुआ था ना, या तो तुम मेरे साथ रेगुलर हो या तुम मेरे साथ मत रहो, क्योंकि मैं सारी बातें सब कुछ कर देता हूँ रेगुलरली, अब तुम ध्यान देते नहीं हो, अचानक से तुम आके एक नया डिमांड करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल यार। ये क्या लिख दिया? ऑडिट का क्लास लिया, कोई मैराथन यार उसे नहीं करते, क्या नहीं करते? जब जब जो होता है सब कुछ करते, तुम अवेलेबल नहीं रहते, तुम एब्सेंट रहते हो, तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। अगर तुम मेरा YouTube चैनल खोल के देखो, कितनी बार मैंने ऑडिट के लेक्चर्स कारो 2020 डिटेल में बना के डाला है, आरटीपी तक का डिस्कशन किया है, और अब तुम ये यहाँ पे आके सब छिछोरी हरकतें कर रहे हो बैठ के। व्हाट इज दिस राहुल? मतलब तुमको खाली डिस्ट्रैक्ट करना है कि ज्ञान लेना है? अगर तुमको ज्ञान लेना तो बीच में डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप पढ़ो अपनी पढ़ाई को, डिस्टर्ब तुमको थोड़ा कर रहा है। दिस इज नॉट मतलब गुड एट ऑल। विद्यार्थी बने हो, मतलब बड़ी कोफ्त होने लग जाती है इन सब हरकतों से। एक तो मैं जनरली इन सब पे बोलता नहीं, पर आज एक तो माहौल उस तरह का हो रखा है, और फिर भी तुमको शर्म नहीं आके यहाँ पे कमेंट मारो बेशरम की तरह। इधर 80E, तो अगर आपने अपने एजुकेशन के लिए, स्पाउस के एजुकेशन के लिए या चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। फिर 80EE, ओके, इनको हटाओ। प्लीज आप अगर फॉलो करते हो मुझे तो हमेशा फॉलो करो, बीच बीच में आके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्लीज उतना एहसान मत करो, हमेशा फॉलो करो, क्योंकि मैं सब कुछ कर देता हूं। बड़ी मुझे अजीब बात लगती है, स्टूडेंट वीडियो खोल के भी देखता नहीं, पहले कमेंट मारना चालू कर देता है। ये क्या एटीट्यूड है यार? पहले देखो तो सही। मतलब इतने क्या लाड साहब बन गए कि सब तुम्हारे आगे छोटे हो गए, तुम ही महान हो, तुम जो बोल रहे हो वो सबको सुनना पड़ेगा। एक दो ऐसे मतलब घटिया स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सब बातें बोलनी पड़ती है, जो अच्छे स्टूडेंट्स उन बेचारों को भी, उनका भी मूड खराब होता है, स्पॉइल होता है, जो पढ़ रहे थे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। अभी मतलब आई एम टेलिंग यू यार, एक अच्छे मतलब तुमसे बड़ा हूं, तुमसे मतलब प्रेम से तुमको समझा रहा हूं, अभी जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, तुमने कुछ देखा नहीं है, तो छिछोरी हरकतें, कमेंट मारना, फीडबैक देना बंद कर दो। तुम अभी तुमको खुद के लिए फीडबैक लेना चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। यू शुड नॉट बी गिविंग फीडबैक टू पीपल, यू शुड बी रिसीविंग फीडबैक एंड क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ एंड हेल्पिंग आउट योरसेल्फ, इंप्रूविंग योरसेल्फ। तुम्हें अभी बहुत संघर्ष देखना है जीवन में। ये तो मामूली सा एग्जाम है जिसको तुम पास करने के लिए इतनी जद्दोजहद करो, उसके बाद संघर्ष असली चालू होगा जब जॉब पे जाओगे। बहुत बड़ा लाइफ है, बहुत बड़ा संघर्ष है, कभी मिटता नहीं है संघर्ष। थोड़ा सा एक ह्यूमिलिटी होना चाहिए। ह्यूमिलिटी का लेक्चर खाली हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर देते हैं, अपने से बड़ों को भी ज्ञान देते हैं, पर खुद हमें ह्यूमिलिटी होती नहीं है। सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये 80EE और इसके बाद 80EE है, ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये हर बार नहीं मिलेगा आपको। एक चीज आप याद रखिए, घर अगर आप खरीदे हो, होम लोन लिए हो, तो होम लोन का जो भी ब्याज होता है वो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में तो आपको 2 लाख तक का मिल ही जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी में 2 लाख तक का तो तुमको प्रेम से मिल ही जाएगा। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है, पर ये एक्स्ट्रा हर बार नहीं है, ये सरकार बीच बीच में लेके आती है। जैसे यहीं पर देख लो 80EE में, 80EE में आपको 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट रिडक्शन मिल जाएगा इन टॉप ऑन टॉप ऑफ 24 का भी, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके पास उस घर के अलावा और कोई घर नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, द लोन मस्ट बी सैंक्शन इन द प्रीवियस ईयर 16-17। तो भाई जिन्होंने 16-17 प्रीवियस ईयर में होम लोन लिया था, उनको केवल 80EE मिलेगा। 16-17 में उनका लोन मिल गया। अब जब तक लोन चलेगा, जब तक वो इंटरेस्ट देगा, तब तक मिलता रहेगा। पर कंडीशन क्या है कि आपका लोन सैंक्शन हुआ था 16-17 में, ओके। तो ये स्पेसिफिक है, जो उस समय जिन्होंने लिया होगा उनको मिलेगा, अब नहीं। वैसे ही एक और है, ये देखो, जिन्होंने भी, जिनका लोन भी सैंक्शन हुआ है 2019 से लेकर 2022 के बीच में, उनको भी मिलेगा। उनकी कंडीशंस क्या है? दे आर नॉट एलिजिबल अंडर 80E। ऑब्वियसली अगर आपका लोन सैंक्शन 19 से 22 के बीच में हो रहा है तो 16-17 में कहां से होगा? फिर आपकी प्रॉपर्टी की जो एसडीवी वैल्यू है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास और कोई घर नहीं है, तब आप 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। 1.5 लाख यहां पर प्लस डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज बी में, ये है 80EEA, वहां पर 2 लाख का पॉइंट ले सकते हो। तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। पर वही बात है कि लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन दिस पीरियड 2019 से 2022 के बीच में। 80EEB ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। ये जो फैसिलिटी इन्होंने निकाला था, ये भी टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते गए। अभी फिलहाल ये डेटा चल रहा है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, कार लोन होता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ग्रीन नंबर प्लेट वाले हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कार लोन बैंक से लिया है इस तारीख 2019 से 2023 के बीच में, तब आपको 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए तक आपको ब्याज का रिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है।
नेक्स्ट कम्स डोनेशन सीरीज। तो हमने IIM तो खत्म कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, मेडिकल कर लिया। अब हम एक बड़े वाले में एंटर कर रहे हैं फिर से, डोनेशंस। डोनेशंस का सबसे फेमस सेक्शन नंबर कौन सा है? 80G। याद करने के लिए क्या बोलते हैं? पार्ले जी, 80G। इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक आपको ब्याज का रिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट कम्स डोनेशन सीरीज। तो हमने IIM तो खत्म कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, मेडिकल कर लिया। अब हम एक बड़े वाले में एंटर कर रहे हैं फिर से, डोनेशंस। डोनेशंस का सबसे फेमस सेक्शन नंबर कौन सा है? 80G। याद करने के लिए क्या बोलते हैं? पार्ले जी, 80G। इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ असेसीज एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल HUF। यहाँ पे क्या होता है, आप किसको डोनेट करो? डोनी। असेसीज द डोनर, और जिस संस्थान को वो डोनेशन दे रहा है वो डोनी है। तो डोनी कौन है, डिपेंडिंग ऑन दैट पता चलेगा कि डिडक्शन फुल मिलेगा कि हाफ मिलेगा। अब इसमें ना 4 कैटेगरी बनते हैं। सबसे पहले जो 2 कैटेगरी हैं, ये विदाउट सीलिंग लिमिट है। इसका मतलब है आप यहाँ जितना डोनेशन देना है दो। अगर आप 100% वाली लिस्ट को दोगे तो फुल डिडक्शन मिल जाएगा, 50% वाली लिस्ट को दोगे तो आधा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो विथ सीलिंग लिमिट है, ठीक है, विथ सीलिंग लिमिट, इसमें क्या होता है, एक सीलिंग लिमिट कैलकुलेट होगी 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। 10%, मैं नीचे लिखा हुआ दिखा दूंगा थोड़ी देर में। 10% ऑफ एडजस्टेड GTI और द अमाउंट डोनेटेड विच एवर इज लोअर। तो यहाँ एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। सीलिंग लिमिट कितना? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो ये लिमिट वाला है। ओके, अब एक एक करके 100% वाली लिस्ट लंबी है, पर सबसे आसान वही है। यहां से यहां तक जो है ना, ये सब नेशनल लेवल के आइटम्स हैं, और ये सब एकदम फैंसी लेवल के फंड्स हैं। ओके, ये सारे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो नेशनल लेवल के फंड है, सरकारी फंड है, और ये सब भी सरकारी फंड है, पर ये सब फैंसी नाम है, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, एक्सेप्ट CSR, क्योंकि CSR का रिडक्शन नहीं मिलता। अर्मेनिया अर्थक्वेक, अफ्रीका, स्टेट गवर्नमेंट का फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश जिला साक्षरता समिति, तो ये सब थोड़े फैंसी है। 50% में यहां पर आता है गांधी फैमिली प्लस ड्रॉट, सूखा। तो जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ड्रॉट। फिर सीलिंग लिमिट वाले में इधर 100% में तो 2 ही केस है, एक है फैमिली प्लानिंग और दूसरा है स्पोर्ट्स प्रमोशन। फिर 50% में सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे कॉमन है, चैरिटी। अगर आप नॉर्मल किसी भी चैरिटी वाले NGO को डोनेशन देते हो ना, तो वो एकदम लास्ट कैटेगरी में आता है, मतलब सबसे कम डिडक्शन इसी का मिलेगा। ओके, 2, 3, 4 ये सब गवर्नमेंट के ही हैं। 2, 3, 4 ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज की है, और ये है टेम्पल एंड हिस्टोरिक प्लेसेस, हेरिटेज। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी 6A में डिडक्शंस में मतलब कोई भी गांधी और गांधी फैमिली ट्रस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। पर वही बात है कि लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन दिस पीरियड, 2019 से 2022 के बीच में। 80 EEB ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। ये जो फैसिलिटी इन्होंने निकाला था, ये भी टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते गए। अभी फिलहाल ये डेटा चल रहा है, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, कार लोन होता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ग्रीन नंबर प्लेट वाले हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कार लोन बैंक से लिया है इस तारीख 2019 से 2023 के बीच में, तब आपको 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक आपको ब्याज का रिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट कम्स डोनेशन सीरीज। तो हमने IIM तो खत्म कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, इंटरेस्ट कर लिया, मेडिकल कर लिया। अब हम एक बड़े वाले में एंटर कर रहे हैं फिर से, डोनेशंस। डोनेशंस का सबसे फेमस सेक्शन नंबर कौन सा है? 80G। याद करने के लिए क्या बोलते हैं? पार्ले जी, 80G। इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ असेसीज एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल HUF। यहाँ पे क्या होता है, आप किसको डोनेट करो? डोनी। असेसीज द डोनर, और जिस संस्थान को वो डोनेशन दे रहा है वो डोनी है। तो डोनी कौन है, डिपेंडिंग ऑन दैट पता चलेगा कि डिडक्शन फुल मेडिकल कर लिया। अब हम एक बड़े वाले में एंटर कर रहे हैं फिर से, डोनेशंस। डोनेशंस का सबसे फेमस सेक्शन नंबर कौन सा है? 80G। याद करने के लिए क्या बोलते हैं? पार्ले जी, 80G। इट इज अवेलेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ असेसीज एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल HUF। यहाँ पे क्या होता है, आप किसको डोनेट करो? डोनी। असेसीज द डोनर, और जिस संस्थान को वो डोनेशन दे रहा है वो डोनी है। तो डोनी कौन है, डिपेंडिंग ऑन दैट पता चलेगा कि डिडक्शन फुल मिलेगा कि हाफ मिलेगा। अब इसमें ना 4 कैटेगरी बनते हैं। सबसे पहले जो 2 कैटेगरी हैं, ये विदाउट सीलिंग लिमिट है। इसका मतलब है आप यहाँ जितना डोनेशन देना है दो। अगर आप 100% वाली लिस्ट को दोगे तो फुल डिडक्शन मिल जाएगा, 50% वाली लिस्ट को दोगे तो आधा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो विथ सीलिंग लिमिट है, ठीक है, असेसीज द डोनर, और जिस संस्थान को वो डोनेशन दे रहा है वो डोनी है। तो डोनी कौन है, डिपेंडिंग ऑन दैट पता चलेगा कि डिडक्शन फुल मिलेगा कि हाफ मिलेगा। अब इसमें ना 4 कैटेगरी बनते हैं। सबसे पहले जो 2 कैटेगरी हैं, ये विदाउट सीलिंग लिमिट है। इसका मतलब है आप यहाँ जितना डोनेशन देना है दो। अगर आप 100% वाली लिस्ट को दोगे तो फुल डिडक्शन मिल जाएगा, 50% वाली लिस्ट को दोगे तो आधा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जो विथ सीलिंग लिमिट है, ठीक है, विथ सीलिंग लिमिट, इसमें क्या होता है, एक सीलिंग लिमिट कैलकुलेट होगी 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। 10%, मैं नीचे लिखा हुआ दिखा दूंगा थोड़ी देर में।
10% ऑफ एडजस्टेड GTI और द अमाउंट डोनेटेड विच एवर इज लोअर। तो यहाँ एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। सीलिंग लिमिट कितना, 10% एडजस्टेड GTI, तो ये लिमिट वाला है। ओके, अब एक एक करके 100% वाली लिस्ट लंबी है पर सबसे आसान वही है। यहां से यहां तक जो है ना, ये सब नेशनल लेवल के आइटम्स हैं और ये सब एकदम फैंसी लेवल के फंड्स हैं। ओके, ये सारे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो नेशनल लेवल के फंड है, सरकारी फंड है, और ये सब भी सरकारी फंड है पर ये सब फैंसी नाम है, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, एक्सेप्ट CSR, क्योंकि CSR का डिडक्शन नहीं मिलता। अर्मेनिया, अर्थक्वेक, अफ्रीका, स्टेट गवर्नमेंट का फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जिला साक्षरता समिति, तो ये सब थोड़ा फैंसी है। 50% में यहां पर आता है गांधी फैमिली प्लस ड्रॉट, सूखा, तो जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ड्रॉट। फिर सीलिंग लिमिट वाले में इधर 100% में तो दो ही केस है, एक है फैमिली प्लानिंग और दूसरा है स्पोर्ट्स प्रमोशन। फिर 50% में सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे कॉमन है, चैरिटी। अगर आप नॉर्मल किसी भी चैरिटी वाले NGO को डोनेशन देते हो ना, तो वो एकदम लास्ट कैटेगरी में आता है, मतलब सबसे कम डिडक्शन इसी का मिलेगा। ओके, 2, 3, 4 ये सब गवर्नमेंट के ही हैं, 2, 3, 4 ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज की है, और ये है टेम्पल एंड हिस्टोरिक प्लेसेस, हेरिटेज। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी 6A में डिडक्शंस में मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है, वो डोनेशन अगर उसमें है तो चैरिटी तो पक्का रहेगा ही। तो चैरिटी में जो डोनेशन आप देते हो ना, वो एकदम लास्ट कैटेगरी में, एक तो सीलिंग लिमिट भी उसमें भी 50% है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है, बड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सीख लो। ये रहा, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एडजस्टेड GTI, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एडजस्टेड GTI। अनु यादव का एक क्वेश्चन है, बार बार पढ़ते हैं सर, भूल जाते हैं, कैसे याद करें। तुम्हारी बात एकदम सच है। तुम कितनी, देखो एक बात ये भी समझो, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, तो तुम बार बार बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा पढ़े मतलब नया नया नॉलेज तुमको लगातार मिलते जा रहा है। और ये सच है कि जितना नया नया नॉलेज तुम सीखते जाओगे ना, पुरानी चीजें दबती जाती हैं, तो वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ये जो भूलने की समस्या है, ये सबके साथ है। आपको क्या लगता है टीचर लोग भूलते नहीं है? टीचर लोग अगर खड़े होकर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो क्या टीचर लोग को सब उनको याद रहता है? क्या नहीं याद रहता है? उनको भी बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर मैं आज यहाँ खड़े होकर तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ये पहले पूरा पढ़ना पड़ा है। ये मेरी किताब पता नहीं तुम देख पाओगे कि नहीं, ये मेरी बुक में यहाँ पे कैमरा में दिखेगा नहीं, पूरा लाल काला पीला किया हुआ रहता है, तो मुझे भी पढ़ने के पहले इसको पूरा याद करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, जबकि मैं तो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। तो ये समस्या सबके साथ है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका समाधान वही है, भूलेंगे तो ठीक है ना, बार बार पढ़ेंगे। जब आप बार बार पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपका लर्निंग करवाता है, आपको फिर रिवीजन में टाइम कम लगने लग जाता है ना, वो भी तो एक बात है। तो ये तो करते रहना पड़ेगा, निरंतर है। कोई भी स्किल हो वो निरंतर ही होता है, आप छोड़ दोगे तो चला जाएगा धीरे धीरे ना। सबसे पहले एडजस्टेड GTI निकालो। एडजस्टेड GTI में आपको कैसे निकालना है, GTI में से चैप्टर 6 से वाले डिडक्शंस माइनस कर दीजिए, फिर आप 5 तरह की जो स्पेशल इनकम है वो हटा दीजिए। कैपिटल गेन वाली तीनों 112, 111A, 112A, कैजुअल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, ये सब हटा दीजिए, तो बचेगा एडजस्टेड GTI। अब आपको सीलिंग लिमिट कैलकुलेट करना है। सीलिंग लिमिट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI और द अमाउंट डोनेटेड इन कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, विच एवर इज लोअर। तो आपने कैटेगरी 3, 4 में जितना भी डोनेट किया, फैमिली और स्पोर्ट्स, कैटेगरी 3 में आता है फैमिली प्लानिंग, स्पोर्ट्स, और कैटेगरी 4 में क्या आता है, चैरिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, टेंपल एंड ये क्या नाम है तुम्हारा, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले प्लेस। तो इनमें जितना डोनेशन दिया आपने और 10% एडजस्टेड GTI विच एवर इज लोअर, दैट इज योर सीलिंग लिमिट। अब जो भी सीलिंग लिमिट आपने कैलकुलेट किया, जैसे मान लो आपने सीलिंग लिमिट कैलकुलेट किया है 3 लाख रुपया, ठीक है, आपका सॉल्व क्या है 3 लाख रुपया, तो उसमें से कैटेगरी 3 वाले जितने भी आपने किए हैं ना, फैमिली प्लानिंग या स्पोर्ट्स के लिए, पहले वो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। सपोज हमने वो किया है 2 लाख, तो आप माइनस कर दो, बचा कितना 1 लाख। अब 1 लाख में से माइनस कुछ मत करो, 1 लाख का 50% निकालो, इक्वल टू 50,000, यानी कैटेगरी 4 में आपको सिर्फ 50,000 का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, सीख लो। ओके, सबसे पहले सीलिंग लिमिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI कैसे, डिडक्शन 6 से माइनस करो और सारे स्पेशल इनकम माइनस करो, एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करो, तो आता है एडजस्टेड GTI। फिर उसका 10% और 3, 4 कैटेगरी में जितना आपने डोनेशन किया वो विच एवर इज लोअर वो ले लो। अब उसमें से जितना भी कैटेगरी 3 में आपने डोनेशन किया, पहले वो आप माइनस कर दो, सब 2 लाख माइनस कर दिया, बचा कितना 1 लाख, तो जो बचा उसका सीधा 50% निकालो, वही आपको कैटेगरी 4 में अवेलेबल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चैरिटी उसी कैटेगरी में आता है। डोनेशन इन काइंड, इनका कोई डिडक्शन, सामान वगैरह तो हम लोग डोनेट करते हैं ना, तुम्हारे घरों में भी तो जो पुराना सामान निकल जाता है आप लोग डोनेट करते हो, उसका कोई डिडक्शन नहीं है। 2000 के ऊपर अगर कोई भी डोनेशन है तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 GGA ये बेसिकली नॉन PGBP SSC के लिए है, ठीक है। हम लोग PGBP चैप्टर में सेक्शन नंबर 35 पढ़ते हैं ना, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन दिया आपने नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, IIT को, रिसर्च एसोसिएशन वगैरह को, तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है 100%। अब सपोज मान लो एक नॉन PGBP SSC है, एक SSC जिसका PGBP इनकम नहीं है, वो अगर IIT, नेशनल लेबोरेटरी वगैरह को, रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन दे रहा है, तो उनको भी तो डिडक्शन मिलना चाहिए ना, उनको 80 GGA में डिडक्शन मिल जाएगा फुल अमाउंट का 100%, ठीक है। तो अगर आप PGBP वाले SSC हो तब आपको ये नहीं मिलेगा, तब तो आप सीधा अपने PGBP कैलकुलेशन में ही उसको डिडक्शन को ले सकते हो, ठीक है, एक्सपेंस की तरह दिखा के ले सकते हो। और अगर आप नॉन PGBP हो तो आप GTI के बाद 80 GGA ले लेना, 100% डिडक्शन यहाँ भी है। 2000 के ऊपर कोई भी पेमेंट है तो वो पक्का में होना चाहिए, कैश में नहीं चलेगा। इसका मैंने एक यहाँ मास्टर कंपैरेटिव बना के डाल रखा है। ओके, अब आता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। 2 नाम है, पहले वो सुन लो फिर पढ़ाएंगे, बहुत ही सुंदर है। 80 GGB, 80 GGC। 80 GGB इज अवेलेबल टू इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करेगी तो उनको फुल डिडक्शन मिल जाएगा, बट द डिडक्शन हैज टू बी इन पक्का, कैश अलाउड नहीं है, ठीक है, कैश अलाउड नहीं है।
और इंडियन कंपनी को छोड़ के अदर एसएससीज जो हैं उनको 80 जीजीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हैं तो वही 100%, पर पक्का में होना चाहिए, कैश में नहीं। अब यहां पर आप देखोगे दो नाम लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट पुराना है, कोई नया नहीं है। भारत में सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये क्या होता है आप समझो, एक बड़ी कंपनी जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, हो भी नहीं सकता, उनका सिर्फ एक ही होता है लोगों से डोनेशन। अब पॉलिटिकल पार्टी कभी भी गरीबों से जाके तो चंदा जल्दी से उठाएगी नहीं, वो सीधा पैसे वालों को अप्रोच करेगी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, ह्यूज अमाउंट का डोनेशन देती है, और उसी वजह से करप्शन भी होता है। बिकॉज जो बड़ी कंपनी आज अगर किसी पार्टी को डोनेशन दे रही है, तो सत्ता में जब वो लोग आएगी तो यही कंपनी उस पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाल के नीतियों को अपने हिसाब से चेंज भी तो करवाएगा। तो करप्शन तो मतलब जड़ में समाया हुआ है, उसको हटा ही नहीं सकते। वो करप्शन इसी की वजह से तो पैदा होता है। ये सिस्टम ही ऐसा है पॉलिटिकल पार्टी का कि बिना करप्शन के होगा ही नहीं। तो अब क्या होता है कि इंडियन कंपनी को प्रॉब्लम क्या होती है, एक कंपनी अगर सपोज बीजेपी को कुछ पैसा दे दे तो कांग्रेस बुरा मान जाएगी, कांग्रेस को दे दे आम आदमी पार्टी बुरा मान जाएगी, इसको दे दे लोकल पार्टी ये बुरा मान जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हमने किसको कितना दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर आपस में एक ट्रस्ट खोल लेते हैं, और वो बड़ी बड़ी कंपनी अपना जितना भी उनको डोनेशन देना है वो ट्रस्ट को दे देते हैं। फिर ट्रस्ट अपने आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देता है। तो ये जो ट्रस्ट है, इनका पर्पस होता है बेसिकली कि इससे मतलब कंपनी को डायरेक्टली डील नहीं करना पड़े पार्टी से, पार्टी लोगों से डील कौन करेगा, ट्रस्ट डील करेगा। तो ये प्रूडेंट ट्रस्ट है। तो कोई भी इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली पैसा दे या इलेक्ट्रल ट्रस्ट में डाले, डिडक्शन मिल जाएगा 100%, पर पक्के में होना चाहिए, कैश में नहीं। जीजीबी फॉर इंडियन कंपनी, जीजीसी फॉर अदर्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमारे एग्जाम में सम्स आ रहा है इंडिविजुअल एचएफ का, तो हम तो जीजीबी नहीं लेंगे, हम तो जीजीसी लेंगे। अब रेंट का डिडक्शन, ठीक है, रेंट में आपको 60,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, रेंट के लिए भी आपको वही करना है, आपको सबसे पहले एडजस्टेड जीटीआई निकालना है। एडजस्टेड जीटीआई में से आपको क्या क्या हटाना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सारे स्पेशल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम सब हटा दो। तो आगे एडजस्टेड जीटीआई। अब देखो डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, लोवेस्ट ऑफ द थ्री। तो आप तीन चीज कैलकुलेट करो, रेंट पेड माइनस 10% एडजस्टेड जीटीआई, फिर 25% एडजस्टेड जीटीआई, फिर 5,000 रुपये पर मंथ, यानी साल का 60,000 रुपया। तीनों में से जो भी लोवेस्ट आएगा दैट्स योर आंसर। तो ये तो कॉमन सेंस है कि मैक्सिमम रेंट का डिडक्शन कितना मिल सकता है, 60,000 रुपये मिल सकता है, उससे अधिक नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम आपको 60,000 ही मिल पाएगा घर के लिए डिडक्शन, रेंट फॉर होम। ओके, विद दिस हमारे पेमेंट बेस्ड डिडक्शन सारे खत्म होते हैं। तुम देख सकते हो मुझे बोलते हुए कुछ अराउंड 45 मिनट्स और समथिंग हुआ है, और काफी सारा चीज मैंने अभी पूरा पेमेंट बेस्ड डिडक्शन तुम लोग से डिस्कस किया। आई थिंक काफी कुछ तुमको तुरंत क्लिक कर गया होगा, याद आने लग गया होगा, हाँ ऐसा ऐसा बोला था, एक क्लैरिटी तो आई जाती है। अब हम कुछ डिडक्शंस और डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इनकम बेस्ड डिडक्शंस है। अब ये तीन जो है ना, ये स्पेशल इनकम है। एक्चुअली 80 JJAA अगर बोलो ना तो वो इनकम है ही नहीं, वो हालांकि बेयर एक्ट में इनकम बेस्ड डिडक्शन के अंदर कैटेगराइज किया गया है, पर JJAA जो है ना, ये एक्चुअली एक एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है, ये इनकम का डिडक्शन नहीं है। एक फैक्ट्री अगर नए वर्कर्स को हायर करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सरकार ने बोला कि नए वर्कर को जो भी तनख्वाह दोगे नए वर्कर्स को, उसका 30% डिडक्शन आप एक्स्ट्रा ले लो। मतलब नए वर्कर्स को सपोज आपने 10 लाख रुपए नए वर्कर हायर किए, एक्स्ट्रा रोजगार बढ़ा, उनको आप 10 लाख रुपया सैलरी दे रहे हो पूरे साल का, तो 30% और ले लो, कितना होता है 3 लाख, और 3 बार ले लो, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख, मतलब 30% 30% 30% 3 साल तक 90% आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। और जो सैलरी आप दे रहे हो वो तो डिडक्शन मिल जाएगा पीजी में, ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है टू पुश एम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअली मेरे नजरों में तो ना ये इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं, एक्सपेंडिचर बेस्ड है, पर इसको बेयर एक्ट में भी इनकम बेस्ड में रखा गया है। ओके, एक्चुअली JJAA अगर आप बोलने जा रहे हैं मिनट्स और समथिंग हुआ है, और याद आने लग गया होगा, हाँ ऐसा ऐसा बोला था, एक क्लैरिटी तो आई जाती है। अब हम कुछ डिडक्शंस और डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इनकम बेस्ड डिडक्शंस है। अब ये तीन जो है ना, ये स्पेशल इनकम है। एक्चुअली 80 JJAA अगर आप बोलो ना तो वो इनकम है ही नहीं, वो हालांकि बेयर एक्ट में इनकम बेस्ड डिडक्शन के अंदर कैटेगराइज किया गया है, पर JJAA जो है ना, ये एक्चुअली एक एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है, ये इनकम का डिडक्शन नहीं है। एक फैक्ट्री अगर नए वर्कर्स को हायर करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सरकार ने बोला कि नए वर्कर को जो भी तनख्वाह दोगे नए वर्कर्स को, उसका 30% डिडक्शन आप एक्स्ट्रा ले लो। मतलब नए वर्कर को जो भी नहीं है। एक फैक्ट्री अगर नए वर्कर्स को हायर करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सरकार ने बोला इनकम का डिडक्शन के अंदर कैटेगराइज किया गया है, पर JJAA जो है ना, ये एक्चुअली एक एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है, ये इनकम का डिडक्शन नहीं है। एक फैक्ट्री अगर नए वर्कर्स को हायर करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सरकार ने बोला कि नए वर्कर को जो भी तनख्वाह दोगे नए वर्कर्स को, उसका 30% डिडक्शन आप एक्स्ट्रा ले लो। मतलब नए वर्कर्स को सपोज आपने 10 लाख रुपए नए वर्कर हायर किए, एक्स्ट्रा रोजगार बढ़ा, उनको आप 10 लाख रुपया सैलरी दे रहे हो पूरे साल का, तो 30% और ले लो, कितना होता है 3 लाख, और 3 बार ले लो, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख, मतलब 30% 30% 30% 3 साल तक 90% आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। और जो सैलरी आप दे रहे हो वो तो डिडक्शन मिल जाएगा पीजी में, ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है टू पुश एम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअली मेरे नजरों में तो ना ये इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं, एक्सपेंडिचर बेस्ड है, पर इसको बेयर एक्ट में भी इनकम बेस्ड में रखा गया है। ओके, 80 JJ ये किन पे अप्लाई करता है, उन एसएससीज का जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB, उन पर अप्लाई करता है, पर इसको बेयर एक्ट में भी इनकम बेस्ड में रखा गया है। ओके,
80 JJ ये किन पे अप्लाई करता है? उन एसएससीज का जिनका टैक्स ऑडिट होता है। अंडर सेक्शन 44 AB उन पर अप्लाई करता है ये, ठीक है। वो एसएससीज जिनका 44 AB में टैक्स ऑडिट होता है, जो बिजनेस करते हैं, उन पर अप्लाई करता है। बिजनेस है तभी तो नए वर्कर्स को रखेंगे। तो अगर उनके एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने की वजह से उनका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर बढ़ गया, ठीक है, पिछले साल 31 मार्च की तुलना में इस साल 31 मार्च में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। पर अगर एम्प्लॉय को 25,000 से ज्यादा सैलरी दे रहे हो पर मंथ तो डिडक्शन नहीं है, ठीक है। अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी सरकार की तरफ से आ रही है तो डिडक्शन नहीं है। अगर वो एक कैजुअल एम्प्लॉय है, मतलब उसका कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह मेंटेन नहीं होता, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर उसने लेस देन 240 या फिर लेस देन 150 दिन काम किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फुटवेयर और लेदर बिजनेस 240 या फिर लेस देन 150 दिन काम किया नहीं होता तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिलेगा से आ रही है तो डिडक्शन नहीं है। अगर वो एक कैजुअल एम्प्लॉय है, मतलब उसका कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह मेंटेन नहीं होता तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर उसने लेस देन 240 या फिर लेस देन 150 दिन काम किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फुटवेयर और लेदर बिजनेस वालों के लिए 150 दिन है, वरना बाकी सब फिर लेस देन 150 दिन काम किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फुटवेयर और लेदर बिजनेस वालों के लिए 150 दिन वरना बाकी सब के लिए 240, तो लेस देन 240 किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर फिर अगले साल जब मोर देन 40 हो जाएगा, मोर देन 240, तब अगले साल के लिए वो नया एम्प्लॉय माना जाएगा और डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है, इनमें डिडक्शन नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने सपोज 100 नए वर्कर को रखा और 100 पुराने को निकाल दिया तो नेट नेट तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने इनको कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब पक्का में पेमेंट नहीं किया, पक्का मतलब अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ECS, रूल 6 अब्बा, इनमें पेमेंट करोगे तो डिडक्शन, वरना डिडक्शन नहीं है। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तब तो वॉट एवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यू हायर दैट ऑल ऑफ देम आर एडिशनल एम्प्लॉइज, डिडक्शन मिलेगा। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ द एवर नंबर ड्राफ्ट, ECS, रूल 6 अब्बा, इनमें पेमेंट करोगे तो डिडक्शन, वरना डिडक्शन नहीं है। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तब तो वॉट एवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यू हायर दैट ऑल ऑफ देम आर एडिशनल एम्प्लॉइज, डिडक्शन मिलेगा। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज, और 3 साल तक मिलेगा, तो मतलब 30 90% हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। दिस डिडक्शन इज एन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। 3 साल तो डिडक्शन, वरना
डिडक्शन नहीं है। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तब तो वॉट एवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यू हायर दैट ऑल ऑफ देम आर एडिशनल एम्प्लॉइज, डिडक्शन मिलेगा। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज और 3 साल तक मिलेगा, तो मतलब 30 90% हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। दिस डिडक्शन इज एन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। उनको जो सैलरी दे रहे हो तो पीजी में एक्सपेंडिचर जा रहा है, ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है सरकार की तरफ से आपके फायदे के लिए ताकि रोजगार बढ़े। कुछ छोटी छोटी बातें उसी से कनेक्टेड। 80 QQB, दिस इज रॉयल्टी फॉर बुक्स, दिस इज रॉयल्टी फॉर बुक्स। यहां पर ना ये 3 तरह की बुक्स कवर्ड है। 1 सेकेंड प्लीज। हेलो, 1 सेकेंड प्लीज। दो मिनट सांस लेना थोड़ा सा। हेलो, QQB, ठीक है। पढ़ाई लिखाई की जो किताबें होती हैं ना, उस किताबों के लिए ऑथर को जो रॉयल्टी मिलता है उस पर डिडक्शन नहीं है। ये डिडक्शन किस पे? लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर ऑफ बुक्स, ब्रोशर, कमेंट्री, डॉक्यूमेंट, स्पेशली टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो होती हैं, इन पे ये रॉयल्टी का डिडक्शन नहीं ले सकते। सर रॉयल्टी का डिडक्शन कितना मिलेगा? कैलकुलेट करने का सीधा तरीका मैं सिखा रहा हूं, नीचे आ जाओ। ये रहा, ओके। लुक एट द फॉर्मेट। अगर आपको रॉयल्टी लमसम अमाउंट मिलता है तो लमसम मतलब एक ही बार में। बुक्स वगैरह में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि किसी साहित्यकार ने कोई किताबें लिखी, मैं चेतन भगत उनका एग्जांपल ले सकता हूं। उनकी बुक्स तो वही लिटरेरी टाइप की होती है ना, स्टोरी बुक्स वगैरह वो लिखते हैं। तो उन्होंने कोई किताब लिखी, अब वो खुद थोड़ा ना छाप के बाजार में बेचेंगे, इसके लिए वो किसी पब्लिशर से बात करेंगे। पब्लिशर वो लोग होते हैं जिनका पूरा प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, मतलब वो प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं सस्ते में बढ़िया से और पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हर दुकान में, ताकि आपका माल बिक जाए। तो अब पब्लिशर और ऑथर के बीच में जो एग्रीमेंट वो देखना पड़ेगा। या तो पब्लिशर और ऑथर के बीच में एग्रीमेंट ये है कि आज ही एक बार में लमसम रुपया दे दो, बाद बाकी बुक कितनी बिकी उससे मतलब नहीं, दैट्स कॉल्ड लमसम। या फिर इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ बुक सोल्ड, कि लमसम तो नहीं देंगे, जितना बुक बिकेगा उसके हिसाब से आपको देंगे। तो अगर परसेंटेज में रॉयल्टी है तो मैक्सिमम 15%, सपोज रॉयल्टी है 20%, लेकिन मैक्सिमम आप 15% ही लोगे, ठीक है। तो जो भी रॉयल्टी है वो आप लिख दो। अब अगर मान लीजिए कि हमने जो किताब लिखी है वो फॉरेन में बिकेगी, तो फॉरेन में अगर किताब बिकेगी, कोई फॉरेन पब्लिशर है वहां पे वो बेचेगा, तो वहां से वो रॉयल्टी इंडिया में भेजेगा, तो उस अमाउंट को ले लो। द रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया विद इन 6 months, वो ले लो। दोनों में से जो भी केस है दैट विल बी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। अरे या तो ये होगा वो, या वो होगा वो होगा, दोनों में से एक, तो दोनों में से जो भी लोअर लगे वो ले लो, ठीक है। लोअर ऑफ द अबव, ओके। तो जो भी रॉयल्टी है उसमें से जितना फॉरेक्स इंडिया में है उतना ही। अगर फॉरेन रॉयल्टी है तो अगर इंडियन ऑथर है, इंडियन पब्लिशर है, तो फॉरेन एक्सचेंज की कोई बात ही नहीं होगी, ओके। दैट्स योर ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस कर लीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग कराने के मनुस्क्रिप्ट में, कवर डिजाइनिंग में अगर आपके खर्चे लगे तो आप माइनस करा लो, उसको बोलते हैं नेट क्वालिफाइंग अमाउंट। अब आपको डिडक्शन मैक्सिमम 3 लाख का मिलेगा। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइंग अमाउंट 2 लाख आ रहा है तो 2 लाख, 4 लाख आ रहा है तो 3 लाख, ठीक है। दैट इज द वे यू कैलकुलेट द रॉयल्टी। सिमिलर एकदम QQB से है RRB, ये पेटेंट्स के ऊपर, यहां भी मैक्सिमम वही 3 लाख का मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम स्टाइल है कैलकुलेशन का। पेटेंट्स वगैरह ना ये बेसिकली इंजीनियर लोग कराते हैं, ठीक है। इंजीनियर लोग जो भी नया नया डिजाइन इन्वेंट करते हैं ना, उसका पेटेंट होता है। तो अगर वो पेटेंट बेचेंगे किसी भी कंपनी को तो उनको रॉयल्टी मिलती है, तो वो 3 लाख रुपए तक का रिडक्शन ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को तो ये 3-3 लाख की रिडक्शन मिलेंगे नहीं, रॉयल्टी वाले। अब ये बड़ा काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है। हम सब के पास सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट पे जो साल भर में ब्याज आता है ना, अप टू 10,000 रुपीज आप डिडक्शन ले सकते हो। इंपॉर्टेंट, सपोज मान लो मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है जिसपे मुझे साल भर का ब्याज आया 12,000 रुपया, तो ये 12,000 रुपया तो पहले मैं IFOS इनकम मान लूंगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और फिर जब GTI निकाल लूंगा तो GTI से मैं 10,000 रुपये माइनस कर लूंगा 80 TTA में। इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन। तो हम जैसों को तो ये 10,000 ही मिलेगा। पापा लोगों को, मेरे पापा कम से कम सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 तक का मिल जाएगा। एक और बात है, जो सीनियर नहीं है, जो यंग सिटीजन है, उनको मैक्सिमम 10,000 है, और वो भी सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज पे ही है, सिर्फ सेविंग्स पे ही है, ठीक है। लेकिन पापा लोग जो सीनियर सिटीजन है ना, उनके केस में ये लिमिट 50,000 होता है, और सेविंग्स के साथ फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट वो भी कवर्ड होता है, ओके। तो आपको जो भी ब्याज व्यूज मिलेगा 10,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा एक गुड न्यूज है जो एक्चुअली एग्जेम्पशन चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग्स अकाउंट है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3,500 रुपये का उसमें एग्जेम्पशन भी होता है। तो मतलब मान लो कि अगर मैंने सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुला रखा है और मुझे वहां से इंटरेस्ट आ रहा है 15,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का मैं 80 TTA में डिडक्शन ले लूंगा, 3,500 रुपये का मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर लूंगा। 10,000 का डिडक्शन, 3,500 का एग्जेम्पशन, तो 1,500 रुपये सिर्फ टैक्सेबल होगा, ओके। और उसमें भी बढ़िया बात है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स खुलवाया है वो जॉइंट नाम पे खुलवा लिया किसी के साथ, तब आपको भी 3,500 मिल जाएगा और आपकी वाइफ को भी 3,500 मिल जाएगा एग्जेम्पशन। तो यहाँ डबल बेनिफिट है, एग्जेम्पशन भी है और डिडक्शन भी है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 50,000 का लिमिट है, और उनके केस में फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स तीनों में मिलेगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन भी अगर चाहें तो डिडक्शन के अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अगर जमा करेंगे तो 3,500/7,000 का उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। ओके, ग्रेट। So that completes our revision of deduction. I think I have been pretty fast in this. 1 घंटे के अंदर मैंने 6 से रिवाइज कराया। अब जैसा कि बताया था, I am moving on to the next chapter.
दैट इज टैक्स कंप्यूटेशन। जैसा कि बताया उनको एग्जाम, ठीक है, सीनियर सिटीजन भी अगर चाहें तो डिडक्शन के अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अगर जमा करेंगे तो 3,500/7,000 का उनको एग्जामेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट, सो दैट कंप्लीट्स आवर रिवीजन ऑफ डिडक्शन। आई थिंक आई हैव बीन प्रेटी फास्ट इन दिस। 1 घंटे के अंदर मैंने 6 से रिवाइज कराया। अब जैसा कि बताया था, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, टैक्स कंप्यूटेशन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पूरा एकदम अच्छे से तुम लोग को सारे रेट्स, सरचार्ज, वरचार्ज, मार्जिन लीफ, न्यू रेजीम बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, तो कल सम्स अटेम्प्ट करना आसान रहेगा। आई विल स्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक। अभी मेरे घड़ी में हो रहा है 1:42, तो 2 बजे हम लोग मिलेंगे और हम लोग ना पूरा टैक्स कंप्यूटेशन अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, सी यू 2 बजे। Questions and answers given in the chapter are based on the position of GST law existing as on 30.04.2023. After Chapter 1 Learning Outcomes GST in India, an introduction example / illust 1.2 Goods and Services, Franklin D. Roosevelt 1. Overview of taxation system in India. In any welfare state, it is the prime responsibility of the government to fulfill the increasing developmental needs of the country and its people by way of public expenditure. India, being a developing economy, has been striving to fulfill the obligations of a welfare state with its limited resources, the primary source of revenue being the levy of taxes. Though the collection of tax is to augment as much revenue as possible to the government to provide public services, over the years it has been used. GST in India, at intermediate level, it is not the end. GST is the supply. 2. Under a comprehensive tax 5 framework and collected by union tariff. 4. In Lat A, the supplier, the buyer in the importing supply of goods, computation government, state, to transfer the funds. Technology. 11 Compensation set. Tobacco is within the purview of GST. 3. Taking. Which of the following statements is incorrect? C. Interstate/intra. 6 Benefits of GST. C. Interstate/intrastate sale of the alcohol is subject to CST/VAT respectively. D. Alcoholic liquor for human consumption is subject. 6 Benefits of GST. GST is introduced with a vision to bring benefits to all the stakeholders of industry, government, and the citizens. GST is a win-win situation for the entire country. It is envisaged that GST will accrue following significant benefits to the stakeholders. Benefits to economy. Creation of unified national market. GST aims to make India a common market with common tax rates and procedures and remove the economic barriers, thereby paving the way for an integrated economy at the national level. Boost to Make in India initiative. GST has given a major boost to the Make in India initiative of the Government of India by making goods and services produced in India competitive in the national as well as international market. Further, all imported goods are being charged integrated tax, IGST, which is more or less equivalent to CGST plus SGST.
This brings parity in taxation on local and imported goods or services. Boost to investments and employment, the subsuming of major central and state taxes in GST, complete and comprehensive set-off of input tax on goods and services and phasing out of central sales tax, CST, would reduce the cost of locally manufactured goods and services. Resultantly, the competitiveness of Indian goods and services in the international market may increase to give boost to investments and Indian exports. With a boost in exports and manufacturing activity, more employment would be generated and GDP would increase. Simplified tax structure, ease of doing business, simpler tax regime with fewer exemptions along with reduction in multiplicity of taxes under GST has led to simplification and uniformity in tax structure. The uniformity in laws, procedures, and tax rates across the country makes doing business easier. Common definitions, common form/formats, common interface through GST portal result in efficiencies and synergies across the board. Certainty in tax administration, common procedures for registration of taxpayers, refund of taxes, uniform formats of tax return, common tax base, common system of classification of goods or services along with timelines for every activity ensures certainty in tax administration across India. Easy tax compliance, automated procedures with greater use of IT, GST is largely technology driven. The interface of the taxpayer with the tax authorities is through the common portal, GSTN. There are simplified and automated procedures for various processes such as registration, returns, refunds, tax payments. All processes, like applying for registration, filing of returns, payment of taxes, filing of refund claims, etc., are online through GSTN. The human interface between the taxpayer and the tax administration has greatly reduced, thereby leading to speedy decisions. The measures like e-invoice and auto-populated returns has eased the compliance for the registered person. Easier tax compliance, harmonization of laws, procedures, and rates of tax has made compliance easier and simple. There are common definitions, common form/formats, common interface through common portal, GSTN, resulting in efficiencies and synergies across the board. All this has also helped in reduction in compliance costs, alleviate the need for multiple record keeping for a variety of taxes, leading to lesser investment of resources and manpower in maintaining records to the registered person. Advantages for trade and industry. Benefits to industry, average tax burden on trade and industry has come down, which has resulted in reduction in prices of goods and services. This has resulted in more consumption, which in turn means more production and thereby boosting the growth of the industries. Mitigation of ill effects of cascading. GST is a destination-based consumption tax. It has been designed in a manner so that tax is collected at every stage and the credit of tax paid at the previous stage is available to set off the tax to be paid at the next stage of transaction. This eradicates tax on tax and allows cross-utilization of input tax credits, which benefit the industry by making the entire supply chain tax neutral. Thus, GST prevents cascading of taxes by providing a comprehensive input tax credit mechanism across the entire supply chain. Such a seamless availability of input tax credit across goods or services at every stage of supply helps in mitigating the ill effects of cascading, enables streamlining of business operations, improving competitiveness in the markets in India and across globe. Benefits to small traders and entrepreneurs. GST has increased the threshold limit for GST registration for small businesses. Small businesses have also been provided the benefit of composition scheme. With the creation of a seamless national market across the country, small enterprises will have an opportunity to expand their national footprint with minimal investment. 7 Constitutional provisions. India has a 3-tier federal structure, comprising the union government, the state governments and the local government. The power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tiers of governments, in accordance with the provisions of the Indian Constitution. The Constitution of India is the supreme law of India. It consists of a preamble,
25 parts containing 448 articles and 12 schedules. Presently, underscore 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 is leviable on underscore 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 of petroleum and diesel. I, GST, supply, 2, central excise duty, manufacture/production, 3, central sales tax, interstate sale, 4, value-added tax, intrastate sale, v, state excise duty, manufacture. Choose the most appropriate option. A, 2, 3, and 4. B, I. C, I, and 2, D, I, and V. Quiz time. 2. Those of us who understand human history know the role taxation has played in shaping the destiny of mankind. The matter of taxes,
क्या मैं सुनाई दे रही हूं? बिल्कुल ऑडिबल एंड विजिबल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके 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 परफेक्ट परफेक्ट। ऑल राइट एवरीबडी। आएंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपने किसका? चैप्टर नंबर 4 का। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज कर लिया। अब हम पढ़ेंगे किया है। कन्वर्टेबल हो गए ना, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए अब शेयर्स में। तो जितने भी शेयर्स आप इशू करोगे गवर्नमेंट को, उतने अमाउंट से आपकी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आपको कैपिटल क्लॉज, एमओए के कैपिटल क्लॉज को भी ऑल्टर करना पड़ेगा। सारे बच्चे समझ गए क्या? परफेक्ट परफेक्ट। ऑल राइट एवरीबडी। आएंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपने किसका? चैप्टर नंबर 4 का। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज कर लिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि किसके ऊपर है? शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के ऊपर ये आपका क्या है? चैप्टर है। दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। मैम इसका वेटेज कितना है? बेटा ये तो बहुत ही अच्छे खासे वेटेज का चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज होगा अराउंड 12 से 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का तक का वेटेज होगा इस चैप्टर का। अच्छा वेटेज है। अब ये देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इसका 15 मार्क्स का वेटेज है तो इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये एक अच्छा बड़ा चैप्टर है। जैसे चैप्टर 7 एक बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, और वैसे ही ये जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है ये भी अच्छा बड़ा चैप्टर है और ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। मतलब इसमें से आपको काफी एमसीक्यूज और काफी जो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं इस चैप्टर में से। तो ये जो चैप्टर है शेयर कैपिटल का, इसे अपनी क्लास में अपने करेंगे। आई ट्राई टू मेक दिस चैप्टर एज इजी एज पॉसिबल फॉर यू गाइज, कि आपको रिटेन भी कर सको और आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है इस चैप्टर के काफी दिन से रिवाइज ना हो सकता है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसा चैप्टर है कि ये ना कई बार क्या बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा बड़ा है, अरे बाद में कर लेंगे, अरे छोड़ो ना यार, छोड़ना यार, क्या यार, कभी उठाते नहीं है इस चैप्टर को। क्या जैसे चैप्टर 7 को उठाने में सबको डर लग जाता है, इतना बड़ा है कैसे होगा, ऐसे ही चैप्टर 4 को उठाने में डर लग जाता है। हाँ, सारे लोग ऐसे इग्नोर करें जैसे क्रश तुम्हें इग्नोर करती है, जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है, वैसे ही तुम भी उसी तरीके से इस चैप्टर को इग्नोर करते हो, जो कि ठीक बात नहीं है ना। होगी तब तो क्या किया जाए यार। चलिए ओके ऑलराइट। नो मैम वो इग्नोर नहीं करती। अच्छा बेटा फाइट नहीं करूंगी मैं इस चीज पे आपसे, कोई बात नहीं है। चलिए ऑलराइट ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करें इस चैप्टर को। इस चैप्टर को बेटा हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 62 से जो कि किसके ऊपर है? प्राइवेट सॉरी राइट इशू के ऊपर। प्राइवेट केस में निकल रहा है 42, 62 राइट इशू पे है। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर के कौन से पेज पे जाने वाली हूं? अच्छा आप लोग सारे राइट इशू खोल लीजिए, सेक्शन 62। ओके तो मैं क्या करूंगी, आपकी चैट को ऑफ कर दूं ना बच्चों, एक बार चैट बंद कर दूं, क्योंकि ये ना चैट ना थोड़ा स्क्रीन का जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई कर रही है। हाँ वही चैट बॉक्स इज ब्लॉकिंग द स्क्रीन। हाँ वही इसलिए मैं सोच रही हूँ चैट को बंद कर देती हूँ। बीच बीच में मैं आपसे बात करती रहूंगी, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, बीच बीच में से पूछती रहूंगी, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि वो स्क्रीन इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ चैट। ओके चलिए, ओके जी, चलिए जी, चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 62। सेक्शन 62 किसके ऊपर है बेटा? सेक्शन 62 है आपका फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दैट इज सेक्शन 62। अभी क्या होता है, कंपनी जब भी अपने नए शेयर्स को इशू करेगी, कंपनी जब भी नए शेयर्स को इशू करेगी तो कंपनी को किस तरीके से इशू करने हैं? तो कहता है कंपनी अगर नए शेयर को इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी को इन शेयर्स को किसको इशू करना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को। देखो आपके कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैसा लगाए हुए हैं, क्या ऑलरेडी आपके कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं? तो कहती है कंपनी जब भी अपने शेयर्स को फर्दर इशू करती है, मतलब जब भी कंपनी मार्केट में नए शेयर्स को इशू करती है, तो 62 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? कहता है कंपनी जब भी मार्केट में नए शेयर्स को इशू करेगी तो सबसे पहले कंपनी को इन शेयर्स को किसको इशू करना चाहिए? एग्जिस्टिंग जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर लोग हैं उनको इशू करना चाहिए।
इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। जिसके पास जितने पेड अप शेयर कैपिटल है उस प्रोपोर्शन में कंपनी जब भी नए शेयर्स को इशू करेगी तो सबसे पहले किसको इशू करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करेगी। आप उसके लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को क्या भेजोगे? ऑफर लेटर। अब मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चाहती हूँ कि यार तुम लोग को कंपनी के शेयर चाहिए क्या, तो तुम ले सकते हो। तो मैं क्या दे रही हूँ? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रही हूँ कि क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो तो हम आपको क्या दे रहे हैं? एक राइट दे रहे हैं कि अगर आप कंपनी के शेयर्स को लेना चाहते हो तो कहता है कंपनी जब भी अगर आप नए शेयर्स को इशू करते हो तो सबसे पहले आप किसको इशू करो? 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को राइट दो शेयर्स खरीदेगा, जिसके लिए आप उन्हें क्या भेजोगे? ऑफर लेटर भेजोगे। ये कहता है ये ऑफर कम से कम 15 दिन के लिए मिनिमम ऑफर ओपन होना चाहिए, मैक्सिमम ये ऑफर 30 दिनों के लिए ओपन होना चाहिए। करेक्ट? अगर आप लोगों चाहते हो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाए, आपकी कंपनी के शेयर्स ले, तो आप मिनिमम उन्हें कितने पीरियड का ऑफर दोगे? मिनिमम आप ये ऑफर ओपन रखोगे 15 दिन के लिए, मैक्सिमम ये ऑफर कितने दिन तक ओपन रहेगा? 30 डेज के लिए। आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज 15 दिन से कम पीरियड का टाइम भी प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड उनके 90% मेंबर्स अग्री करते हैं। यार प्राइवेट कंपनी में तो वैसे हो सकता है कम मेंबर्स हो, 200 से ज्यादा तो मेंबर्स ही नहीं होते ना प्राइवेट कंपनी में। तो कहता है प्राइवेट कंपनी तुमको काय को चाहिए? मिनिमम 15 दिन। हो सकता है तुम्हारी कंपनी में कम लोग हैं तो आप 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपके 90% मेंबर्स अग्री करते हैं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी के केस में या प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपके 90% मेंबर्स इशू करता ओके है तो आप ऑफर कम पीरियड का भी दे सकते हो। 15 दिन से जो मिनिमम टाइम है उससे कम पीरियड का भी ऑफर आप लोगों को दे सकते हो और बोल सकते हो कि अगर आपको कंपनी के शेयर्स को लेना है तो आप हमें रिस्पॉन्ड करें। मिनिमम 15 दिन से भी कम का आप समय दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपके 90% मेंबर्स अग्री करते हैं तो। राइट टू रेनाउंस allowed if AOA do not restrict it. Details are mentioned in the notice and offer letter. कहता देखो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोहिबिट नहीं करता तो आप राइट ऑफ रेनाउंसमेंट भी दे सकते हो। मतलब मैंने अपने कंपनी के मेंबर्स को राइट दिया कि आप कंपनी के शेयर्स को अगर खरीदना चाहते हो, कंपनी नए शेयर्स ला रही है, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। राइट ऑफ रेनाउंसमेंट मतलब जिनको मैंने ये राइट दिया है क्या वो ये राइट आगे किसी और को दे सकते हैं? मान लो मैं तो नहीं लेना चाहती पर मैं अपने पापा को ये राइट दे सकती हूँ कि आपको लेना है तो आप ले लो। तो राइट ऑफ रेनाउंसमेंट कंपनी कब देगी अपने मेंबर्स को? अगर एओए प्रोहिबिट नहीं करता, अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, अगर एओए ऑथराइज करता है, एओए साइलेंट है तो आप राइट ऑफ रेनाउंसमेंट दे सकते हो। अगर एओए प्रोहिबिट कर दे, एओए में लिखा हुआ कि नहीं राइट इशू में आप आगे राइट ऑफ रेनाउंसमेंट एक मेंबर्स को नहीं दोगे, राइट ऑफ रेनाउंसमेंट शुड नॉट बी गिवन, तो आप राइट ऑफ रेनाउंसमेंट नहीं देंगे। Disposing shares that are not taken. If right to purchase share is not exercised, मान लो कुछ लोगों ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो बचे हुए शेयर्स हैं जो एक्सरसाइज नहीं हुए, मेंबर्स ने टाइम के अंदर अंदर जिन शेयर्स को नहीं लिया, कुछ ऐसे मान लो शेयर्स बच गए जो सब्सक्राइब नहीं हुए, तो जो कंपनी की बोर्ड है वो डिस्पोज ऑफ कर देगी शेयर्स को। किस तरीके से? ऐसे तरीके से जिससे जो डिसएडवांटेजेस ना हो शेयर होल्डर या कंपनी के। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में इन शेयर्स को जो सब्सक्राइब नहीं हुए उसे क्या करेगी? डिस्पोज ऑफ करेगी। जैसा भी आप लोगों को क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को अभी ये बताया सेक्शन 62 आप अभी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 62 में आपने अभी सब सेक्शन 1 पढ़ा जिसके अंदर आपने अभी क्लॉज ए पढ़ा, जिसमें मैंने आपको अभी क्या बताया कि कंपनी जब भी फर्दर इशू लाएगी शेयर्स का, जब भी कंपनी फर्दर इशू लाएगी शेयर्स का, कंपनी जब भी फर्दर इशू लाएगी अपने कंपनी के शेयर्स का तो कंपनी सबसे पहले ये किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को ऑफर करेगी। और ये ऑफर मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन रहेगा? 15 दिन के लिए। मैक्सिमम ये ऑफर कितने दिन तक ओपन रहेगा? 30 डेज के लिए। आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी 15 दिन से कम पीरियड का भी ऑफर दे सकती है अगर 90% मेंबर्स अग्री करते हैं तो। अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, अगर एओए डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, अगर एओए रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता तो आपके पास राइट है क्या करने का? राइट टू रेनाउंस भी है। मतलब ये आगे आप इन शेयर्स को किसी और को भी दे सकते हो। मतलब आगे ये राइट जो आपको मिला है, मेंबर लोग आगे ये राइट किसी और को भी दे सकते हैं। मैं तो नहीं ले रहा राइट पर आपको एक्सरसाइज करना है तो कर लो। मेंबर आगे ये रेनाउंस कब कर पाएंगे राइट? अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता तो कंपनी क्या करेगी? राइट ऑफ रेनाउंसमेंट देगी। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? जो शेयर्स अनसब्सक्राइब होंगे तो बोर्ड डिस्पोज ऑफ कर देगी। बोर्ड शैल डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में। कौन से शेयर्स जो अनसब्सक्राइब, जो लोगों ने नहीं लिए, जो मेंबर्स लोग ने नहीं लिए, तो कंपनी क्या करेगी? डिस्पोज ऑफ कर देगी इन दी बेस्ट इंटरेस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ट इंटरेस्ट में डिस्पोज ऑफ कर देगी। 62 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी क्या बोलता है? कंपनी जब भी फर्दर इशू लाती है शेयर्स का तो कंपनी इन शेयर्स को इंप्लॉइज को भी दे सकती है। कंपनी चाहे तो आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दो, या कंपनी आप चाहो तो ये जो फर्दर इशू आप ला रहे हो 62 किसके बारे में है? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। कंपनी जब नए शेयर्स लाती है तो 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है? आप इन शेयर्स को एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दो। 62 सबसेक्शन 1 बी कहता है आप इन शेयर्स को अपने इंप्लॉइज को भी दे सकते हो ईसॉप्स द्वारा कर देगी बेस्ट इंटरेस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स अग्री करते हैं तो। अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, अगर एओए डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, अगर एओए रेस्ट्रिक्ट क्या करेगी? डिस्पोज ऑफ करेगी। जैसा भी आप लोगों को क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को अभी ये बताया सेक्शन 62 आप अभी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 62 में आपने अभी सब सेक्शन 1 पढ़ा जिसके अंदर आपने अभी क्लॉज ए पढ़ा, जिसमें मैंने आपको भी क्या बताया कि कंपनी जब भी फर्दर इशू लाएगी शेयर्स का, जब भी कंपनी फर्दर इशू लाएगी शेयर्स का, कंपनी जब भी फर्दर इशू लाएगी अपने कंपनी के शेयर्स का तो कंपनी सबसे पहले ये किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को ऑफर करेगी। और ये ऑफर मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन रहेगा? 15 दिन के लिए। मैक्सिमम ये ऑफर कितने दिन तक ओपन रहेगा? 30 डेज के लिए। आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी 15 दिन से कम पीरियड का भी ऑफर दे सकती है अगर 90% मेंबर्स अग्री करते हैं तो। अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, अगर एओए
डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, अगर एओए रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता तो आपके पास राइट है क्या करने का, राइट टू रिनाउंस भी है, मतलब ये आगे आप इन शेयर्स को किसी और को भी दे सकते हो, मतलब आगे ये राइट जो आपको मिला है, मेंबर लोग आगे राइट किसी और को भी दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे रहा राइट, पर आपको एक्सरसाइज करना है तो करो, तो मेंबर आगे ये रिनाउंस कब कर पाएंगे राइट, अगर एओए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता तो कंपनी क्या करेगी, राइट ऑफ रिनाउंसमेंट देगी। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, जो शेयर्स अनसब्सक्राइब हुए तो बोर्ड डिस्पोज ऑफ कर देगी, बोर्ड शैल डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में। कौन से शेयर्स जो अनसब्सक्राइब, जो लोगों ने नहीं लिए, जो मेंबर्स लोग ने नहीं लिए, तो कंपनी क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी इन दी बेस्ट इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ट इंटरेस्ट में डिस्पोज ऑफ कर देगी। 62 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी क्या बोलता है, कंपनी जब भी फर्दर इशू लाती है शेयर्स का, तो कंपनी इन शेयर्स को एम्प्लॉइज को भी दे सकती है। कंपनी चाहे तो आप अपने एक्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दो, या कंपनी आप चाहो तो ये जो फर्दर इशू आप ला रहे हो 62 किसके बारे में है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। कंपनी जब नए शेयर्स लाती है तो 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, आप इन शेयर्स को एक्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दो। 62 सबसेक्शन 1 बी कहता है आप इन शेयर्स को अपने एम्प्लॉइज को भी दे सकते हो, ईसॉप्स द्वारा, ईसॉप्स जैसे इशू करके, कि आप अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ये शेयर्स दे सकते हो ईसॉप्स जैसे। पर उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब आप अगर अपने कंपनी के नए शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को देना चाह रहे हो तो आपको एक बार मेंबर लोग से पूछना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है, अगर आप चाहो तो इन शेयर्स को आप आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को भी ऑफर कर सकते हो। किस रेट पे ऑफर करोगे ये एक रजिस्टर्ड वैल्यू और आपके डिटरमाइन करेगा, पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और आप पब्लिक को इशू करना चाहते हो तो एक बार आपको अपने कंपनी के जो अंदर वाले उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 62 सबसेक्शन 1, जिसमें अभी आपने क्लॉज ए मेरे साथ रीड किया। अब क्लॉज बी रीड करो, देखो एक मिनट इसको हटाने दो ना, चैप्टर 3 को हम यहां से हटा देते हैं, चलिएगा। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ लिया मैडम, हाँ। अब क्लॉज बी क्या कहता है, अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तो आप एम्प्लॉइज को भी ऑफर कर सकते हो ईसॉप्स के स्कीम द्वारा, मतलब आप अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे सकते हो कि तुम फ्यूचर डेट पे इस भाव पे इन शेयर्स को ले सकते हो अगर आप कंपनी में इतने समय तक बने रहते हो, तो ईसॉप्स द्वारा भी आप एम्प्लॉइज को शेयर्स दे सकते हो। पर उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कहां पे, जनरल मीटिंग में। कहता है आप अगर चाहो तो ये शेयर्स को आप बाहर वाले लोगों को, एनी पर्सन मतलब बाहर वाले लोगों को दे सकते हो। आप हो सकता है कैश में दो, मतलब बाहर वालों को आप शेयर्स दे रहे हो, बदले में पैसा ले रहे हो, या इन काइंड कोई दूसरी चीज दे रहे हो। जिस सेल प्राइस पे आप ये शेयर्स बाहर वालों को दोगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन होगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपने कंपनी के नए शेयर्स को बाहर वालों को देना चाहते हो तो आपको एक्जिस्टिंग कंपनी के अंदर वाले जो लोग मेंबर्स हैं उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन परमिशन लेनी पड़ेगी कि यार आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना, हम कंपनी के शेयर्स को इशू करें बाहर वाले लोगों को इस भाव पे इशू करें, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करवाना पड़ेगा। तो दिस इज 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी और सी आपने भी पढ़ा। 62 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है, कहता है नोटिस ऑफर लेटर मस्ट बी सेंट एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। कहता है ऑफर ओपन होने की, ये जो आप अभी एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देते हो क्या, कि आप कंपनी के शेयर होल्डर, आप एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर लेटर भेजते हो क्या, या तुमको कंपनी के शेयर चाहिए क्या, तो हम तुमको राइट दे रहे हैं कि तुम कंपनी के शेयर नए वाले ले लो। तो कहता है ऑफर लेटर को आप डिस्पैच करेंगे, ऑफर लेटर को आप डिस्पैच करेंगे एटलीस्ट ऑफर ओपन होने के 3 डेज पहले। मतलब ये जो ऑफर लेटर या नोटिस आप भेज रहे हो, कम से कम ऑफर ओपन होने के 3 डेज पहले आप स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा इस ऑफर लेटर को लोगों को भेजोगे। आप लोगों को लेटर भेजोगे, ऑफर लेटर भेजोगे क्या, हाँ। कम से कम ऑफर ओपन होने के 3 डेज पहले आप नोटिस को क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। 62 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, कहता है देखो nothing in the section 62 shall restrict the power of the company to allot the shares on the account of conversion of loan debentures into shares। कहता है मान लो 62 shall restrict the power of the company to allot the shares on the account of conversion of loan debentures into shares। कहता है मान लो अगर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, मान लो अगर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, जब कंपनी ने ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशू किया था तो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। मान लो कुछ साल पहले कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, जब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ समय में, तो जब आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। अब जब इन डिबेंचर्स को कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है तो क्या एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऐसे दरवाजे पे आके खड़े हो सकते हैं क्या, हमें राइट दो, कंपनी सुना है तुम शेयर्स इशू कर रहे हो, कंपनी सुन एक्जिस्टिंग, तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। अब जब इन डिबेंचर्स को कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है तो क्या एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऐसे दरवाजे पे आके खड़े हो सकते हैं क्या, हमें राइट दो, कंपनी सुना है तुम शेयर्स इशू कर रहे हो, कंपनी सुनने में आया है कि तुम नए शेयर्स इशू कर रहे हो, हमें दो ना, हमें राइट दो ना। कहते हैं सेक्शन 62 नथिंग इन द सेक्शन 62 शैल रेस्ट्रिक्ट द पावर। मतलब ऐसा नहीं है कि आके एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग दरवाजे पे खड़े हो गए बोल रहे नए शेयर इशू हो रहे तो हमें देते हो, नहीं। कंपनी के पास ये पावर है कि कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। अगर कंपनी ने पहले कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, जब इशू किया था तो शेयर होल्डर लोग से पूछा था क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, हाँ। अब जब कंपनी उन्हें कन्वर्ट कर रही है शेयर्स में तो ऐसा नहीं कि आपको एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ेगा या एम्प्लॉय को देना पड़ेगा या आप आउटसाइडर को दे रहे हो। मतलब जिन लोगों के पास ये कंपनी के डिबेंचर्स थे, अगर आप चाहो तो इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे तो यू कैन कन्वर्ट दीस डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, राइट। क्योंकि जब इशू किया था तो आपने शेयर होल्डर लोग से पूछा था क्या, जब आप ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशू कर रहे थे तो आपने अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग से पूछा था क्या कि हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ये डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ समय में। आप शेयर होल्डर लोग अग्री किए थे, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था। अब कंपनी के पास पावर है कि जब ये डिबेंचर्स का टाइम आ गया तो कंपनी ने शेयर्स में कन्वर्ट कर दी। एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर आके नहीं बोल सकते हमें राइट दो, हमें राइट दो, नहीं। ठीक है, चलिए ओके, सारे बच्चे समझ में आ गया। 62 सबसेक्शन 3। अब 62 सबसेक्शन 4, 5, 6 क्या कहता है, कहता है मान लो इफ डिबेंचर हैव बीन इशूड टू गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट से कुछ पैसा लिया था, बदले में गवर्नमेंट को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था। आपने गवर्नमेंट से पैसा लिया और गवर्नमेंट को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब मान लो अगर गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि पब्लिक के इंटरेस्ट, वैसे भी तुम हमें बहुत इंटरेस्ट कम पे कर रहे थे, पब्लिक के हित में आप इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। मतलब मेरी कंपनी ने गवर्नमेंट को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे, पर अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, पब्लिक के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में आप इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दें शेयर्स में।
ये तो गलत बात है, मैंने तो नॉन कन्वर्टेबल इशू किए थे। अब गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक के इंटरेस्ट में आप इन शेयर्स को नॉन कन्वर्टेबल से कन्वर्टेबल कर दो और इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो कहता है कंपनी अपोज कर सकती है क्या? हाँ, कंपनी को अगर लग रहा है कि ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, तो कंपनी 60 डेज के अंदर अंदर, गवर्नमेंट के ऑर्डर देने के 60 डेज में कंपनी अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की बात सुनेगा और ऑर्डर पास करेगा। अगर मान लो आपके कंपनी के शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉरी कंपनी के डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल ने भी मान लो अलाउ कर दिया, तो उतने अमाउंट से आपकी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। मान लो आप कंपनी गवर्नमेंट को 50,000 शेयर इशू कर रही है, तो उतने 50,000 शेयर से कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एमओए शैल बी ऑल्टर्ड बाय द कंपनी। उस केस में एमओए कंपनी क्या करेगी, ऑल्टर करेगी। एमओए के कैपिटल क्लॉज के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई होती है ना, तो उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। समझा एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। कोई भी डाउट है, एक बार मैं आपके चैट को ओपन रखूंगी और अब मैं इसे रिपीट करूंगी। तो पहले तो बेटा मैं आई होप कि आपने एक बार इस सेक्शन को पढ़ा हो, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है। अगर एक बार भी पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगी जो चीजें मैंने बोली है। चलिए, लेकिन अगर मान लो किसी को थोड़े से भी पॉइंट में कंफ्यूजन हुई है, मैं फिर से स्क्रीन पे लिख रही हूँ ताकि राइट इशू तुम्हारे दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाए। मैं आपसे बात कर रही हूँ सेक्शन 62 के बारे में, जो कि किसके ऊपर है, राइट इशू के ऊपर है। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स को इशू करेगी, मान लो कंपनी जब नए शेयर्स को इशू करती है, तो क्लॉज ए कहता है कि सबसे पहले कंपनी आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स इशू करें। आप किसको इशू करें? कहता है कंपनी नए शेयर्स इशू कर रहे हो क्या, तो पहले आपकी कंपनी में जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं उन लोग को आप ऑफर दो। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को ऑफर दो। आप ये जो ऑफर दोगे, ये जो ऑफर है, ये मिनिमम कितने पीरियड के लिए ओपन रहना चाहिए? मिनिमम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 डेज। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आपकी 90% मेंबर्स एग्री कर जाते हैं, तो 15 दिन से कम पीरियड का भी टाइम दे सकते हो। फिर क्या बोलता है, राइट ऑफ रिनाउंसमेंट कब मिलेगा? राइट ऑफ रिनाउंसमेंट आप अपने मेंबर्स को आगे राइट दे सकते हो कि तुम्हें नहीं लेना तो ये आगे राइट किसी और को दे दो। राइट ऑफ रिनाउंसमेंट आप तभी दोगे अगर एओए प्रोहिबिट नहीं करता। एओए डज नॉट प्रोहिबिट, ठीक है, एओए डज नॉट प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ अगर शेयर्स अनसब्सक्राइब रहेंगे, मान लो कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं लिए, तो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स जो है उसको बोर्ड क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर के हित में हो, बोर्ड क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकते थे। क्लॉज बी कहता है तुम लोग एम्प्लॉय को भी दे सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम लोग ईसॉप्स के रूप में एम्प्लॉइज को भी शेयर्स बिल्कुल बखूबी दे सकते हो, पर उसके लिए आपको एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग से पूछना पड़ेगा, हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं ईसॉप्स के रूप में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी कहता है आप चाहो तो ना ये शेयर्स आप आउटसाइडर्स को, एनी पर्सन को दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग रूठ के बैठ जाएंगे, हमको क्यों नहीं दिया ऑफर, हमको राइट देना चाहिए ना, हमको क्यों नहीं दिया। तो एक बार आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आउटसाइडर को अगर दे रहे हो तो एक बार पूछना पड़ेगा, और किस प्राइस पे दोगे? जो प्राइस आपका रजिस्टर्ड वैल्यू क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, उस प्राइस पे आप दोगे। हो सकता है कैश में दो, हो सकता है बदले में आप कोई दूसरी चीज ले रहे हो और उन्हें शेयर्स दे रहे हो, इन काइंड भी हो सकता है। तो ये तो था 62 सबसेक्शन 1, ठीक है। उसके बाद 62 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 62 सबसेक्शन 2 कहता है ये ऑफर लेटर जो तुम भेजते हो ना, ऑफर जब देते हो सामने वाले को, ऑफर लेटर आप डिस्पैच कर देते हो कितने दिन में? कहता है ऑफर लेटर आप डिस्पैच कर देते हो एटलीस्ट 3 days प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ ऑफर, प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफर, ताकि टाइम पे सामने वाले को मिल जाए ना, ऑफर ओपन होने तक उनको मिल जाए। तो एटलीस्ट 3 days प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ ऑफर आप क्या कर देते हो, ऑफर लेटर सबको भेज देते हो। 62 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? 62 सबसेक्शन 3 कहता है कंपनी ने अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे, जब इशू किया था आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर, तब आप लोगों ने सब शेयर होल्डर लोग से पूछा था, शेयर होल्डर में से पूछा था, तो कहता है अब कंपनी के पास पावर है, सब शेयर होल्डर लोग से पूछा था, शेयर होल्डर में इशू किए थे, जब इशू किया था आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर, तब आप लोगों ने सब शेयर होल्डर लोग से पूछा था, शेयर होल्डर में से पूछा था, तो कहता है अब कंपनी के पास पावर है कि कंपनी इन डिवेंचर्स को क्या कर सकती है, शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। मुझे बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग आपके बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं दिया, हमको राइट देना चाहिए था ना, नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जब कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे तो आपसे पूछा था, आपको बताया था कि ये शेयर्स, ये डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, तब आपने सहमति दी थी। तो अब कंपनी के पास पावर है कि कंपनी डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, कंपनी हैज अ पावर। ओके, 62 सबसेक्शन 3 हो गया। अब 62 सबसेक्शन 4, 5 और 6। 62 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? मान लो एक कंपनी ने गवर्नमेंट को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे और कंपनी ने पैसा दिया था, सॉरी गवर्नमेंट ने पैसा दिया था किसको, कंपनी को। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है तुमने हमें वैसे तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दिए थे, पर एक काम करो ना, पब्लिक के इंटरेस्ट में इन डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर दो शेयर्स में, मतलब अब आप ये कन्वर्टेबल कर दो। वैसे तो आपने हमें नॉन कन्वर्टेबल इशू किया था, पर एक काम करो, आप एक काम करो, इन शेयर्स को, इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। क्या कंपनी कहेगी हमने तो आपको नॉन कन्वर्टेबल इशू किए थे, पर गवर्नमेंट कह रही है मेरा ऑर्डर है रे, पब्लिक के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, अब आप इन्हें, इन डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे केस में सबसेक्शन 5 क्या कहता है? 62 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? अगर कंपनी अग्रीड है, ओके एक मिनट, अगर कंपनी को अग्री हो रहा है तो कंपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर के 60 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी को अप्लाई कर देगी, और एनसीएलटी को जो ठीक लगेगा एनसीएलटी वो ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। और मान लो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, हाँ कंपनी पब्लिक के हित में आप क्या करो, हाँ कंपनी पब्लिक के हित में आप क्या करें, पब्लिक के हित में आप इन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, ऐसा ऑर्डर अगर एनसीएलटी पास कर दिया, तो जितने अमाउंट का शेयर्स आपने इशू किया है
कन्वर्टेबल होगा ना, डिवेंचर कन्वर्ट हो गया शेयर्स में, तो जितने भी शेयर्स आप इशू करोगे गवर्नमेंट को उतने अमाउंट से आपकी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आपको कैपिटल लॉस एमओए के कैपिटल लॉस को भी ऑल्टर करना पड़ेगा। सारे बच्चे समझ गए क्या? थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, सबको समझा? 62 बढ़िया से समझा बेटा? चलिए परफेक्ट हो बेटा। चलो अब मैं चैट बंद कर रही हूँ, चैट साइड में खोली थी मैंने, अब मैं चैट बंद कर रही हूँ। अब सारे बच्चे समझ गए? लेट्स से मैंने गवर्नमेंट को 50,000 शेयर इशू किए, तो उससे क्या होगा? 50,000 से आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। वेरी गुड। चलिए हाँ जी, यू आर विजिबल सिमरन सिंह बेटा, यू आर विजिबल बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईसॉप्स आपने पढ़ा था क्या? 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में क्या पढ़ा था? 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में पढ़ा था कि कंपनी आप अपने शेयर्स को एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकते हो। 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में क्या पढ़ा था कि आप चाहो तो अपने कंपनी के शेयर्स को इंप्लॉइज को भी दे सकते हो एज अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन दिया जाता है आप इन इंप्लॉइज को देते हो, ये जो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हो आप, ये कौन से इंप्लॉइज को आप कंपनी के शेयर्स खरीदने का ऑफर देते हो? कहता है कंपनी के, आपके कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर इंप्लॉइज। कौन? आपके कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर इंप्लॉइज, या तो आपके कंपनी के, या आपके होल्डिंग कंपनी के, या आपके सब्सिडरी कंपनीज के, या तो आपके कंपनी के, या आपके होल्डिंग कंपनी के, या आप अपने सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर इंप्लॉय लोग को ऑफर दे सकते हो कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, कि अगर आप कंपनी में 1 साल बने रहे। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आई होप आपको पता है, आप आज की डेट में ऑप्शन देते हो इंप्लॉइज को कि अगर तुम कंपनी में 1 साल बने रहे तो इस फ्यूचर डेट पे इतने प्राइस पे, इस भाव पे आप कंपनी के शेयर्स को खरीद पाओगे, उसे कहते हैं इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो आप कौन से इंप्लॉइज को देते हो? जो आपके कंपनी में डायरेक्टर है, या होल्डिंग में, या सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर या इंप्लॉइज है उसको। ठीक है, ओके। तो आप बेनिफिट देते हो कि आप अगर कंपनी में, मान लो कम से कम वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होता है, अगर आप कंपनी में 1 साल तक बने रहे तो आप ये शेयर सब्सक्राइब करेंगे, फ्यूचर डेट पे इस भाव पे मिलेगा। लेट्स से ये क्यों इशू किया जाता है मैडम? क्यों किया जाता है? सुनना मेरी बात। ईसॉप मतलब क्या होता है? लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आज आपने ऑफर दिया इंप्लॉय को। इंप्लॉय कौन से इंप्लॉय बेटा? आपके कंपनी के डायरेक्टर, आपके कंपनी के इंप्लॉइज, या आपके होल्डिंग या आपने सब्सिडरी कंपनी के इंप्लॉइज को आपने ऑफर दिया कि तुम अगर कंपनी में 1 ईयर बने रहे, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, इसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। अगर आप कंपनी में कम से कम 1 साल तक बने रहे तो 1 साल के बाद, कंपनी में 1 साल बने रहोगे तो 1 साल बाद इस फ्यूचर डेट पर इसको इतने प्राइस पे खरीद सकते हो। ये ऑफर आप आज की डेट पे दे रहे हो, ये ऑफर डेट, ऑफर डेट। तो आप कंपनी के इंप्लॉय लोग को ऑफर दे रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो कि आप अगर कंपनी देंगे क्या, कि आप फ्यूचर डेट पे इस प्राइस पे कंपनी के भाव मार्केट में कितने भी हो पर आप इस भाव पे खरीद पाओगे, उसे कहते हैं ईसॉप्स। ठीक है, चलिएगा ओके। जब भी आप ईसॉप इशू करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछते हो, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा मिर्ची लगेगा क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलेंगे अच्छा अपने इंप्लॉय को दे रहे हो, अच्छा अगर वो फ्यूचर डेट में आपकी कंपनी तक बने रहे उस दिन तक तो आप उन्हें सस्ते भाव पे शेयर दोगे, तो एक बार आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर लोग को पूछना पड़ेगा। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितने का होता है? 1 ईयर का होता है। मतलब जिस दिन तुमने ऑप्शन दिया, आज ऑप्शन दिया, जिस दिन ये लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएंगे, ये मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर का होना चाहिए। कहता है मान लो तुमने कंपनी के, तुम इंप्लॉय हो, तुम कंपनी में 6 महीने तक बने रहे, उसके बाद अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ अमैलगमेट कर गई तो जो अमैलगमेशन से पहले तुमने 6 महीने के लिए शेयर्स होल्ड करके रखे वो काउंट होगा, मतलब वो पीरियड जो है वो काउंट होगा। ये ऐसा होता है। कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉकिंग पीरियड। कंपनी लॉकिंग पीरियड भी बोल सकती है क्या? इंप्लॉय तुमको शेयर्स तो मिल जाएंगे पर तुम कम से कम इतने सालों के लिए कंपनी के शेयर्स को बेच नहीं सकते, तो कंपनी चाहे तो लॉकिंग पीरियड भी बता सकती है। कंपनी को डिविडेंड, सॉरी इंप्लॉय को डिविडेंड नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा जब तक कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे। तो 1 साल मान लो कंपनी में बने रहे, फिर अगर वो ऑप्शन ले लेते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं फ्यूचर डेट पे एक प्राइस पे, तो इंप्लॉय को ऑप्शन मिलेगा डिविडेंड रिसीव करने का, वोट का। इससे पहले इस पीरियड में आपको डिविडेंड या वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिंपल। ये ऑप्शन इंप्लॉय को दिया जाता है, इंप्लॉय आगे इसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आप बैंक के पास प्लेज वगैरह भी नहीं कर सकते, गिवी भी नहीं रख सकते लोन वगैरह लेने के लिए। नो पर्सन, जिस इंप्लॉय को ऑफर दिया गया है वही इंप्लॉय इस ऑप्शन को क्या कर सकता है? एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके बिहाफ पे कोई भी नहीं कर सकता। जिसको मैं ये ऑप्शन दे रही हूँ वही फ्यूचर डेट पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। अगर इंप्लॉय की डेथ हो गई, अगर इंप्लॉय मर गया तो ये ऑप्शन उसका लीगल है या उसका नॉमिनी एक्सरसाइज कर सकता है। अगर इंप्लॉय को परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, मान लो इंप्लॉय अंधा हो गया, कुछ तो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, तो ऐसे केस के अंदर अंदर जिस दिन उसको परमानेंट इनकैपेसिटी होगी उस दिन ही ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, उसी दिन वो क्या कर सकता है? ऑफर ले सकता है, ऑप्शन को ले सकता है। मान लो ये वेस्टिंग पीरियड था 1 साल का, 6 महीने के बाद ही इंप्लॉय की परमानेंट इनकैपेसिटी आ गई, तो जिस दिन वो परमानेंटली इनकेपेबल हुआ है उसी दिन वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, उसे और 6 महीने के रुकने की जरूरत नहीं है। अगर वो रिजाइन करके जा रहा है या उसको निकाल दिया गया है काम से तो फिर ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, तो आप फिर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सारे बच्चे समझ गए क्या? एकदम सिंपल बात है। चैप्टर नंबर 1 में आपने ईसॉप्स पढ़ा होगा, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किसको कहते हैं? ईसॉप्स मतलब, जब आप एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब आप जब अपने कंपनी के इंप्लॉइज को, या आप अपने कंपनी के डायरेक्टर्स, या अपने होल्डिंग कंपनी के इंप्लॉय डायरेक्टर्स, या अपने सब्सिडरी कंपनी के इंप्लॉय डायरेक्टर्स को एक ऑप्शन देते हो कि आप कंपनी के शेयर्स को खरीद पाओगे अगर मिनिमम आप 1 साल तक कंपनी में बने रहते हो, तो उस फ्यूचर डेट पर आप कंपनी के शेयर्स इस भाव पे खरीद पाओगे, उसे कहते हैं ईसॉप। लॉक इन पीरियड कंपनी स्पेसिफाई करेगी कि कितने साल तक आप उन शेयर्स को, अगर आपको मिल जाते हैं तो शेयर्स को आप कितने साल तक बेच नहीं पाओगे। कृष्णा, इट कैन बी एनी पीरियड, कंपनी जो स्पेसिफाई करे। उसके बाद में क्या है? वेस्टिंग पीरियड, मतलब कम से कम आपको कंपनी में कितने साल तक बने रहना पड़ेगा? कम से कम 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड कम से कम 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद मान लो अगर इंप्लॉय की डेथ होती है तो उसकी लीगल हेयर इस ऑप्शन को ले सकते हैं।
अगर एम्प्लॉय की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई तो जिस दिन वो परमानेंटली इनकेपेबल हुआ उसी दिन उसके पास राइट आ जाता है कि वो ऑप्शन को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। अगर आपको ये ऑप्शन मिला है तो आगे आप किसी और को दे नहीं सकते हो। सारे बच्चे समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सारे बच्चे समझ गए हैं? सारे बच्चे समझ गए हैं? परफेक्ट है, वेरी 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 गुड। चलिएगा बेटा जी। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, इशू ऑफ बोनस शेयर, सेक्शन 63 किसके बारे में बात करता है? बोनस के बारे में। सेक्शन 63 किसके बारे में बात करता है? बोनस के बारे में। बोनस मतलब जब आप अपने कंपनी के शेयर्स फ्री में, फुली पेड अप शेयर्स आप कंपनी के फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो, तो बोनस शेयर्स आर इशूड। आप बोनस शेयर, जैसे मान लो कंपनी ने किसी साल बहुत प्रॉफिट किया है, कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में कंपनी के शेयर्स देना चाहती है, फुली पेड अप शेयर्स देना चाहती है, उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। करेक्ट, कंपनी ने एक साल बहुत प्रॉफिट किया तो कंपनी चाहती है चलो शेयर होल्डर लोग को खुश करते हैं, शेयर होल्डर लोग को बोनस इशू करिए। बोनस मतलब फ्री में आप कंपनी के शेयर्स किसको दे रहे हो? शेयर होल्डर लोग को दे रहे हो, फुली पेड अप शेयर्स दे रहे हो। जितने उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल है उस प्रोपोर्शन में आप उन्हें बोनस इशू करते हो। बोनस कहां से दिया जाता है? कंपनी के फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 3 सोर्सेज होते हैं बेटा बोनस देने के। या तो आप फ्री रिजर्व में से बोनस दे रहे हो, फ्री रिजर्व मतलब क्या हो गया? जनरल रिजर्व, ये सब क्या हो गया? फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स में से आप दे सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जब आप सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू करते हो, जो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस इशू किया जा सकता है। थर्ड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो बनता ही बोनस इशू करने के लिए, तो सीआरआर से आप क्या कर सकते हो? बोनस को इशू कर सकते हो। फिर से मेरे साथ रिपीट करोगे, अगर आपको बोनस इशू करना है तो आप बोनस कहां से इशू कर सकते हो? फ्री रिजर्व से, सीआरआर से, और कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप क्या कर सकते हो? बोनस को इशू कर सकते हो। बोनस मतलब फुली पेड अप शेयर्स फ्री में आप अपने कंपनी के लोगों को, मेंबर लोग को देते हो, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को देते हो। चलिए अब क्या कहता है कंडीशन ऑफ बोनस इशू। अगर आपको बोनस इशू करना है तो आर्टिकल्स ऑथराइज करना पड़ा। आप बोनस तभी दे सकते हो जब आपकी कंपनी के आर्टिकल्स क्या करते हैं? ऑथराइज करते हैं। मतलब आपकी कंपनी का एओए अगर ऑथराइज करता है तो ही आप क्या कर सकते हो? बोनस दे सकते हो। बोनस रेकमेंड कौन करना पड़ेगा? बोर्ड। मतलब शेयर होल्डर खुद ही बोलेगी क्या? शेयर होल्डर खुद ही बोलेगी क्या कंपनी समय आ गया है बोनस देने का? नहीं। तो कौन रेकमेंड करेगा? शेयर होल्डर नहीं, पर बोर्ड रेकमेंड करेगा। शेयर होल्डर बोलेगा कंपनी समय आ गया है बोनस देने का? नहीं ना, बोर्ड रेकमेंड करेगी कि चलो इस साल अपने क्या करते हैं? बोनस देते हैं। आपको कैसे करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी बोनस इशू देना चाहती है तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोनस में ओ आता है क्या? ओ, बोनस के अंदर क्या है? ओ। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे याद रहेगा? बोनस में आता है ओ, तो ओ फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। कहता है कंपनी आप बोनस नहीं दे सकते अगर आपने इंप्लॉई के स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में डिफॉल्ट किया हो, या आपने फिक्स डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में डिफॉल्ट किया हो। कहता है अच्छा इंप्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज तो तुमसे दिए नहीं जा रहे, ये तुमने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है, जो डेट तुमने एक्सेप्ट कर रखा है, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो दे नहीं पा रहे हो, बोनस देने आए हो। नहीं, कहता है आप बोनस इशू नहीं कर सकते। कब आप बोनस इशू नहीं कर सकते? बी फॉर बोनस है ना, ऐसा ना बी, तो इसमें से अगर मैं बीच में से ऐसा लाइन हटा दूं तो क्या बन जाएगा? बीच में से अगर मैं ऐसा लाइन हटा देती तो डी बन जाएगा। ओह, तो आपने इंप्लॉय के डेट्स, स्टैट्यूटरी डेट्स को पे नहीं किया, या आप लोगों ने डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज पे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ऐसे केस में तुम बोनस इशू नहीं कर सकते। पार्टली पेड अप शेयर्स पे बोनस कभी भी नहीं इशू किया था। अगर किसी मेंबर के पास पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसको आप बोनस नहीं दोगे। फुली पेड अप शेयर्स पे ही बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। एक बार अगर आपने बोनस अनाउंस कर दिया तो फिर आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बोनस दे दिया तो डिविडेंड नहीं दोगे, बोनस इन एडिशन टू डिविडेंड दिया जाता है। ऐसा नहीं अरे कंपनी बोलेगी अगर दे दो दिया बोनस अब डिविडेंड नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं होता। सारे समझे क्या? तो मेरे को एक बात बता दे बेटा, मेरे को एक बात बता दे, आपने क्या पढ़ लिया? बोनस बोनस बोनस। सेक्शन 63 बोनस के ऊपर आपने पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? बोनस सबसे पहले क्या सोर्स है, बोनस कहां से दिया जाता है? बोनस फ्री रिजर्व से दिया जाता है, बोनस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दिया जाता है, बोनस सीआरआर से दिया जाता है। बोनस किसको दिया जाता है? जिनके पास फुली पेड अप शेयर्स है उनको बोनस दिया जाता है। बोनस देने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोनस देने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना पड़ा बोनस का इशू। बोनस को रेकमेंड कौन करता है? बोनस देना चाहिए ऐसा रेकमेंड कौन करता है? ऐसा बोर्ड रेकमेंड करती है। बोर्ड रेकमेंड करती है, फिर आप जनरल मीटिंग बुला के, बोनस में ओ आता है ना, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ए तू बोनस नहीं दे सकता, बी का ऐसा डंडी हटा देंगे बीच का तो क्या बन जाएगा? डी। अगर तुमने डेट सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के रीपेमेंट पे डिफॉल्ट किया, इसका तो क्या बन जाएगा? डी। रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? ए तू बोनस नहीं दे सकता, बी का ऐसा डंडी हटा देंगे बीच का तो क्या बन जाएगा? डी। अगर तुमने डेट सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के रीपेमेंट पे डिफॉल्ट किया है, या तुमने स्टैट्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉइज के टाइम पे नहीं पे किए, ये तो तुमसे पे नहीं किए जा रहे, बड़े आए बोनस देने वाले, लायक नहीं हो तुम बोनस देने के लिए, तो तुम ये नहीं कर सकते। और कहता है कि ऐसा नहीं कि बोनस दे दिया तो डिविडेंड नहीं दोगे, नहीं, बोनस अलग है डिविडेंड अलग है। अच्छा, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे समझ में आ गया क्या? सेक्शन 63। अब मैं तुम लोग का चैट खोलती हूँ। हाँ जी, समझा गया? बी बोनस के अंदर कैसे याद रहेगा? बोनस के अंदर ओ आता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और बी के बीच की डंडी हटाओगे तो डी बन जाएगा। तो याद रखना डेट, अगर आपने डेट के प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को पे नहीं किया, या आपने क्या बोला था, स्टैट्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉय को, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे नहीं किए एम्प्लॉइज के, तो आप फिर बोनस नहीं दे सकते। ठीक है, सही है, परफेक्ट है। ये समझ में आ गया मैडम? चलिए ओके, चलिए वेरी गुड बेटा, समझ गए मैडम, समझ गए मैडम, याद रहेगा मैडम। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, चलिए ओके ओके आगे बढ़ते हैं।
बेटा ऐसे सवाल मत पूछो कि तुम पहली बार इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, प्लीज। ओके, सेक्शन 63 नोटिस टू बी गिवन, अच्छा ये लास्ट में आएगा, पहले नहीं 64 और 66 को हम एंड में करेंगे, ठीक है। पहले बायबैक पे आ जाओ, सेक्शन 68 टू 70 पे आ जाओ, पहले बायबैक करेंगे। अभी हमने पहले राइट इशू किया, फिर बोनस इशू किया, अब हम क्या करेंगे, बायबैक। बायबैक मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज को मार्केट से या कहीं से भी वापस से खरीद लेती है। कंपनी अगर अपने सिक्योरिटीज को वापस से ले ले, बैक कर ले, वापस से खरीद ले, कंपनी बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटीज बैक। अगर कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज को खरीद ले वापस से, तो उसे कहते हैं बाय बैक। बायबैक कहां से किया जाता है, 68 कहता है, सेक्शन 68 बायबैक पे है, कहता है बायबैक के 3 सोर्सेस है। आप बायबैक को फ्री रिजर्व या प्रॉफिट्स से बायबैक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, आपने पढ़ा था ना बोनस, बोनस इन दोनों से इशू किया जा सकता है, वैसे ही बायबैक भी इन दोनों अकाउंट से किया जा सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई शेयर्स को फ्रेश इशू कर दो, उनसे जो पैसा आएगा उससे आप बायबैक कर लो, प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू। अब ऐसा नहीं है कि आपने इक्विटी शेयर्स को इशू करके इक्विटी ही बायबैक कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है नॉट द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। अब मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए मार्केट में और फिर दूसरे इक्विटी को बायबैक कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम क्लास ऑफ शेयर्स को आप इशू करके उसी के पैसे से बायबैक नहीं कर सकते, कुछ अलग क्लास ऑफ शेयर्स होने चाहिए। तो कहता है आप क्या कर सकते हो, कुछ शेयर्स को इशू करो, उससे जो पैसा आएगा उससे किसी दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स को आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, नॉट द सेम क्लास, ठीक है। ओके, ये तो हो गया बायबैक। उसके बाद क्या कहता है, बायबैक का सोर्स वापस से देख लो, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। आप कोई फ्रेश इशू लाए शेयर्स के, उससे आप किसी दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। बायबैक आप कब करते हो, आर्टिकल ऑथराइज करना पड़ा, जैसे बोनस का भी इशू करते हो जब आर्टिकल ऑथराइज करता है, तो बायबैक भी आप तभी कर सकते हो जब आर्टिकल ऑथराइज करे। बायबैक हमेशा फुली पेड अप शेयर्स का होगा। और अगर आप बायबैक कर रहे हो, तो अगर आप एक लिस्टेड कंपनीज हो तो सेबी रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। कहता है आप लिस्टेड हो क्या, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो क्या, और आप अपनी ही सिक्योरिटीज को बायबैक कर रहे हो क्या, तो आप लिस्टेड हो तो आपको सेबी को कंप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, कहता है रेजोल्यूशन फॉर बायबैक। अगर आप बायबैक करना चाहते हो, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो आपको एक बार शेयर होल्डर लोग से पूछना पड़ेगा कितना अमाउंट का आप बायबैक कर सकते हो। 25% से ज्यादा का नहीं कर सकते। आपकी कंपनी का जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स मिलाकर उसका जो 25% है, उससे ज्यादा अमाउंट का बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बायबैक आप कितने अमाउंट का कर सकते हो, अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। और कहता है एक साल में आप कितना बायबैक कर सकते हो, बायबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर आप 25% से ज्यादा, जितना भी आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 25% से ज्यादा एक साल में आप बायबैक नहीं कर सकते। आप कहते हैं आपका जितना भी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उससे 25% से ज्यादा आप एक साल में बायबैक नहीं कर सकते। तो देख लो कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%, इससे ज्यादा का अमाउंट का बायबैक नहीं कर सकते। और कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो एक साल में, बायबैक आप कर सकते हो 25%, पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी है उसका 25% के शेयर्स आप क्या कर सकते हो एक साल में बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कहता है अगर आप बायबैक कर रहे हो 10% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स, मतलब आप कितना बायबैक कर रहे हो, कितने अमाउंट का बायबैक कर रहे हो, अगर बायबैक का अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा का नहीं है, आपके पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% से ज्यादा अमाउंट का अगर आप बायबैक नहीं कर रहे, तो बोर्ड मीटिंग में आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी बायबैक कर सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। कहता है वैसे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, लेकिन जो बायबैक का अमाउंट है वो आपके 10% से, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% से ऊपर का बायबैक का अमाउंट नहीं है, 10% से एक्सीड नहीं करता, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास, तो छोटी सी चीज है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी बायबैक किया जा सकता है। अदरवाइज आप कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हो, 25% का, और कितने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो, 25% के ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। फिर कहता है पोस्ट बायबैक, बायबैक करने के बाद रेशियो क्या होना चाहिए, ये रेशियो आपको मेंटेन करना है। बायबैक के बाद जो रेशियो आपको मेंटेन करना है वो कितना है, सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट प्लस अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स शुड नॉट एक्सीड 2:1। कहते हैं बायबैक के बाद का जो रेशियो होता है, बायबैक करने के बाद जितने भी आपके कंपनी के चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड डेट्स हो, उसका रेशियो किसके साथ, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 2:1। तो पोस्ट बायबैक का जो रेशियो होता है, सिक्योर्ड डेट प्लस अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 2:1, मतलब 2:1 से बायबैक का रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए। बायबैक के बाद जो आपकी अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड डेट है और जो आपकी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व है, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें इंक्लूड होता है, उसका रेशियो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2:1 से, इतना तो रहना चाहिए। मतलब सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड जितना भी है और पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कितना भी है, उसका जो रेशियो है वो 2:1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, टाइम लिमिट ऑफ बायबैक, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की या बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास करना है, अगर बायबैक का अमाउंट 10% से एक्सीड नहीं करता, अगर बायबैक अमाउंट इस अमाउंट के 10% से एक्सीड नहीं करता तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, बायबैक करना ही करना पड़ेगा। बायबैक आप किससे कर सकते हो, आप कंपनी के एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग से बायबैक कर सकते हो, या ओपन मार्केट से बायबैक कर सकते हो, या एम्प्लॉइज जिनको आपने ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं उनसे कर सकते हो, या तो ओपन मार्केट से कर लो, या अपने एक्जिस्टिंग मेंबर से कर लो, या आपने अपने एम्प्लॉइज को जो ईसॉप या स्वेट इक्विटी, ठीक है। अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो SH9 में आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो SH9 में आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि आपकी कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर में इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ऐसा एक डिक्लेरेशन जिसपे 2 डायरेक्टर्स के साइन हो और जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो कहता है SH9 पे 2 डायरेक्टर्स के साइन होना चाहिए, जिसमें एक MD हो, एक दूसरे डायरेक्टर का साइन होगा। SH9 में आप ये डिक्लेरेशन बनाओगे कि कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर में इंसॉल्वेंट नहीं होगी, और अगर आप बायबैक करना चाह रहे हो तो ये डिक्लेरेशन आप आरओसी के पास फाइल करोगे। लिस्टेड कंपनी सेबी के पास भी फाइल करेगी। अगर आप लिस्टेड हो क्या, हाँ, तो आरओसी और सेबी दोनों के पास आपको फाइल करना पड़ेगा। आपने शेयर्स को बायबैक कर लिया तो उसके 7 दिन में आपको
शेयर्स को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बायबैक कर लिए शेयर्स, अभी खत्म कर दो, कितने दिन में? 7 दिनों में। फर्दर इशू ऑफ सेम क्लास ऑफ शेयर्स, आपने एक क्लास ऑफ शेयर्स को बायबैक किया तो आप उसके 6 महीने के अंदर अंदर फिर से वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। क्या बुद्धू हो गया तुम लोग? क्यों? आपने अभी शेयर्स को बायबैक किया, 6 महीने में आप फिर से उन्हीं शेयर्स को इशू कर रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो कहता है फर्दर आप सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकते 6 महीने तक बायबैक करने की। पर हाँ, अगर आपको बोनस वगैरह देना है या फिर अगर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, तब कन्वर्जन पॉसिबल है। या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इशू किए थे, अगर वो शेयर्स में इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कर सकते हो, बोनस शेयर वगैरह कर सकते हो, पर सेम क्लास ऑफ नए शेयर्स को इशू नहीं कर सकते 6 महीने के अंदर अंदर बायबैक करने की। और एक बार अगर आपने बायबैक कर दिया, कहता है आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा SH10 के अंदर कि आपने कितना कंसिडरेशन पे किया बायबैक का, किस दिन शेयर को कैंसिल या एक्सटिंग्विश किया, कितने सिक्योरिटीज का बायबैक किया, ये सारा रजिस्टर आप मेंटेन करोगे SH10 में। और बायबैक करने के 30 डेज में आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा SH11 में ROC के पास, और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो ROC और सेबी दोनों के पास। आपने क्या बायबैक किया है आपको एक रिटर्न में बताना पड़ेगा। आप रिटर्न में किसको बताते हो? आप ये रिटर्न फाइल करके SH11 में किसको बताते हो? ROC, लिस्टेड कंपनी ROC और सेबी दोनों को बताती है। SH11 में बायबैक का रिटर्न आप फाइल करते हो। और एक और पॉइंट है, हाँ चलो हो गया, सारे बच्चे सारे बच्चे एक बार कंपनी ने बायबैक किया है तो फिर 1 साल तक आप फिर से बायबैक नहीं कर सकते। आज मैंने बायबैक किया तो फिर 1 ईयर तक आप और नया फर्दर बायबैक नहीं कर सकते। और अगर मैंने बायबैक किया है तो उसके 6 महीने तक वही सेम शेयर्स में इशू भी नहीं कर सकती। सारे बच्चे अब मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे को बताते जाएंगे, मैडम आपने क्या क्या हमें बताया है। कोई नया शीट लेना पड़ेगा, ये शीट हमारी भर चुकी है तो हम एक ब्लैंक और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट, ओके ऑलराइट, ओके एवरीबॉडी, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे बायबैक की कहानी। बायबैक, एक मिनट थोड़ा जूम करना पड़ेगा, एक मिनट। बायबैक आप कहां से करते हो बेटा? बायबैक आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक कर सकते हो, या फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। आपने कोई फ्रेश इशू किया शेयर्स का और उससे जो पैसे आए उससे आपने क्या कर दिया? दूसरे शेयर्स को बायबैक कर दिया। ठीक है, ओके। जैसे मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो मुझे पैसे आए तो मैंने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लिया। सेम क्लास ऑफ शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं होना चाहिए इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी ही बायबैक कर लिया, नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स मान लो इशू किया तो जो उससे पैसा आया उससे मैंने इक्विटी बायबैक कर लिया, ऐसा हो सकता है प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। आप जब बायबैक करते हो तो मुझे आप लोग बताएंगे कितना अमाउंट का आप बायबैक कर सकते हो? 25% मैक्सिमम, इतने अमाउंट का। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%। 1 फाइनेंशियल ईयर में एक बार में आप कितने शेयर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके। कहता है पोस्ट बायबैक जो आपकी सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट है डिवाइडेड बाय आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, उसका रेशियो 2:1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान देना है। जब आप बायबैक करते हो तो आपको SH9 दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जिसके ऊपर 2 डायरेक्टर उसमें से एक MD का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा ROC के पास, या लिस्टेड कंपनी है तो ROC सेबी। SH9 में डिक्लेरेशन देते हो कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली है, आगे आने वाले 1 साल में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। इसका डिक्लेरेशन आपको SH9 में देना पड़ता है। अगर आपने इक्विटी बायबैक की है तो फिर 6 मंथ्स तक आप इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। जो शेयर्स आपने बायबैक किए वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स आप वापस से 6 में, अभी क्या मतलब इक्विटी अभी बायबैक की 3 महीने में वापस इशू कर दिया, पागल हो गए तुम लोग? 6 महीने में नहीं कर सकते। वेरी गुड। फिर कहता है हर कंपनी को SH10 के अंदर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बायबैक का, कि आपने कितने शेयर्स बायबैक किए, किससे बायबैक किए, कितने भाव पे बायबैक किए, ये रजिस्टर SH10 में मेंटेन करना पड़ेगा। और कहता है आपको SH11 के अंदर रिटर्न बायबैक करने के आपको 30 डेज में ROC या आपकी कंपनी लिस्टेड है तो ROC सभी के पास एक रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करनी पड़ेगी। SH11 में आप क्या फाइल करोगे? रिटर्न ऑफ बायबैक। SH11 तो SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, SH10 रजिस्टर ऑफ बायबैक, SH11 आप क्या फाइल करते हो बेटा? ROC के पास रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करते हो। शेयर्स को क्या कर देते हो? खत्म कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, एक्सटिंग्विश कर देते हो। ठीक है, और आपने अभी बायबैक किया तो 1 साल तक फिर आप और बायबैक नहीं कर सकते हो। और बायबैक करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बायबैक 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। सारे बच्चे समझे? क्या हो गया? सारे बच्चे समझे क्या? हाँ या ना में? ये दिख नहीं रहा मुझे मैसेज। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो बायबैक की कहानी समझ में आ गई सारे बच्चों को? चलिएगा, अब सारे बच्चे आगे बढ़िएगा। सारे बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जब आप बायबैक करते हो, जब आप बायबैक करते हो किससे? अगर आप बायबैक फ्री रिजर्व से कर रहे हो, कर सकते हो। हाँ, अगर आप बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करते हो तो जितने भी शेयर्स आपने बायबैक किए, जैसे 10,000 शेयर्स आपने बायबैक किए जो कि फेस वैल्यू 10 रुपए के थे, तो इतना अमाउंट आपको CRR में डालना पड़ता है। CRR क्रिएट करने का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है। CRR को क्रिएट करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, बोनस देने का। CRR आप क्यों बनाते हो? बोनस देने के लिए।
तो बेसिकली आपने देखा था बोनस कहां से इशू किया जाता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बोनस कहां से दिया जाता है, सीआरआर से। तो कहता है जब आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से बायबैक करोगे तो जितने भी नॉमिनल वैल्यू का बायबैक किया है, फेस वैल्यू, उतने फेस वैल्यू का अमाउंट आप सीआरआर में डाल देते हो। जब भी कैपिटल घटती है तो सीआरआर क्रिएट होता है। तो इन दोनों से अगर हुआ है तो आप सीआरआर में उतना पैसा डाल देते हो। बेटा जी 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का वो है, इसका क्वेश्चन है ये। ईशा बेटा अगर मैंने आज बायबैक किया है, अगर मैंने आज बायबैक किया है तो फिर से बायबैक अलाउड नहीं है। एक बायबैक करने के 1 साल तक फिर से मैं बायबैक नहीं कर सकती। नो फर्दर बायबैक इज अलाउड टिल 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर ऑफ द लास्ट बायबैक। लास्ट बायबैक के क्लोज होने के 1 साल तक मैं और बायबैक नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। जब मैं बोल रही हूँ कहीं बायबैक नहीं कर सकती हूँ बेटा, नहीं कर सकती। ईशा आपको समझ रहा है बेटा, कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। एक बार तो आपने भी शेयर्स क्या किए, बायबैक किए हैं, तो आप बायबैक नहीं कर सकते 1 ईयर तक फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट बायबैक। आर वी क्लियर? ओके ठीक है। अब ये क्या कहता है, आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते शेयर का, हाउएवर बोनस, स्वेट इक्विटी वगैरह तो इशू कर सकते हो। 6 मंथ की लिमिट किसकी है? क्या कर रहे हो आप ईशा? ध्यान देना बेटा क्लास में। आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास? बेटा आपने ऐसे एक एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो कैसे चलेगा बेटा जी? ध्यान किधर है? स्क्रीन पे होना चाहिए बेटा ध्यान, फोन या ऐप पे नहीं। क्या कई बार क्या होता है, हम क्लास में बैठे हैं लेकिन रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा मत करो क्या। चलो वापस से बता रही हूँ, तीसरी बार बेटा, थर्ड टाइम। एक बार पहले हमने रीड किया, उसके बाद मैंने स्क्रीन पे लिखा तब बताया, अब तीसरी बार फिर से बता रही हूँ, सुन लेना। नो फर्दर बायबैक टिल 1 ईयर फ्रॉम क्लोज ऑफ लास्ट बायबैक। ध्यान दीजिएगा प्लीज, लास्ट बायबैक से 1 साल तक आप फिर से बायबैक नहीं कर सकते। अभी तो बायबैक किया था, फिर से बायबैक करोगे, नहीं कर सकते, 1 साल तक नहीं कर सकते। कहते हैं नो फ्रेश इशू इज अलाउड। उन सेम क्लास ऑफ शेयर्स का आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते हो फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बायबैक। बायबैक करने के 6 मंथ्स तक आप वो शेयर्स वापस से इशू नहीं कर सकते, वो जिनका आपने बायबैक किया है। पर हाँ, अगर मान लो डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहा है या बोनस इशू दे रहे हो, वो कर सकते हो आप। पर वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स का आप फ्रेश इशू बायबैक करने के 6 महीने में नहीं ला सकते। ऐसे नहीं अभी बायबैक किया, आपको मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अभी बायबैक किया, उसके 6 महीने में फिर से वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर दिए, नहीं कर सकते। बोनस के थ्रू कर सकते हो हाँ, अगर डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स उन शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे तो हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, एवरीबॉडी समझा गया? समझ गया बेटा? चलिए ट्राई करूंगी अंजुम अगर प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ओके एवरीबडी, अंजुम आई ट्राई है ना। एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड बेटा? बायबैक करने के 1 साल तक आप फर्दर बायबैक नहीं कर सकते, और वो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो तुमने बायबैक की है, वो सेम क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू नहीं करोगे कम से कम 6 महीने के लिए। पर हाँ, अगर डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं, आप ईसॉप वगैरह दे रहे हो, स्वेट इक्विटी या बोनस वगैरह जा रहा है, तो फिर वो हो सकता है। समझा गया? 6 मंथ्स तक आप फिर से फ्रेश इशू नहीं ला सकते उन सेम क्लास ऑफ शेयर्स का। एवरीबडी समझा? आर वी क्लियर बेटा? फटाफट जवाब दोगे। बायबैक समझ गया सबको बढ़िया तरीके से? क्रिस्टल क्लियर है? एक सवाल पूछ लूं बायबैक पे, फिर बायबैक पे एक सवाल पूछूं बेटा, एक सवाल पूछ लूं बायबैक पे, आंसर करोगे? मेरे को एक बात बताओ, पोस्ट बायबैक रेशियो सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का पोस्ट बायबैक रेशियो कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 2:1 का होना चाहिए। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ, एक कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट का बायबैक कर सकती है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के कितने % का बायबैक कर सकती है? मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट पूछ रही हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक 25%। वेरी वेरी गुड। अब अगर मान लो, अगर मैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 5% के अमाउंट का बायबैक कर रही हूँ, तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा? मैं बायबैक कितने अमाउंट का कर रही हूँ? 5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो मेरा बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। हाँ जी, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा करती हूँ ना, तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सारे बच्चे समझ गए? परफेक्टो, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस, परफेक्टो, वेरी गुड। अब हम क्या पढ़ेंगे मैडम? अब देखते हैं, इसके बाद हम डिवेंचर देख लेते हैं। डिवेंचर डी, ओए किधर गया? ओए तुम्हारी फाइल किधर गई रे? ये क्या हो गया? गलती से फाइल उड़ा दिया मुझे लग रहा है मैंने, 1 मिनट। बायबैक आप कहां से कर सकते हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग से खरीद सकते हो शेयर्स, या फिर आप कहां से कर सकते हो? या फिर आप ओपन मार्केट से खरीद सकते हो, या जो आपने ईस्टॉप्स या स्वेट इक्विटी वगैरह दिए एम्प्लॉय लोग को, उनसे ले सकते हो, उन लोग से आप बायबैक कर सकते हो। वेरी गुड, बायबैक हुआ। अभी रुको, बायबैक खत्म नहीं हुआ है वैसे, रुको, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब भी आप बायबैक कहां से करते हो, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर आप बायबैक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू जो भी आपने बायबैक किया है, वो आपको सीआरआर में डालना पड़ता है। सीआरआर का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ बोनस देने का होता है। तो जब भी आप बायबैक करोगे तो जितने भी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ दोस शेयर्स, उतना अमाउंट आप सीआरआर में डालोगे। ठीक है, जब भी बायबैक कहां से किया गया है? फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से किया गया है। अगर फ्रेश इशू से किया गया है, कैपिटल कमी नहीं हुई ना। जब भी कैपिटल कम होती है तो सीआरआर बनता है, राइट? तो आपने बायबैक किया फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो कैपिटल घटी तो सीआरआर बना। अब आपने फ्रेश इशू ले आया,
और फिर आप बायबैक कर रहे हो तो कैपिटल तो घटी ही नहीं, तो ऐसे केस में सीआरआर नहीं क्रिएट होगा। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू से अगर बायबैक हुआ है तब सीआरआर नहीं बनेगा, अदरवाइज इन दो केसेस में बनेगा। और कितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक। ठीक है, चलिए। प्रोहिबिशन फॉर बायबैक सेक्शन 70 कहता है कोई भी कंपनी, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रोहिबिशन दिया हुआ है, कोई भी कंपनी खुद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेज नहीं कर सकती अपने शेयर्स। कैसे? किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू या अपनी ही सब्सिडरी कंपनी के थ्रू। आप अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते हो। आप किसी भी सब्सिडरी या अपने ही सब्सिडरी के थ्रू बायबैक, अपने ही खुद के शेयर्स खरीद नहीं सकते, या आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बायबैक थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके बाद कहता है आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने बी के बीच में से अगर ये डंडी हटा दोगे तो क्या जाएगा? डी। अगर आपने डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में डिफॉल्ट किया है, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में अगर तुमने डिफॉल्ट किया है, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन वगैरह देने में, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट में अगर तुमने डिफॉल्ट किया है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? बी और यू है तो मुझे बता दे बी के बीच का ऐसा मैं अगर हटा दूं तो क्या आ जाता है? डी। और अगर बी यू है ना, ऐसा ऐसा कर दे तो बन जाता है एल। तो कहते हैं डी, अगर तुमने डिपॉजिट के ऊपर पेमेंट या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया, या डिबेंचर के इंटरेस्ट या डिबेंचर के तुमने रिडम्पशन में तुमने डिफॉल्ट किया, या एल मतलब लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे को तुमने नहीं कर सकते। अच्छा, बायबैक करने के लिए पैसा है, इन लोग को देने के लिए पैसा नहीं है तुम्हारे पास, है ना? डिबेंचर लोग को रिडीम करने शेयर्स पे, सॉरी डिबेंचर लोग को रिडम्पशन पे पैसा देने का तुम्हारे पास पैसा नहीं है। डिपॉजिट लोगों से ले लिया, आप डिपॉजिट का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। बैंक से लोन लेके देख बैठे हुए हो, उसको पैसा देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बायबैक के लिए पैसा है, तुम बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड अ पीरियड ऑफ 3 ईयर हैज elapsed। कहता है अगर तुमने ये डिफॉल्ट किया है तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। पर इस डिफॉल्ट को हुए 3 साल हो गए और तुमने इस डिफॉल्ट को ठीक भी कर दिया था, तो डिफॉल्ट के ठीक करके अगर 3 साल लैप्स हो गए फिर बायबैक कर सकते हो। हिस्ट्री सबकी होती है क्या? पास्ट सबका होता है क्या? हाँ। हिस्ट्री पास्ट सबका होता है क्या? हाँ, हिस्ट्री सबकी होती है, पास्ट सबका होता है। तो अगर डिफॉल्ट किया भी था तुमने, अगर तुमने डिफॉल्ट किया भी था और इस डिफॉल्ट को करके, डिफॉल्ट को ठीक करके 3 साल का समय हो गया है, तो फिर आप बायबैक कर सकते हो। और कहता है देखो, अगर आपने अपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, या तुमने जो डिविडेंड डिक्लेयर या पे किया है वो सेक्शन 123 के हिसाब से नहीं किया, या तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करके पैसे दिए नहीं, डिविडेंड दिया नहीं, तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है? प्रोहिबिशन फॉर बायबैक। वापस से बोलेंगे, वापस से रिपीट करो। कोई कंपनी किसी भी सब्सिडरी या खुद की सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती। आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। आपने अगर डिपॉजिट या डिवेंचर के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया या लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, बायबैक नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपने डिफॉल्ट किया था और उस डिफॉल्ट को करके ठीक करके 3 साल का पीरियड लैप्स हो गया, तब आप कर सकते हो। तो कहता है अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न या डिविडेंड को डिक्लेयर या पे सेक्शन 123 के हिसाब से नहीं किया, या तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो तुम बायबैक नहीं कर सकते हो। ये प्रोहिबिटेड है। अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेटा, जो स्क्रीन पे लिखा है एक बार आप रीड करेंगे। एक बार के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रही हूं, तब तक आपकी जो लिखी हुई बातें हैं इसे क्या करोगे? रीड करोगे। बैक, मैं आपके चैट को खोलती हूँ। फ्रेश हुआ अभी तक हमने क्या, अभी अब तक हमने 68 से 70, 68, 69, 70, 68 ने बताया बायबैक कैसे किया जाता है। बायबैक आप फुली पेड अप शेयर्स का ही करोगे। बायबैक कितने अमाउंट का कर सकते हो? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बायबैक अगर आप करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी पड़ेगा अगर बायबैक का अमाउंट 10% से एक्सीड नहीं करता। पोस्ट बायबैक रेशियो सिक्योर्ड डेट अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स टू रेशियो 1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर जब आप बायबैक करते हो तो आपने जिन क्लास ऑफ शेयर्स का बायबैक किया है उनको आप फिर से फर्दर इशू नहीं कर सकते 6 महीने तक। एक बार बायबैक कर लिया तो 1 साल तक फिर बायबैक नहीं कर सकते। तुम्हें SH9 में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है, SH10 में एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, SH11 में आप रजिस्ट्रार के पास, ROC के पास रिटर्न ऑफ बायबैक को फाइल करते हो। ये आपने अभी भी पढ़ा था बायबैक में। 69 कहता है आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से बायबैक करते हो ना, तो नॉमिनल वैल्यू सीआरआर में डाल देना। 70 ये वाला जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो भी है किसके ऊपर है बेटा ये? मैम कब ब्रेक दोगी? मैम ब्रेक कब दोगी मैडम? ब्रेक कब दोगी? दूंगी, रुक जाओ। हाँ चलिए, हाँ यू कैन बेटा, यू कैन, डोंट वरी। अच्छा सारे बच्चे उससे बोनस इशू जब तुमने पढ़ा था तो तुमने क्या पढ़ा था? बोनस कहां से दिया जाता है? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर, 3 जगह से आप क्या दे सकते हो? बोनस दे सकते हो। बोनस मतलब फ्री में आप इक्विटी फुली पेड अप शेयर्स इशू कर देते हो, उसे कहते हैं बोनस दे देना। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा था? बोनस के लिए क्या पढ़ा था बेटा? बोनस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास फुली पेड अप शेयर्स हो। बोनस के अंदर ओ आता है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोनस के लिए पास करना पड़ता है। बोनस के बीच का अगर आप डंडी हटा दोगे तो डी बन जाएगा। तो आपने डेट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट या पेमेंट में डिफॉल्ट किया, या इंप्लॉई के स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में डिफॉल्ट किया, कैसे याद रखोगे? बी के बीच की डंडी हटाओगे तो क्या बन जाता है? डी।
तो बोनस की बात हुई, बोनस जनरली किसको दिया जाता है? कंपनी में बोनस इंप्लॉय को देते हैं ना, तो डी मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, याद रख लेना, या डेट सिक्योरिटी याद रहेगा। अगर बोनस के बीच की डंडी हटाएंगे तो बन जाएगा डी। बोनस वैसे दिया किसको जाता है? एम्प्लॉय को। तो अगर आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉय के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिए, ये याद करने का तरीका है। या फिर तुमने अगर डेट सिक्योरिटीज के पेमेंट वगैरह में डिफॉल्ट कर दिया तो तुम बोनस नहीं दे सकते। उसके बाद तुम बायबैक अपने खुद के सब्सिडरी या किसी और सब्सिडरी से बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे को एक बात बता दो, अब बोनस की बात चल रही है तो ये भी डी है। तो तुमने अगर डिपॉजिट के प्रिंसिपल इंटरेस्ट, डिबेंचर के प्रिंसिपल इंटरेस्ट दैट इज रिडीम नहीं किया, या फिर अगर आप लोगों ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था उसको पैसा नहीं दे रहे, तुम बायबैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको हुए 3 साल का समय हो गया, ठीक किए तुमने 3 साल का समय हो गया तो ठीक है। अब तुमने एनुअल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न या डिविडेंड को डिक्लेयर करके पे नहीं किया, या डिविडेंड को डिक्लेयर और ठीक से पे नहीं किया एज पर सेक्शन 123, तो तुम बायबैक नहीं कर सकते। सारे बच्चे समझा गया? समझ में आ गया बेटा? मेजर मेजर है, बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ लिया। अब अपने क्या करेंगे? डिवेंचर को बढ़ेंगे। डिवेंचर के बाद तुमको खाने पीने का एक छुट्टी दिया जाएगा। डिवेंचर अपना ये आधा घंटा लगेगा डिवेंचर को करने के लिए। तो आधा घंटा के बाद तुमको क्या दूंगी मैं? हाफ एन आवर के बाद तुमको 45 मिनट्स का एक गैप दूंगी, जिसमें खाना खा ले सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए। मैं तो खा लिया है, पढ़ के आ रहा था रामदास, अभी तो पढ़ नहीं रहा था, मतलब है कहते मैं तो खा पी लिया यार मैडम। और इतना जल्दी खाना कौन खाता है? 12:30 बजे खाना खा लेता है मेरे को खाने की। इधर आ जाओ, पढ़ लो सारे बच्चे। चलिए अब मैं चैट तुम्हारी बंद कर रही हूँ। डिबेंचर के बारे में सेक्शन 71 बात करता है। डिबेंचर मतलब क्या हो गया? एक तरह से जो डेट लेते हो आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी क्या बार बार शेयर इशू करेगी क्या? अगर आप बार बार शेयर इशू करोगे तो आपकी कंपनी की ओनरशिप कितने लोगों के हाथ में चली जाएगी? तो कंपनी अगर अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहती, अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं करना चाहती, तो अगर कंपनी लोगों से पैसा बोरो करना चाहती है, पैसा भी आना चाहिए, तो आप क्या इशू करते हो? डिबेंचर इशू करते हो। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर गिवन अ सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग द मनी। आप लोगों से क्या लेते हो? पैसा लेते हो, बदले में उन्हें डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हो। डिवेंचर सर्टिफिकेट पे अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील लग जाता है कंपनी का। मतलब अगर आपने लोगों से पैसा लिया है तो आपको कोई सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, तो आप डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हो। डिवेंचर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर्स का साइन आता है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और सीएस का साइन आएगा। कहते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट पे अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील आ जाती है, और 2 डायरेक्टर्स का साइन आता है। या तो एक डायरेक्टर, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। डिवेंचर हो सकता है सिक्योर्ड। आपने जब डिवेंचर लोगों को इशू किया है, लोगों से बोरोइंग की है, तो हो सकता है आपने अपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, आप एक सीएस का साइन आएगा। तो कहते हैं तो कॉमन सील लग जाता है कंपनी का। मतलब अगर आपने लोगों से पैसा लिया है तो आपको कोई सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, तो आप डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हो। डिवेंचर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर्स का साइन आता है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और सीएस का साइन आएगा। तो कहते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट पे अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील आ जाती है, और 2 डायरेक्टर्स का साइन आता है। या तो एक डायरेक्टर, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। डिवेंचर हो सकता है सिक्योर्ड। आपने जब डिवेंचर लोगों को इशू किया है, लोगों से बोरोइंग की है, तो हो सकता है आपने अपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हो, तो गए सिक्योर्ड डिवेंचर। हो सकता है अनसिक्योर्ड हो सकता है डिवेंचर कन्वर्टेबल हो कि कुछ सालों में ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है नॉन कन्वर्टेबल हो। डिवेंचर रिडीमेबल हो सकते हैं, मतलब कुछ साल बाद जो रिडीम हो जाएंगे, कुछ साल बाद आप जिन्हें क्या कर लोगे, पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लोगों को पैसा लग जाएगा। रिडीमेबल, इरिडीमेबल भी होते हैं, पर हमारे कंट्री में इरिडीमेबल इशू करना अलाउड नहीं है। रिडीमेबल डिवेंचर ही इशू हो सकते हैं। कहता है अगर आप डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को कंपनी अगर इशू करती है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवेंचर कुछ सालों में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? हाँ। तो जब आप ऐसे कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हो, आपने पढ़ा था 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज, क्या था याद आ रहा है? 62, जब आप राइट इशू का भी पॉइंट पढ़ रहे थे, 62 सबसेक्शन 3 के अंदर आपने ये चीज पढ़ी थी क्या, कि जब आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हैं तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। डिवेंचर्स पे वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं क्या? नहीं। ये शेयर्स है क्या जो वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे? नहीं। तो कहता है ओके, डिवेंचर कितने साल में रिडीम हो जाने चाहिए? जो सिक्योर्ड डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है, मान लो अब कंपनी अपनी किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है, तो जो सिक्योर्ड डिवेंचर कंपनी इशू करती है वो रिडीम हो जाने चाहिए 10 सालों के अंदर, इशू करने के 10 सालों के अंदर। कुछ क्लास ऑफ कंपनीज सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती है 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी, बट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। मतलब वैसे तो जो कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है वो 10 साल में रिडीम हो जानी चाहिए, बट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती है, बट 30 ईयर से ज्यादा के लिए नहीं कर सकती। एक्सीडिंग 10 बट नॉट एक्सीडिंग 30। कौन से कंपनीज? वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेटअप वगैरह कर रहे हैं, जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। अगर मेरी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को फाइनेंस करती है, तो मैं इतने पीरियड के लिए डिवेंचर इशू कर सकती हूँ। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट को फाइनेंस करने वाली एनबीएफसी हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी हूँ, या मैं ऐसी कंपनी हूँ जो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने परमिट किया है कि आप 10 साल से ज्यादा के सिक्योर्ड डिवेंचर को इशू कर सकते हो, तब फिर मैं कर सकती हूँ। तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, मुझे बताओ वैसे तो जो डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर आप इशू करते हो, आप कितने पीरियड के लिए कर सकते हो? नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक के जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स है, ये जो डिवेंचर्स है, ये रिडीम हो जाने चाहिए इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप डिवेंचर, ये रिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। इट शुड गेट रिडीम्ड विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज डिवेंचर्स इशू कर सकती है फॉर पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा के लिए, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। कौन से कंपनीज?
वो कंपनीज जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह को सेटअप कर रहे हैं, वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंस करने वाले एनबीएफसीज, या ऐसे कंपनीज जिनको परमिट किया है आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने कि तुम लोग डिवेंचर इशू कर सकते हो 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो ये क्लास ऑफ कंपनीज 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हैं जो 10 इयर्स बाद रीडिंग हो बट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज। ओके परफेक्ट। उसके बाद क्या बोला गया है, अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करते हो तो डिवेंचर फुली सिक्योर्ड होनी चाहिए। आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो अपने कंपनी के एसेट पे या अपने सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हो तो वो डिवेंचर फुल्ली सिक्योर्ड होनी चाहिए। करेक्ट। जो भी वैल्यू होगा, जिस भी एसेट पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसका वैल्यू सफिशिएंट होना चाहिए डिवेंचर का इंटरेस्ट और डिवेंचर का अमाउंट रीपे करने के लिए। मान लो आपने डिवेंचर इशू किए हैं 10 करोड़ रुपए के, तुमने 10 करोड़ रुपए का डिवेंचर इशू किया जिसपे इंटरेस्ट तुम पे करोगे 2 करोड़ का, तो जो भी 12 करोड़ हो गया क्या, डिवेंचर का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट मिला के 12 करोड़ हो गया क्या? हाँ। तो जिस एसेट्स पे आप चार्ज क्रिएट करोगे उस एसेट का अमाउंट 12 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, ताकि सफिशिएंटली अगर इन केस आप डिवेंचर रीपे नहीं करते तो 12 करोड़ रुपए के जो एसेट्स है जो 12 करोड़ से ज्यादा है उसको बेचकर पैसा चुकाया जा सकता है। तो कहता है डिवेंचर वैसे तो फुली सिक्योर होनी चाहिए, आप अपने कंपनी के या अपने सब्सिडरी या अपने होल्डिंग या एसोसिएट सकते हो, और जो भी जिस भी एसेट पे चार्ज क्रिएट करते हो उस एसेट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए डिवेंचर और इंटरेस्ट मिला के अमाउंट से। अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, आप डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हो। इतने लोगों से तुमने पैसा ले लिया और डिवेंचर इशू कर दिया, तो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है। अब इस ट्रस्टी के साथ आप ट्रस्ट डीड एंटर करते हो। 60 डेज में आप ट्रस्टी के साथ SH12 में एक ट्रस्ट डीड एंटर करते हो। कहता है डिवेंचर अलॉट कर दिया क्या लोगों से पैसा ले लिया, डिवेंचर अलॉट कर दिया। हाँ, तो उसके 60 डेज के अंदर आप ट्रस्ट डीड एंटर करते हो। किसके साथ? डिवेंचर ट्रस्टी के साथ। डिवेंचर ट्रस्टी वो आदमी है जो डिवेंचर होल्डर्स का ग्रीवेंसेस वगैरह सॉल्व करता है। अब सारे बच्चे मेरे को एक सवाल का जवाब देंगे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सारे बच्चे मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। तैयार हो? आप ट्रस्ट डीड एंटर करते हो तो SH11 में आप क्या कर रहे थे? SH11 में क्या कर रहे थे? रिटर्न किसका? रिटर्न बायबैक का रिटर्न। बायबैक करने के 30 डेज में SH11 में आप बायबैक का रिटर्न फाइल कर रहे थे। किसके पास में? आरओसी के पास में। यहाँ पे क्या कहता है, आप बायबैक के बाद आपने क्या पढ़ा? डिवेंचर। तो यह कहता है आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। डिवेंचर अलॉट कर देने के 60 डेज में आप एक डिवेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड एंटर करोगे SH12 में। ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है। डिवेंचर फुली, अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हो ना तो डिवेंचर फुली सिक्योर्ड होनी चाहिए। आप अपने कंपनी या सब्सिडरी होल्डिंग एसेट्स पे जो चार्ज क्रिएट कर रहे हो उस एसेट के अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, आपके डिवेंचर और उसके इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है आपको ना, ये मैं ऐसे समझाती हूँ, सारे बच्चे इधर आएंगे। तब आपको डीआरआर क्रिएट करना है। आपको डिवेंचर कब क्रिएट करना है, सिर्फ उतना याद रखो, मतलब किस किस को क्रिएट करना है ये याद रखिएगा बेटा। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, चलो एक मिनट ऐसे करते हैं, अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो ऐसे केस के अंदर हो सकता है आप कोई एनबीएफसी हो सकता है आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकता है आप एनबीएफसी हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो सकता है कोई अदर लिस्टेड कंपनी हो। तो ऐसे केस में जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो शेयर्स का, कुछ लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स अगर इशू करते हो तो आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। कब तक क्रिएट करना पड़ता है? करंट ईयर की 30 अप्रैल या उससे पहले जितने भी डिवेंचर नेक्स्ट ईयर में मैच्योर हो डीआरआर करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कहता है लिस्टेड कंपनी जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट्स करोगे तो आपको डीआरआर या नो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप पब्लिक इशू लाओगे तो आपको डीआरआर तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। जितने भी डिवेंचर आउटस्टैंडिंग होंगे उसके 15% का आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सारे बच्चे समझ में आ गया? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में तो आपको डीआरआर या इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन जब आप पब्लिक इशू लाते हो, मतलब अगर ये लिस्टेड कंपनीज पब्लिक इशू लाएगी तो डीआरआर तो नहीं क्रिएट करना, पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का। सेम गोज फॉर अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को तो करने की जरूरत नहीं है, नो डीआरआर नो इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, तो आपको डीआरआर भी क्रिएट करना जरूरी है। कितना? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अगर आप एक अदर अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको डीआरआर भी क्रिएट करने का जरूरत है और आपको इन्वेस्टमेंट भी करने का जरूरत है। कितना? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि किसको डीआरआर क्रिएट करना है। डीआरआर अदर अनलिस्टेड कंपनी को करने का है।
अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है। करना चाह रहे हो तो कितना है 15%, आपको करना पड़ेगा 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अदर अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर भी क्रिएट करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। और यहां पे आपने क्या पढ़ा, लिस्टेड कंपनीज को कौन कंट्रोल कर लेता है, सेबी कंट्रोल कर लेता है, इसलिए डीआरआर क्रिएट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितना, 15%। सारे बच्चे समझे क्या? तो देखना सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, कहां पे डीआरआर वगैरह, ओहो स्क्रीन गॉट स्टक। चलिए देखो, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड एनबीएफसीज हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो या अदर लिस्टेड कंपनी हो, आपको डीआरआर को कभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर आपको 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो आपको डीआरआर या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट ओनली इन द केस पब्लिक इशू आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सेम अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी, तो अदर अनलिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ डीआरआर एंड 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पे आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए ही यूज होना चाहिए। आप कहता है अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है 500 से ज्यादा लोगों को, हो सकता है अपने मेंबर्स को ही डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो कहता है मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स को इशू करते हो या इन जनरल पब्लिक को इशू करते हो तो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। आपने अभी भी पढ़ा था क्या? अगर आप 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को डिवेंचर इशू करते हो या इन जनरल अगर आप पब्लिक को ही डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन आदमी डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता? अगर आप कंपनी में शेयर होल्ड करते हो तो आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। अगर आप कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर या केएमपी ऑफिसर हो तो आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। अगर आपको is beneficially entitled to money which are to be paid by the company, otherwise there is a remuneration payable to the debenture trustee। अगर कंपनी को कोई रुपया पैसा तुम्हें देना बाकी है या तुम्हें कोई रुपया पैसा कंपनी को देना बाकी है तो आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। या फिर आपने गारंटी दे रखी है इस डिवेंचर को लेके, तुमने ही मान लो गारंटी दे रखी है तो तुम डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। तुम डिवेंचर ट्रस्टी कब नहीं बन सकते? जब तुम कंपनी के शेयर होल्ड करते हो या कंपनी को तुम्हें कोई रुपया देना बाकी है, यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सम मनी फ्रॉम द कंपनी, यार आपको कुछ देना बाकी है, यू आर इंडेटेड टू द कंपनी, या आप कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी हो, या आपने कोई गारंटी दी है किसी डेट को लेकर, मान लो इस डिवेंचर को लेकर तुमने गारंटी दे रखी है। कहता है अगर आप कंपनी के प्रमोटर या जो कंपनी के अंदर लोग इंप्लॉयड है, डायरेक्टर या केएमपी उनके रिलेटिव हो, मतलब आप प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी के या जो लोग कंपनी के अंदर इंप्लॉयड है उनके अगर आप रिलेटिव हो तो भी आप नहीं अपॉइंट हो सकते। या आपका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप है, कोई पैसे संबंधी रिलेशनशिप है, कितने अमाउंट का पैसा, 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, जितना भी कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2% या फिर 50 लाख रुपीस, या अगर कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हो तो कहता है विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर होगा। अगर आपका उतने अमाउंट का पिक्यूशनरी रिलेशनशिप है पिछले 2 सालों में या करंट साल में तो आप फिर डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते हो। तो आइए इधर देखेंगे, लिखती हूं मैं वापस से। डिवेंचर ट्रस्टी, रिवाइज करो, डिवेंचर ट्रस्टी अगर कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है या 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को डिवेंचर इशू करती है तो क्या अपॉइंट करना पड़ता है? डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी आपकी कंपनी के 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर, रिवाइज करो, डिवेंचर ट्रस्टी अगर कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है या 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को डिवेंचर इशू करती है तो क्या अपॉइंट करना पड़ता है? डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी आपकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करना चाहिए। डिवेंचर ट्रस्टी को कोई पैसा आपकी कंपनी को देना बाकी नहीं होना चाहिए, इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए। कंपनी को भी कोई पैसा इस पर्सन को देना बाकी नहीं होना चाहिए अदर देन दी रेम्यूनरेशन। जो रेम्यूनरेशन आप पे करोगे एज अ डिवेंचर ट्रस्टी उसके अलावा कंपनी को कोई पैसा देना बाकी नहीं होना चाहिए। ये जो आदमी है इसने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए इस डिवेंचर को लेकर, और ये कंपनी का केएमपी या कंपनी का इंप्लॉई या कंपनी का डायरेक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, या इनका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, या प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, या आपका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कितने अमाउंट का? ग्रॉस 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन सबसे जो कम है उस उतने अमाउंट का आपका पिक्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे हम क्लियर हैं क्या? आप एक बार इसे पढ़ना चाहोगे? मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ। इधर क्या, किधर क्या? चलिए पढ़ लीजिए बेटा। ओके एवरीबडी, सबको समझ में आ गया बेटा? डिवेंचर ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता? आपकी कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, इंप्लॉई, या आपकी कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड करना चाहिए, बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनी व्हिच आर टू बी पेड बाय द कंपनी को कुछ पैसा तुम्हें देना बाकी नहीं होना चाहिए अदर देन दी रेम्यूनरेशन, तुमने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, या तुम इंडेटेड नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग हियर? आर वी क्लियर हियर एवरीबडी? चलो रिप्लाई करोगे हाँ जी, समझा? तो डिवेंचर ट्रस्टी जो होता है ना बेटा,
उसके साथ आप ट्रस्ट डीड एंटर करते हो। डिवेंचर अलॉट करने के 60 डेज में आप उसके साथ एक ट्रस्ट डीड आप क्या करते हो, एंटर करते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब छोटी छोटी बातें डिवेंचर को लेकर कहता है अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई, मान लो डिवेंचर ट्रस्टी मर गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो कौन फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देंगे। अगर मान लो डिवेंचर ट्रस्टी मर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल कर देंगे। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आई है, मतलब डिवेंचर ट्रस्टी छोड़कर चला गया तुम्हारी कंपनी को, तो फिर जब तुम नया डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स का रिटन कंसेंट लोगे कि तुम लोग को सहमति है ना, ये छोड़ के गया था पहले वाला, इसको अपॉइंट कर रहे तुम लोग सहमत हो ना, तो आप रिटन कंसेंट लेते हो। अगर आपने उसे रिमूव करना है, डिवेंचर ट्रस्टी को आप हटाना चाहते हो, तो कम से कम जिन डिवेंचर होल्डर्स के पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है उनका आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब अगर कैजुअल वैकेंसी के थ्रू मानो मर गया तो आप बोर्ड अपॉइंट कर देगी डिवेंचर ट्रस्टी को। लेकिन अगर रेजिग्नेशन की वजह से क्या आया, वैकेंसी आया, वैकेंसी क्यों आई? क्योंकि वो छोड़कर चला गया, तो मेजॉरिटी डिवेंचर होल्डर का आप क्या लोगे, लिखित में कंसेंट लोगे कि वो तो छोड़ के चला गया, इसको अपॉइंट करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और कहता है अगर आप उसे रिमूव ही करना चाहते हो तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा किसका? कम से कम जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, जिनके पास कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, उन लोग का आप क्या लोगे, अप्रूवल लोगे। अगर आप उसे रिमूव कर रहे हो तो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, जिनके पास कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है उनका आप क्या लोगे, कंसेंट लोगे। अच्छा, डिवेंचर ट्रस्टी चाहे तो मीटिंग वगैरह बुला सकता है क्या? बुला सकता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई इवेंट हुआ है जिससे डिवेंचर होल्डर लोग का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, बुला सकता है। अच्छा, डिवेंचर होल्डर लोग भी बोल सकते हैं क्या डिवेंचर ट्रस्टी मीटिंग बुला दो? बोल सकते हैं। जिनके पास कम से कम एटलीस्ट 1/10 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है, जिनके पास 1/10 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिवेंचर ट्रस्टी को बोल सकते हैं हमारे लिए क्या बुला दो, मीटिंग। या तो डिवेंचर ट्रस्टी पूरी मीटिंग बुला लेगा, कोई घटना घटित हो गई जिससे उसका लग रहा है कि डिवेंचर होल्डर लोग का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, पूरी मीटिंग बुला सकता है। जिनके पास कम से कम 1/10 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो डिवेंचर ट्रस्टी मीटिंग को बुला देगा। चलिए, कहता है आप जो ट्रस्ट डीड वगैरह एंटर करते हो ना, उसमें आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे कि डिवेंचर ट्रस्टी को ये नहीं करेगा तो चलेगा। कहता है आप डिवेंचर ट्रस्टी को उसकी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं करोगे डिवेंचर ट्रस्ट डीड में। हाँ, लाइबिलिटी डिवेंचर ट्रस्टी की आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो, अगर कोई कोई लाइबिलिटी आप डिवेंचर ट्रस्टी की एग्जाम्प्ट कर सकते हो जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है, अगर वो आपको क्या करे, अग्री करे। तो कहता है वैसे तो ट्रस्ट डीड में अगर आप ऐसी कोई भी चीज लिखते हो जिससे ट्रस्टी को आप लाइबिलिटी फ्री कर रहे हो तो वो बिल्कुल वॉइड है, ऐसा ट्रस्ट डीड बिल्कुल वॉइड है। लेकिन अगर आप डिवेंचर ट्रस्टी की कोई लाइबिलिटी को हटाना चाहते हो तो कम से कम जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर है वो लोग अग्री करेंगे तो उसकी लाइबिलिटी को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो ये हो गई बात। सारे बच्चे समझ गए क्या डिवेंचर ट्रस्टी की कहानियां? एवरीबडी अंडरस्टूड? एन इंडिविजुअल ओनली? हाँ, एक से ज्यादा इंडिविजुअल भी आप अपॉइंट कर सकते हो। अंजुम, एक से ज्यादा आदमी भी डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 लोगों को डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, कर सकते हो। हाँ, अब बेटा आपका आ जाता है एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक बार स्क्रीन पे सम अप करेंगे डिवेंचर को लेकर जो कहानी हमने पढ़ी है। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि कंपनी डिवेंचर को इशू कर सकती है। हाँ, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी क्या इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो इस पर कॉमन सील लग जाता है। कंपनी के एक डायरेक्टर और एक सीएस, अगर सीएस है तो नहीं तो 2 डायरेक्टर्स का साइन आ जाता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, जो डिवेंचर आप इशू करते हो वो मैक्सिमम जो डिवेंचर्स आप मान लो सिक्योर्ड डिवेंचर्स अगर इशू कर रहे हो तो आप कितने पीरियड के लिए इशू करोगे, वो कितने पीरियड में रीडिंग हो जाना चाहिए, 10 ईयर्स में वो रीडिंग हो जानी चाहिए। लेकिन मान लो अगर कोई क्लास ऑफ कंपनीज ऐसी है क्या जो 10 ईयर से ज्यादा बट 30 ईयर से कम पीरियड के लिए डिवेंचर इशू कर सकती है? हाँ, कौन सी? जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, या ऐसे कंपनीज जो परमिटेड है किस द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा, वो लोग क्या कर सकते हैं, 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर सिक्योर डिवेंचर है तो आपको अपने कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी वगैरह के एसेट्स पे पूरा चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और इस एसेट का वैल्यू डिवेंचर और इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। आप डिवेंचर के साथ डिवेंचर इशू करने के 60 डेज में डिवेंचर ट्रस्ट डीड एंटर करते हो, किसके साथ, डिवेंचर ट्रस्टी के साथ। फॉर्म नंबर तुम बताओगे, ठीक है? चलिए, ऑलराइट। फिर क्या कहता है, आपको क्या करने की जरूरत है, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और आप पब्लिक को इशू कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट, डीआरआर तो नहीं करना पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको डीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा, कितना, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा अदर अनलिस्टेड कंपनीज में, नॉट एनबीएफसीज, नॉट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अदर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को पब्लिक इशू के समय, लिस्टेड कंपनी को सिर्फ इतना याद रखना, पब्लिक इशू के समय। अदर अनलिस्टेड कंपनी, एनबीएफसीज को छोड़कर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर डीआरआर भी क्रिएट करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। सारे बच्चे समझ गए? ये तो हो गया बात। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला डिवेंचर ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। डिवेंचर ट्रस्टी वो आदमी नहीं होना चाहिए जिसके पास कंपनी के शेयर हो, हु होल्ड्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी, हु इज इंडेप्टेड ऑफ द कंपनी, और कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन मनी टू दैट पर्सन। नो, उसमें कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी का केएमपी या कंपनी का प्रमोटेड डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उनका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, उसका कोई पिक्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और ₹50 लाख, और आपका वो समझा लाइबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी का फर्स्ट पॉइंट समझ गया। ईशा, यू कैन गो बैक एंड सी बेटा, जिसको नहीं समझा आप पीछे जाके वापस से देख सकते हो, क्योंकि ये सेशन अभी चल रहा है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। समझा? एवरीबडी समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को आई होप अब कोई डाउट नहीं है?
हमने एक एक बार को दो दो बार, तीन तीन बार लिख के रिवाइज भी कर लिया है। चलिएगा, समझा? अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ये भी कर लिया। लाइबिलिटी वाला पॉइंट किसको नहीं समझा था? ईशा को नहीं समझा था। बेटा ये वापस से पढ़ लीजिए, अगर तेरे को नहीं समझा तो मैं तेरे साथ वापस से पढ़ लूंगी। अच्छा मेरे को बताओ, कैजुअल वैकेंसी आ गई तो डिवेंचर ट्रस्टी मर गया तो बोर्ड अपॉइंट कर सकती है क्या? हाँ। पर अगर वो छोड़कर गया है तो आपको मेजोरिटी लोगों का रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप उसे हटाना चाहते हो तो जिनके पास कम से कम 3/4 वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। कहता है लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दी ट्रस्ट डीड। आप उसके साथ ट्रस्ट डीड एंटर करते हो 60 डेज के अंदर अंदर, तो कहता है आपने अगर ट्रस्ट डीड में कोई ऐसा प्रोविजन डाला है तो वो वॉइड हो जाएगा। कैसा प्रोविजन? उस प्रोविजन का अगर इफेक्ट कुछ ऐसा हो कि आप ट्रस्टी को एग्जम्प्ट कर रहे हो, किसी किसी भी एग्जम्प्ट कर रहे हो, एग्जम्प्टिंग अ ट्रस्टी फ्रॉम और आइडेंटिफाइंग हिम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। अगर आप उसकी किसी भी लाइबिलिटी को एग्जम्प्ट कर रहे हो ट्रस्ट डीड में, अगर आपने कोई ऐसी बात लिखी है जिस बात से आप ट्रस्टी की लाइबिलिटी को क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता भी है तो भी आप उसकी लाइबिलिटी को मुक्त कर देते हो, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो नहीं चलेगा। वेरी फेल्स टू, अगर आपने मान लो ट्रस्ट डीड, आपने मान लो अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा लिख दिया, ट्रस्ट डीड में ऐसा लिखा हुआ है, इफ ही फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर और ड्यू डिलिजेंस, अगर वो केयर से काम नहीं करता या ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से नहीं करता तो भी उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा अगर कुछ ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है तो ये वॉइड हो जाएगा ट्रस्ट, ऐसा नहीं चलता, ठीक है? ओके। पर अगर आप उसकी लाइबिलिटी को कम करना चाहते हो, एग्जम्प्ट करना चाहते हो, तो कब कर सकते हो? जब मेजोरिटी डिवेंचर होल्डर्स जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स है, मतलब मेजोरिटी डिवेंचर होल्डर्स, अगर डिवेंचर होल्डर 100 है तो उसमें 51 डिवेंचर होल्डर्स एग्री करने चाहिए और इन 51 लोगों के पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स होने चाहिए। समझा? दो कंडीशन, अगर ये दो लोग अग्री करते हैं मतलब मेजोरिटी डिवेंचर्स लोग अग्री करने चाहिए और उनके पास कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर होने चाहिए। दो कंडीशन हो गई, मेजोरिटी लोग अग्री करें और उनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हो, तो अगर आप उसकी लाइबिलिटी को कहीं पे एग्जम्प्ट करना चाहते हो तो आप एग्जम्प्ट कर सकते हो। कब? जब मेजोरिटी डिवेंचर होल्डर अग्री करे जिनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हो वो, ठीक है? ओके। तो ऐसा अगर अदरवाइज अगर आपने ट्रस्ट डीड में ऐसा लिख दिया, मान लो कि अगर वो केयर से काम नहीं करता या ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से नहीं काम करता तो कोई बात नहीं, उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, तो ऐसे ट्रस्ट डीड में ऐसी कोई पॉइंट लिखा है तो वॉइड माना जाएगा। पर हाँ, अगर आप उसकी लाइबिलिटी को एग्जम्प्ट कर सकते हो क्या? हाँ। कब? जब मेजोरिटी डिवेंचर होल्डर एग्री करे जिनके पास 3/4 वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हो। सारे बच्चे समझ गए क्या? एवरीबॉडी, बेटा आप समझा गया? कौन था बच्चा समझा? हाँ जी ईशा जी, ईशा जी समझ गए बेटा? तो अगर आप उसकी लाइबिलिटी को सच में एग्जम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेजोरिटी डिवेंचर होल्डर एग्री करने चाहिए और उनके पास कम से कम 3/4 वैल्यू में डिवेंचर्स होने चाहिए। तो बेटा अब हमारा मोस्टली आधा पार्ट खत्म होता है। अब मैं आपको ब्रेक देती हूँ। अब अपने कितने बजे मिलेंगे? अब ब्रेक देते हैं। अब ब्रेक में आप क्या करना, खाना खाते खाते जितना भी आपने पढ़ा है, राइट इशू, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? बोनस इशू, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? बायबैक, उसके बाद आपने पढ़ा डिवेंचर ट्रस्टी का पॉइंट, तो उसे आप क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे, ठीक है? रिवाइज करोगे ताकि दिमाग में बैठ जाए, ताकि अगर मान लो डिवीजन में तुमको कोई डाउट आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी बैठ के मैं आपको 45 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। हम मिलते हैं अभी, चलो आधा घंटा का ब्रेक दे देंगे हम, हाफ एन आवर बाद मिलते हैं, 1:45 पे मिलते हैं, 1:45 पे मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए 1:45 पे, चलो 2 बजे मिलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बचा हुआ चैप्टर करेंगे। ब्रेक टिल 2। More specifically, the right to tax is
clearly no stranger to controversy and has frequently served as the catalyst for revolutionary change. An Arthur power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, emerges from the Constitution of India. In case any tax law, be it an act, rule, notification, or order, is not in conformity with the Constitution, it is called ultra vires the Constitution and is illegal and void. यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? पार्टनर्स की लाइबिलिटी, जैसे कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो एलएलपी के अंदर भी कंपनी का फीचर है क्या, जहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो लोग पर्सनली लाइबल नहीं है। और ये क्या है? एक तरीके की पार्टनरशिप है। तो ये तो हो गया कंपनी का फीचर, ये तो हो गया कंपनी का फीचर होता है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो एलएलपी के अंदर भी एक कंपनी का फीचर है और ये क्या है? पार्टनरशिप। तो ये क्या है? एक तरीके से हाइब्रिड है, कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड हो गया एलएलपी। मतलब पार्टनरशिप की जो अच्छी चीज है वो भी आ गई और कंपनीज की जो अच्छी चीज है वो भी एलएलपी में आ गई। तो एलएलपी एक अच्छा मिक्सचर है। किसका? कंपनी एंड पार्टनरशिप का एक अच्छा मिक्सचर कौन है? एलएलपी। क्योंकि देखो पार्टनरशिप में क्या होता है ना, पार्टनर्स के पास पूरा हक होता है, ए बी सी डी, जिस तरीके का चाहे उस तरीके से अपने अग्रीमेंट में डिसाइड करके रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसीज कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में एक और अच्छी चीज होती है कि पार्टनरशिप पे ना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते, कंपनीज एक्ट के ऊपर नजर होती है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए कंपनीज एक्ट के, आपको पता है कितने तरह की फाइलिंग एक कंपनी को करनी पड़ती है। तो कंपनी के ऊपर बहुत रूल्स और बहुत रेगुलेशंस लागू होते हैं। लेकिन अगर आपने एक पार्टनरशिप बनाई है तो उस पर उतने ज्यादा रूल्स लागू नहीं होते। तो बेसिकली एलएलपी क्या है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें कंपनी का भी फीचर है, पार्टनरशिप का भी फीचर है कि पार्टनरशिप में जैसे लिमिटेड कंप्लायंसेस होते हैं वैसे एलएलपी के भी थोड़े लिमिटेड कंप्लायंसेस है। तो सारे बच्चे आएंगे इधर। कहता है ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल मतलब ना तो ये कंपनी है ना तो ये पार्टनरशिप है, ये कुछ और ही है। ये क्या है? एलएलपी। क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। अब एलएलपी में क्या है? बेनिफिट है किसका? लिमिटेड लाइबिलिटी का, एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। मतलब आपको कंपनी जैसे ज्यादा कंप्लायंसेस करने की भी जरूरत नहीं है और जो कंपनी का फायदा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का वो भी आ गया। पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। allows its partners the flexibility of organizing their internal structures। मतलब पार्टनर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एलएलपी में कि पार्टनर्स जैसे पार्टनरशिप में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं, वैसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर खुद फॉर्म कर सकते हैं एलएलपी का। तो बेसिकली एलएलपी में फायदे ही फायदे हैं। मतलब पहला फायदा तो क्या हो गया? लिमिटेड लाइबिलिटी का। जैसे कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। और लो कंप्लायंस कॉस्ट। लो कंप्लायंस कॉस्ट मतलब आपको ज्यादा कंपनी जैसे कंप्लायंस करने की भी जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप जैसे लो कंप्लायंस पे चल जाएगा काम आपका और आपको लिमिटेड लाइबिलिटी की बेनिफिट भी मिल जाएगी। और पार्टनर्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। जैसे पार्टनरशिप में आप इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप का, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप का। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लॉ की नजरों में जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। While the LLP itself will be liable for the full extent of its asset and liability of the partners will be limited। LLP के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है and LLP itself will be liable for the full extent of its assets। मतलब क्या? देखो सारे बच्चे सुनना। लेट्स से एक एलएलपी के आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए एलएलपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? ए का 1 करोड़, इसका 1 करोड़, इसका भी 1 करोड़। ये एक 1 करोड़ लेकर आए एलएलपी के अंदर, ठीक है। कल चलकर अगर एलएलपी का बिजनेस क्या होता है? बंद होता है। लेट्स से एलएलपी के बिजनेस में लॉस हो गया, कितने का?
5 करोड़ का लॉस हो गया, तो पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? जितना भी उनका कैपिटल है, दैट इज 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ए बी सी, जितना भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। तो बचा कितना? 2 करोड़। ये 2 करोड़ अब कौन पे करेगा? 2 करोड़ अब कौन पे करेगा? 2 करोड़ हो जाएंगे बैड डेट। मतलब एलएलपी सबसे पहले अपना क्या करेगा? मान लो 5 करोड़ है, सबसे पहले एसेट बेचे जाएंगे। लेट्स से एसेट बेचकर आपका बचा 4 करोड़, 4 करोड़, उसके बाद पार्टनर्स 1 1 1 3 करोड़ हो गया। 1 करोड़ क्या माना जाएगा? बैड डेट। मतलब अब एलएलपी इसको चुका नहीं पाएगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा वो लोग लायबल नहीं है। और पार्टनर्स मतलब एलएलपी जो है वो अपने एसेट्स को क्या करेगी? बेचेगी। जो पैसा बचेगा पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतना, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद नहीं। तो बेसिकली एलएलपी के अंदर क्या होता है बेटा? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आप सभी ने पढ़ा। मतलब जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, गिव द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। एलएलपी के अंदर कंपनी जैसे लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय कर सकते हैं पार्टनर्स, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है पार्टनरशिप की। मतलब एलएलपी एक अच्छा मिक्सचर है, क्योंकि एलएलपी के अंदर एक तो कंपनी में जैसे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। और पार्टनरशिप में जैसे आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है किसकी? पार्टनरशिप की। मतलब आप अपने हिसाब से बिजनेस को फॉर्म कर सकते हो। मतलब कंप्लायंसेस भी आपको कम करने हैं और पार्टनर्स की लायबिलिटी भी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्योंकि एलएलपी के अंदर दोनों ही एलिमेंट है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, मतलब लॉ की नजरों में एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, एंड एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म का भी स्ट्रक्चर है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक हाइब्रिड बोलते हैं। किसका हाइब्रिड है ये? कंपनी और पार्टनरशिप के बीच का हाइब्रिड है एलएलपी। क्यों एलएलपी को क्यों हाइब्रिड कहा जाता है? क्योंकि जैसे कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वैसे ही एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर लो कंप्लायंसेस होते हैं, वैसे ही एलएलपी में भी लो कंप्लायंसेस है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू मेक द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वो लोग पार्टनरशिप का इंटरनल स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं, वैसे एलएलपी में भी पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी और एलएलपी, सॉरी, कंपनी एंड पार्टनरशिप का हाइब्रिड क्या हो गया? ये हाइब्रिड है ये इसका। तो आप सारे बच्चे सुनेंगे, आपने क्या पढ़ा? यही जो ऊपर पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डब्बे में डाल दिए। ये एक नया तरीके का लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। जैसे आप अगर एक बिजनेस चलाना चाहते हो तो कंपनी फॉर्म करके चला सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म करके चला सकते हो, वैसे ही एक अल्टरनेटिव तरीका है बिजनेस को रन करने का, एलएलपी बना के। अलाउज द पार्टनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाने की। एलएलपी विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, मतलब कभी भी मान लो लॉस वगैरह हो जाए तो पूरा एसेट बेच के एलएलपी अपना जो भी लॉस वगैरह चुकाएगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना पार्टनर्स ने बोला है कि हम इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे एलएलपी में, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतने ही एक्सटेंट की उनकी लायबिलिटी है, और कुछ नहीं है। सारे बच्चों को समझा? एलएलपी इज द सन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। अरे वाह, सही है। हैप्पी बर्थडे एलएलपी। बताओ, एलएलपी की तरफ से सबको थैंक यू। अच्छा, बड़े तुम लोग होशियारी कर रहे हो। सारे बच्चों को समझा गया? हाइब्रिड। अब आपको ना एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच का, तो आप क्या लिखोगे? अगर मान लो तुमको एक सवाल आ गया ऐसा क्यों कहा जाता है कि एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच का, तो आप बोलोगे क्योंकि एलएलपी में कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की फीचर्स है। जैसे कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वैसे ही एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप। इन द सेम वे एलएलपी के अंदर पार्टनर्स कैन ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एलएलपी। और जैसे कंपनी में, सॉरी, पार्टनरशिप में लो कंप्लायंसेस होते हैं, वैसे ही एलएलपी में भी बहुत लो कंप्लायंसेस है। इट्स लिमिटेड लायबिलिटी विद लो कंप्लायंसेस। सारे बच्चे समझे क्या? वेरी गुड। तो बेसिकली बीच का हो गया ये, ना पूरी कंपनी है ना पूरी पार्टनरशिप है, कंपनी और पार्टनरशिप की अच्छी अच्छी चीजें एलएलपी में आ गई। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, अपने डिफरेंसेस को पढ़ते हैं ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। आप लोग एकदम नीचे आ जाओगे, एकदम नीचे आ जाएंगे और थोड़े से डिफरेंसेस को पहले पढ़ेंगे ताकि आप लोग को एक आइडिया लगे कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड कंपनी में क्या फर्क है। ठीक है, चलिए
सभी बच्चे ध्यान देंगे। एलएलपी एक्ट को कौन गवर्न करता है? एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ की नजरों में मुझे बताओ, क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट? सभी बच्चे ध्यान देंगे। एलएलपी एक्ट को कौन गवर्न करता है? एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ की नजरों में मुझे बताओ, क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? आपको वर्ड का मतलब पता है बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, जो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, जो अपने नाम पे एसेट्स को ओन कर सके, होल्ड कर सके, जो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, वो सब क्या होते हैं? मतलब वो सब क्या होते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो आप सबको पता है एलएलपी क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म का क्या परपेचुअल सक्सेशन है? पार्टनर्स मर जाएंगे तो क्या फर्म चलेगी? नहीं। पार्टनरशिप फर्म के पास क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। क्या लॉ की नजरों में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग माने जाते हैं? नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एलएलपी इज अ सेपरेट एंटिटी। एलएलपी को अपने मेंबर्स से सेपरेट माना जाता है। एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी मानी नहीं जाती। पार्टनर्स ही पार्टनरशिप फर्म माने जाएंगे। क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस। अगर आपको एक एलएलपी खोलनी है तो आपको एलएलपी एक्ट के हिसाब से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक लीगल प्रोसेस होता है एलएलपी को बनाने का। लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो कैसे बन जाती है? पार्टनर्स ने आपस में रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट एंटर किया और पार्टनरशिप खुल गई। मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट में एंटर किया, पार्टनरशिप खुल गई। पर एलएलपी बनाने के लिए आपको एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन, देयर इज अ लीगल प्रोसेस। यहाँ पे कोई लीगल प्रोसेस है क्या? नहीं। पार्टनरशिप में तो आपने एग्रीमेंट में एंटर किया, पार्टनर बन गए, पर एलएलपी में आपको एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस में एंटर करना पड़ता है टू मेक अ एलएलपी। रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अगर आपने एक एलएलपी खोली है तो आपको उसे रजिस्टर करना मैंडेटरी है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है। आप चाहो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाकर पार्टनरशिप को रजिस्टर कर दो, चाहे तो ना करो। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, वॉलंटरी होता है। ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन सू द थर्ड पार्टीज। अब ये बात अलग है कि आपने अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया तो आप किसी पे केस फाइल नहीं कर सकते। आपके साथ कोई धोखा करके भी चला गया तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। आई एम श्योर आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है। अगर आपने थोड़ा सा भी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो तो आप किसी और के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, सामने वाला तुम पे कर सकता है, तुम किसी के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर पाओगे अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, लेकिन एलएलपी को तो रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अब कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मतलब डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर मर गया, पार्टनर पगला गया, पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो उससे एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी तो चलती रहेगी, करेक्ट। उससे कोई मेंबर हो सकता है नया ज्वाइन कर ले, हो सकता है मेंबर लीव कर दे, पर उससे पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। हाँ, लेकिन क्या पार्टनरशिप में ऐसा है क्या? पार्टनरशिप में अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, तो उसकी एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा? हाँ, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। हाँ, लेट्स से दो पार्टनर है, दोनों ही मर गए, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ, तो इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन। हालांकि एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है, पर पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। चलिए, ओके। अगर आप एक एलएलपी बनाते हो, नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी एज अ सफिक्स। मतलब जैसे मान लो मैंने XYZ एलएलपी बनाई, तो नाम के पीछे एलएलपी लिखा जाता है। कहते हैं जब आप एक एलएलपी बनाते हो तो नाम के पीछे एलएलपी ऐड करते हो, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। पार्टनर्स कैन हैव नेम एज पर देयर ओन चॉइस। उनको कोई पीछे पार्टनरशिप ऐड करने का जरूरत नहीं। जैसे मैंने बना लिया XYZ एंड को, तो ये क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप फर्म में नाम के पीछे से कोई सफिक्स वगैरह ऐड करने का कोई गाइडलाइन नहीं है। लायबिलिटी पार्टनर्स की क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितना उनका अग्रीड कंट्रीब्यूशन है, जितना उन्होंने अग्री किया है कि वो एलएलपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। अगर मान लो एलएलपी के पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया तो उस केस में फिर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। अगर आपने जानबूझ के कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो फिर अलग केस है, फिर तुमसे वसूला जाएगा। अदरवाइज पार्टनर की लायबिलिटी जो एलएलपी होती है, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना एक्सटेंट का उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के लिए अग्री किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब आपको पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी पार्टनरशिप का जो लॉस है वो चुकाना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर बाय हिज ओन एक्ट। मतलब आपको पता है पार्टनरशिप में क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है। लेट्स से अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोली XYZ एंड को, ठीक है, ये आपने पार्टनरशिप फर्म खोली, तो X जो भी काम करेगा उस काम के लिए Y और Z भी लायबल होंगे। X अगर उधार पे माल खरीदता है तो Y और Z भी लायबल हो जाते हैं एक पार्टनरशिप में। पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी मतलब मेरे काम से, मैं मेरे कामों के लिए तो लायबल हुई,
मेरे काम से दूसरे मेरे पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे, तो वो पार्टनरशिप में होता है। लेकिन एलएलपी में ईच पार्टनर्स कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर्स। अब एलएलपी के अंदर क्या होता है, अगर कोई एक्स कोई काम करता है तो उसके लिए एलएलपी लायबल है और दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करती है, पार्टनर के एक्ट से सारे दूसरे पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। बट इधर एलएलपी में अगर पार्टनर कोई काम करता है तो उससे क्या होगा, एलएलपी तो लायबल होगी बट अदर पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होता, पर एलएलपी के अंदर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने पड़े, जिसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी को चलाने के लिए कौन लोग चाहिए, डायरेक्टर्स। जैसे एलएलपी को चलाने के लिए कौन लोग चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी में जरूरी है, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट भी होना पड़ा इंडिया का। ठीक है, कॉमन सील, इट मे हैव इट्स कॉमन सील। एलएलपी में हो सकता है कॉमन सील हो, जैसे कंपनी मे हैव इट्स कॉमन सील, वैसे एलएलपी मे हैव इट्स कॉमन सील। पार्टनरशिप में कोई कॉमन सील का कॉन्सेप्ट नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस बोला है, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज। यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिस्पांसिबल होता है। अब जैसे मान लो एलएलपी के अंदर अगर 4 पार्टनर्स हैं, लेट्स से एलएलपी के अंदर अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, जिसमें मान लो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है और ये भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये 2, तो कौन लायबल रहेगा अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो जाए एलएलपी एक्ट से, नॉन कंप्लायंस हो जाए एलएलपी एक्ट से, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबल रहेंगे। बी और सी लायबल नहीं रहेंगे, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। कौन लायबल रहता है, ए और डी, जो कि क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। लेकिन पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पांसिबल होते हैं अगर आपने किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस किया तो। ठीक है, चलिए एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एलएलपी को हर साल एनुअल स्टेटमेंट, जैसे कंपनी को करना नहीं पड़ता है क्या, कंपनी को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना पड़ता है, कंपनी को हर साल एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, तो वैसे ही एलएलपी को भी करना पड़ता है एनुअल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब आगे आने वाले 1 साल में वो लोग इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, उसका एक स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स आपको एलएलपी को हर साल फाइल करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को ऐसे कोई एनुअल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आरओएफ के पास आपको कोई भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं होती। एलएलपी को फाइल करना है क्या, हाँ, एलएलपी को एनुअल अकाउंट्स को, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट को, एनुअल रिटर्न्स को आपको फाइल करना पड़ेगा। एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी आपको फाइल करना पड़ेगा, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। पर यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसे फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में, आप ये पढ़ेंगे कि अगर कोई बाहर का नेशनल है तो एलएलपी में, भारत में इंडिया में अगर कोई एलएलपी बन रही है तो क्या कोई बाहर का आदमी भी पार्टनर आके बन सकता है क्या, बन सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में बाहर का आदमी आके पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप फर्म में माइनर नहीं हो सकता, पार्टनरशिप बोल रही हूँ, माइनर एलएलपी के बेनिफिट्स के लिए एडमिट नहीं हो सकता। लेकिन आपने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट में, तो पढ़ा ही है आपने, माइनर्स कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या माइनर एडमिट हो सकता है क्या, हाँ, एज अ पार्टनर तो एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग के लिए क्या माइनर एडमिट हो सकता है, हाँ, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से। तो आपने कुछ 15 इसमें डिस्टिंक्शन देखे एलएलपी और फर्म में, जो कि कतई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़ने से जो डिफरेंस समझ में आ जाए। सभी बच्चों को समझा क्या कोई भी डिफरेंस? मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि ये तो मैम डिफिकल्ट है, क्या है रे? एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। बेसिक बातें अगर अपने करें, आपने 15 डिफरेंसेस पढ़े, आप मेरे साथ बेसिक बातें भी अगर डिस्कस करो तो हम कर सकते हैं। पहला, एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम होने पड़े, जिसमें से एक रेसिडेंट होना पड़ा इंडिया का। क्या पार्टनरशिप फर्म में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट है? नहीं। एलएलपी को कौन गवर्न करता है? एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। ठीक है, अब एलएलपी एक्ट के अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितने एक्सटेंट तक लिमिटेड? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना भी उनका, जो उन्होंने अग्री किया, जितना उनका कंट्रीब्यूशन, उतनी उनकी लायबिलिटी है। लेकिन पार्टनरशिप में द पार्टनर्स लायबिलिटी आर अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई नॉन कंप्लायंस करते हो एलएलपी एक्ट में, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द नॉन कंप्लायंसेस। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स रिस्पांसिबल होते हैं अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो। अब यहाँ पे क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है क्या? एलएलपी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन? यस। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती है। एलएलपी को आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, एलएलपी को आप एक लीगल प्रोसेस के थ्रू बनाते हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को आप एक नॉर्मल एग्रीमेंट एंटर करके भी बना सकते हो। माइनर एलएलपी में एंटर नहीं कर सकता, कैन नॉट बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। लेकिन माइनर क्या पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है क्या, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? यस। फॉरेन नेशनल एलएलपी का पार्ट बन सकता है क्या, फॉरेन नेशनल पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बन सकता है? नहीं। तो ये 10 डिफरेंसेस तो हमने ऐसे ही बात कर लिए। इट्स वेरी इजी, नथिंग बेटा, मतलब 10-15 में से 10 डिफरेंस तो अगर आप एक नॉर्मली भी थोड़ा बहुत भी जानते हो ना, तो भी आप लिख सकते हो, कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एलएलपी का बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ, एलएलपी के पास तो सारे फीचर्स है बॉडी कॉर्पोरेट वाले। पार्टनरशिप फर्म में बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप का एसेंसी, कार्डिनल टेस्ट जो है पार्टनरशिप का क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। तो क्या एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी है? नहीं। कॉमन सील, इनको इतने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, इनको नहीं करने पड़ते। बस सिंपल है, ये सारे डिफरेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब मैडम ये लिमिटेड एलएलसी क्या है? एलएलसी बेटा लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्या? हाँ, है तो एक कंपनी, बस ऐसे लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी को आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी कह सकते हो। ठीक है,
आई थिंक एक चीज यहाँ पे ना गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है? वो ये कि 4 के बाद भी मेरे हिसाब से डिफरेंसेस हैं जो अपनी बुक में नहीं आ सके। मैं काम करती हूँ एक बार ना, ICAI, एक मिनट, एक मिनट रुकोगे, एक मिनट रुकोगे। मुझे चेक करने दीजिए। ICAI, Corporate and Other Laws, LLP Act, हाँ एक पेज आई थिंक हमारा मिस हो गया इसमें डलना। रुकिएगा, हाँ बेटा 4 पॉइंट्स तो हैं, 2-4 पॉइंट अपने मिस हो गए। रुकेंगे। तो यहाँ पे जो फर्क है ना, ये 4 पॉइंट्स ही आए हैं और भी इसके बाद 3 पॉइंट्स और है, आई थिंक वो मिस हो गए। आप अपने इस पे मार्क कर लेना बुक में। आई थिंक 3-4 पॉइंट हमारी बुक में मिस हो गए, बट मैं आपको पढ़ा तो पूरा ही दूंगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पे आइएगा, ये आपका डिफरेंसेस है। तो ये 4 पॉइंट्स तक तो हमारी बुक में है, इसके बाद ये 5, 6, 7, 3 पॉइंट्स हमारी 4 पॉइंट्स मिस हो गए। तो चलिए वेरी सिंपल, फिर भी हम पढ़ते हैं। LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या फर्क है? बेसिक LLP एक्ट को गवर्न करने के लिए लगता है LLP एक्ट, वैसे ही कंपनीज को गवर्न करने के लिए लगता है द कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स और पार्टनर्स में क्या है? द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर्स। LLP में जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, और जो पैसा लगाते हैं कंपनी में उन्हें हम मेंबर्स कहते हैं। अब जो पैसा लगाता है LLP में, जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी टू LLP इज पार्टनर, पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी इन अ कंपनी आर द मेंबर्स ऑफ कोर्स। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ LLP इज गवर्न्ड बाय द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इंटरनल गवर्नेंस आपको पता है ना, LLP का जो LLP क्या है? हाइब्रिड है ना, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। तो LLP में एक फायदा क्या है कि पार्टनरशिप में जैसे आप एक अग्रीमेंट बनाकर डिसाइड कर सकते हो पार्टनरशिप के इंटरनल गवर्नेंस की चीजें, वैसे ही LLP में भी कर सकते हो। कहता है इंटरनल गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है ना LLP में, वो आप एक अग्रीमेंट के बेसिस पे पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट में एंटर करके डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट है। आपको क्या बनाना पड़ता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने पढ़ा है कंपनी के अंदर जो इंटरनल गवर्नेंस, AOA के अंदर क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो होते हैं, एंड AOA इज गवर्न्ड बाय, रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट। AOA कैसे बनाना है? इट इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हो एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, बट लिमिटेड लायबिलिटी, वापस अगर मैं बोलूं कंपनी में, तो द इंटरनल गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी इज गवर्न्ड बाय और रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट, दैट इज कंपनीज एक्ट। LLP में नाम के पीछे क्या होता है? LLP यूज होता है, लेकिन अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो आप नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज करोगे, प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करोगे। तो ये 4 डिफरेंसेस तो आपकी बुक में है यहां तक। आई थिंक उसके बाद एक एक्स्ट्रा पेज अपना मिस हो गया, ठीक है। फिर भी देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स कहता है मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए LLP में? 2। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स ऑफ LLP। मेंबर्स ऑफ, ये मत पढ़ना अभी ये वाली लाइन, ये लाइन हम आगे ऊपर में पढ़ेंगे, अभी आपको समझेगा नहीं है, तो इतना ही पढ़ना। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं LLP के अंदर, और मैक्सिमम आपके कोई लिमिट नहीं है। वैसे प्राइवेट कंपनी में आपने पढ़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, सिंपल बात है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, यहाँ लाइबिलिटी पार्टनर्स की कितनी होती है? लिमिटेड होती है, जितना एक्सटेंट उन्होंने एग्री किया है टू कंट्रीब्यूट। लेकिन मेंबर्स के केस में लाइबिलिटी क्या होती है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितना भी अमाउंट शेयर्स पे अनपेड है उतनी, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट आपने गारंटी किया था उतनी मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या अग्री किया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। मैनेजमेंट, जो बिजनेस होता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को कौन चलाता है? कामकाज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस होता है LLP आएगा, बिजनेस ऑफ दी LLP देखो आपकी स्टडी मैट में भी ये गलती है, इसको LLP आएगा। बिजनेस ऑफ दी LLP इज मैनेज्ड बाय दी पार्टनर्स, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हु अफेयर्स को मैनेज करते हैं, वैसे बिजनेस ऑफ दी LLP इज मैनेज्ड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं, सबने पता है, चैप्टर नंबर 2 में ही आपने पढ़ा था ये। वैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होते हैं LLP में? 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। आप सबको पता है क्या यार? आपने पढ़ा ना मिनिमम, अभी पढ़ा था 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने पड़े। जैसे कंपनी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं LLP, मेरे को तुमको समझाने की भी जरूरत नहीं है। इसको कौन सा चलो कौन करता है? LLP को कौन करता है? LLP एक्ट 2000 पार्टनर्स, वहां पे जिन्होंने पैसा, एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। यहाँ पे LLP में आप खुद से इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो आप करेंगे। कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड वर्ड यूज होता है।
यहाँ एलएलपी में जो मेंबर्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 7 और कोई कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए होते हैं डायरेक्टर्स। हमने तक तो है 5, 6, 7, 8 ये देख लो, इनको मैनेज कौन करता है? आप लिखना चाहते हो क्या? क्या लिखोगे इसमें? एक बार अपनी बुक पे एक मार्क लगा देना, रेफर स्टडी में एक मार्क लगा देना, कुछ कितने मेंबर्स इफेक्ट हो। डिफरेंसेस बहुत सिंपल है। चलिए अब इधर चलिएगा, एक मिनट। एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस, कहता है एड्रेस। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास एड्रेस की। एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स के रिलेशन में एड्रेस। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी, एलएलपी के पार्टनर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एड्रेस मतलब क्या होगा? तो कहता है पार्टनर अगर एक इंडिविजुअल है, एलएलपी का पार्टनर अगर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल इंडिविजुअल है, तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ही क्या होगा? उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ही क्या होगा? उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ही उसका एड्रेस होगा। और अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है एलएलपी का पार्टनर कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट हो, ऐसे केस में जो भी उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा। सिंपल बात है। कहता है एड्रेस किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर एलएलपी का पार्टनर कौन है? इंडिविजुअल है, तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। लेकिन एलएलपी का पार्टनर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर उसका क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ही क्या होगा? एड्रेस माना जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? एक तो आपने कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब एलएलपी एक्ट में थोड़ी डिफरेंट है, पढ़िएगा। कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाता है? कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी जो डिफाइंड है इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नाउ कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाता है कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हो, वो क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी जो कंपनीज एक्ट, सॉरी एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में जो एलएलपी बनी, वो भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई एलएलपी आउटसाइड इंडिया भी बनी है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसे भी क्या कहते हैं? अ कंपनी incorporated outside India is also an LLP. Very important definition this is. सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। What is a body corporate? सारे बच्चे बताओ। LLP एक्ट के हिसाब से हम बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? हम बॉडी कॉर्पोरेट उन सारे कंपनीज को कहते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में बने हो या कंपनीज एक्ट 1956 में बने हो, या वो सारे कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए हैं, वो भी क्या है? कंपनी है। उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट में और कौन आ जाता है? एलएलपी, जो एलएलपी इंडिया में बनी अंडर एलएलपी एक्ट 2008, या फिर जो इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया भी जो एलएलपी है, वो भी क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। तो चारों को हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाला। कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आता? बॉडी कॉर्पोरेट में डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन सोल है, वो सब एलएलपी, सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आते। कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होती बॉडी कॉर्पोरेट की इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट विच दी सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दी ऑफिशियल गजेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई किया है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी, तो फिर वो नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या? मतलब कंपनी को छोड़कर, एलएलपी को छोड़कर भी तो बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट की कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन पड़ी थी, बहुत वास्ट है, तो इनको छोड़कर और भी तो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो कहता है अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है ऑफिशियल गजेट द्वारा, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट माना नहीं जाएगा। तो सारे बच्चे आप मेरे को बता दो, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट अगर हम एलएलपी एक्ट के हिसाब से देखें, एलएलपी जो इंडिया में बनी, एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी, कंपनी जो इंडिया में बनी और कंपनी जो इंडिया के बाहर में बनी, ये तीन लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आते। जो है कॉर्पोरेशन सोल, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नोटिफाइड हो कौन द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किसमें? ऑफिशियल गजेट में। बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी ऑफिशियल गजेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाएंगे इन एलएलपी एक्ट। ठीक है, ठीक है मैडम, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये डेफिनेशन? क्योंकि इसका एक रिलेशन आगे से लगता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली आपको सरल शब्दों में याद रखना है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी, फॉरेन एलएलपी ठीक नहीं रहेगा, इसको काट कर दो, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी एंड कंपनी जो हमारे नॉर्मल कंपनीज एक्ट में बनी, एक्सक्लूड्स कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। इसका रेलेवेंस क्या है मैं आगे बताती हूँ। बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस, एलएलपी कोई बिजनेस कर रही हो सकती है। बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन,
एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट बे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। मतलब सेंट्रल, आपने पढ़ा था ना, केंद्र सरकार के पास पावर है एलएलपी एक्ट को लेके रूल्स बनाने और रूल्स अमेंड करने की। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन किसी दिन ले आए और बोल दे कि एलएलपीज ये सर्टेन काम नहीं कर सकती, तो फिर वो एलएलपी वो बिजनेस नहीं कर पाएगी। कहता है बिजनेस में सब तरीके का ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन आ सकता है, लेकिन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नोटिफाई करके ये बोल दे कि ये पर्टिकुलर काम एलएलपी नहीं कर सकती, तो फिर नहीं कर सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कौन होता है? सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के हिसाब से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, सीओपी हो, वो हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब वो जो डिफाइन है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, एंड जिसके पास सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, उसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच इन परसुएंट टू सेक्शन 7। कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसके बारे में बात सेक्शन 7 में कर रखी है, एलएलपी एक्ट के सेक्शन 7 में जिसके बारे में बात कर रखी है। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 7 के ऊपर और डेजिग्नेटेड पार्टनर को पढ़ते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, ये रहा डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात। तो देखो अब सारे बच्चे यहां ध्यान से सुनना। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, वैसे ही एलएलपी के केस में होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कहता है कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जो कि क्या हो सकते हैं, हु आर इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इंडिविजुअल होने चाहिए एंड जिसमें से एक क्या होना चाहिए, भारत का रेसिडेंट भी होना चाहिए। अगेन दूसरे पॉइंट पे बात क्या कर रहा है देखना, प्रोवाइडेड इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है अगर एलएलपी के सारे पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो एक या वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, या हो सकता है एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल हो एंड बॉडी कॉर्पोरेट हो, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या कहता है ध्यान से सुनना, एग्जांपल से समझाती हूं आपको, 3-4 केस सिनेरियो बताती हूं। कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कहता है इंडिविजुअल होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल हो, और 2 में से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट तो होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब पिछले साल में, यहां पे लिखा हुआ है इधर गया रे, ठीक है ओके। तो अभी आपको ये समझा जो कि क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अब 3-4 केस मेरे सुनिएगा यहां पे। कहता है हो सकता है एलएलपी हो XYZ एलएलपी जिसमें 2 पार्टनर्स है, एक्स जैसे 3 पार्टनर्स है XYZ। मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, 2। तो एक्स भी क्या है, एक इंडिविजुअल है, वाई भी क्या है, एक इंडिविजुअल है। लेट्स से एक्स क्या है, पिछले साल इंडिया में रहा था तो रेसिडेंट है, करेक्ट। तो ये 2 क्या बन जाएंगे, क्या 2 इंडिविजुअल्स बन सकते हैं क्या, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बन गए, एक्स एंड वाई बन गए। क्या जेड भी बन सकता है क्या, हाँ, क्या दिक्कत है, बन सकता है। अब मेरे को एक बात बताएं, आपने अभी एक चीज पढ़ी थी कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये 4 लोग होते हैं एलएलपी एक्ट में। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो लोग, एलएलपी जो इंडिया में बनी, एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी, कंपनी जो इंडिया में बनी, और कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी, वो होती है बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हो सकता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर एलएलपी बनाई हो। मतलब एक कंपनी है XYZ एलएलपी है जिसमें कॉर्पोरेट एक कम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहता है इंडिविजुअल, कहता है एक या वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, या हो सकता है एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल हो एंड बॉडी कॉर्पोरेट हो, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या कहता है ध्यान से सुनना, एग्जांपल से समझाती हूं आपको, 3-4 केस सिनेरियो बताती हूं। कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और 2 में से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट तो होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब पिछले साल में, यहां पे लिखा हुआ है इधर गया रे, चलो ठीक है चलिए रुकिए एक बार, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आएगा जब सही टाइम पे पढ़ेंगे उसे, ठीक है ओके। तो अभी आपको ये समझा जो कि क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अब 3-4 केस मेरे सुनिएगा यहाँ पे। कहता है हो सकता है एलएलपी हो XYZ एलएलपी जिसमें 2 पार्टनर्स है, एक्स जैसे 3 पार्टनर्स है XYZ। मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, 2। तो एक्स भी क्या है, एक इंडिविजुअल है, वाई भी क्या है, एक इंडिविजुअल है। लेट्स से एक्स क्या है, पिछले साल इंडिया में रहा था तो रेसिडेंट है, करेक्ट। तो ये 2 क्या बन जाएंगे, क्या 2 इंडिविजुअल्स बन सकते हैं क्या, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बन गए, एक्स एंड वाई बन गए। क्या जेड भी बन सकता है क्या, हाँ, क्या दिक्कत है, बन सकता है। अब मेरे को एक बात बताएं, आपने अभी एक चीज पढ़ी थी कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है।
बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये 4 लोग होते हैं एलएलपी एक्ट में। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो लोग, एलएलपी जो इंडिया में बनी, एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी, कंपनी जो इंडिया में बनी, और कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी, वो होती हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हो सकता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर एलएलपी बनाई हो, मतलब एक कंपनी है XYZ एलएलपी है, जिसमें कौन कौन लोगों ने XYZ एलएलपी बनाई, इसका रिलायंस RIL, रिलायंस क्या इंडियन कंपनी है क्या, रिलायंस क्या एक इंडियन कंपनी है, हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी को बना सकते हैं, हाँ, आपने पढ़ा। ऑल द पार्टनर्स, हो सकता है सारे पार्टनर्स क्या हो, बॉडी कॉर्पोरेट्स हो। अब बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या होता है तुमको पता है, हो सकता है रिलायंस है, हो सकता है यूनिलीवर लिमिटेड। यूनिलीवर लिमिटेड क्या पार्टनर बन सकता है क्या, हाँ, यूनिलीवर लिमिटेड यूके की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, पर क्या फॉरेन कंपनी भी मानी जाती है क्या, मुझे बात बताओ, फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है क्या, हाँ, तो क्या फॉरेन कंपनी भी पार्टनर बन सकती है क्या, हाँ, अच्छा। अब मेरे को बताओ, बाहर की एक एलएलपी है, एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी हुई है, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, क्या वो भी पार्टनर हो सकती है क्या, क्योंकि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट तो मानी जाती है, तो ये भी पार्टनर हो सकती है, हाँ, अच्छा। अब मेरे को एक बात बताओ, एलएलपी जो इंडिया में बनी है, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या वो भी XYZ एलएलपी में क्या पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है क्या, हाँ। तो अब इन चारों में से ये तो पार्टनर्स हो गए सारे, कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने पड़े, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम 2 होने पड़े। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे तो इंडिविजुअल्स थे जो बन गए, तो ऐसे केस में इनके नॉमिनीज, लेट्स से RIL का नॉमिनी, कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा नॉमिनी, तो RIL का नॉमिनी और यूनिलीवर लिमिटेड का नॉमिनी, जिसमें से एक नॉमिनी क्या होना चाहिए, एक कंपनी का नॉमिनी ऐसा होना चाहिए जो रेसिडेंट हो, एक का रेसिडेंट होना जरूरी होता है, मतलब जो पिछले साल में इंडिया में कुछ दिन के लिए रहा हो, कुछ दिन क्या है आगे बताऊंगी, तो एक नॉमिनी रेसिडेंट होना जरूरी है, सारे बच्चे। अब एक ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो केस हो सकता है, एक एलएलपी है XYZ एलएलपी, जिसमें एक पार्टनर है X और 2 पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स है, जैसे एलएलपी इंडिया की और एक एलएलपी जो इंडिया के आउटसाइड बनी है, ये 3 पार्टनर्स है, इसमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन हो सकता है, या तो X हो जाएगा, या इनका इसका नॉमिनी, या इसका नॉमिनी, अब 3 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है, करेक्ट। अब X एक का रेसिडेंट होना जरूरी है, मतलब पिछले साल में आपको कुछ दिन इंडिया में रहना जरूरी है, तो लेट्स से X रेसिडेंट है, तो एक तो हो गया X और एक मान लो ये नॉमिनी हो गया, तो ये 2 क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएंगे। सारे बच्चे समझे क्या, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एवरी एलएलपी, हर एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने पड़े, जो कि इंडिविजुअल होने पड़े, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। कहता है हो सकता है सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो फिर इंडिविजुअल कैसे बनेंगे, आपने यहाँ तो बोल दिया 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर मान लो सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट मतलब 4 लोग हो गए, तो कहता है अगर सारे के सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट हुए, तो कहता है 1 और मोर पार्टनर्स, या हो सकता है एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल हो और बाकी के बॉडी कॉर्पोरेट्स हो, तो ऐसे केस में 2 इंडिविजुअल्स कौन होंगे, आप नॉमिनीज ले लोगे बॉडी कॉर्पोरेट्स के, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे तो इंडिविजुअल्स ही। अब इन लोगों को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब जिसमें से मान लो 2 नॉमिनी में से एक नॉमिनी रेसिडेंट होना पड़ा, मतलब इंडिया में कुछ साल रहना पड़ा। सारे बच्चे समझ गए क्या, कोशिश कर रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 2 तो मिनिमम होने ही पड़ेंगे, इंडिविजुअल होने पड़ेंगे और रेसिडेंट होने पड़ेंगे, दोनों में से एक आदमी तो रेसिडेंट होना पड़ा, मतलब 2 हो सकते हैं, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या, हाँ। अब ये जो 2 लोग हैं जिनकी मिनिमम की बात चल रही है, कहता है इंडिविजुअल्स होने चाहिए दोनों, और एक उसमें से के एक्ट के हिसाब से कंपनी जो इंडिया में बनी पार्टनर कौन बन सकता है, कहता है इनके नॉमिनीज बन, ओके। अब यहाँ पे ये वाला एक छोटा पॉइंट है, पहले इसको पढ़ना। अगर मैं किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रही हूँ एलएलपी में, तो उसको अपना प्रायर कंसेंट देना पड़ेगा कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, टू एक्ट एज सच इन द एलएलपी इन द फॉर्म एंड मैनर एज वे प्रिस्क्राइब। ऑनलाइन फॉर्म होता है बेसिकली, तो आप उस ऑनलाइन फॉर्म में प्रायर कंसेंट, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले उस इंडिविजुअल को अपना प्रायर कंसेंट देना पड़ता है कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, ओके। इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अब जब आप एलएलपी को बनाते हो, तो जैसे कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या, वैसे जब आप एलएलपी को बनाओगे तो कई सारे इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कहते हैं इफ, क्योंकि प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एलएलपी को बनाते हो, तो कहते हैं इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज हु आर टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो सच पर्सन क्या माने जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन होते ही जिनका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में एज डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखा था, वही डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट्स दैट, हो सकता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो कि सारे पार्टनर्स क्या हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। अगर सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो एवरी पार्टनर शैल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर एक पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। लेट्स से, अब मैडम ऐसा क्या होता है, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताती हूँ। अगर एक एलएलपी है, एलएलपी के 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। लेट्स से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफरेंस समझाते हुए भी पॉइंट बोला था, ए और डी। मान लो ए क्या बन गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डी भी क्या बन गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए। इन केस अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है, तो किसको सजा भुगतनी पड़ती है, एलएलपी के साथ सजा भुगतनी पड़ती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो ये 2 पार्टनर्स तो बच जाएंगे, बी और सी तो बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। अगर चारों का नाम लिखा हुआ होता तो चारों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते और चारों को सजा मिलती। तो भाई कोई क्यों बनना चाहेगा भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो सबको डर लगेगा कि यार कोई नॉन कंप्लायंस हो गया, कल चलकर मेरा गला पकड़ेंगे। तो हो सकता है सारे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर हो और सारों को ही क्या मिले, सजा मिले। तो कहता है हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है सारे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट
पार्टनर में सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। कहता है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी पार्टनर जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए पहले पार्टनर होना जरूरी है। तो कहता है जो भी एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर है वो बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर आप पार्टनरशिप छोड़कर चले गए तो फिर यू विल सीज टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑफ कोर्स इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। Every LLP shall file with the registrar particulars of every individual who has given his consent to act as a designated partner in such form as may be prescribed within 30 days of appointment. Let's say आपने मिस्टर ए को अपॉइंट किया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो अपॉइंट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। Every LLP shall file with the registrar particulars of every individual जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं। जैसे मान लो आपने मिस्टर ए को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया, तो ए के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के 30 डेज के अंदर अंदर उसने जो आपको कंसेंट दिया है वो आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। एवरी एलएलपी को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको क्या करना पड़ता है, हर आदमी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बना है बनने के अपॉइंटमेंट के 30 डेज में आपको उसने जो कंसेंट दिया उसका कंसेंट लेना पड़ेगा ना, तो उसका कंसेंट आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। एन इंडिविजुअल एलिजिबल, कौन एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको क्या कंडीशन और रिक्वायरमेंट फुलफिल करने हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है आज तक की डेट में तो नहीं है। कहते हैं जैसे अगर आप कंपनी का डायरेक्टर बनते हो तो आपके पास डिन नंबर होता है क्या, वैसे जब आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हो एलएलपी का तो आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना पड़ा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर होना पड़ता है, वैसे एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना पड़ा आपके पास, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना पड़ा आपके पास अगर आप क्या बनना चाहते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो एलएलपी का। तो सारे बच्चे समझ गए, बेसिक बातें आपने पढ़ी। सेक्शन 7 में ऊपर रेफरेंस दिया हुआ था, सेक्शन 7 पे जाओ डेजिग्नेटेड पार्टनर सीखने के लिए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब मिनिमम 2 होने पड़े, इंडिविजुअल होना पड़ा और रेसिडेंट होना पड़ा, ठीक है। अगर मान लो एक एलएलपी के अंदर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट भरे हुए, मतलब सारे पार्टनर्स ही अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर इंडिविजुअल कैसे होगा, उनका नॉमिनी, उसमें से किसी एक का तो नॉमिनी रेसिडेंट होना चाहिए, सिंपल बात। अब आप जब इनकॉर्पोरेशन करते हो तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम स्पेसिफाई कर देते हो, किसी का सारों का स्पेसिफाई कर दिया तो सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर है। अब अपॉइंट आपको किसी को अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो उसका रिटन कंसेंट आपको लेना जरूरी है, और इस रिटन कंसेंट को आरओसी के पास 30 डेज में फाइल करना जरूरी है फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। एंड एक डेजिग्नेटेड पार्टनर वही हो सकता है जिसके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हुआ। इसके नीचे समरी दी हुई है जो तुम खुद पढ़ोगे, जो मैंने बढ़िया से एक समरी बना रखी है। ये 120 डेज वाला रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या, पिछले साल रेसिडेंट होना पड़ा। जैसे एक इंडिविजुअल क्या होना पड़ा, रेसिडेंट, मतलब पिछले साल कम से कम 120 दिन आप इंडिया में रहने पड़े तब आप रेसिडेंट कहलाते हो, एक रेसिडेंट होना पड़ता है। ये देख लो, ये मैंने सब आपका ड्राइंग से बना दिया है, आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। बेसिक क्लास थी एलएलपी के ऊपर, जहां पे आपने ये पढ़ा एलएलपी पार्टनरशिप में क्या फर्क है, एलएलपी कंपनी में क्या फर्क है, एलएलपी क्या है, हाइब्रिड है, और आपने कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ी कि एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, एलएलपी एक्ट में डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। ये आज एक बेसिक क्लास थी जिसमें आपने ओवरव्यू देखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर का। अब कल की क्लास बेटा आपकी ना इवनिंग में होगी, इस टाइम पे नहीं होगी, 12:30 बजे नहीं होगी, क्योंकि सभी बच्चों को मैं बता दूं आपकी क्लास ना इवनिंग में 5 नहीं तो 6 तुम लोग जाते हो रे, बता दो ना एवरीबॉडी, बता दो ना ये चैट में क्या तुम लोग क्या करने लग जाते हो रे। 7:30 से फ्री है, 8:30 से 9:30, पौने 1 hour 45 minutes, ठीक है। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे होती है खत्म, इजी है, ठीक है। चल तो हम मचाएंगे और एलएलपी एक्ट को और पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है एलएलपी एक्ट, इजी है, ठीक है। चल ओके बाय बाय बेटा, गुड गुड गुड, अ वेरी 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 वार्म वेलकम एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग। रोज मैं आपको गुड आफ्टरनून करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी अलग समय पे हो रही है तो मेरी लाइव आ रही है क्या आप तक बच्चे, एक बार मुझे बताएंगे फिर क्यों पूछना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्लास आज मेरी तरफ से और टाइम पर हो रही है क्योंकि एक्चुअली आज मेरा डे टाइम पे आपने अपने रिविजन्स को किया होगा, पूरी शिद्दत लेने दीजिए, ठीक है, परफेक्ट है। चलो तो आप सारे बच्चे एलएलपी पर आ जाओगे, कम ऑन 587, चलो जी 587 पे आ जाएंगे सभी बच्चे, ओके। तो देख लीजिए आप लोगों ने पिछली क्लास में एलएलपी के बारे में बहुत कुछ चीजें बेसिक पढ़ी थी कि एलएलपी पार्टनरशिप में क्या फर्क है, एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क है। फिर आपने देखा था ये जो एलएलपी एक्ट है ये कब आया, 7 जनवरी 2009 को आया, पूरे भारत पर लागू होता है। फिर आपने कुछ चीजें पढ़ी थी कि एलएलपी के कॉन्सेप्ट क्या है, एलएलपी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एलएलपी नाम ही ऐसे सजेस्ट करता है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो कंपनी की होती है। तो एलएलपी ने कंपनी की अच्छी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ली, लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप मतलब जैसे पार्टनरशिप में आप एज अ पार्टनर आप क्या कर सकते हो, एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट द्वारा कंपनी के इंटरनल जो प्रोसेस होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसे आप डिजाइन कर सकते हो। पार्टनर आपस में अग्रीमेंट पे एंटर करके इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं पार्टनरशिप में। सेम गोज फॉर एलएलपी, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने एड्रेस की डेफिनेशन देख ली थी। पार्टनर का एड्रेस मतलब बोले तो क्या होता है, पार्टनर का एड्रेस मतलब अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसके जो भी घर का एड्रेस हो गया, अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो गया, वो कौन हो गया बेटा, वो एड्रेस हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट आपने पढ़ा था कि 4 होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एक्ट में हम बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं, एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो सारे कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में बने हो, उसके अलावा वो सारे कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद एलएलपी जो इंडिया में एलएलपी एक्ट में बनी हो या एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी हो, उसे भी हम क्या कहते हैं,
बॉडी कॉर्पोरेट में ऑफकोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आते, कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, या वैसे बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गजट में मेंशन करके। ठीक है, बिजनेस आपने पढ़ लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ लिया था, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर यहां तक हमने पढ़ा था, सेक्शन 7 को हमने रीड किया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कौन सा पार्टनर होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको बोला था एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है, मिनिमम एक एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए, पिछले साल मतलब ऑफ कोर्स इंडिया में कुछ समय के लिए 120 डेज के लिए रहा भी होना चाहिए, मतलब वो रेसिडेंट भी होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होना चाहिए जो रेसिडेंट भी हो। ठीक है, ओके। एंटिटी क्या है, एक मिनट, एंटिटी मतलब क्या है, एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट। आपने अभी अभी पढ़ा एलएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी
Okay, so today we are going to see the chapter 1. Chapter 1 is the nature, objective and scope of audit. Okay, so as and when I'm going to go through this chapter, you are going to understand why this chapter name is given as its nature, objective and Hello guys, welcome to Bhavna's Online Academy. So in this particular video, we are going to discuss a chapter of risk assessment and internal control, and this is a part number 1. And also if you want to check out other auditing chapters, I'll link the auditing playlist in the description box below. You can check that out. And now let's begin with the video, guys. So now we are going to start with the chapter number 4. So the chapter number 4 is the risk assessment and internal control. So this is our chapter. Okay, so in this chapter is actually divided into 5 parts. It totally talks about 5 topics. Okay, first is audit risk, then assessment of risk of material misstatement, how you identify and then assess the risk of material misstatement, internal control, internal audit and internal financial control. So in this class we are going to cover the first 2 topics, which is audit risk and assessment of risk of material misstatements, and then as the class goes on we'll cover the other topics also. Okay, yes, so now first let's start with what is audit risk. Okay, so audit risk can be bifurcated. The topic of audit risk can be bifurcated into 3 parts. First is the definition, the next is factors, and the third one is how do you calculate audit risk. So first we'll go and understand what is audit risk. So here I have told you that audit risk means the risk that auditor gives an inappropriate audit opinion. What they tell you is, first, what is audit risk? Audit risk is a risk that we all know. Okay, what happens, when do we say that audit risk is there, is that the auditor, when he gives opinion, so it is the final responsibility of an auditor to give his audit opinion. But in case if he gives an inappropriate audit opinion, when the financial statements are materially misstated, at that time it will be known as an audit risk. Okay, so what they tell you here is that the financial statements are there. Okay, the financial statements are materially misstated. But when the financial statements are materially misstated, you give an inappropriate audit opinion. You give an inappropriate audit opinion. Audit opinion will write as audit opinion. Okay, so when the financial statement is materially misstatement, what is the inappropriate audit opinion can you give? What is the right opinion? First we'll discuss what is the appropriate opinion that you should give. When a financial statement is materially misstatement, you must either give you must give a qualified opinion. Okay, qualified, adverse or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial statements were materially misstatement. So this is an audit risk. Okay, now my next question will be, I'll give you another situation. Okay, so so the financial statements are not materially misstated. And you give an inappropriate audit opinion here. When the financial statements are not materially misstated, what is appropriate audit opinion? It is true and fair view. So the financial opinion audit opinion will write as audit. Materially misstated, at that time it will be known as an audit risk. Okay, so what they tell you here is that the financial statements are there. Okay, the financial statements are materially misstated. But when the financial statements are materially misstated, you give an inappropriate audit opinion. You give an inappropriate audit opinion. Audit opinion will write as audit opinion. Okay, so when the financial statement is materially misstatement, what is the inappropriate audit opinion can you give? What is the right opinion? First we'll discuss what is the appropriate opinion that you should give. When a financial statement is materially misstatement, you must either give you must give a qualified opinion. Okay, qualified, adverse or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial statements were materially misstatement. So this is an audit risk. Okay, now my next question will be, I'll give you another situation. Okay, so so the financial statements are not materially misstated. And
you give an inappropriate opinion, inappropriate audit opinion here. You give an inappropriate audit opinion here. When the financial statements are not materially misstated, what is appropriate audit opinion? It is true and fair view. But here, when the financial statements are materially misstated, you have given not materially misstated, you have given inappropriate opinion that this financial statements are either qualified. You have given opinion that it is either qualified or, adverse or disclaimer. Now you have to tell me whether this will also be an audit risk or not. You have to answer whether this will also be an audit risk or not. Financial statements are not materially misstated, but at that time also you have given inappropriate opinion that it is either qualified, adverse or disclaimer. What do you guys think? Will this account to audit risk or not? Okay, fine. So I'll tell you. So at this point, this will not be and this will be not considered as an audit. Inappropriate opinion, inappropriate audit opinion here. You give an inappropriate audit statement. Yeah. So the financial statements are not materially misstated. The financial statements are not materially misstatement. And you give an inappropriate opinion, inappropriate audit opinion here. You give an inappropriate audit opinion here. When the financial statements are not materially misstated, what is appropriate audit opinion? It is true and fair view. But here, when the financial statements are materially misstated, you have given not materially misstated, you have given an inappropriate opinion that this financial statements are either qualified. You have given opinion that it is either qualified or, adverse or disclaimer. Now you have to tell me whether this will also opinion that it is either qualified or, adverse or disclaimer. Now you have to tell me whether this will also be an audit risk or not. You have to answer whether this will also be an audit risk or not. Financial statements are not materially misstated, but at that time also you have given inappropriate opinion that it is either qualified, adverse or disclaimer. What do you guys think? Will this account to audit risk or not? Okay, fine. So I'll tell you. So at this point, this will not be and this will be not considered as an audit risk. This will not be an audit risk. Audit risk will only and only be called when the financial statements are materially misstated, and at that time you have given an inappropriate audit opinion. Is the difference clear to you all? When it will be audit, when it will be audit risk and when it will not be an audit risk. Fine. So this is the basic. Okay, so this is what is audit risk, the most basic part of the chapter. Okay, so here now we have to understand a few terms. What are the few terms? The first term you have to understand is what is risk. The next term what you have to understand is what is material. The next term we have to understand is what is misstatement. Okay, first we'll understand what is risk. Okay, so what is risk? So risk understand is that be an audit risk. This is in a audit opinion. It is true and fair view, but opinion materially misstated, you give an inappropriate audit opinion. You give an inappropriate audit opinion. Audit opinion will write as audit opinion. Okay. So when a financial statement is materially misstatement, what is the inappropriate audit opinion can you give? What is the right opinion? First we'll discuss. What is the appropriate opinion that you should give? When a financial statement is materially misstatement, you must either give you must give a qualified opinion. Okay, qualified, adverse or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial stated opinion means that you have given the qualified opinion. Okay, qualified, adverse or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were appropriate. Should give his audit opinion.
opinion. But in case if he gives an inappropriate audit opinion, when the financial statements are materially misstated, at that time it will be known as an audit risk. Okay. So what they tell you here is that the financial statements are there. Okay. The financial statements are materially misstated. The financial statements are materially misstated. But when the financial statements are materially misstated, you give an inappropriate audit opinion. You give an inappropriate audit opinion. Audit opinion will write as audit opinion. Okay. So when a financial statement is materially misstatement, what is the inappropriate audit opinion can you give? What is the right opinion? First we'll discuss. What is the appropriate opinion that you should give? When a financial statement is materially misstatement, you must either give you must give a qualified opinion. Okay, qualified, adverse, or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate. Okay, qualified, adverse, or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial statements were materially misstatement. So this is the audit risk. Okay. Now my next question will be, I'll give you another situation. Okay. So so the financial statements are not materially misstated. The financial statements are not materially misstatement, and you give an inappropriate opinion, inappropriate audit opinion here. You give an inappropriate audit opinion here. When the financial statements are not materially misstated, what is appropriate audit opinion? It is true and fair view. But here, when the financial statements are materially misstated, what is materially misstatement? So the fair view. Now, what is qualified, adverse, or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given a true and fair view. What does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial statements were materially misstatement. So this is the audit risk. Okay. Now my next question. You must either give a qualified opinion. Okay, qualified, adverse, or disclaimer, depending upon the situation, you will give an opinion like that. So that is the appropriate opinion. Now, what does inappropriate audit opinion means? Inappropriate audit opinion means that you have given a true and fair view, even though the financial statements were materially misstated. You have given an audit opinion that the financial statements represent a true and fair view, even though the financial statements were materially misstatement. So this is the audit risk. Okay. Now my next question will be, I'll give you another situation. Okay. So
So the financial statements are not materially misstated. The financial statements are not materially misstatement, and you give an inappropriate opinion, inappropriate audit opinion here. You give an inappropriate audit opinion here. When the financial statements are not materially misstated, what is appropriate audit opinion? It is true and fair view. But here, when the financial statements are materially misstated, you have given not materially misstated. You have given an inappropriate opinion that this financial statements are either qualified. You have given opinion that it is either qualified or adverse or disclaimer. Now you have to tell me whether this will also be an audit risk or not. You have to answer whether this will also be an audit risk or not. Financial statements are not materially misstated, but at that time also you have given an inappropriate opinion that it is either qualified, adverse or disclaimer. What do you guys think? Will this account to audit risk or not? Okay, fine. So I'll tell you. So at this point, this will not be and this will be not considered as an audit risk. This will not be an audit risk. Audit risk will only and only be called when the financial statements are materially misstated, and at that time you have given an inappropriate audit opinion. Is the difference clear to you all? When it will be audit, when it will be audit risk and when it will not be an audit risk. Fine. So this is the basic. Okay, so this is what is audit risk, the most basic part of the chapter. Okay, so here now we have to understand a few terms. What are the few terms? The first term we have to understand is what is risk. The next term what you have to understand is what is material. The next term we have to understand is what is misstatement. Okay, first we'll understand what is risk. Okay, so what is risk? So risk, what I tell you is risk, as you all know, is some kind of a negative effect. Risk is nothing but some kind of a negative effect. Okay, so here what I tell you is risk in proper terms is a possibility that your account balances, your your class of transactions and your disclosures are materially misstated either individually or in aggregate. Okay, so what this means is that first I'll tell you what this account balances means. Account balances means that balances which are represented in your balance sheet. Okay, if there is a balance of 10 lakh of PPE, that is account balance. So it is related to balance sheet items. Your class of transactions, these words you will hear repeatedly in the chapter. So what is class of transactions? Class of transaction means your items of P&L. Your items of P&L like your income and expense. The same way class of transaction. Negative risk. So risk, what they tell you is risk, as you all know, is some kind of difference when the financial statements are materially misstated, and at that time you have given an inappropriate audit opinion. Is the difference clear to you all? When it will be audit, when it will be audit risk and when it will not be an audit risk. Fine. So this is the basic. Okay, so this is what is audit risk, the most basic part of the chapter. Okay, so here now we have to understand a few terms. What are the few terms? The first term we have to understand is what is risk. The next term what you have to understand is what is material. The next term we have to understand is what is misstatement. Okay, first we'll understand what is risk. Okay, so what is risk? So risk, what they tell you is risk, as you all know, is some kind of a negative effect. Risk is nothing but some kind of a negative effect. Okay, so here what they tell you is risk in proper terms is a possibility that your account balances, your your class of transactions and your disclosures are materially misstated either individually or in aggregate. Okay, and the possibility that your account balances, your your class of transactions and your disclosures are materially misstated either individually or in aggregate. Okay, so what this means is that first I'll tell you what does account balances means. Account balances means that balances which are represented in your balance sheet. Okay, if there is a balance of 10 lakh of PPE, that is account balance. So it is related to balance sheet items. Your class of transactions, these words you will hear repeatedly in the chapter. So what is class of transactions? Class of transaction means your items of P&L. Your items of P&L like your income and expense. The same way, what is disclosure? Disclosure means what you show in the notes to account. Okay, so what they tell you is if there is a possibility that in these areas, that is either in balance sheet, P&L or in notes to accounts, there may be any material misstatement either individually or in aggregate. That means one balance sheet item may either be a material misstatement or 5 to 6 balance sheet items together might form a material misstatement. So this is the risk. Okay, if there is a possibility of material misstatement in account balances, class of transactions or disclosures, then it will be called as your risk. Okay, so now we have to understand what one balance sheet item may either be a the same way, what is disclosure? Disclosure means what you show in the notes to account. Okay, so what they tell you is if there is a possibility that in these areas, that is either in balance sheet, P&L or in notes to accounts, there may be any material misstatement either individually or in aggregate. That means one balance sheet item may either be a material misstatement or 5 to 6 balance sheet items together might form a material misstatement. So this is the risk. Okay, if there is a possibility of material misstatement in account balances, class of transactions or disclosures, then it will be called as your risk. Okay, so now we have to understand what is material. What may either be a material misstatement or 5 disclosure means what you show in the notes to account. Okay, so what I tell you is if there is a possibility that in these areas, that is either in balance sheet, P&L or in notes to accounts, there may be any material misstatement either individually or in aggregate. That means one balance sheet item may either be a material misstatement or 5 to 6 balance sheet items together might form a material misstatement. So this is the risk. Okay, if there is a 5 to
sheet items. Your class of transactions, these words you will hear repeatedly in the chapter. So what is class of transactions? Class of transaction means your items of P&L, like your income and expense. The same way, what is disclosure? Disclosure means what you show in the notes to account. Okay. So what they tell you is if there is a possibility that in these areas, that is either in balance sheet, P&L or in notes to accounts, there may be any material misstatement either individually or in aggregate. That means one balance sheet item may either be a material misstatement or 5 to 6 balance sheet items together might form a material misstatement. So this is the risk. Okay, if there is a possibility of material misstatement in account balances, class of transactions or disclosures, then it will be called as your risk. Okay, so now we have to understand what is material and what is misstatement. So materiality we understood in the last chapter number 2 when we were studying. Okay. So now materiality in simple terms would be something which is very significant, a very big misstatement or a very material misstatement or a very significant misstatement is known as a material misstatement. Something which is very huge, which would affect your financial statements as a whole, or when the user studies your financial statements, the user's decision would be highly affected due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now our doubt is what is misstatement? So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a company, Schedule 3 will be your financial reporting framework. If you are a banking company, then your financial reporting framework will be according to your Banking Regulations Act. So financial reporting framework means it is a framework by which you have to report your financial statements. So in this, they will tell you under framework due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now our doubt is what is misstatement? So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a company, Schedule 3 will be your financial reporting framework. If you are huge material, what is material and what is misstatement? So materiality we understood in the last chapter number 2 when we were studying. Okay. So now materiality in simple terms would be something which is very significant, a very big misstatement or a very material misstatement or a very significant misstatement is known as a material misstatement. Something which is very huge, which would affect your financial statements as a whole, or when the user studies your financial statements, the user's decision would be highly affected due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now our doubt is what is misstatement? Due to statement which is risk. Okay, so now we have to understand what is material and what is misstatement. So materiality we understood in the last chapter number 2 when we were studying. Okay. So now materiality in simple terms would be something which is very significant, a very big misstatement or a very material misstatement or a very significant misstatement is known as a material misstatement. Something which is very huge, which would affect your financial statements as a whole, or when the user studies your financial statements, the user's decision would be highly affected due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now our doubt is what is misstatement? So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a financial mistake called as your materiality we understood in the last chapter number 2 when we were studying. Okay. So now materiality in simple terms would be something which is very significant, a very big misstatement or a very material misstatement or a very significant misstatement is known as a material misstatement. Something which is very huge, which would affect your financial statements as a whole, or when the user studies your financial statements, the user's decision would be highly affected due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now
a doubt is what is misstatement. So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to what is highly affected due to this kind of a misstatement. Okay. Now what is misstatement? Now a doubt is what is misstatement. So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a company, Schedule 3 will be your financial reporting framework. If you are a banking, banking company, then your financial reporting framework will be according to your banking regulations. Now a doubt is what is misstatement. So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a company, Schedule 3 will be your financial reporting framework. If you are a banking framework, now materiality in simple terms would be is known as a material misstatement, something which is very statement. Now a doubt is what is misstatement. So here they have told you that misstatement refers to the difference between what has to be reported and what has been reported and what is required to be reported. So according to your financial reporting framework, what is financial reporting framework? Financial reporting framework means that if you are a company, Schedule 3 will be your financial reporting framework. If you are a banking, banking company, then your financial reporting framework will be according to your Banking Regulations Act. So financial reporting framework means it is a framework by which you have to report your financial statements. So in this, they will tell you under financial reporting framework, they will tell you that this is how you have to, they'll give you a format and they will tell you that this is how you have to present your financial statements. So as per Companies Act, what is the financial reporting framework? Schedule 3 is the financial reporting framework, because in that only they tell you how you have to, the format of the balance sheet or how you have to present your balance sheet items. I mean, the whole financial statement. Okay. Yes. So they tell you that if you have, so you are required to report as per the financial reporting framework. But if you have reported it differently, okay, then in such case, the difference which is caused due to this, what you have reported and what is actually to be reported, that will be known as your misstatement. Okay. Okay. So now what I'll do is I will give you a recap of whatever I told, because I don't want you to get confused. So what did I tell you? What is audit risk? Audit risk is when your financial statements are materially misstated, but you give an inappropriate audit opinion. What is risk? Risk is a possibility that either your account balances or your class of transactions or your disclosures are materially misstatement, that there is some misstatement in these items. This misstatement may either be because of individually they may be misstated, or when they are aggregated, they may be materially misstated. Okay. Next, what is material misstatement? Materiality, it means significant. What is misstatement? Misstatement means if there is a difference between how you have reported your financial statements and how actually it is to be reported according to the financial reporting framework. If there is a difference between both, then that will be known as your misstatement. Then that will be known as a misstatement. Okay. Next, what we are going to understand is about inherent risk, control risk, and deduction risk. Okay. So when we were talking about audit risk is actually made up of two components. Audit risk is actually made up of two components. One is risk of material misstatement and the other one is deduction risk. Under risk of material misstatement, you have again two components, which is inherent risk and control risk. So we can either say that audit risk is risk of material misstatement multiplied by deduction risk, or audit risk can be also known as inherent risk into control risk multiplied by deduction risk. Okay. So these three together is what make up a audit risk. So now that we have understood audit risk, we'll understand what are the three components which it is made up of. First is inherent risk. First, I'll give you a this is a real life example out of audit, so that you're able to understand what is inherent risk, control risk, and deduction risk, and then we move on to the technical part of it. Just imagine yourself sitting in an exam hall. Okay, suppose students like us have gone to write an exam. Now, when you guys go to write an exam, what is the inherent risk that you have? Inherent risk means the risk which is there. If there are no controls at all, if there are no controls, this risk will be definitely there, or inherently this risk is there. When we go to exam, what is the inherent risk? One person might copy from the other. This is the inherent risk. Okay. So to reduce this inherent risk, what we do is we put some controls. To reduce this inherent risk or to mitigate the inherent risk, we put some controls. What is the controls that our schools or colleges or institutions do? They appoint an invigilator. So what does invigilator do? Invigilator, he keeps an eye that the students don't copy. He keeps an eye that the students don't copy. So what was the inherent risk? The inherent risk was that in the exam hall, usually students will copy. So for that, they kept a control. What was the control? That an invigilator will be there who will see and check if the students are copying or not. Okay. Now, what is the control risk? Control risk means even though
even though the invigilator is there in the classroom, when they turn or when they go out of the classroom during exam, at that time you guys copy. So this is a control risk. Control risk means even if there is a control, you are still not able to mitigate few risk. Okay, so that will be a risk. So what will happen, in a control risk or in when you have a control, there will be two sets of people. One will be like, since there are controls or since there is an invigilator, we don't want to take risk at all. Okay, so they will not copy at all. So at least your 75% of the risk will get reduced when you put the controls. Okay, 75% of the inherent risk will get reduced when you put the controls. But these notorious students will be there. They will, they'll be like, let whatever come, we'll still copy. So those 25% is what known as your control risk. Even though controls are there, they will have a risk. You will have a risk. So this is known as your control risk. Okay. Next, what is deduction risk? You have understood what is inherent risk and what is control risk. What is deduction risk? Deduction risk means that what happens is that even though the school or even though the the institute or the college have taken a lot of measures to mitigate, a lot of measures they have performed to reduce the risk how much ever possible, there are still a few risks which they will not be able to deduct. What are those kind of risks? What may happen is that the students, when they come inside the classroom, they will keep a chit in their socks, or they'll keep a chit in their shirts or pants, or they'll write on the nails and come, or inside the eraser they will put a chit and come. So these are risks which cannot be deducted by the examination people or by the invigilator who is present there. Okay, because these risks you will need to then rather than conducting the examination for 3 hours, you would need to have an investigation for 3 hours only. Okay, so that is not practically possible. So what is deduction risk is that even though a lot of audit procedures have been performed, there will still be a few risks which goes undeducted, which you are not able to deduct, which will go undeducted. So this will be known as your deduction risk. Okay. So see an example, a real life audit example for deduction risk would be there. What you thought was that there are 10 transactions. Okay, so suppose, okay. So what auditor thought whether there were at least 10 to 20 transactions which he had to audit. So what he thought was he will check all the first 10 transactions. When he checked the first 10 transactions, there was no risk in that. All the risk which was there was in the last 10 transactions only. Okay, but now that is not his mistake because he cannot audit the 100%. He cannot audit 100% or he cannot audit it completely. He can audit only on a sample basis. And now since the sample was not, showing the picture of the entire population, because the whole risk was in the last 10 transactions and he audited only the first 10 transactions, here these risks went undeducted. He was not able to deduct this risk. Okay, so now you have to tell me whether inherent risk, control risk and deduction risk is this clear to you. What it is the idea of all the 3 types of risk clear to you? Any doubt? Can we move on to the definitions? Anybody, if you have any doubt, you can ask. Okay, fine. So now that you have understood, what we are going to do is we are going to move to the technical part. Okay, the same thing. Now, if you have understood this, you'll be able to understand that easily. Okay, so as I told you already, audit risk is risk of material misstatement into deduction risk. What is risk of material misstatement? Risk of material misstatement is nothing but inherent risk into control risk will be known as your risk of material misstatement. Okay. Okay, so what here they are telling you is that, okay, once again, risk of material misstatement may be defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to the audit. So before audit itself, so what happens is that before you start an audit itself, you will have this inherent risk and control risk whichever are there. When will deduction risk arise? Only once you perform all the audit procedures, only deduction risk is going to arise. But inherent risk and control risk is something which is going to be there prior to audit. Okay. So these are the, financial, okay. So this is what is risk of material misstatement. Okay, fine. So in the exam, if they ask you what is the material misstatement, you have to write risk of material misstatement. Not misstatement means risk of material misstatement is the risk that financial statements are materially misstated. Whenever they tell you the word risk, you have to attach the word materially misstated. The financial statements are materially misstated, or you can also say account balances, class of transactions, and disclosures. All those 3 are again financial statements only, but you can write that way or this way. That financial statements are materially misstated, but prior to audit is the catch here. Okay. So now we are going to understand that what is inherent risk and control risk. So here what they tell you is that first they define what is risk. Okay, the financial statements are materially misstated, or you can also say account balances, class of transactions, and disclosures. All those 3 are again financial statements only, but you can write that way or this way. That financial statements are materially misstated, but prior to audit is the catch here. Okay. So now we are going to understand that what is inherent risk and control risk. So here what they tell you is that first they define what is risk. Okay, first they tell you that the suspectability, or we can say the possibility of an assertion about a class of transaction, that means P&L related items,
account balance, that means balance sheet related items, or disclosure, that is your notes to account related items, to a misstatement that could be material either individually or when aggregated. Okay. So here first I'll explain you the first 3 lines and then we'll move on to the last line. First 3 lines, what they tell you is, first, what is inherent risk? Inherent risk means that there's a possibility that assertion means what? Assertion, I have sent you the video in the WhatsApp group, in the Telegram group, so that you have to go through that. I don't know how many of you went through that, but assertion in simple language means a claim of management. So if a management, there is a possibility that if the management is claiming about a class of transaction, if suppose a management claim about a class of transaction that we have a rent expense of 5 lakh rupees, then they may have an assertion or the management claim about account balance that we have a PPE of 1 crore rupees. Then the claim of management or the assertion might be there regarding a disclosure that, you know, we have only 5 related parties or 6 related parties. So there may be a lot of claims which may be kept by the management. That is, there may be a lot of assertions regarding the class of transactions or account balances or disclosures. Okay. And what might happen is that there might be a possibility that whatever claim the management has told you regarding the class of transactions, account balance or disclosures may be a misstatement. That means they are not as per how they should actually have been. Okay. So if according to your financial reporting framework, they have told you that whatever inventory you have to only, you have to only record it on NRV. Okay, you have to record it on cost or NRV, whichever is lower. What the management might claim to you, or how claim means nothing, but how a management has prepared their financial records. Now, suppose when management were preparing the financial statements and when they were writing the account balance or when they were writing inventory, they recorded it at cost. Now, here a misstatement happened. Okay, that the claim of management, when the management was claiming, they told that inventory is recorded at cost, but actually the inventory must have been recorded at NRV. Means whichever is lower, and suppose if the NRV was lower, it has to be recorded at NRV. Now, this is a possibility that there could be a misstatement like this. That could be either material, either individually or when aggregated. Okay. So this is what is risk that you already understood. Now, when this risk can arise is that what differentiates inherent risk from control risk and reduction risk is that this risk will be there before consideration of any related controls. So on this inherent risk, you can have a few controls, but when you don't have any kind of controls on this risk, that will be known as your inherent risk. Now, for example, if you saw that examination example itself, on this risk, you can have a control, but before having this control, what was the risk? This risk will be known as your inherent risk. This risk will be known as your inherent risk. So the keyword here is that before consideration of any related controls, what risk you have is inherent risk. This the same way, control risk also. I'll just explain you the main part here. The others you can, again, they have explained what is risk. Misstatement that could be there in this individually or aggregated. What they are telling is that it will not be prevented, deducted, or corrected on a timely basis by the entity's internal control. So entity might have an internal control, but even though they are having an internal control, that risk they were not able to either prevent, detect, or correct. Okay, they were not able to do both. Even though the invigilator was there in the classroom, he was not able to prevent the students from copying. He was not able to find out which students were copying at his back. Neither he was able to give them a punishment and correct it. Correct. So which will not be either prevented, detected, or corrected on a timely basis. If this all prevention, detection, and correction happens after the exam is over, after the results have come, that there's no use. All that time that must happen. That did not happen. Okay. So this is what is known as your control risk. And then finally, deduction risk. Here. So what is deduction risk? In deduction risk, they tell you that the risk that the procedures performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level. So the auditor might have performed a few procedures to reduce the audit risk to an acceptably low level. But even though he was not able to deduct the misstatement that existed, it will not be able to deduct a misstatement that exists. And that misstatement can also be material, either individually or when aggregated. So this is a deduction risk. Okay. So these are the 3 risks. In inherent risk, you have to write before consideration of controls. Control risk, you have to write prevention, deduction, and correction could not happen even if the internal control was there. And deduction risk means they were not able to deduct the misstatement. So these are the 3 keywords you have to write when you are writing about inherent risk, control risk, and this risk. Inherent risk, control risk, and the 3 inherent risk you have to write before consideration of controls. Control risk you have to write prevention, deduction, and correction could not happen even if the internal control was there. And deduction risk means they were not able to deduct the misstatement. So these
can also be material, either individually or when aggregated. So this is a deduction risk. Okay, so these are the three risks. In inherent risk, you have to write before consideration of controls. Control risk, you have to write prevention, deduction, and correction could not happen even if the internal control was there. And deduction risk means they were not able to deduct the misstatement. So these are the three keywords you have to write when you are writing about inherent risk, control risk, and this risk. Inherent risk, control risk, and what was the other? Deduction risk. Okay, fine. So now we have completed our first and third part. We have completed the definitions. We have also completed the calculation. Calculation of audit risk, I already told you. Roam into deduction risk. Okay. Now the one part that is left in the first topic of audit risk is what are the factors you have to consider while you are assessing the control risk. So before you start with the audit or before you start with the planning of audit, you will check what are the control risks are there in the organizations, how much control risk are there, are the control risk more or are the control risk less. So like this you will assess. Okay, so what and all you have to keep in mind, what are the things that you have to keep in mind, or what are the factors that you have to keep in mind when you are assessing the control risk is what we are going to understand. Okay, yes. So now here, as you can see, here they have told you that there are 4 things which you have to keep in mind when you are assessing the control risk. The first point is that, okay, sorry. So the first point is that you have to, consider how the control environment is there, because the control environment will influence the internal controls. How good or how supportive is the control environment? Are the top management who have to keep a control are itself not following the controls, or they are, they are not, taking efforts to, make sure that the controls are followed. So there may be any kind of, influence that may be there. So regard how the control alone is not important. How the control environment is also very important. Now, if you take an example of this itself, if the invigilator is a control, okay, if he is a control, if the invigilator himself, is like, it's okay, let the students copy. No issues. I will help them. Like this, a few very good teachers and all will be there. So these and all are bad control environment. Okay, because due to this, what happens? Even though there are internal controls, due to the control environment influence, what happens? The internal controls are not being followed properly. So there is a huge control risk here. Next is evaluation of IT processes. Evaluation of IT processes related that support application and IT dependent manual controls. So if there are any controls, which are dependent on IT, that is information technology, then you have to assess those information technology processes also. If the information technology processes are good, then the controls will also be good, or vice versa. The controls will be bad. Okay. Next, what they tell you is that our testing approach over SCOTS. SCOTS means nothing but class of transactions and disclosure processes. So what here they tell you is that if your control, you have to first decide whether you are going to, going forward in the audit, whether are you going to follow a strategy which is control reliant or a substantive reliant. So first itself, I told you, if the controls are good in the firm, you will, perform less further audit procedures, because the controls are very good. So the risk which is there in the company gets reduced. So whatever further audit procedures or whatever substantive procedures you are going to perform are going to be less. The same way, if the control risk is huge, then in such case you have to also increase your substantive procedures and your further audit procedures. So that is what they are telling here. So what is going to be a testing approach when you are going to test the class of transactions and disclosures? You have to decide whether you are going to have a control based testing approach, or whether you are going to rely on the controls, or whether you are going to rely on your substantive procedures. You have to decide. Then expectation of operating effectiveness of controls. How well are the controls operating also you have to see. Okay, so if the controls, someone has not muted themselves once again. Okay, yes. So if the operating controls are very well, are working very effectively and are working very well, then that's a good sign. Okay, so these are the 4 factors which you have to consider or keep in mind when you're assessing the control risk. First factor is how the control environment is. Second factor is how good or bad are the IT processes. Third is what is the testing approach that you're going to have for your class of transaction and disclosures. Fourth is how well is the operating effectiveness. Okay, so these are the 4 things that you have to consider when you are assessing your control risk. Okay, before performance of an audit. Is the topic of audit risk clear to you? There were 3 major parts which I have discussed under this. Any doubts in audit risk? Any doubts, anybody? If no, send a no. If yes, send a yes. So I'll clear it. Of an audit. So now here, as you can see, here they have told you that there are 4 control risks. Is what keep in mind. Control was there.